लड़ने से डरते हो या हारने से? तुम्हारी लड़ाई डर से है। जीते तो कायनात तुम्हारी, हारे तो कमियां जान जाओगे। हौसला और चाहत मुश्किल वक्त में यही तुम्हें जगाए रखेगी। There is no fight greater than the one with yourself, and there is no victory sweeter than the one over your fears. Hello and welcome back once again to the incredible grand finale that is of course the KO Fight Night Arena that we're stepping into season 5. It has been full of roller coaster rides for all the players across all the games, but now yesterday we finally got on to the final itself, where indeed we did get to Super Smash Bros. Ultimate Champion, and that was phenomenal. But today, we have 2 more games that we do need to find out the Grand Champions of. And to start things off, it is going to be Street Fighter. And joining me on the LSS to talk more about these games, it is none other than the incredibly talented, the multi-personality, the wonderful friend of mine. Oh, well, it is none other than Ocean Sharma. Thank you very much, Lakshay. And yes, yesterday I would say the journey was quite going on out there. Right. But now, with everything that's happening, today is going to be the final day. The final day to just end it all. Maybe just to end it all. Maybe just to make new marklands out there. Absolutely. It's not going to be an easy ride, but that is for sure that we are in for some good games right now. Right off the bat, we're looking at a lower bracket match where indeed, I mean, see, that's another thing, right? When you start talking about this, it's either going to be a low bracket or certain people like to call it a loser bracket. And maybe loser brackets might be the winners by the end. You never know what might happen. That is so true. That is so true. With that, of course, let's quickly have a look at the low bracket itself, where indeed it is going to be Gaurav going against the Dark Lord. Well, so if I were talking about it, I mean, playinGaurav and Dark Lord is where it all kind of, starts and everything. But, well, Ayan will be ready with everything. I mean, Ayan is just sitting out there. He's just chilling out there. He's like, koi aa jao, main dekh lunga kaun aa raha hai. Main bas taiyar hu. Because trophy ke liye ek hi kadam hai. That is so very true indeed. And after that, we, of course, will move on into the Grand Final Championship itself, where indeed Ayan is looking really strong, really strong. He has had a wonderful run thus far. Very few selected. I mean, एक match भी नहीं हारा यार. एक match भी नहीं हारा. And that's, I would say, that's how perfect a person should be. I mean, he has his eyes on prize pool. That's one thing for sure we can say. That is so true. And with that, of course, the prize pool is on our screens, where 1 lakh, massive 1 lakh prize pool is what is being distributed. Well, if you're talking about the prize pool, just have a look at this. 50,000 for the first place, then 25, 15 and 10. But well, Ayan, जब हम नजरों की बात करते हैं, Ayan has his eyes on 50,000. Plus, obviously, let's just call it a virtual trophy, but yeah, it will be out there for him if anything. But the major thing is this 1 lakh prize pool. Today is a distribution day or something, but for distribution also, you might be at the second, might be at the third, depends by the end of the day, but then you have to do hard work for each and every instance. Absolutely. And again, I mean, going back to yesterday, the way Street Fighter kicked off was indeed the show match that we had. And that was, of course, you casting along with Varun, where it was some incredible celebs coming in and stepping into the shoes of these players. And it was Thug going against, well, incredible talented Scout. But GG's indeed, it was Scout who won the game yesterday. Today, once again, though, they'll have another opportunity. Not just there, I mean, Mamba's going to be out there. Exactly. And there are going to be quite a lot of people. That is so very true. That is something that shall take place after the grand final. But for now, it is, of course, the low bracket that we are going to be focusing on, that we are going to be gazing our eyes upon, because after all, it is a do or die situation right here, where indeed, as we just discussed, 12:30 we start off with the low finals and then move on into the grand finals, where Ayan, of course, is waiting, but he still has no idea who he's going to be facing. I mean, have a look at this. I mean, if you're talking about the stats or something, well, they both have lost just 1 match, but that all means that उन्होंने अपने जो matches रहे उसमें बहुत बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है. 10 matches played by Gaurav and 9 lost. So that's why that's the I would say yesterday's match that quite just went it out there. I mean, he was the one who was saying that his nerves get the best of him. So Dude. आज वो नहीं करना है. आज वो बिल्कुल भी नहीं करना है. I mean, playinGaurav, whatever it takes, whatever happens in that match, mate, you got to be certain about one thing. See, I mean,
चार player हैं, you already know for a fact that yes, you are part of the prize pool, but that's not what is at stake. It is to be number one, not only for KO Fight Night, but of course the Airtel India Esports Tour, and that is a huge feat. You get into that, you snowball roll into that, and then it's a year-long strenuous journey that you faced with all the other players. With that, of course, best of luck to both of these lads, and let's get this game started. The lower bracket or loser bracket finals is about to go live right about now between, of course, playinGaurav going against the incredible, the wonderful. It is going to be none other than his component, and we are going to go quickly live with the match right now, so let's go to the casters. Hello everyone, and once again welcome back. Thank you so much Blotter and Ocean for the lovely introduction. And my name is Ron Super Johnny John, being joined by Devraz right there and Dan once again on top of both of us, our analysts. How are you guys doing, man? We are on our way to find out who's going to be the champion for Street Fighter 5 in this KO Fight Night Season 5. Absolutely. Yeah, definitely, man. Go on, Devraj, please. Go on. No, I was going to tell you to go on. But yeah, it's really exciting today. We've seen exceptional performances leading into the playoffs, from the qualifiers itself. And of course, yesterday was some mind-blowing gameplay that we saw. So today, actually, it's going to be even more mind-blowing. And I think, Dan, you can enlighten us a bit on that. I completely agree. Yesterday's matches were something brilliant. और आज जो हमारे सामने है फर्स्ट मैच में प्लेइंग गौरव वर्सेस डार्क लॉर्ड. कल डार्क लॉर्ड के जैंगीफ ने तो मतलब डोमिनेंस दिखाया पूरा 3 गेम में. और आज शायद जैंगीफ नहीं, लेकिन वो जी पे ज्यादा फोकस करेंगे अगेंस्ट गाइल. सो वो इंटरेस्टिंग मैचअप होने वाला है बहुत ज्यादा. बट दैट इज ओनली वन ऑफ आवर मैचेस कमिंग अप टुडे. तो सबसे पहले उसके तरफ देखेंगे, बट आफ्टर दैट वी हैव प्लेंटी मोर टू कम. डेफिनेटली वी हैव प्लेंटी मोर टू कम. और इसी के साथ हमारा पहला गेम जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ डार्क लॉर्ड वर्सेस प्ले इन गौरव. दोनों के दोनों प्लेयर, जैसे हमारे दर्शकों को बता दूं कि लोअर ब्रैकेट का ये फाइनल मैच रहेगा. जो जीतेगा वो आगे बढ़ेगा ग्रैंड फिनाले में अयान को फेस करने के लिए. डेफिनेटली. और जो हारेगा वो कंपटीशन के बाहर ऑफ कोर्स उनको खिताब मिलेगा थर्ड प्लेस का, व्हिच इज वेरी गुड इन दिस सिनेरियो. मगर जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, किसी को थर्ड प्लेस में यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है. इवन दो जो यहाँ से जीतेगा उसको सेकंड गारंटीड है, सबको फर्स्ट प्लेस पे आप है. और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, playinGaurav इज ऑन द रोप साइड ना. थोड़ा मुश्किल चल रहा है उनके लिए, बिकॉज जी का जो मैचअप है उसके पास काफी टूल्स है. जैसे आपने देखा अभी उसके जी अप किक और एंटी एयर ऑन पॉइंट, एंड विद दैट ही टेक्स दिस राउंड. उनके पास काफी टूल्स है गायल को काउंटर करने के लिए. मगर अगर गायल थोड़ा पेशेंटली खेलेंगे, थोड़ा वेट करेंगे उनके मूव्स को, क्योंकि जी को जो है अपने मूव्स पहले करने पड़ते हैं प्रिडिक्टिवली बिफोर एनीथिंग हैपेंस. मगर यहाँ पे डार्क लॉर्ड का प्रेडिक्शन बराबर था, क्रश काउंटर मिल गया, कॉर्नर भी मिल गया, और उन्होंने थोड़ा सा ब्रीदिंग रूम दिया था गायल को. मगर वापस से ऑफेंसिव पे जा रहे हैं. शिमी किया, काफी गुड स्पेसिंग के साथ शिमी किया. बट यहाँ पे आप देखते हैं ऐसे ही चलते चलते अभी डार्क लॉर्ड कॉर्नर में, फिर भी फायदा है डार्क लॉर्ड के पास ही, स्पेशली जब उनके पास वैसे मूव्स है. सो playinGaurav अभी जो है एज दे से ही इज ऑन द रोप साइड नाउ. देखते हैं कि वो इस सेट को बचा पाएंगे कि नहीं. मगर जैसे हमने देखा डार्क लॉर्ड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शोइंग दे रहे हैं ये पहले सेट में. वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन. I mean, कल की तरह ही बिल्कुल एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस डार्क लॉर्ड की तरफ से आता हुआ. कॉर्नर में पुश कर देते. playinGaurav की तरफ से ये चीज बोला जाऊंगा, ये कॉर्नर में जब बिल्कुल प्रिंट डाउन हो जाते थे, वहां से बाहर हमेशा निकलने में सक्सेसफुल रहे हैं. और उसके बाद थोड़ी बहुत ओपनिंग्स इन्होंने निकाली थी. बट डार्क लॉर्ड की तरफ से जो विफ पनिशेस मिस होने का हमको देखने को मिले थे, जैसे एट वन पॉइंट ही वाज क्राउचिंग डाउन, ऊपर से playinGaurav उनके सामने बिल्कुल काफी रेंज के अंदर मौजूद थे, बट फिर भी वहां पे जो एक विफ उन्होंने निकाला था उसका पनिश यहाँ पे देखने को मिला. तो डार्क लॉर्ड का थोड़ा सा ऐसी मिस्टेक्स है जिनको playinGaurav काफी अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. बट डेफिनेटली काफी एक अच्छा प्रेशर और मोमेंटम यहाँ पे डार्क लॉर्ड अपने लिए कैरी करते हुए अगले मैच के अंदर. एकदम हेवी मोमेंटम के साथ पहले सेट चल रहा था. मगर जैसे आप देख सकते हो ये सेट के पहले राउंड जैसे ही स्टार्ट हुआ है, मोमेंटम जो है और पेस जो है पूरा बदल गया है. पिछले सेट में डार्क लॉर्ड जो है उन्होंने बहुत अच्छा रीड किया था playinGaurav के पेस पे. मगर जैसे हमने पहले भी बात कर चुके हैं, गायल मैच की जब एक्चुअली मैच की पेस डिक्टेट करता है, और जब वो पेस डिक्टेट करते हैं तो मैच उनके फेवर में जाता है. ऑफ कोर्स ये पॉइंट पे डार्क लॉर्ड का वी ट्रिगर एक्टिवेट हो चुका है, और इस स्टेट में जी के पास बहुत ही हाई डैमेज पोटेंशियल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक पोटेंशियल रहता है.
बट उसके बावजूद हेल्थ की बहुत कमी थी, जिसका प्लेन गौरव ने काफी अच्छे से फायदा लिया। अभी आप देख सकते हैं प्लेन गौरव के पेस बिल्कुल बदल रही है। बूम्स एक कंट्रोल्ड, एक मेजर्ड स्टेट में खेल रहे हैं। वो चाहते हैं कि डार्क लॉर्ड उनके तरफ आए, बट उनके स्पीड पे यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं वो बराबर से एंटी एयर करने के लिए तैयार है। मगर वैसे ही कहते कहते डार्क लॉर्ड ने वापस से अपना पेसिंग थोड़ा बदला है और काफी स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन दिखा रहे फिलहाल। बहुत अच्छे से उनके अटेम्प्ट को काउंटर किया वहां पे। अभी स्टन देखिए गायल का धीरे धीरे करके बढ़ रहा है और इसके साथ बहुत हेल्थ भी कम और स्टन भी बहुत ज्यादा रहेगा इस नॉकडाउन के बाद। बहुत ही टफ सिचुएशन है प्लेन गौरव के लिए, और अगर बचे वो थोड़े थोड़े शिमी होते होते मगर एस्केप अटेम्प्ट में पकड़े गए और साथ ही साथ ये राउंड भी उनका चला गया उसके साथ। जी हाँ, तो पेस कंट्रोल के लिए जैसा आपने बताया कि शुरुआत प्लेन गौरव की तरफ से वो जो सोनिक बूम्स उन्होंने स्पैम करे थे कि एक बार फिर से आते हुए काफी अच्छा यूटिलाइजेशन दिख रहा था, और उसको काउंटर करने के लिए डार्क लॉर्ड ने वहाँ पे जंप करके क्लोजिंग करने की कोशिश भी की थी। एंटी एयर भी आया था प्लेन गौरव की तरफ से, बट वो एक मोमेंट के बाद डार्क लॉर्ड ने फिर से डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। अभी देखिए फिर से एक बारी कॉर्नर में पिन डाउन कर चुके हैं, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन। ऑलरेडी स्टन पे ला चुके हैं प्लेन गौरव को, एंड आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी एन इजी फिनिश फॉर द डार्क लॉर्ड। अभी भी ये लास्ट मिक्सअप है, अगर बच गए तो शायद चांस है। थोड़ा सा उन्होंने ओवर एक्सटेंड कर दिया था डार्क लॉर्ड ने, जिसका फायदा अभी तक प्लेन गौरव ने लिया है, मगर फिर भी वो कोई रिस्क ज्यादा नहीं था डार्क लॉर्ड के लिए, उनके पास उतना हेल्थ था। और जैसा आप देखते हैं साथ ही साथ प्लेन गौरव धीरे धीरे करके हेल्थ लूज करते जा रहे हैं। क्या ये डिफरेंस इक्वलाइज कर पाएंगे? और ये पॉइंट पे जब वी ट्रिगर हो जाता है तब जी बहुत ही खतरनाक हो जाता है। और यहाँ पे उनने गायल की तरह एक सेटअप उनके ऊपर कर दिया, प्रोजेक्टाइल छोड़ा और जैसे ही उनने जंप किया उसको पनिश कर दिया। तो मुझे लगता है यहाँ पे प्लेन गौरव के चांसेस बहुत अच्छे हैं, मगर वो थोड़े जरा नर्वस हो जा रहे हैं। उनका जो डीपी का यूज है फ्लैश किक का, ये फ्लैश किक उसको डार्क लॉर्ड ने बराबर से पकड़ लिया है। जी हाँ, काफी अच्छे से यहाँ पे डार्क लॉर्ड रीड करके चल रहे हैं। और कल भी यही एक चीज थी जहाँ पे कमीना मैन जो थे उनके गेम का रीड डार्क लॉर्ड ने काफी जल्दी निकाल लिया था, और उस चीज को काउंटर करना काफी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, मैं ये बोलना चाहूंगा। अभी देखिए फिर से प्रोजेक्टाइल्स का यूजेज यहाँ पे प्लेन गौरव की तरफ से काफी अच्छा नजर आ रहा है। डार्क लॉर्ड आगे आने की जैसी कोशिश करते थे, कुछ ना कुछ करके प्लेन गौरव प्रिपेयर रहते थे। एक वेव काफी बेहतरीन पनिश वहां पे देखने को मिला, और वंस अगेन वी ट्रिगर एक्टिवेट तो कर दिया, बट प्लेन गौरव एक अलग ही रूप में नजर आ रहे हैं इस राउंड के अंदर। हाँ, उनको आना तो पड़ेगा ही एक अलग रूप, अलग स्टाइल, क्योंकि ये उनका लास्ट अपॉर्चुनिटी है उनके गेम लाइफ के लिए। ये अगर उनको कंपटीशन में आगे मूव करना है तो उन्हें ये राउंड और ये सेट तो बिल्कुल लेना ही है। मगर जैसे हम देख सकते हैं एक बार डार्क लॉर्ड का ट्रिगर एक्टिवेट हो गया है वो बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं। गायल की मुश्किल ये होती है कि आप बूम फेंकोगे तो जी का ट्रिगर बनेगा, उसका ट्रिगर बनेगा तो एक बार वो एक्टिवेट करेगा, जैसे आप देख सकते हैं वहां पे वी स्किल यूज करके, तो उसके लिए वो बहुत ही घातक पड़ जाता है। उसके लिए उन्होंने एक अलग स्ट्रैटेजी ट्राई की थी पिछले बार, मगर इस बार डार्क लॉर्ड ऑन फुल ऑफेंसिव, प्लेन गौरव ऑन स्टन पॉइंट, वो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में थे। उनको भी रिवर्सल शायद यूज करना चाहिए था, और मुझे लगता है वो छोटी सी एक गलती के कारण ये जो प्रेशर था डार्क लॉर्ड का बहुत ही भारी पे चला। नहीं तो उनको कुछ तरीके से ट्रिगर एक्टिवेट करना चाहिए था प्लेन गौरव को उधर। और ये जो बूम्स फेंक रहे गौरव को उसके पीछे थोड़ा चेस करना चाहिए, मगर डार्क लॉर्ड की तो उसके लिए भी तैयारी बिल्कुल है। और यही बोलते बोलते उनको कॉर्नर कर दिया है और ये मिक्सअप भी किया, जबकि उनको काफी स्ट्रॉन्ग मीटी मिली थी, मगर ये मिक्सअप के कारण उनको स्टन मिल गया और उसी के साथ थोड़ी सी हड़बड़ी, पता नहीं क्यों। एनीवे फिर भी जो है ये राउंड डार्क लॉर्ड के ही फेवर में है, और वही कहते कहते ये राउंड उनने बिल्कुल छीन लिया, ये सेट भी जीत लिया और उनने विक्ट्री ले ली प्लेन गौरव के ओवर। जी हाँ, और काफी डोमिनेटिंग तरीके से निकाला प्लेन गौरव की तरफ से। हमें वो एक ओपनिंग्स देखने को मिलती थी, बट उसके अलावा डार्क लॉर्ड जो प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, जैसे आपने बोला जो हड़बड़ी वहां पे देखने को मिली, आई थिंक वो उसी प्रेशर के चलते थे, क्योंकि एचपी बार बहुत जल्दी उन्होंने डिप्लीट किया था, कॉर्नर में पुश डाउन कर सकते थे। और प्लेन गौरव के लिए इस टाइम पे डार्क लॉर्ड इतना ज्यादा करीब आ गए थे कि वहां से जंप करके निकलने की भी कोशिश करते तो दिक्कतों में आ ही जाते। हाँ, और दिक्कतों में तो आ ही रहे थे। काफी अच्छे से उनने पूरा, काफी सेट्स में उनकी वही स्पेशलिटी थी कि उनने बराबर से पढ़ा कब उनको भागना है कॉर्नर से, वो भी जंप करके। शायद एक्चुअली क्योंकि वो समझ गए थे प्लेन गौरव कॉर्नर में बैठ के, थोड़ा जब वो कॉर्नर हो जाते हैं उनकी टेंडेंसी स्पेसिफिक रहती है, जैसे कि वो वेकअप एक्स फ्लैश किक यूज करते हैं,
नहीं तो डिले टेक करते हैं, जिसको वो शिमी कर चुके थे काफी अच्छी तरीके से बाहर वैसे देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्शन दोनों ही खिलाड़ियों के साथ, क्योंकि प्लेन गौरव ने अपनी स्टाइल स्विच भी की बीच में, आप देखोगे बीच में तो नहीं मगर लास्ट सेट में। और इसके बारे में और काफी ज्यादा एनालिसिस के बारे में हम आपसे पूछते हैं। डैन बताइए आपको क्या लगता है? देखो, आपने मेन पॉइंट्स तो कवर कर ही दिए अभी, क्योंकि वो प्लेइंग गौरव जो है वो बहुत नर्वस हो जा रहे थे कॉर्नर में, और जी का कॉर्नर कैरी बहुत बहुत सॉलिड था डार्क लॉर्ड की तरफ से। हर अपॉर्चुनिटी पे उनको कॉर्नर पे लेकर के गए और उनको बैठा दिया उधर ही। और प्लेइंग गौरव ने कुछ अटेम्प्ट किए बाहर निकलने के लिए, लेकिन हर बार उनको काउंटर मिला तो वो रुक गए और उनको पता नहीं था उसके आगे क्या करने का है। ट्राई किया जंप करने का, बट डार्क लॉर्ड रेडी थे बिल्कुल उनको वापस कॉर्नर में डालने के लिए। तो ओवरऑल आप देखें तो उन्होंने अपना गेम प्लान नहीं सेट कर पाए थे। गाइल का जो स्पेसिंग और कंट्रोल करना चाहिए था उनको, वो नहीं कर पाए बिल्कुल। और जी बिल्कुल उनके स्ट्रेट थ्रू रन करके निकल गया। 3-0, वेरी वेरी क्लीन परफॉर्मेंस। क्लीन परफॉर्मेंस तो था, बट अब डार्क लॉर्ड यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ही हैज टू फेस द सेम पर्सन जिन्होंने उनको लोअर ब्रैकेट में भेजा था, अयान। अब अयान के अगेंस्ट भी जो मैचअप है वो भी इनकी तरफ से काफी ज्यादा इंटेंस होने वाला है। व्हाट डू यू गाइस थिंक कि क्या पॉसिबिलिटीज रह सकती है वहां पे डार्क लॉर्ड के लिए? आई थिंक कि जी के हिसाब से अगर आप if he's going to go with G, then you know he's going to go for this particular plan itself, and वो आपको जितना कॉर्नर तक पुश कर सकते हैं वो पुश करेंगे, and then force you to make those mistakes there and catch you on your wake up. But Ayan solid player है, बहुत बहुत solid player है, and I think he knows कि this is the plan he'll be looking for. और उनके reactions भी आप देख चुके हैं, काफी काफी solid है, तो he'll be ready for all these punish options that Dark Lord will eventually give him. ये नहीं है कि वो 100% perfect खेलेंगे, तो कोई opportunity मिलेगा and he will take it. चलिए अब डेस्क की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनका क्या कहना है हमारे इस मैच के बारे में और हमारा जो अगला मैच है उसके बारे में भी। सो ओवर टू ब्लॉटर एंड ओशन। Ouch. Sorry, mate. Sorry to disappoint you. Ocean has left the building, but nevertheless, we do have Phoenix joining us. Yes. And to talk more about the game, indeed, we do have to discuss the gameplay that we just saw, dude. Because I mean, yes, Dark Lord was just legendary gameplay through and through and through, not given even a single chance. That's true, and you know what? That's what I want to see. Right. इतना अच्छा gameplay and the strategies, the thing is so perfect. और क्या ही gameplay दिखाया. He didn't give it chance to play in Gaurav to come back, right? That is so true. Playing Gaurav, well, he tried his level best, but again, I go back to that interview that Playing Gaurav gave, and we saw that yesterday, where indeed Gaurav brought in an interesting point, saying that the way he plays the game is if he has half left health, 50% health left, Yep. he is going to start questioning his own game. That is something that is not okay, mate. That is not okay. Because even though today also there were moments, game 2, game 3, there were moments where it felt that Playing Gaurav is trying. He was trying to jump across and get away. But then again, Dark Lord was just so on point that was very, very difficult. Nevertheless, with that, the game does come to an end. That was the lower bracket indeed. And Dark Lord moves on fourth to go against the grand final. Oof, Ayan, not going to be an easy one. Yeah. That is not going to be an easy one, but you know what? I think so. अगर Dark Lord यही same performance show करते हैं, यही momentum रहता है, तो maybe he is going to win. But I'm very excited for this match. Absolutely, because एक और चीज़ हमें यहाँ पे ज़रूर बात करनी चाहिए, which is going to be the fact that Dark Lord is coming into this match with a vengeance, dude. Oh. With a big vengeance, I think. Because Ayan is the one who sent him down into that loser lower bracket, right? So for that, of course, Dark Lord is not going to be happy. Maybe he is not going to happy, but he want to take this revenge. उनको ये Absolutely. revenge जरूर चाहिए. और अयान ने Playing Gaurav को भी भेजा था, but Dark Lord beat Playing Gaurav. Now it's time that he want to beat Ayan, or maybe Ayan is going to beat. Let's see what is going to happen. That is so very true. But for that grand final, you're going to have to wait just a few more minutes, as we're going to go on a very, very short break, because coming right after that is going to be the grand finals. So stick around.
Hello and welcome back once again to KO Fight Night Season 5. This is the grand finale that you've been waiting for. Yesterday, of course, we came down with a grand final champion for Super Smash Bros. Ultimate. But today is another day, day number 2, where indeed we move on along with other games for KO. And that, of course, does include Tekken 7. But right now, we're in the realm of Street Fighter, where we just witnessed a low bracket match. And from that, Dark Lord has moved on forth. But now is the Ultimate Championship. Now is the battle that everybody has been grinding for, because now the final question is going to be answered. Who's going to be the number 1 of Season 5 of KO Fight Night? And of course, the game is Street Fighter. With that, let's continue this conversation forth and introduce the analyst, who once again is none other than Phoenix, joining me. Thank you, Blotter, for the introduction, and I'm really excited for this match because we have Ayan facing the Dark Lord. Oh yes. And let's see what is going to happen. And you know what? If we talk about their characters, Ayan Right. just choose Birdie, and we talk about that the Dark Lord take G, right? And let's hope that they are going to stick to the same character. Well, let's certainly expect it, but then again, who can answer that? Only those players will. And for now, as we look at those stats, things are looking really solid, really close, because nothing separating them apart from that one loss that Dark Lord took. But nevertheless, he is, like I said, he's coming in with a feud. He is coming in for a battle. He is coming in for vengeance that he will certainly deliver. But then again, will Ayan provide him the opportunity? For that, of course, is the question that we are trying to answer right here. And of course, when it comes to the analyst desk, well, it's all a lot of banter and a lot of hypothetical situations, right? Eventually, it all falls down into the match, into those, well, Strategies Yes, and yes. the things they are going to use. And the thing is, the Dark Lord just lost one match, and it is against Ayan. right. So maybe that he just would need that revenge, and maybe he's going to fight back, and I really want to see that. Maybe Dark Lord is going to win, but you know what? My favorite is Dark Lord, so I am thinking that Dark Lord is going to win. Oh, okay. So you're supporting Dark Lord. Well. Yeah. GG's indeed, because nothing's separating them. But once again, that is the stakes. The stakes are really, really high. And for that, of course, the love and the dedication, not the dedication, mate, support. Love and support is certainly required and appreciated. So those of you sitting back in the chat, well, don't just sit back. Hashtag Ayan or hashtag Dark Lord. Who are you supporting? Who are you rooting for? And of course, with that, what is at stake is the name on that Airtel India Esports Store leaderboard. That is going to be a huge feat for any of these and all of these players to be on the number 1 position. With that, enough conversation. Let's get busy with the grand final for Street Fighter 5. With that means it is time to throw it to our casters, who once again are going to be none other than Dave and Varun. Once again, thank you so much, Blotter and Phoenix. This is Super Johnny, joined by Devraj and Dan on top of us right there. So, guys, Dan, first I'll ask you first. Ayan versus the Dark Lord. Let's go. Oh boy, super interesting matchup. G versus Birdie, most likely. I'm gonna say ki most likely the game plan is gonna be pretty much what Guile should have done in the last game. Make his space, but here Birdie has a few more options in this case with the EX Dolphin Dive or his command grab range. उससे बहुत फायदा हो सकता है इनको G के matchup के against. But he has to be good at recognizing those whiffs that Dark Lord will make. Dark Lord solid hai already. You know that if he catches you once, he's taking you to the corner. And even though Birdie has a good EX option, we've seen that Dark Lord is capable of baiting out those options and punishing them very, very skillfully. So I'm going to be very excited to see how this match plays out. What about you, देवराज? मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि दोनों ही प्लेयर्स की अगर हम बात करें, चलिए मैच भी स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया. तो दोनों ही प्लेयर्स को जब हमने क्वालिफायर्स के मैचेस में देखा था, इनफैक्ट इनके जो प्लेऑफ्स मैचेस भी थे फाइनल्स के, उस टाइम पे भी both of them relied heavily on their aggression, और वो aggression ही की था इनकी विक्ट्रीज में. What do you think is going to be the strategy? I mean, Ayan को हम ऑलरेडी देख सकते हैं. स्ट्रैटेजी वो रही हमें अभी देखने को लाइव भी मिलने वाला है. जैसे आप देख सकते हैं, दोनों को एक्चुअली एक मीडियम रेंज में खेलना चाहते हैं. ज्यादा दूर जाएंगे तो जी को एडवांटेज हो जाता है थोड़ा सा, बट मतलब उसका एडवांटेज बॉडी भी ले सकता है. तो हमें ज्यादातर मैच यही रेंज में मिलेगा. अबाउट ये जो रेंज है, बिकॉज आप देख सकते हो अगर एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, एक मिस्टेक के कारण दोनों एक दूसरे को कॉर्नर में पुश कर सकते हैं. और जैसे आपने देखा यहाँ पे भी एक एंटी एयर के साथ जी ने बॉडी को कोने में पहुंचा दिया, कॉर्नर टू कॉर्नर. यही कोस्ट टू कोस्ट गेम हमें देखने मिलेगा. बच्चे एकदम थोड़ी चीज से बचे थे, मगर वापस से डार्क लॉर्ड ने ओपनिंग ले ली. जैसे मैंने बोला था आपको पहले भी, एक बार वी ट्रिगर एक्टिवेट हो गया जी का, वो बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं.
और उन्होंने बर्डी को अपना बी ट्रिगर एक्टिवेट नहीं करने दिया, क्योंकि नहीं तो वो भी इक्वली थ्रेटनिंग हो जाते हैं। और जैसे आप देख रहे हो वापस से दोनों मीडियम रेंज में खेलेंगे, मगर अभी दोनों के बटन्स काफी कम हो गए हैं। दोनों एक दूसरे को थोड़ा टेस्ट कर रहे हैं, कौन कितना पनिश करेगा एक दूसरे के मतलब ओपनिंग्स को। और जैसे आप देख रहे हैं काफी पेस पहले राउंड और ये दूसरे राउंड में मतलब एकदम ही अलग है। This point, both the players are very cautious. They want to see what they can do. But you could see, जैसे हमारे अयान है वो धीरे धीरे करके ग्रे लाइफ बिल्डअप कर रहे थे। शायद ये जो स्ट्रैटेजी है उनके लिए एडवांटेजेस इन द लॉन्ग रन हो सकती है, मगर जी ऐसा कैरेक्टर है जिसको एक बार वी ट्रिगर चालू हो गया वो एकदम खतरनाक हो जाता है। और ये दूसरी बात हम देख रहे हैं कि जो अयान का स्टन है वेरी हाई है। पिछले राउंड एंड के टाइम पे भी ऐसा था, उन्होंने कोशिश की पनिश करने की, उनके बूस्टेड वी ट्रिगर बूस्टेड बी स्किल की, मगर साथ ही साथ हम देख रहे हैं डार्क लॉर्ड ने ये बराबर से चिप का कैलकुलेशन एकदम ऑन पॉइंट किया था। जी स्मैश करके उसको सीए में कैंसिल करके चिप कर लिया। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे डार्क लॉर्ड ने बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज ऑफ स्ट्रैटेजी किया। उनको मालूम है अयान ऐसा प्लेयर है कि यहाँ पे एक छोटी स्ट्रैटेजी दिखाएंगे वो उसके लिए आंसर डेवलप कर लेंगे, तो हर बार एक नया मिक्सअप उनपे एक नया अप्रोच यूज करना पड़ता है। डेफिनेटली। और एक चीज जो आप काफी लंबे टाइम से जब से मैं कास्ट कर रहा हूँ आप मेंशन कर रहे थे कि पेस कंट्रोल और पेस स्विच यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मैचअप्स में। मैं बोलना चाहूंगा ड्रार्क लॉर्ड की तरफ से हमें बहुत ही बढ़िया पेस स्विचिंग देखने को मिली। स्टार्ट हुआ था फर्स्ट राउंड की अगर बात करें, बैकफुट पे पुश हो गए थे, ही न्यू कि उस टाइम पे पैसिव खेलना उनके लिए सही रहता, तो स्लो डाउन काफी ज्यादा किया। उसके बाद एक ओपनिंग मिली थी उन्होंने जब कॉर्नर टू कॉर्नर पूरा कैरी करके लेकर गए थे और उसके बाद रुके नहीं थे। सेकंड राउंड भी शुरुआत काफी धीरे से करी और फिर एक पॉइंट पे एक्सीलरेटर को पूरा दबा दिया था जहाँ पे अयान के ऊपर काफी प्रेशर डाला और फिर वंस अगेन वो चिप डैमेज के साथ लास्ट में हमें सीए फिनिश देखने को मिला। एग्जैक्टली जी की खासियत ही वो है, उसका जो बर्स्ट डैमेज आउटपुट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे जो अयान की एंटी फायरबॉल स्ट्रैटेजी उसको हम दूसरी बार पनिश होते हुए देख रहे हैं, उनके चेन के यूटिलाइजेशन को। सो डार्क लॉर्ड को कुछ ना कुछ समझ में आ गया, ये उनको ग्रैब बेट भी कर रहे हैं बाय यूजिंग रेगुलर थ्रो इंस्टेड ऑफ कमांड ग्रैब। और जैसे हम देख रहे हैं अयान तो मतलब ही इज ऑन द रोप्स राइट नाउ, बहुत ही हेल्थ डेफिशिएंट ज्यादा है उनका, मगर साथ ही साथ वो कहते कहते उनका ट्रिगर एक्टिवेट हो चुका है और उन्हें भी अच्छी ओपनिंग्स मिल गई है। डार्क लॉर्ड को यहाँ पे स्टन भी कर दिया एक अच्छे शिमी के साथ, और साथ ही साथ ये राउंड अयान के नाम। तो ये जो है अयान की खासियत की ऐसे मोमेंट पे जब आप सोचिए वो हार चुके हो, वहाँ पे वो टेबल्स टर्न करके वापस से इन द बोलते हैं ना काउंट में आ जाते हैं, ये बहुत ही यूनिक है। तो है जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे भी जो पेस है वापस से उसको डार्क लॉर्ड ने अपने चेन्स के साथ आप बोल सकते हो पकड़ लिया है, घुमा के पीट रहे हैं। और बहुत ही बड़ा यहाँ पे हेल्थ डेफिशिएंट कभी हो गया है कंपेयर टू अयान डार्क लॉर्ड का। देखते हैं क्या होता है। डार्क लॉर्ड को थोड़ा सा और डैमेज या थोड़ा सा और मतलब ब्लॉक करना है ताकि उनका वीस के जो है चार्ज हो जाए, जिससे वी ट्रिगर चार्ज हो जाए जो उन्होंने अभी अभी पॉप किया। मगर वहीं साथ अयान ने उनका क्लासिक डॉल्फिन डाइव ऑन वेकअप सेटअप यूज किया जो लगा भी, मगर जैसे हम बात कर चुके हैं डार्क लॉर्ड का जो जी है, जी जो है उसका जो पेस जो बर्स्ट डैमेज कैपेसिटी बहुत हाई है। अयान को थोड़ा संभल के रहना चाहिए बिकॉज ये जो उनकी लाइफ लीड है देखते ही देखते पिघल सकती है मोमबत्ती की तरह, और वही कहते कहते देखिए लाइफ लीड यहाँ पे फटाफट पिघलते हुए। और ये एक बड़ा रिस्क लिया डार्क लॉर्ड ने कमांड ग्रैब का, जो वो कंडीशन कर रहे थे यहाँ तक अयान को कि भाई मैं तो आपको मेरे को रेगुलर ग्रैब कर रहा हूँ और आपको पनिश करूंगा। ये जो थी बड़ी ओपनिंग, इसके लिए अयान पहले से तैयार थे। वो बोलोगे मैं मार खाऊं कितना भी, मगर एक बार मुझे ये ओपनिंग मिल गई आपका जो कमांड ग्रैब की रिकवरी, तो आपका कैरेक्टर उधर ही हार जाएगा मेरे से, और आपने देखा वो हार भी गया। एग्जैक्टली और काफी आई मीन जैसा आपने कहा था कि अयान प्रेशरेबल सिचुएशन में भी बहुत ज्यादा काम रहते हुए वो चीजें सोचना जो होता है वो उनकी खासियत है, और उसी के चलते आई मीन डार्क लॉर्ड की तरफ से एक सेटअप ले जा चुके हैं। ओवरऑल जो स्कोर लाइन थी 1-1 की होती हुई, अब ये मैच आई थिंक डार्क लॉर्ड के अंदर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। हम लोग बात कर रहे थे कि लोअर ब्रैकेट से आ रहे हैं तो ही नीड्स टू विन ट्वाइस इन ऑर्डर टू बीट अयान। एग्जैक्टली और ये जो है बहुत ही क्रूशियल है। फिलहाल तो अभी दोनों इक्वली चल रहे हैं, मगर पिछले बार भी हमने देखा थोड़े प्रिडिक्टेबल हो गए थे
एटलीस्ट फॉर अयान, जिससे उनने उनको पनिश कर पाए। मगर लगता है यहाँ पे डार्क क्लाउड ने भी अपने प्रिडिक्टेबिलिटी में थोड़ा बदलाव लाया है, काफी चेंजेस लाया है। अयान वापस से स्टन हो चुके हैं, तो ऑफकोर्स जिसे आप देखोगे ये गेम में काफी बार आगे पीछे तो होने ही वाला है। और मुझे तो लग रहा है ये सेट मोस्ट लाइकली अयान के ना हम सॉरी डार्क क्लाउड के ही ना हम होगा। बहुत ही अच्छा प्रेशर यूटिलाइजेशन उनने, एकदम जैसे उनको ओपनिंग मिली बराबर से उन्होंने अपनी गाड़ी उधर ही धकेल दी इन फुल स्पीड। देखते हैं कि ये सेकंड राउंड में भी वो वैसा ही कन्वर्ट कर पाते हैं कि नहीं ओपनिंग को। अयान बराबर से थोड़ा कॉशियसली खेल रहे हैं, कैन का यूसेज कर रहे हैं अपने लिए एडवांटेज बनाने का। वो पूरी जल्दी में नहीं है, मगर डार्क लॉर्ड थोड़े उत्साहित लग रहे हैं और उनको शायद उत्साहित होना भी चाहिए अगर वैसा उनके कंफर्म्स हुए तो। फिर भी काफी इक्वल। वो एक चीज बोलना चाहूंगा, वो जो गेम 1 का एग्रेशन था, आई थिंक वो अगर डार्क लॉर्ड वापस ला सके, क्योंकि काफी देर से अभी पिछला मैच भी ऐसे ही गया था, बहुत ज्यादा पेस को स्लो डाउन कर लिया था, जिसका फायदा अयान ने वहां पे उठा लिया। एग्जैक्टली, मगर अयान को वो ओपनिंग देनी चाहिए। आप जैसे देख सकते हो अयान अपनी जो है अप्रोच कॉन्स्टेंटली थोड़ा थोड़ा ट्वीट करते रहते हैं। वैसे ये जो डॉल्फिन डाइव है इससे थोड़ा उनको संभलना चाहिए, क्योंकि डार्क लॉर्ड तो बिल्कुल संभल गए हैं डॉल्फिन डाइव से और बहुत ही अच्छी तरीके से उसका पनिश कर रहे हैं, इनको कॉर्नर कर रहे हैं। मगर वही कहते कहते शायद थोड़े और एक्स्ट्रा अग्रेसिव हो गए थे, जिससे वो अभी थोड़े स्लो डाउन हो चुके हैं। बट ऑफ कोर्स वी ट्रिगर में डार्क लॉर्ड अग्रेसिव रह सकते हैं, मगर जो अयान का जस्ट डू इट, जो बर्डी का जस्ट डू इट EX बुल हेड मूव है, काफी खतरनाक है। सो ही शुड वॉच आउट फॉर दैट। और शायद मैं यही बोलना चाहता था कि जो गौरव के अगेंस्ट है, वो उनका जो कॉल आउट था बटन्स पे बहुत अच्छा था, मगर यहाँ पे अयान जो डार्क लॉर्ड के न्यूट्रल में बटन प्रेसेस है उनको काफी अच्छे से काउंटर कर पाएंगे, तो थोड़ा उधर उन्हें संभलना चाहिए। पिछले राउंड उसी साथ हार चुके थे, मगर शायद ये राउंड जो है डिसाइडिंग राउंड इस सेट का काफी अलग हुए। और कहते कहते वो अभी भागने की कोशिश की कॉर्नर से, मगर इस बार अयान ने उनका ही सेटअप उनके ऊपर चला दिया और वापस से EX बुलहेड अयान वापस स्टेज के सेंटर में आ गए थे। और कहते कहते वो कॉर्नर में गए और फिर एक बार सेंटर में आ गए EX बुलहेड का यूटिलाइजेशन करके। बहुत अच्छा जैब चेक किया था डार्क लॉर्ड ने उधर, थोड़ा काउंटर हिट कंफर्म नहीं कर पाया, मगर चलेगा। कहते कहते उसके साथ अभी डार्क लॉर्ड की हेल्थ बहुत कम हो गई थी और वहीं पे लो के साथ अयान ने ये सेट उनसे छीन लिया। डेफिनेटली, और काफी अच्छे से छीना। जैसे वो कॉर्नर्स की आप बात कर रहे थे, डार्क लॉर्ड बार बार कॉर्नर प्रेशर तो मेंटेन कर रहे थे, बट अयान इस बार परफेक्टली फिगर आउट कर चुके थे कि उस प्रेशर से बाहर कैसे निकलना है, और सेट छीन तो लिया, एडवांटेज भी वो अपने ले चुके। अब डार्क लॉर्ड के ऊपर अगले सेट में बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर रहने वाला है। अग्रेशन जो यहाँ पे टोन डाउन किया था, उसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज तो देखने को मिल रहा है, बट जैसा आपने कहा वो चीज रिक्वायर्ड भी थी, क्योंकि अयान उस चीज को अब अच्छे से रीड कर चुके हैं, और अगर एक भी ओपनिंग मिलती है तो बहुत ही बुरा पनिश हमको अयान की तरफ से आने को देखने को मिलता है। बुरा आई मीन डार्क लॉर्ड के लिए होता है, क्योंकि वहां पे हेल्थ बार जो है वो डिप गायब होना चालू हो जाता है अचानक से। दोनों के कैरेक्टर्स ही ऐसे हैं इस केस में कि वो एक दूसरे के हेल्थ बार कभी भी मतलब मेल्ट कर सकते हैं। मतलब बोलते हैं मोमबत्ती एकदम आप आग नहीं लगा रहे हो उसको, आप सीधा आग में फेंक दे रहे हो, वैसी बात हो जाती है। बट अडेप्टेशन की बात की जाए तो दोनों ही प्लेयर्स बहुत अडेप्टेबल है। शायद थोड़ी सी मुझे हड़बड़ी दिख रही है डार्क लॉर्ड के अंदर, जिसका फायदा अयान ले पा रहे हैं उधर। अगर वो अपने आप को मतलब थोड़ा और काम कर ले, विच इज वेरी पॉसिबल, क्योंकि डार्क लॉर्ड के पास वैसा एक्सपीरियंस है और वो अयान को क्वालिफायर्स में एक बार पहले बार हरा भी चुके हैं, तो ऑब्वियसली उनको बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पे है। बट अयान एक ऐसा प्लेयर है जो मतलब आप अगर उनको कंपटीशन के बाहर खेलोगे तो आप भी हरा दोगे ऐसे मैं बोल सकता हूँ, मगर कंपटीशन में वो एक अलग ही चीज बन जाते हैं। ही बिकम्स अ डिफरेंट पर्सन इन कंपटीशन, एंड फ्रॉम डे वन उनके पास ऐसा एक मतलब एक स्विच का पता नहीं एक अलग हिडन रूप है किधर ना किधर, जिसका वो यूटिलाइजेशन करते हैं। आई मीन वही चीज होती है, कुछ लोग प्रेशर के अंदर ब्रेक डाउन होते हैं, कुछ लोग प्रेशर के अंदर और बेटर परफॉर्म करते हैं। आई गेस अयान वो दूसरे, ही इज वन ऑफ द लैटर कैटेगरीज की। प्रेशर जैसे ही आता है अयान का परफॉर्मेंस प्रेशर के साथ इंप्रूव होते जाता है, क्योंकि अभी ग्रैंड फाइनल्स के अंदर अब मौजूद है, एंड ही
is playing better than his match before, जो प्लेन गौरव के अगेंस्ट था उससे भी ज्यादा हाई और इंटेंसिटी के साथ खेल रहे हैं, और वो इंटेंसिटी आई मीन बनती भी है क्योंकि डार्क लॉर्ड उनके सामने है, नीचे से बिल्कुल क्लीन स्वीप करके आ रहे हैं प्लेन गौरव वाले मैच को, और प्लस दोनों के जब मेरे को याद है क्वालिफायर नहीं, टॉप 16 प्लेऑफ्स के दौरान भी जब इन दोनों का बीच में एक भिड़ंत हुई थी पूल 1 के अंदर, उस टाइम पे भी बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव मैच हमको देखने को मिला था। इस बार अगले मैच में जाते टाइम डू यू थिंक कि यहाँ पे हमको एक कैरेक्टर स्विच देखने को मिलेगा, या फिर जी वर्सेस बर्डी का मैचअप ही डार्क लॉर्ड के लिए सही है? जी वर्सेस बर्डी का जी का तो काफी एडवांटेज है मेरे हिसाब से। बात ये होती है कि स्ट्रैटेजी की चेंज जरूरी रहेगी, और मुझे लगता है डार्क लॉर्ड वो कर भी पाएंगे, क्योंकि अयान की जो एक खासियत है, वो जो मीडियम और हैवी बटन्स की जो रेंज रहते हैं उसमें Yes. उनका जो प्ले रहता है बहुत ही स्ट्रांग रहता है। और काफी लोग, माई सेल्फ इंक्लूडेड, बहुत स्ट्रगल करते हैं इस रेंज में अयान के अगेंस्ट, और एक टाइम पे डार्क लॉर्ड भी स्ट्रगल करते थे। और ये जो मैंने देखा है कि उन्होंने भी अपना एक बोलता ना एक छापा उधर छाप लिया है। आप देखोगे अगर गौरव का मैचअप है, उन्होंने वही मीडियम और हैवी बटन के रेंज में उनको बहुत ज्यादा डोमिनेट किया आफ्टर मूविंग इनटू दैट स्पेस। तो मुझे लगता है बिकॉज उन्होंने सीखा है इनको काउंटर करना ओवर टाइम, एंड उन्होंने दिखाया है कि मैं भी आई कैन गो टो टू टो विद अयान। अगर वो वापस से कुछ थोड़े चेंजेस करे, वो भी यहाँ पे वो स्पेस में खेल के उनको डोमिनेट कर पाएंगे। क्योंकि जी की एक खासियत है, उनका जो लाइट है वो उनका जो क्राउच लाइट है और जो स्टैंड लाइट है, वो एक्चुअली ऑलमोस्ट मोस्ट कैरेक्टर्स के मीडियम के रेंज में आता है। तो वो स्पीड में वो रेंज के साथ दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बटन। उनका अगर अच्छे से वो काउंटर में यूटिलाइजेशन करे तो शायद ये सेट्स उनके फेवर में भी जा सकते हैं। वेल लेट्स सी किसके फेवर में यहाँ पे सेट जाने वाला है, क्योंकि दिस कुड वेरी वेल बी द लास्ट सेट दैट वी गेट टू विटनेस। अभी 2-1 का स्कोर लाइन चल रहा है यहाँ पे। अयान एक बहुत ही अच्छी लीड बना के, ओह काफी अच्छा पनिश आता है वहाँ पे, टाइमिंग बहुत अच्छी। एग्जैक्टली। और ये जो चेन जो ब्लॉक करते हैं, मुझे आई थिंक जी कैन पनिश इट विद द स्मैशेस जो वो यहाँ पे नहीं कर रहे, या कम से कम चेक कर सकते हैं उसके बाद काउंटर प्रोजेक्टाइल यूज करके। और थोड़े से वो लगता है जरा ज्यादा ग्रेडी हो गए उधर, कमांड ग्रैब का यूज करने निकले। अयान जो है काफी अच्छी रीड रखता है कि कमांड ग्रैब कब आ सकता है उनके ऊपर। और आप देख रहे हो वो मीटर यूज करेंगे एज लॉन्ग एज यू कैन कीप डार्क लॉर्ड इन द कॉर्नर। उनको कॉर्नर में ही रखना है। और इस देख सकते हैं आप यहाँ पे शीमी किया उनको काफी अच्छी तरीके से। मतलब थोड़ा इसके पहले जैसे हमने देखा था, जब तक डार्क लॉर्ड कॉर्नर में उनको प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे लगता है यही स्ट्रैटेजी वो मेंटेन करेंगे। और अगर डार्क लॉर्ड थोड़ा मतलब काम रह सकते हैं एंड कंटेंट विद बीइंग इन द कॉर्नर एंड काउंटर प्लेइंग, देन ही कैन कम आउट। वहां पे उन्होंने ग्राउंड का अप्रोच सोचा था, मगर अयान ने जंपिंग करके उनको कॉर्नर कर दिया था। अच्छे से वो भी फाइट बैक करे आउट ऑफ द कॉर्नर, बट अयान का जो EX बुलहेड का यूसेज है, वाह भाई वाह, वो तो वही जानते हैं किस टाइम पे वो यूज करना चाहिए। और वही कहते कहते बहुत अच्छे से मिड स्क्रीन से विफ पनिश करके कॉर्नर टू कॉर्नर कॉम्बो करके जी ने अभी अयान को कॉर्नर कर दिया है। और आप जैसे देख रहे हो स्टन के भी द्वार पे आ गए हैं वो। और ये एक गलती जो कर दी डार्क लॉर्ड के लिए शायद बहुत बुरी हो सकती है अगर वो केयरफुल नहीं है। मगर ये जो एक गलती कर दी अयान ने, उनके लिए मुश्किल हो सकती थी। काफी ही इंटेंस गेम चल रहे हैं यहाँ पे, दोनों थोड़े शायद ओवर अग्रेसिव हो गए थे वहां पे। मगर अयान का बहुत अच्छे से फॉरवर्ड हैवी पंच का पनिश किया उधर डार्क लॉर्ड ने, काफी स्टाइल में भी, जैसा आप देख सकते हैं उधर। और कहते ही कहते ये आ गए हैं लास्ट राउंड फॉर द सेट फॉर डार्क लॉर्ड, बट लास्ट राउंड फॉर द सेट फॉर द गेम फॉर अयान। बहुत ही क्रूशियल राउंड है ये। दोनों एक दूसरे की तरफ थोड़ा कॉशियसली खेल रहे हैं, बट एक स्ट्रॉन्ग एंटी एयर के साथ अयान ने ओकी लिया था वहां पे। बट ही इज कंटेंट, ही उनको ज्यादा धक्का नहीं देना है। आप देख रहे हो यहाँ पे वो एक्चुअली मीडियम बटन्स के रेंज के भी बाहर रहना चाहते हैं, बिकॉज बर्डी के पास उतना रेंज है। और जब एक बार वो कंडीशन कर दिया, उन्होंने डैशिंग करके उनको ग्रैब किया। वैसे वो वहां पे अग्रेशन कंटिन्यू कर सकते थे, मगर उनको थोड़ा दूर ही रह के खेलना है, बिकॉज डार्क लॉर्ड जो है, डार्क लॉर्ड की जी की रेंज की काफी ज्यादा है। और एकदम से वो उन्होंने अभी कमांड ग्रैब का यूटिलाइजेशन कर दिया है, जब डार्क लॉर्ड एक्सपेक्ट करते कि वो आउट ऑफ रेंज रहेंगे। मगर अभी जी का ट्रिगर एक्टिवेट हो गया है, और वो राउंड एंड पे आके ओवरहेड जो क्लासिक है बर्डी का, वेरी गुड यूटिलाइजेशन, अयान का फेवरेट टूल। और साथ ही साथ बिफोर वी कुड रियलाइज उन्होंने पूरा गेम उनके फेवर में वही ले लिया। I mean,
हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अयान शायद थोड़े बहुत राउंड्स ड्रॉप करेंगे डार्क लॉर्ड को, एंड इट फील्स लाइक वो पहले सेट के बाद ही वो पूरी की पूरी तरह डार्क लॉर्ड की स्ट्रेटजी समझ चुके थे, क्योंकि उसके बाद वो इंडिविजुअल राउंड से जहाँ पे डार्क लॉर्ड की तरफ से हमें बहुत ही बेहतरीन ओपनिंग्स देखने को मिली थी कि अयान का एक वे इतना गंदा पनिश होता था, जैसे बार बार आपने भी एक्सप्लेन किया, वो कॉर्नर टू कॉर्नर जो कैरी हमको देखने को मिल रहा था, वैसी मोमेंट्स की वजह से डार्क लॉर्ड्स राउंड पिकअप कर पा रहे थे। बट वो सेट की जब बात आती थी तो सेट्स पूरी की पूरी तरह अयान ही डोमिनेट करके लेकर जाते थे, और बहुत ही एक इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस आता हुआ यहाँ पे, एंड ऑल्सो बिकमिंग द चैंपियन ऑफ KO फाइट नाइट सीजन 5. Once again, becoming the champion of the game. Hats off to Dark Lord and his G, though he is Yes. second once again. But very the best performance that I have seen so far. Best performance जो हमने सबने अभी तक देखा है, बहुत ही अच्छा किया. और अयान ने भी कुछ यूनिक किया इस बार जिससे वो जीत पाए, क्योंकि जैसे हम बोल रहे थे कि जैसे डार्क लॉर्ड का यूटिलाइजेशन था जी का काफी अच्छा था, बट फिलहाल ये सब के लिए हम हमारे एनालिस्ट डैन को बुलाते हैं जो काफी अच्छे से हमें एक्सप्लेन कर पाएंगे क्या हुआ उस राउंड में, उस सेट्स में. देखिए, when we first started watching that match, पहले गेम में डार्क लॉर्ड ने काफी अच्छी तरीके से उनको पनिश किया और अपनी ऑप्शन यूज किए. He took game one by playing his style, forcing Birdie to choose the options that he wanted him to choose. और सेकेंड गेम में भी काफी टग ऑफ वॉर जैसा गेम हुआ था अप अंटिल द फोर्थ गेम. थर्ड गेम तक भी मैनेज कर पा रहे थे डार्क लॉर्ड, वेरी क्लोज एंड तक ले जा पा रहे थे, बट आयान वाज ऑलवेज कमिंग आउट ऑन टॉप, क्योंकि उनके EX बुलहेड के यूज का ऑप्शन, जैसे आप भी पॉइंट आउट कर रहे थे देवराज, EX बुलहेड ऑप्शन वेरी गुड, और उनको कैच कर पा रहे थे हर बार. And towards the end, he had conditioned him to start expecting an attack instead. और वो कमांड ग्रैब का बहुत बेहतरीन यूज करके वो राउंड क्लच कर पा रहे थे. सो वेरी सॉलिड प्ले फ्रॉम अयान. अनफॉर्चुनेट फॉर डार्क लॉर्ड क्योंकि उनको तो पूरा रीड कर लिया आज, बट ही इज स्टिल वेरी सॉलिड प्लेयर नॉनदलेस. दोनों से वेरी अमेजिंग गेम टू वॉच. I mean, ये चीज देवराज ने भी मेंशन कर थी कि अयान की जो एबिलिटी है टू रीड द प्लेयर्स, टू रीड द सिचुएशन परफेक्टली और प्रिडिक्ट कर लेते हैं, प्रिडिक्ट भी नहीं, मैं बोलूंगा कि एक पॉइंट पे पूरा एनालाइज कर लेते हैं अपने ओपोनेंट को कि किस माइंडसेट के साथ वो आ रहे हैं. एक सेट ड्रॉप किया, बट आई थिंक दैट वाज वर्थ इट इफ यू लुकिंग एट द बिगर पिक्चर कि अब चैंपियनशिप वो जीत चुके हैं, जो 50,000 रुपए का प्राइज मनी है वो भी यहाँ पे अयान के हाथों में ही जाएगा अलॉन्ग विद द ट्रॉफी. बिल्कुल. और यस. मतलब अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से कि ऐसी क्या सिचुएशन रह सकती थी दैट वुड हैव लाइक बिन ट्रू कि डार्क लॉर्ड वहां पे विक्ट्री ले जाते हैं इस बारी, लाइक जस्ट गेटिंग वन एक्स्ट्रा सेट. Dan, starting with you. I think Devraj has something to say about that. No, go ahead after you. मैं रुकता हूँ तब तक. क्योंकि I think डार्क लॉर्ड ने जो पहला गेम खेला था, he was playing very solid there. और उसमें I think he couldn't have honestly done much क्योंकि he was playing at the top of his level. Towards the end, Ayan just adapted really well और उन्होंने उनके गेम प्लान समझ ली थी at that point और उनको अपने गेम खिलवाने के चक्कर में थे. So they, even the whiff chains that he did that got punished, at afterwards that came fortunate for him क्योंकि वो फिर command grab का use करने लगे and that was a little bit more surprising to Dark Lord. वो adjust नहीं कर पाए. So I think he did well, but Ayan is just a better player on the day, unfortunately. देवराज, आपका क्या कहना रहेगा? बॉटम लाइन तो वही है कि इवन दो मतलब डार्क लॉर्ड बहुत मतलब उनका जो गैप था प्लेइंग लेवल्स में बहुत ही रिड्यूस हो गया है. वो एक हल्का सा जो है गैप, अयान प्लेड डिड SF5 बेटर बिकॉज यहाँ पे जो हमारा गेम प्ले था ऑफ कोर्स टैक्टिक के यूटिलाइजेशन हुए, मगर जो अंडरलाइंग अप्रोच है SF5 का वो काफी पहले से अयान ने थोड़ा उस पर मतलब बोला ना उसको पकड़ चुके थे, जो ऑफ कोर्स डार्क लॉर्ड हैज हिज ओन टेक ऑन इट और वो भी अभी आ रहे हैं उस पार. बट इन दी एंड वो जो फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, जो चेंजेबिलिटी रहता है, वो अयान में काफी स्ट्रांग है. एंड आई थिंक let's throw to the desk. What do you think, Varun? You take over. Well, definitely. चलिए अपनी डेस्क के पास चलते हैं और देखते हैं कि लक्ष्य और फीनिक्स का क्या कहना रहेगा हमारे इस अमेजिंग ग्रैंड फाइनल्स के बारे में. Thank you so very much, Super Chani, Dave, as well as Dan, for that incredible analysis and cast. But indeed, dude, finally,
Incredible. We have our champions. We have the champion, and it is not Dark Lord. It's As Ayan. you had expected. Sorry, Phoenix. Sorry, but Don't indeed it is Ayan, dude. The way he just steamrolled across the entire competition. He is the champion of Street Fighter 5, Season 5 of KO Fight Night. Incredible play. Wonderfully paced gameplay coming in from Ayan. I don't even want to say that he did not provide opportunities to Dark Lord. On the other side, Dark Lord का gameplay देख के ऐसा लगा that he was on the back seat or more of a back step, because there were so many moments where you could see that yes, he is on that defense line that much more than we saw him aggressing against other opponents earlier. Yeah, that's true. But the thing is, the way Ayan played is Right. insane. That's why he's a Season 5 champion. And congratulations, Ayan. And congratulations to Dark Lord too. He got the second position. It's also great. But जो game दोनों players ने दिखाया वो काफी अच्छा था और यही देखना चाहते थे. Absolutely, हर कोई ऐसा ही gameplay. And let's have a look, and we have that Ayan just lifted that trophy up, and he just won the KO Fight Night Season 5 of the Street Fighter 5 Champion Edition. That is so very true indeed. Ayan has taken the trophy, and I'm sure he is going to be feeling really, really proud. On the other side, Dark Lord, आपका क्या कहना है? Chat में आइए, कुछ बताइए, कुछ थोड़े बहुत हमें भी वार्तालाप करिए हमारे साथ, and let us know, what do you think, mate? Where do you think did it go wrong for you? Because again, when it comes down to the gameplay, we know for a fact both of the players are very, very skilled, and if at all anything, both of them had equal opportunities and chances to be able to take that trophy. But of course, there's only going to be one winner, and for today, that one winner indeed is Ayan. With that, leaving Dark Lord on that second position, and that's not bad as well. That's not bad at all. I mean, कल हमने उनका इंटरव्यू देखा था. Dark Lord was talking about how he started the game, I believe in 2017. Yes. And then he found out about the entire saga of how there is esports in India now and how you can be a part of the entire championship. And well, GG's indeed. Since then, he's been grinding it. He's been doing it. And of course, here he is once again to prove his worth. But Ayan just taking it, swooping away against But. GG's with that. As just said, we have our champion. That means it is time to get into a conversation, if possible, maybe with Ayan. Because after all, we do want to find out what was going through him. You know, Bori बहुत अच्छे से utilize कर रहे हैं वो. बहुत अच्छे से, मतलब, you talk about damage. We were both looking at the match. The amount of damage that comes in from Bori, dude, it is just incredible. Once he starts steamrolling, Ayan को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगता है. Yeah, that same just second match start हुआ था. आप और मैं conversation कर रहे थे कि क्या damage था. Almost 50% HP वो भी instantly, exactly. And on the other side, of course, जैसे हमने बताया कि Dark Lord, when it came to the gameplay, at least in this game, in the grand final championship fight itself, it seemed as if he was on the backseat a little bit. He was on the backseat. He was maybe thinking a bit too much when it came down to the analytics and strategies, because we saw him kneel down, we saw him try and just go for the blocks that much more than he would aggress. And then when he would aggress, then again Ayan would just somehow be able to get away from that corner zone and bring himself back into the limelight. And GG's indeed, well, he has taken the light away from everybody else, because Ayan, once again, if you're joining right now, is the champion of Street Fighter 5. Incredible play, mate. Thank you. I just want to tell something that you just mentioned, that Devraj just mentioned that Ayan का जो read करने का power है, analyze कर लेते जो opponent का playing style है, वो काफी अच्छा था. First game में उन्होंने मतलब just वो check कर रहे थे कि how Dark Lord is going to play. He's going to play over aggressive or aggressive and moderate. But still, in the second and third game, he know that what he have to do, उनको क्या करना है, किस moment पे, और that's why आराम से जीत गए वो. बिल्कुल सही बात है. आराम से तो जीत गए वो, लेकिन आराम से जो वो इतनी बड़ी जर्नी लेके आए हैं, that I'm sure was full of a lot of ups and downs, and that is the conversation I'm really looking forward to. And that, I believe, is Dan, who will be getting into a conversation with Ayan, our champion. And again, for that, if at all you guys have any questions for Ayan or for anybody else as well, hashtag karo apna question with the player name and type it into the chat. If you do like using Twitter, Instagram, Facebook, you can go over there as well. It's not necessary for you to be here on YouTube chat itself. It's absolutely fine. But again, participate. Get in touch with the community. Again, this is not a one-time deal. This happens every single year. Like it says, season 5 hai ye. Every single year. This time around, sadly, there's no LAN, but that's A-okay, because we still have the championship running. And with that, of course, is Airtel India Esports Store. And you still
all the players sitting back at home, all of you guys sitting back at home who are not players yet but are thinking, maybe this is my game. Yes. Maybe this is my year. Maybe this is my moment. Well, do not wait anymore. You just need to get on steamrolling and get into the tournament, into the arena with all of these incredibly talented, skilled players. But now, with that, it is time to get into the conversation that I've been premising. It is time to get into an interview with Ayan, and I believe it is Dan taking care of this interview for us. Ladies and gentlemen, join me in congratulating our champ KO Fight Night Season 5 Street Fighter 5 champion Ayan01 joining me here. How does it feel? कैसा लग रहा है आपको after winning this grand final? पहले तो मैं सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ जो मुझे देख रहे थे। हेलो जी बोलिए हेलो आप, क्या आवाज आ रही है? तो थैंक यू कहना चाहता हूँ जो मुझे देख रहे थे, और मैं अभी बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि जीत के। जी हाँ, बिल्कुल आपने काफी डोमिनेटिंग फैशन में लिया। वो पहला गेम जो है डार्क लॉर्ड ने लिया, लेकिन उसके बाद से जो आपने 3 गेम स्ट्रेट उनसे लिए, आप थोड़ा मुझे बताइए आप क्या सोच रहे थे वो पहले गेम के बाद? कैसा लग रहा था आपको उस वक्त? पहले गेम के जब मैंने हारा तो मैं थोड़ा सा नर्वस पड़ गया था कि मतलब और फिर मैंने क्या किया कि सब टेंशन अपने भीतर से हटा दिया और जीत गया। बिल्कुल, अब हम स्क्रीन पे देख भी रहे थे कि आपका जो रिकॉर्ड था, मतलब एक गेम हारने के बाद जो सीधे 3 गेम आपने थोड़ा डोमिनेशन दिखाया। और आपने थोड़ा मुझे बताइए कि कैसे पिकअप किया डार्क लॉर्ड के स्टाइल पे? आपने कैसे वो 3 गेम स्ट्रेट उसके बाद उनको कैच अप किया उनके साथ? पहले तो मैं थोड़ा सा रिस्की खेल रहा था पहले मैच में जिसमें मैंने हारा था। उसके बाद मैंने पूरा ही डिफेंसिव खेलना शुरू कर दिया। मेरे मन में लगा कि अटैक करने से कोई फायदा नहीं, पूरा डिफेंसिव खेलूं। जी हाँ, आपके थोड़े कमांड ग्रैब के ऑप्शंस भी बेटर हो गए थे और ईएक्स डॉल्फिन डाइव भी पड़ गया, एंड बुलहेड का भी ऑप्शन आपने काफी अच्छी तरीके से यूज किया उनको प्रिवेंट करने के लिए। तो वैसे आप पिछली बार भी केओ फाइट नाइट जीत चुके हैं, इस बार भी जीत चुके हैं, आप आगे भी डोमिनेट करेंगे। आपको क्या लगता है कंपटीशन इस बार बेहतर था कि आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अभी इसके बाद? कंपटीशन से हर साल बढ़ ही रहा है, तो मुझे भी प्रैक्टिस बढ़ाना पड़ेगा अगर पोजीशन पे रहना है तो। प्रैक्टिस कंपटीशन तो बहुत ज्यादा था इस बार पिछली बार से। वो तो रहेगा ही, और आपने एब्सोल्युटली दिखा दिया अपना टैलेंट और नंबर 1 आकर के फर्स्ट प्लेस जीता। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन, बहुत अच्छा प्राइस पूल ले लिया है आपने, और हम चाहते हैं कि आप अगले केओ फाइट नाइट में भी आकर के अपना टैलेंट दिखाए, होपफुली फर्स्ट प्लेस में लेके। So thank you so much, Ayaz sir. We'll be throwing it back to the desk now. See you guys soon. Thank you so very much, Dan and Ayan. Congratulations once again, mate. Season 5 is yours for the taking. Street Fighter ka glory is yours for the taking. I mean, there's not just one-time deal, right? Yes. Dude's done it twice. Third time is a charm. Well, that's what people say. Again, you guys sitting back at home, what are you doing? You cannot let Ayan win this one, or are you going to? But GG's indeed. Please do not forget to congratulate him. He is an incredibly skilled player. And जिस तरीके से आपने देखा भी, मतलब does not talk a lot, but as soon as he's in the arena, right? It's his game. Yeah. It's his ball, it's his game. Nobody can question it. The thing is, काफी down to earth है. I just Right. मैंने interview देखा, काफी ज़्यादा down to earth है. He just focus on the game first. Yes. जैसे just देवराज mentioned कि जब वो बिल्कुल. normal competition में खेलेंगे, I think so कि वो थोड़ा मतलब आराम से खेलते हैं. But Right. if we're talking about this big, मतलब KO Fight Night is a very very big stage to perform. और जिस तरीके से the game he showed is totally insane, and that's why he is a winner one more time. He won the KO Fight Night 5, and I hope maybe he's going to go for the hat trick. Well, I'm sure he is going to try, but Dark Lord ain't going to be that far behind, because, I mean, I've been hosting it. This is the second year for me that I've been hosting it, and I remember Dark Lord very vividly, very clearly from last year as well. On the stage, he's like, dude, I have to get them. I have to get him. I do not care. He's got his all set, controller set, and he's like, dude, I wish I could get him, though. Nevertheless, wonderful skilled showcased by all the players. Dark Lord, of course, thanks to you as well, and thanks to all the other players. I mean, you guys have genuinely
picked up the competition and the pace and the momentum of KO Fight Night Arena with the gameplays that you've showcased, and it is GG's to all the players who participated, because it is and not easy, and it is a grind. It certainly is a grind, but within those 100 seconds, anything can happen, right? Anything can happen, and we can see the same thing. The thing is, congratulations to Dark Lord as well as playinGaurav, who भी काफी अच्छा game दिखाया. बिल्कुल. They went to a good position, or second place is also a good position for. But let's see, Dark Lord is going to perform well, and he is going to get that first position in the KO Fight Night Season 6. I really want to see him getting that trophy. Wow. That is going to be good. Along with that, of course, my hope is going to be that, next time we're meeting on LAN, you guys better be there. Certainly be there. But right now, I'm not giving no expectations because, well, don't want to have any expectations. Nevertheless, moving on along, that was, of course, the champion. Once again, congratulations to Ayan for Street Fighter 5. Moving on along with our show, we do have a schedule to maintain. So let's quickly sneak peek into the schedule and showcase what else do we have lined up for you guys. Alright, so we're going to wait on for just another minute as the schedule will come on live. What we do have, I'll tell you before it is live. There you go. There's no more secrets. There it is. 2:15. Mortal is stepping into the arena against Mamba, and that is of course going to be in the Tekken 7 arena, and it is going to be a fight, an incredibly insane fight that you do not want to miss out. And of course that's not the only one, because we have three incredible wonderful matches lined up that are going to be called the show match that you do not want to miss out. If you did not see that, well, it's a-okay, because I could ask production, could you please bring that screen once again? So first match is happening on 2:15, right? That is Mortal going against Mamba. As you move on along, you are looking at Scout going against Rebel. That shall take place at around 6:30 p.m. And then finally at the end of the day, before we move in with the grand finals of Tekken 7 itself, we have another match where indeed this time around it is going to be, I believe, Thug versus going Regaltos. against Regaltos. Yeah, and Dude. you know what? The game is Tekken 7. Yep. My favorite fighting game. And I am literally so excited at how these players are going to perform. And we have the first game, Mortal against Mamba. And you know what? Let's talk about which characters they are going to pick. What do you think? Dude, eeny, meeny, miny, mo, whichever way does it go. I mean, it's randomized, you know, that's the Yes. best way to go around it, because these are not... See, it's a different game. Yeah, it's a different ball game altogether, because one is you taking it a step in, wherein you're talking about proper serious approach that are going to be players like Ayan, players like Dark Lord, and Yes. then you have a little bit of fun, right? Like we could sit back, just get the game on, and does not matter whatever character you choose, just randomize it, right? But yes, with that is what you are to wait for. I certainly do hope you guys are excited as we are. But with that, we're going to go on a short little interview journey right now, where indeed Ayan is right there, giving his thoughts and his... Well, let's just quickly find out what was the interview about. Ladies and gentlemen, boys and girls, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है ओशन शर्मा और आज हमारे स्ट्रीट फाइटर के इंटरव्यूज देने के लिए KO फाइट नाइट के लिए। एंड स्ट्रीट फाइटर, आई मीन इट्स अ वेरी डोमिनेटिंग गेम ऑफ प्लेयर्स को एक दूसरे को डोमिनेट करना ही रहता है। सो ऐसे ही प्लेयर्स हम बात करेंगे अयान, उनसे जानेंगे कि उनका अभी तक का जर्नी कैसा रहा और आगे वो क्या-क्या सोचते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अयान, आई वुड से वेलकम टू दिस वन। सो मैं शुरुआत करना चाहूंगा आपसे जानने के बारे में कि आपका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या, आप कहां से बिलोंग करते हैं और क्या स्टडीज वगैरह में आपका क्या सिचुएशन रहा? जैसे कि मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ। कोलकाता से 2 घंटे दूर एक मतलब गांव टाउन में जिसका नाम है बीरनगर, तो उसमें मैं अभी कॉलेज में एंटर किया था। तो आपने ये गेम कब से खेलना स्टार्ट किया और यहाँ से आपकी कॉम्पिटिटिव में जर्नी कैसे है? बिकॉज पहले तो जब सब लोग खेलते हैं तो वो नॉर्मली खेलना शुरू करते हैं, तो वहां से कॉम्पिटिटिव में आप कैसे एंटर हुए? जैसे कि 2017 में मैंने स्ट्रीट फाइटर 5 डाउनलोड किया था और मैं बस ऐसे ही खेल रहा था, तो खेलते खेलते मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं सोचा कि इसको मैं प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाऊं, तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2017 में। जैसे फर्स्ट टूर्नामेंट में 2018 में बेंगलोर में प्रूविंग ग्राउंड्स खेला था। उसमें स्ट्रीट फाइटर था, टेकन था, तो उसमें मैंने स्ट्रीट फाइटर में पार्टिसिपेट किया था। एंड स्ट्रीट फाइटर के यूनिवर्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स रहते हैं जो ऑब्वियसली प्लेयर्स यूज करना चाहते हैं अपने हिसाब से, किसी के कुछ फेवरेट कैरेक्टर्स होते हैं, तो आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है और क्यों आप उसको चूज करते हो? स्ट्रीट फाइटर में जैसे जितने कैरेक्टर्स है, बहुत सारे अच्छे कैरेक्टर्स है।
उससे मैं बर्डी को चूज किया क्योंकि बर्डी के पास बहुत अच्छा मूव्स है। तो अभी जैसे आपने बोला 2017 से खेल रहे हो, फिर 2018 में आपने पहले कॉम्पिटिटिव में पैर रखा और अब 2020 आ चुका है। सो आपकी आगे की जर्नी आप किस तरीके से देखते हो? जैसे अभी तो मैंने इंडिया में कुछ टूर्नामेंट्स वगैरह खेला है बहुत सारे, और इसके बाद मैं सिंगापुर में एक टूर्नामेंट होता है साउथ ईस्ट एशिया मेजर, उसमें मैं खेलना चाहता हूँ। अगर उसमें मैं जीत गया तो मेरे एक दिमाग में एक इच्छा है कि मैं ईवो में जाऊं, ईवो में पार्टिसिपेट करूं। वैसी मूवमेंट अगर लाइक आपके आसपास कभी ऐसा कुछ हाई प्रेशर सिचुएशन हुआ है जो आपने अपने हिस्से में बदला है? जैसे ईवो मूवमेंट 37 था जो उस टाइम पे तो बहुत बहुत बड़ा मूवमेंट निकल कर आया था। सो आपके अकॉर्डिंग ऐसा कोई मूवमेंट आपने पर्सनली कुछ एक्सपीरियंस किया? 2018 में जब ड्यू एरिना हुआ था तो डार्क लॉर्ड ने मुझे 3-0 में उसके पास एडवांटेज था, उसके तभी मैंने पूरा अपना कमबैक किया था कि उसके बाद मैंने एक भी डार्क लॉर्ड को जीतने नहीं दिया और 5-3 में मैं जीत गया। बस वो कमबैक मुझे बहुत अच्छा लगा था, वैसा ही एक्सपीरियंस है मुझे। बट यार मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके इस टूर्नामेंट में KO फाइट नाइट के स्ट्रीट फाइटर के अपने यूनिवर्स में आपके अकॉर्डिंग आपके स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल यहाँ पर कौन से प्लेयर्स हो सकते हैं? मेरा जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल है वो है B3, क्योंकि मैंने आज तक उनके साथ कोई टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं जीता। और आगे मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या स्ट्रेटजीज आपकी रहेगी कि आप 4th से ऊपर उठ सके? जैसे कि मैं जो प्रो प्लेयर्स हैं स्ट्रीट फाइटर में उन लोगों की मैचेस में देखता रहता हूं और मैं उन सब की जो स्ट्रेटजीज वगैरह है वो उन सब की स्ट्रेटजीज में अपने गेम प्लेस में आना चाहता हूं। और अगर कोई मैसेज है जो आप इस कम्युनिटी को या फिर अपने फैंस को देना चाहेंगे इस इंटरव्यू के द्वारा? तो मैं ये चाहता हूं कि सिंगापुर में हम लोग सभी कम्युनिटी मेंबर्स जाए और उधर एक ही नाम गूंजे कि इंडिया जीते, या मैं जीतूंगा या मेरे कम्युनिटी मेंबर में कोई भी जीते, बस इंडिया को जीतना चाहिए। इस सब के साथ ही मैं ये बोलूंगा थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम आउट है एंड आई होप कि आपके जो फ्यूचर एंडेवर्स है आप उसको पूरा सक्सेसफुल हो, बिकॉज जिस तरीके से आपने बताया जो कॉन्फिडेंस आप लेकर आए हैं ये जरूर आपको स्ट्रीट फाइटर में और आगे लेकर जाएगा। प्लस आपका गेम पे तो आपके साथ है, सो थैंक्स अ लॉट। Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to an interview with KO Fight Night that currently is going on. My name is going to be Roshan Sharma, and alongside me, I have Lionhart, one of the most dominating players right now. Actually, dominated his way through Group A, if I have to talk about it, and I'm hoping he's going to dominate this interview as well. So, welcome. Hi everyone. I am Abhiru Verma, and as you all know, I am known as Lionhart in my nickname in the in-game Smash Brothers. And so I'm actually thrilled to have you here on this area right now, on this interview for KO Fight Night Super Smash Bros. But I want to know more about you. What's your belongings and what have you studied and all those things beside gaming as a thing? So I am doing my MBA right now, and I completed my bachelor's in computer engineering last year, and I belong to Bhopal, Madhya Pradesh. So there are not a lot of players here. There is only 2 players here, including me. So I want to ask you a question as of now. Like, when did you start playing Super Smash Bros. And how did you transition from being a normal player to a competitive player? So I started playing Smash 12 years ago, and it was the first Smash game, Smash 64. So I started from it, and I just found this game really interesting because it was quite unconventional compared to the other fighting games. And this fighting game had all of the Nintendo characters, which I really liked. So I started playing it casually, but only until the last Smash game, which was Smash 4, I started to take this more seriously and started to transition from the casual play to the competitive play. And around 2015, I had this competitive fire in me and started to improve. And then only last year, I found that there is a Smash community in India and we have tournaments here. So I found that community, and last year, I just went to my first tournament. And ever since then, I've been playing Smash Brothers and really enjoying Smash India community. You have gathered a lot of fans, a family out there. But then personally, which is your favorite character in the game if we talk about it, and why? I would want to ask you. Okay, so my favorite character is actually Ganondorf. As many of you know, he's the main villain from the Legend of Zelda series, and he's extremely powerful character in Smash Brothers. He's not a top tier or even a mid tier at that, and he's never been too good in any of the Smash games, but still I really like him, I love him, and he's just super powerful, and I just love that about him. We're talking about all the other characters, because right, it actually accumulates a universe of characters if you're talking about it. So I want to ask you your personal opinion, which character do you think should be nerfed and which character should be buffed in the upcoming updates or something?
So Smash Ultimate is really, really balanced. Even low tiers have chance to compete against the high tiers. And I am probably the biggest example of that in India because I used to use Ganondorf, who was a low tier. But if we talk about who I think should be nerfed, I would say that probably Palutena because she is really, really overwhelming in the air and she's just such a strong character. And even in this tournament, there's so many players using Palutena. But it's just that they are very, very skilled with any kind of character. But in general, if I wanted to ask for any kind of nerf, it would probably be Palutena. So I want to ask you your upcoming times. Like, what are your future goals with this game? Like, constituting as you have had 12 years of experience. So moving forward, where do you see yourself in the future goals with the game? Hopefully representing India in some international tournaments and of course doing well in India. But my first priority is always going to be my home, my Smash Bros India community. I just want this community to grow more and more and we can all become a strong scene. That is always going to be my number one priority in future. How did you come up with the name of Lionhart? How did that just happen? And then what is that one factor that just keeps you engaged with the game even after these 12 years? So I came up with my tag just last year, Lionheart. So it's basically a title of a character from a Fire Emblem game. And that Fire Emblem character is really close to my heart. So I just took his title and made it into my tag. And as to what thing which just keeps me pulling back to the game is basically the fun. We all just play for the fun. And every time, even if I'm beaten, I still have that fire to, just practice and play more and beat that person, beat that character. So ultimately, fun is definitely something that keeps pulling me back to Smash Ultimate. Do you feel is there some person, if you want to name him or her, that's your strongest rival in the game as of now? My strongest rival in Smash Bros India community has to be Botman, aka Rohit Adappa, and he has always been my rival ever since my first tournament. We have always been going at each other. We always meet in grand finals. So he's definitely one person which I'm always careful about, and I have to give my 100% against him. As the tournament is progressing further, I want to ask you what are your expectations from this tournament, KO Fight Night as a whole? My first expectation is definitely to have very, very hype and fun games because with the pressure of a tournament comes some of the best plays. And there's always going to be a lot of pressure, but even in the pressure, the best of the players will pick the best of the options to give us one of the best matches. So that is definitely my expectation to see more hype matches in future of KO Fight Nights. In the national leaderboards of Airtel India Esports Tour, how are you planning to cling to a very good position? So right now I'm ranked at number 1 and hopefully I could keep that rank, but I just want to be top 3 definitely in Airtel India Esports leaderboard. Your rivals, your friends, your frenemies and your family and all those things. So is there any message that you want to give to them as a person who is representing such an amazing game? I just want to give the message to my community that let's all just have fun for the game that we are also passionate about and let's grow this community into something really, really big in upcoming years. So that is going to be my message to my community and all of my friends. I'll see you around on that battlefield only if anything that just comes up. So I'll just wish you all the best for all the further matches that are going to be happening out there and see you on the other side. Ladies and gentlemen, boys and girls, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है रोहित शर्मा और आज हम KO फाइट नेट के इंटरव्यूज को कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रीट फाइटर के जॉनरा में एक और बहुत बड़े नाम से बात करने वाले हैं। खैर, इनके बारे में आप लोग पहले से जानते होंगे। आदित्य इनका नाम रहने वाला है एंड मैं सब कुछ नहीं बोल रहा यहाँ पर। I would just want him to introduce himself. So first of all, welcome out here and why don't you start with a basic introduction? Hi, my name is Aditya Verma. My gamer tag is the Dark Lord and I have been playing Street Fighter since 2017. It's a huge compliment out there because जितने लोगों से मैंने बात करी है अभी तक स्ट्रीट फाइटर के यूनिवर्स में, वो लोग एक ही बात बोलते हैं, हम या तो B3 से डरते हैं या डार्क लॉर्ड से डरते हैं। ये चीज जरूर आती है। बट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आपने 2017 में खेलना शुरू किया, वहां से आपकी कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में ट्रांजिशन कैसे हुई? Well, to be honest, मैंने सिर्फ गेम स्टार्ट किया था because of the love of fighting games that I had. I had no information about this competitive scene until I got to know one of your tournaments that was KO Fight Night, but unfortunately I missed it in the year of 2017.
तब मुझे पता चला था that there are tournaments that I can compete in. So I straight away went to the training lab. I tried to raise my bar, and ever since then I haven't been stopped, and I have been playing your tournaments and all the competitive tournament ever since. आपका पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर कौन सा रहता है एंड व्हाई डू यू फील लाइक इट्स वर्थ यूजिंग इट? गेम में बहुत सारे different characters हैं, but one play style that really suits me is a command grab character. So has there been ever any instance जब आपके साथ ऐसा कुछ मोमेंट हुआ जब आपने बहुत बेहतरीन कमबैक किया किसी टूर्नामेंट में? Well, definitely. I mean, if you will talk about that Arena 2018 when I had an opening of 3-0 against Ayan. So that was one time when I definitely thought that, this is something going in my favor. Then all the tournaments that I have played ever since, like every tournament had a clutch win here and there. आपकी आगे फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगी इस बार के KO फाइट नेक्स्ट? Well, definitely my first priority is to seal the victory in this whole very tournament. I mean, coming down to the losers, it's a bit heartbreaking. Is there any strong rival जो आपके माइंड में लग रहा है कि हाँ ये कांटे की टक्कर देगा? Well, in this present scenario, I think Ayan and Aman Ahuja are the ones to look out to most certainly. And let's talk about one thing that's going to be Airtel India Esports too. So उसका एक leaderboard बनता है national leaderboard. So उसके अंदर आप अपने आप को कहाँ देखते हैं और कैसे आप सोच रहे हैं कि आप टिके रहेंगे एक proper position पे? Definitely, I mean the opportunity that we have this year is bigger than ever, and thanks to them. But when you talk about the leaderboards, it's all about consistency. It's all about playing that mental fortitude कि you are not going down. So I'm not looking as such. When I'm playing the tournament, I'm just going for the win, and I'm hoping that even that works out in the Airtel India Esports Tour. So let's see. Is there any message जो आपकी community को, जो आपके fans को, and maybe अपने rivals को अगर आप कुछ देना चाहें about this competition, maybe for your future endeavors? Well, to all the people who are watching and supporting, first of all, thank you so much for all the love and support. And I'll definitely try my best to win it this time. And to all the players who have been competing, I'm not down, I'm not out yet, and there's a lot that I can offer in this tournament as well. So hopefully you all will see great matches in front of you. That will be tomorrow, and hope I can do much better than and take it all. I would just wish you all the best for all the future endeavors and for this KO Fight Night as well. And maybe next time I'll be taking in your interview. It's going to be once you have the trophy or something. All the best. Ladies and gentlemen, boys and girls, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है रोहित शर्मा और आज हम आए हैं KO Fight Night के इंटरव्यूज को कंटिन्यू करते हुए SG से बात करने। श्रेय गांधी इनका नाम है, लेकिन SG के स्टेज नेम, गेम नेम से जाने जाते हैं। So first of all, I would just say it's an honor to have you out here amongst us, and मैं आपसे कुछ चीजें जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो why don't you just start with introducing yourself? जैसे आपने बोला, मेरा नाम श्रेय गांधी है, मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ता हूँ कनाडा में, लेकिन अभी कोरोना के कारण मैं इंडिया में ही रह रहा हूँ और मैं भी अपनी एजुकेशन ऑनलाइन कंप्लीट कर रहा हूँ। और मुझे आपने जैसे बोला सुपर स्मैश ब्रदर्स खेलना बहुत अच्छा लगता है। आपको खेलना अच्छा लगता है, लेकिन आपने खेलना कब से स्टार्ट किया और तब से अभी तक आपकी कॉम्पिटिटिव जर्नी में ट्रांजिशन कैसे रही? मैंने खेलना आई थिंक 2014 में शुरू किया था, बहुत पहले सुपर स्मैश ब्रदर्स ब्रॉल से। उसके बाद मैंने उसका नेक्स्ट वर्जन सुपर स्मैश ब्रदर्स फॉर वीयू खेला, मुझे वो भी बहुत अच्छी लगी, लेकिन तब मुझे कम्पिटिटिव सीन के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था। आपके लिए आपका कंफर्ट जोन के हिसाब से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? बिकॉज़ जो सुपर स्मैश का यूनिवर्स उसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बीवन एपिक का जो गया मारियो एंड व्हाट नॉट। सो आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा रहता है? मारियो ही है, निंटेंडो का सबसे मैस्कॉट। उस कैरेक्टर ने मुझे बहुत गेम जिताए हैं, इसलिए मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। हाँ बिल्कुल। आपके अकॉर्डिंग कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हो सकते हैं जिनको नर्फ किया जाना चाहिए, बफ किया जाना चाहिए आने वाले अपडेट्स में, और क्यों? नर्फ कर सकते हैं पिकाचू को, क्योंकि उसके कोई वीकनेस नहीं है सच, और उसका बस वेट कम है, बाकी उसके सारे टूल्स बहुत अच्छे हैं। और बफ मैं कहूँगा सारे लो टियर वाले कैरेक्टर जैसे कर्बी, इन्सिनेरोर, इन सबको बफ करना चाहिए, क्योंकि इनका कंपेटिटिव में आप इनको नहीं खेल सकते, आप हमेशा हारोगे इनको खेल के। जैसे आपने अभी अपने बारे में बताया, आपकी स्टडीज भी करना भी चल रहे हैं, वहां से आप ये चीज कर रहे हैं, तो आप गेम को लेकर के, इस गेम को लेकर के अपने फ्यूचर गोल्स कैसे देखते हैं? तो फ्यूचर मेरा इस गेम को लेके टू बी ऑनेस्ट अनसर्टेन है बहुत। नॉर्मल खेलना लेकिन कम्युनिटी में आकर के खेलना, क्या डिफरेंसेस आपको लगते हैं उन जर्नीज? जब तो नॉर्मल खेलते हो तो सुपर स्मैश ब्रदर्स अपने कैजुअल प्ले के लिए बहुत जाना जाता है, जैसे आइटम्स वाइटम्स, तो आप आइटम्स यूज करते हो, स्मैश बॉल यूज करते हो, आप बस मजे के लिए खेलते हो। कंपेटिटिव में आपका थोड़ा टारगेट रहता है कि हाँ नहीं मुझे जीतना है। आपको ऐसा कौन सा लगता है एक ऐसा प्लेयर जो आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग राइवल है? मैं कहूंगा बॉटमैन और अभिरूप। जैसे लायन हार्ट आपने इंटरव्यू कराई होगा, इंडिया का बेस्ट प्लेयर चल रहा है, कम से कम
एक 1.5 साल से, उसको कोई हरा नहीं पाता है, तो हमेशा जीतता रहता है। और बॉटमैन एक और बहुत अच्छा प्लेयर है, उनके साथ मेरे हर मैच क्लोज होते हैं और हमेशा मैच खेलते वक्त बहुत मजा आता है उन दोनों के साथ। जैसे टूर्नामेंट अभी धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, ग्रुप बी को डोमिनेट किया आपने काफी अच्छे तरीके से, तो आगे की चीजों को आप कैसे देखते हो टूर्नामेंट? टॉप 4 तक तो मैं पहुंच गया हूँ, बस मेरा टारगेट होगा कि मैं पूरा जीत ही जाऊं ऑब्वियसली। जो एक लीडर बोर्ड चलता है, नेशनल लीडर बोर्ड, उसके अंदर अभी लायनहार्ट ही टॉप कर रहे हैं, बट आप अपने आप को कहां पर देखते हो जैसे जैसे कॉम्पिटिटिव सिनेरियो आगे बढ़ता रहेगा? आगे मैं बस यही है, अपना बेस्ट दूंगा, फिर देखते हैं लीडर बोर्ड में कहाँ जाएंगे। बेस्ट तो मैं ट्राई करने के लिए दूंगा और शायद उसको हरा भी दो इस टाइम, यू नेवर नो। आपकी जो कम्युनिटी बनी है, जो आपके फैंस बने हैं, उन सब के लिए अगर आपके पास कोई मैसेज हो तो मैं यही चाहूंगा कि सब खेलते रहे गेम और बेटर होते रहें, ताकि सीन हमारा ग्रो होता रहे और फैंस इस गेम के बनते रहें, ताकि हमारा भी सीन बाहर के सीन जैसे बड़ा हो जाए, यूएस और कनाडा के सीन्स की तरह, विद हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्लेयर्स। I would just say all the best for all the future endeavors आपके लिए भी, and I hope कि आप जीते, I hope कि maybe इस बार लायनहार्ट को एक बहुत अच्छी टक्कर देखने को मिले। So yeah, for all those things, I would say all the best and see you around. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to KO Fight Night's interview session, and my name is Roshan Sharma, and so far we have talked to quite a lot of players. They have showed incredible dominance. They have asserted incredible dominance. We're talking about the numbers, talking about the games, talking about everything. But well, we have one player. I would say I'll have to tell you one thing. I mean, before we just get introduced to this player, whenever I was asking other people questions like who they fear the most, they always said Amanuja. So if we're talking about that, so there it is, Amanuja for you, ladies and gentlemen. And first of all, welcome out here. Hi Ocean, thanks for having me here. It was actually a really fun time. Like I've had a blast in the playoffs, just having a lot of fun playing my game. So it was a lot of fun. I mean, quite a lot of players actually fear you. If I'm talking about the numbers and all, like they were like, if you have to talk about a competition, yeah, that's going to be Amanuja for sure. So I want to ask you, like, where are you basically from, and like if you study or do you do a job or something, like all those things? So basically I'm from Delhi. I'm born and brought up in Delhi, and I'm working in my family business right now for like 5 years right now. So I've been pretty stable over here. I was worried because of my job, will I be able to make it or not, but I was able to shuffle a few things around, and I postponed the meeting slightly this month, I guess. So, but I think it's a life the give and takes. You have to like make compromises at times. It's alright, I guess. I mean, But probably was a very good meeting. I mean, it is worth it right now. I mean, if you're talking about the gaming scenario, and Street Fighter is what your I would say your genre of game is. So, how long have you been playing this game, and like when did you start your move from being a casual gamer to a competitive gamer? I've been playing Street Fighter since I guess I was maybe 14, 15 maybe. So it's been like more than a decade and a half, I guess I've been playing. But I've been seriously playing like 2-3 years back. I met a few people in the community. They taught me a few stuff. Then I really went hardcore on it and like practiced like by myself, playing my game, and that's how I would say that I have improved a lot. I wouldn't say I'm a pro player since I think a lot of players, I have to reach a certain level till I go get there. But hopefully I will get there someday, I guess. I mean, well, the numbers actually show that you are a pro player. I mean, that's just you being modest, I would say one thing. But still, go on now with the competition and everything. How do you see this KO Fight Nights tournament? It's going to be very interesting. I was expecting Ayan and Dark Lord to get into the top 4, and I also thought that I would be coming in. I was confident that I would make it, but I was very surprised that pleasantly surprised that playinGaurav was able to make it. I was very happy for that, and apart from that, it has been pretty like there have been a lot of ups and downs, like in the qualifiers especially. A few players I wasn't expecting made into it. A few players lost to the players I was very confident would make it. So it has been very, very interesting, I would say. Like it was very unique experience. Alright, let's talk about the game first, right? Street Fighter, if you're talking about, like, which is your favorite character, and like, why do you choose to have that by your side? At the moment, I'm playing Karen and Rashid.
I would say that they are very interesting characters in the sense that they have a very offensive style and it complements my defensive personality. Like when I normally play, I'm very patiently playing. I'm very focused on like what the other person is doing and how I can adapt to that. So they are prematurely very very offensive characters, and glass cannon characters is the common term for them. So these are characters who can like hit very hard, but they cannot take a very brutal punishment. So they just break like glasses when they get hit. So and they're very interesting, and they are very fast characters, I would say. And I'm a very slow player, so it's a very interesting balance, I would say. Yeah, I would say it's kind of a perfect balance situation. Like you get to play with the best of both worlds or something. If I'm to talk about it, but well, if I'm talking about Airtel India Esports Tour, right, the national leaderboards, where do you see yourself by the end of the tournament? By the end of the tournament, I would say in Street Fighter, I would qualify in top 5. But above that, there are like 4 players that I think are pretty. Like I have a time beating them. Like I can't say that they will be too easy to beat or like anything like that. Nobody is obviously too easy to beat. But I would say that 4 or 5 players, I would be in a top 5 in the community, I would say. Hopefully, if, as the time goes on, I'll improve my stats and become better than my competitors. Let's just hope for it. Yeah, let's just hope for it. I mean, it's right now. It's your time to shine out there. And just like you said, right, you have been playing this game since a decade and a half, as per se. So, is there any message that you want to give to this community, to the fans, to the family out there that Street Fighter has accumulated? Okay, yeah, I would say that it's very tough game to get into, but if you stick by it, the gameplay, the fun, it's more rewarding than the initial pain. It's worth the pain that you put in, the initial hours that you put in, the energy, the time that you put in. It will be worth it in the long run, and you just have to stick with it. It's not easy, but it's not that hard. Yeah, let's just hope for all the good things out there for you as well as an individual player. And you know, you are the kind of person who sees a vision for yourself and for the community as well. Like you have been a part of that. So I would just say all the best for all the future endeavors, and maybe, just maybe, see you on the other side by lifting the trophy. Yeah, thank you so much. See you there as well. Bye bye. Bye bye. Ladies and gentlemen, boys and girls, स्वागत आप सबका। मेरा नाम है शर्मा और अभी तक KO फाइट नाइट के मैच सुपर स्मैश ब्रोस के इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो चुके हैं। हमने लूजर ब्रैकेट्स भी देखे, हमने विनर ब्रैकेट्स भी देखे और उन सब के बीच में बहुत ज्यादा बेहतरीन मैचेस चलते रहे। बट अब जिस प्लेयर से मैं बात करने जा रहा हूँ, उनसे पहले मैंने जितने प्लेयर्स का इंटरव्यू लिया, एवरीवन एल्स वाज लाइक fearing him in a way because आप बोल सकते हो that he's got to this game or something. So we have Botman with us and Rohit के नाम से भी जाने जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगा thank you very much for giving your precious time out here and welcome to this one. Thank you. Before we just start with everything in the conversations and whatnot, I would like to know about your introduction, like basic introduction. आप कहाँ से हो, आपकी studies and all, और क्या क्या चीज़? So my name is Adappa Sai Rohit. मैं हैदराबाद से हूँ और मैं अभी अपना एनिमेशन का 3rd ईयर फिनिश कर चुका हूँ और कनाडा जाने का प्लान है नेक्स्ट। आपकी जर्नी कैसे रही है, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम सुपर स्मैश ब्रोस आपने कब से खेलना शुरू किया, तब से अभी तक आपकी ओवरऑल नॉन कॉम्पिटिटिव और कॉम्पिटिटिव जर्नी किस तरह की रही? 2 years पहले I started playing competitively and I joined the scene अभी and then within 1 year I think I became rank 2 India में अभी still continuing on that. So आपका favorite character कौन सा है? Why do you just choose that? So my favorite character is Joker. He's from Persona 5. So mainly he is very stylish. इसीलिए मतलब जो भी करता है he's like he has combos. फिर stage के बाहर जाके मारता है. Like very fun to play him. Which is the strongest rival जो आपको लगता है कि जिनके सामने आपको टक्कर की कंपटीशन देकर कैसे लगा कि हाँ इनसे शायद मैं हार भी सकूं? Lionhart जो अभी like best player इंडिया में उनके साथ हमेशा like from last 2 years जितने भी tournaments that I've attended सारे में he beat me. Like I got second to him every single tournament. I don't think I've beaten him even once offline. ऐसे. And from KO Fight Night, what are your expectations from this tournament as per your personal experience as at a whole? Right now, a lot of people have been getting better at this game, and in this tournament, in the top 16, everyone's really good, and even in the top 4 right now, सब लोग बहुत अच्छे खेलते हैं और like I
this tournament has given the chance for people to bring out their best. I say, like, that's why I'm going to try my best too in the finale. So Yeah. what are your strategies? Like, what are you planning to do कि आप वो एयरटेल इंडिया स्पोर्ट्स शो की जो पूरी अंक तालिका रहती है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आप उसमें कहीं ना कहीं उनसे ऊपर जा सकें? Like, what's on your mindset? ये टॉप 4 में भी like I'll try to have patience because अभी best of 5 है ना, तो 5 गेम तक जा भी सकता है और उसके लिए like if I use up everything in the start then बाद में backfire होगा. So is there any message जो आप देना चाहोगे उस community को, अपने friends को, maybe Lionhart को भी if you just want to shout something? ये कम्युनिटी की वजह से वी आर ऑल हियर राइट नाउ एंड इट्स बिन ग्रोइंग. जब से मैं ज्वाइन हुआ था तब से इट्स ग्रोन अ लॉट नाउ एंड एवरीवनस वेरी वेलकमिंग एंड एवरीवनस लाइक सपोर्ट्स ईच अदर. अगर किसी से हार गए उनको जाके पूछोगे तो दे विल गिव यू टिप्स टू गेट बेटर एंड आई रियली लाइक दैट अबाउट एवरीवन एंड I thank everyone in my life for supporting me to get this far. An aggressive player who knows what the support of the community actually means. So that's spot on for you guys. And I would just say all the best for all the future endeavors जो भी आपके रहने वाले KO Fight Night. उसके बाद भी maybe once again Canada जाकर भी dominate करना. So I would just say all the best for all those things and yeah, see you around. Ladies and gentlemen, स्वागत आप सबका. मेरा नाम है रोहित शर्मा और अभी तक KO फाइट नाइट के जो इंटरव्यूज का सिलसिला चल रहा है उसमें बहुत बेहतरीन प्लेयर्स से हमें बात करी है. स्ट्रीट फाइटर हो जाए, टेकन हो जाए, किसी भी तरीके से अगर हम बात करें सुपर स्मैश ब्रोस वेल बहुत अच्छे प्लेयर्स से हमें बहुत सारी चीजें जानने को मिली एंड उसी के अंदर एक प्लेयर आएंगे जो काफी डोमिनेटिंग अपने गेम प्लेस दिखा रहे हैं. आई मीन गौरव इज हिज नेम एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर आउट हियर. थैंक यू. So, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए कि आप कहाँ से हैं, बेसिकली आपका प्रोफेशन क्या है या फिर अगर आपने स्टडीज वगैरह की है वो क्या करी है एंड ऑल दोस थिंग्स. Like I've spent 30 years in Delhi itself, but right now I am in Pune. I'm working in IT. So coming to Street Fighter, I started playing Street Fighter 4 in 2010. For Street Fighter 5, this is actually my first tournament that I have ever entered. आपका पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर कौन सा रहा है एंड लाइक व्हाई डू यू थिंक लाइक इट्स वर्थ इट? In Street Fighter 5, I actually started with Ryu, but then due to the nature of this game, this is not really a defensive game. So starting from 2010, I have only played 2 characters, Ryu in Street Fighter 4 and Guile in Street Fighter 5. क्या आपके साथ पर्सनली खेलते कभी ऐसा कोई सिनेरियो रहा है जहां पर कमबैक बहुत मुश्किल था किसी टूर्नामेंट में देन यू जस्ट ऑब्लिटरेटेड एवरीथिंग? Daigo versus Justin Wong. I am actually a huge fan of Daigo. I watch all his matches, but when you talk of being in that moment and just pulling it out at the last moment, I am not that guy. Sorry. So I will, if my health bar is below 50% or let's say below 40%, I think you have taken the game away from me. Is there any person जो आपको लगता है आपका strongest rival है इस टूर्नामेंट? I actually won that tournament according to the rules that were set on their official page. But then the guy who lost, Himmat, Brandy, I'm not sure if you know him. He's an excellent Street Fighter player. So that I think that was a good moment for me when I came in first. I don't really take part in offline tournaments. I think that is the biggest complaint, and they all know me. I'm the lazy guy there. So this was online tournament. So that's why I said this is actually my first Street Fighter 5 tournament. Due to work and all, I don't really get that much time. जैसे एयरटेल इंडिया स्पोर्ट्स शो का नेशनल लीडर बोर्ड है और वो सब चीजें, तो उनके अंदर आप अपने आप को कहाँ देखते हैं और कैसे आप सोचोगे कि आप और अच्छा उस एरिया को प्ले कर सकते? I just got lucky in being here, but obviously I know who is my opponent going to be in the upcoming matches. So I'll study the matches. I'll do my homework, and then rest is all luck. So is there any message जो आप अपनी कम्युनिटी को देना चाहोगे या कुछ अपने फैंस को, अपने फ्रेंड्स को एंड मे बी फ्रेंडलीज जो यहाँ पर आपके अगेंस्ट में रहेंगे लेकिन आपके दोस्त भी हैं, so is there any message जो आप उनको देना चाहोगे? You guys are already doing very well. I mean, I am non-existent in the community, but still you are Bhagwant and you have Mayank and Dark Lord Aditya. You guys, I see you guys commentating and it's so good to see that level of esports league starting in India, and thanks to you guys. So just hats off to you guys, and I hope
even if the numbers are low, I guess you know that the numbers are quite a bit low, but I hope you will keep doing it and it will attract a lot more players. And I really hope to see you guys just, rocket and make a mark in the gaming community for India, not just fighting game community, but I think you should do other games also like PUBG Mobile. Whatever games are popular in India, I think you guys should do it, and I think you will do very well. आपका पूरा एक मैं बोलूंगा संघर्ष यहाँ पर दिखता भी है, अपनी गेम के लिए भी डेडिकेशन पूरी तरीके से दिखती है. So just say, thank you for giving out your precious time out there, and maybe next time I'm talking to you, you might be having a trophy. Okay. Thank you. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to this interview for KO Fight Night. Today we're going to be having a very special guest with us in Sarang. First of all, I welcome you on this interview. I'm hoping it's going to be a very fun interview alongside with all those pre-camera moments that we have had right now. So it's going to be a fun one. So why don't you just start by giving a basic introduction of yourself? So my name is Sarang Agrawal. I'm from Mumbai, India. I'm currently studying in grade 12 and I love video games. I've been playing Smash competitively since late 2018. But how did the transition from being a normal player to a competitive player, how did that thing happen? I had gone to London once and I attended a mini tournament of sorts and really enjoyed it. So that's when I decided I wanted to go into the competitive Smash. You have had a lot of fans, a lot of favorites for the people. You have been a favorite for the people, but which is your own personal favorite character from the Smash universe? I really do enjoy playing a character called Ridley. So that goes back to Brawl because there was this one cutscene in story mode where Ridley absolutely dominated his enemy. Which characters do you think should be nerfed or buffed or something according to your standard? Like which character do you think actually needs some different changes in themselves? I would nerf Joker because he has this sort of comeback mechanic called Arsene, where basically his persona, which is what the game is also called, comes into play and gives you a lot of extra damage and kill power. And I would nerf that a little bit. But so talking about winning the games and winning the competitions, what are your future goals with the game? Well, I mean, I hope to become number one or at least stay consistent number two in Smash India. So how has your journey been with each and every instance of the game? So it's been great. The game came out in late 2018. 2 weeks after that, we had the DreamHack tournament. The Smash India community has been hosting tournaments in intervals at every 2 months or something. Is there a competitor that you feel is the strongest rival? Like a person that you're like, no, I want to fight him real bad, and I just want to dominate him or something. So I'd say Abirup Lionhart, number one. I definitely want to win against him in tournament. Of course, Rohit Adapa, botman. I want to beat him too. But what are your expectations from this tournament as the tournament progresses further? Today's matches, I realized I did a few things that were punishable. So I'm planning to improve on those next match. So where do you think you can be? Like where do you see yourself by the end of the tournament at the esports tour? The ranking will be pretty much the same compared to what rankings we have right now. Because it's the same number of people participating to my knowledge. So I want to ask you, is there any message that you want to give to your fans, your community, your family, frenemies maybe, friends and enemies, those are actually growing forward. So is there any message you have for them? Thanks for being supportive, thanks for being nice. Anytime I want to play, I just message in the group and there's always someone willing to play. Special shout out to Nitin. He founded the community along with Vishal and it's been great journey. I only joined towards the latter end, but it's been amazing. Those are some really good words of kindness, I would say. And I would just say all the best for all the future endeavors that you have lined up for yourself, not just in the Indian circuit, the dominating circuits out there. So yeah, I would just say thank you for being a part of it. Thank you for giving up your precious time for this interview. And probably I'll see you around on the other side, dominating the areas.
हेलो एवरीवन, और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है KO फाइट नाइट सीजन 5 में, ब्रॉट टू यू बाय नॉर्डविन गेमिंग एंड एयरटेल इंडिया ई स्पोर्ट्स स्टोर। मेरा नाम है वरुण सुपर जॉनी जॉन। इस साइड पे मेरे मौजूद है ओशन शर्मा, और थोड़ी देर के लिए हम लोग इस स्ट्रीम को टेक ओवर कर रहे हैं। सो ओशन, हाउ आर यू फीलिंग? इट्स काइंड ऑफ अ हाई सिचुएशन अगर मैं बोलना चाहूँ Yes. स्ट्रीम के ऊपर जो हमने करी है। खैर अगर बात करें, लोगों को ऑलरेडी पता होगा एक सरप्राइज जरूर रहने वाला है। वो सरप्राइज क्या है वो भी हर कोई वाकिफ होगा उससे। सो मैं बस एक बात ही बोलूंगा, जितने लोग आए, अगर आप लोग यहाँ पर हो और आपको सरप्राइज जल्दी चाहिए, जाके जो नीचे @ओशन शर्मा @सुपर जॉनी एक बार जाके वहां पे फॉलो कर दो। और तो क्या ही बोलूंगा खैर यहाँ पे मैं, बट खैर with all those things coming up and with Yeah. everything lined out together, like do you want to break the suspense कि क्या होने वाला है as such? I mean, आपने एक सरप्राइज बोला, लेकिन पूरे दिन में हमारे पास एक्चुअली ओशन 3 सरप्राइजेस लाइंड अप है, तो आई थिंक बाकी दो आपके लिए भी एक सरप्राइज हो गए अब इस सिचुएशन के अंदर। तो शो मैचेस कल हमने देखे थे, बहुत ही बेहतरीन शो मैचेस। जो शो मैच इनफैक्ट हमारा हुआ था, 1 to 10 की दौड़ थी, लेकिन स्ट्रीट फाइटर 5 में वो दौड़ लगी थी स्काउट और थक के बीच में। आज सेम 1 to 10 की दौड़ हमको 3 बार देखने को मिलेगी, और इस बार आई मीन स्ट्रीट फाइटर 5 तो खत्म हो चुका है, अब हमारा टेकन 7 का सेगमेंट स्टार्ट होने जा रहा है। तो टेकन 7 के मैचेस हमको देखने को मिलेंगे, और सबसे पहले जो दो कंटेंडर्स हैं हमारे, वो कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और उनका हमें पता है कि आप लोगों को इंतजार है, हम भी उनका इंतजार कर रहे हैं, और मतलब सब्र का फल मीठा होता है, सो वी हैव टू बी पेशेंट ओवर हियर। बट जो दो हमारे कंटेंडर्स हैं हमारे साथ जुड़ेंगे, और फिर वो जो 1 to 10 एक इंटेंस मैचअप होता है वो हमको देखने को मिलेगा। आई मीन हमारे कुछ कॉमन सवाल रहेंगे कि कौन से कैरेक्टर्स खेलना पसंद है, कौन से कैरेक्टर्स वो पहले खेल चुके हैं, और उन सब बेसिस पे हमारी स्पेकुलेशन होगी। बट ओशन, आप कल मेरे साथ मौजूद थे, डू यू थिंक हमको यहाँ पे इन लोगों के लिए भी वही चीज रखनी चाहिए जो स्काउट और थग ने कल करी थी, 5 गेम रैंडम कैरेक्टर्स? आई वुड से कि ये करना चाहिए, क्योंकि पहली चीज ये होगी कि इनको एक नया एक्सपीरियंस ऐसा देखने को मिलेगा, अलग कैरेक्टर से जो शायद इन्होंने खेले हैं या नहीं खेले हैं। व्हेन टॉकिंग अबाउट इट, वी नो कि हम लोग क्या खेलते हैं जब हम लोग अपने वहां पे हमारा एक अलग से ये फाइट नाइट है, हमारा नाइट फाइट चलता है जो हम अलग से प्रैक्टिसेस के लिए खेलते हैं। मैं और जॉनी एक सेम उसके ऊपर कंसोल लेकर के बैठ जाते हैं, बट खैर वहां पर हमारे कैरेक्टर्स होते हैं। बट मैं बोलूंगा इनको डिफरेंट कैरेक्टर्स लेने चाहिए, एंड इफ इट कम्स टू इट, I would say it will actually create a lot of panic situations in rounds and rounds. Definitely. I mean, panic situation. आप सुबह भी मतलब पता चला था कि प्रैक्टिस कर रहे थे हल्का सा अपने PSP के ऊपर टेकन 6 पुराना वर्जन चल रहा था और वही डेविल जिन की आपकी प्रैक्टिस जा रही थी सुबह से। तो कैसी आपका आज का स्किल लेवल, आप क्या बोलेंगे? क्या है आई एम श्योर हम में से कोई भी जो हमारे प्लेयर्स, जो हमारे प्रोफेशनल प्लेयर्स जो यहाँ पे पहुंचे हैं टेकन 7 के फाइनल्स की तरफ, हम लोग उनके साथ, उनके तो आसपास भी नहीं है। मतलब हम लोग जाएंगे तो हमारे बहुत मारा जाएगा। मैं बोलूंगा मैं अर्सलान ऐश को हरा सकता हूँ, कभी ना कभी जरूर मैं हरा सकता हूँ। बट क्या, until unless given the fact कि अर्सलान ऐश भी मेरे PSP के ऊपर आकर के खेले तो हाँ मैं हरा सकता हूँ। हाँ, और वो एक हाथ ही यूज करे, आई थिंक आप तब भी हार जाएंगे। खैर वो बात की बात है, बट हाँ अगर बात आती है, बिकॉज मेरा मेन रहता है डेविल जिन, आई काइंड ऑफ गो फॉर डेविल जिन ओनली। एंड अगर मैं प्रैक्टिस पे जाऊं, अगर मैं ग्रैपल्स पे जाऊं, तो हाँ मैं कहीं ना कहीं किंग यूज करना चाहूंगा, बिकॉज दैट्स लाइक वन ऑफ माय थिंग्स। एंड ऑब्वियसली मैं लिल मासिन को खेलते हुए किंग से दिखा, किंग से जब JDCR का उनका एक सबसे आइकॉनिक मैच था, तो विद ऑल दोस थिंग्स कमिंग अप इन माय माइंड, सो मैंने तो उन्हीं चीजों के साथ लाइक टेकन का अपना एक काइंड ऑफ यूनिवर्स देखा। बाकी टेकन भी नो, इट्स अ फैमिली फ्यूड जो चल रही है बहुत टाइम से, हाई हाची का पूरा उसके अंदर, बट स्टिल वो एक अलग चीज रहेगी। बट कमिंग विद डेविल जिन, आई काइंड ऑफ लाइक वन और टू थिंग्स कि जब वो रेड HP पर जाते हैं, उसके बाद अगर उनको अपने ओपोनेंट को टेक डाउन करना है, इट्स जस्ट 1R1 एंड यू जस्ट गो फॉर द अल्टीमेट एबिलिटीज, एंड वो बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो जाती है। एग्जैक्टली, आई मीन आप और हम तो बहुत लो स्किल लेवल का गेम खेलते हैं, क्योंकि हम दोनों ही बहुत ही बेकार प्लेयर्स हैं। तो उस टाइम पे वो जो रेज आर्ट होती है वो मारना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर प्रोफेशनल गेम्स को हम ब्रेक डाउन करें थोड़ा सा, तो रेज ड्राइव्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, रेज आर्ट्स काफी ज्यादा एक नेगेटिव वाला मूव रहता है, तो वहां पे प्लेयर्स को बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहता है। कम यूज होती हुई हमको दिखती है। हमारे जो मैचअप्स हमने देखे थे काफी ज्यादा इंप्रेस होता है। आई मीन अगर टेकन 7 की मैं बात करूं, जो एक्चुअल सेगमेंट होगा हमारे शो मैच के बाद में, जो प्लेयर्स लाइन अप है, अभी तेजन की हम बात कर रहे थे, हमने रोहित जैन की बात कर रही थी, हमने लवनीत की बात कर रही थी कि देम बीइंग सम ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन द कंट्री कुछ महीना पहले तक। आई मीन दिसंबर, मेरे को याद है दिसंबर ड्रीम हैक 2019 तक यही चलता था कि कोई भी टूर्नामेंट हो रहा है, फाइनल्स लवनीत वर्सेस तेजन ही होगा। उसके बाद रोहित जैन की एंट्री होनी स्टार्ट हुई धीरे धीरे सीन के अंदर, जहाँ पे उन्होंने आई मीन इस KO फाइट नाइट के अंदर भी तेजन को लोअर ब्रैकेट में भेजने वाले शख्स रोहित जैन खुद थे। फिर एक ट्विस्ट हमको देखने को मिला इस स्टोरी लाइन के अंदर, जब हम प्लेऑफ्स में आते हैं
और अचानक से हमको लवनीत और रोहित जैन दोनों के दोनों प्लेऑफ्स के लोअर ब्रैकेट के अंदर नजर आते हैं, और उनके ग्रुप के अंदर डोमिनेशन कहीं से आरकूल ने निकाल दी। उन्होंने लवनीत को भेजा था लोअर ब्रैकेट में और लवनीत एलिमिनेट भी हो गए थे प्लेऑफ्स के अंदर से। I फिर mean, अब जब हम फाइनल्स की तरफ बढ़ते हैं, तेजन रोहित जैन दोनों लूजर्स ब्रैकेट के मैच खेलेंगे, और दूसरी तरफ विनर्स ब्रैकेट में हमें नजर आते हैं लायन हार्ट, जिन्होंने डोमिनेट किया था तेजन को उनके मैच में, और उनके अगेंस्ट रहेंगे आरकूल। आरकुल की अगर मैं बात करूं, हितेश आरकुल, खैर उनका मैंने इंटरव्यू भी लिया था, एंड उसके अंदर भी आरकुल की एक चीज जरूर निकल कर आती है, दैट ही इज इन इट टू विन इट, दैट्स काइंड ऑफ स्पेकुलेशन वो शो भी करते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट लायन हार्ट, खैर दो अलग अलग लायन हार्ट, दो अलग अलग गेम्स के अंदर है। अगर मैं बात करूं स्मैश ब्रोस में एक लायन हार्ट अलग है और यहाँ पर एक लायन हार्ट है वो अलग है, बट स्टिल दोनों का स्ट्रैटेजी सेम रहता है। इट्स लाइक व्हेन यू आर प्लेइंग द गेम यू हैव टू बी फोकस्ड विद एवरीथिंग, क्योंकि आपका एक चीज चलता है, हाँ आपको वहां पर गेम जीतने के लिए जाना है, बट बीइंग फोकस्ड विद एवरीथिंग, स्मैश इज ऑब्वियसली दैट टू इज अ फाइटिंग गेम, बट उनका उसका जॉनर एक अलग हो जाता है, राइट? सो उसके अंदर एक अलग चीज होती है, उसके अंदर परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी हम जाते हैं एज कंपेयर टू विद ऑल द सिचुएशंस एंड स्ट्रेटजी जो हम कर रहे हैं। बट यहाँ पर अगर हम आते हैं, यहाँ पर सीधा वही है कि हाँ, सी इफ यू आर अ न्यू प्लेयर, smash the buttons, that's all a person will be doing, but that works, trust me, I know it in a way that works if you're playing Katarina. कैटरीना पिक करके जस्ट स्पैम दैट सर्कल, और अगर नोटराइजेशन में जाए तो 4 इनपुट जो आपका रहता है वो जस्ट स्मैश इट, एंड लाइक दैट्स इफ यू आर लिटरली जस्ट प्लेइंग द गेम फॉर द फर्स्ट टाइम। एक बहुत गंदी आदत लग जाएगी आपकी, बट हे अगर आप अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हो, वो भी पहली बार खेल रहे हो, यू माइट जस्ट गेट द विक्ट्री। You might and गलत चीजें बता रहे लोगों को। I know what you are saying. I remember परसों जब हम लोग खेले थे, I'll tell you guys, जो भी यहाँ पर है, परसों मैं, जॉनी और हमारे 2 और दोस्त खेले, तो दिग्गज दोस्त खेले थे खैर, और वहां पर जस्ट इन केस, ताकि मैं सारे राउंड जीतूं, ये रख दिया गया था कि लूजर्स विल बी स्विचिंग, और उस चक्कर में मुझे सारे राउंड जीतने पड़े, क्योंकि मुझे तो खैर जीतने में मजा आ रहा था, बट दैट्स वन वे आई वुड से आई वेंट undefeated, but yeah, I won't say it in that way, but yeah, all night long I was good. That's one way I just to put it. But still, if we are talking about the games, all right, I would like to ask you, see, Devil Jin and King are my mains. Sometimes if you want me to go with different characters, all right, Negan is one that I'll choose for, or maybe, just maybe, the other characters, but well, आपका क्या favorite characters रहते हैं? मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स आई थिंक मैं बता चुका हूँ पहले भी। बॉब के साथ मेरे को खेलना काफी ज्यादा पसंद है। आई मीन इट्स समथिंग दैट आई हैव बीन यूजिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वरना कुछ सिचुएशंस के अंदर जब थोड़ा सा ज्यादा खेल रहे होते हैं लंबे स्ट्रेच पे हम लोग, और आई फील लाइक आई एम गेटिंग बोर्ड, तब आई स्टार्ट स्विचिंग जो हमारे ओजी कैरेक्टर्स रहते हैं टेकन 3 में जिनको खेला करते थे, पॉल हो गए, मार्शल लॉ हो गए, एडी वापस आते हैं वहां से, तो वैसे कैरेक्टर्स को मैं उठा के खेलना स्टार्ट कर देता। अब कुछ ही देर और हमें इंतजार करना है, देन अगेन अभी के लिए तो हमने हाईजैक करी हुई, एक बार फिर से बता दूं दर्शकों को कि स्ट्रीम हमने हाईजैक करी हुई है थोड़ी देर के लिए। कुछ देर में मैं भी एक चीज बता देता हूँ, जो भी यहाँ पर नया है, एक बार हमारे नीचे इंस्टाग्राम मिल जाएगा आपको @totion7 वहां पर आप जा सकते हैं जरूर। also do follow Nodwin Gaming as well, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, स्ट्रीम को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही अगर बात करें कि क्या अपॉर्चुनिटी दी गई थी इस KO फाइट नाइट सीजन 5 के साथ, सबसे बड़ी कोलैबोरेशन जो यहाँ पे देखने को मिले वो वही थी नॉडविन गेमिंग और एयरटेल इंडिया ई स्पोर्ट्स स्टोर के बीच में। और हम लोग तो काफी लंबे समय से लीडर बोर्ड को उभरते हुए देख रहे हैं, ना सिर्फ फाइटिंग गेम्स में बल्कि बाकी गेम्स के अंदर भी, स्पेशली जो हमारा ESL इंडिया प्रीमियरशिप चलता है वहां के ई स्पोर्ट्स टाइटल के अंदर भी। बट यहाँ पे KO फाइट नाइट्स के अंदर सुपर स्मैश ब्रदर्स, टेकन 7 और स्ट्रीट फाइटर के जितने हमारे इंडियन ई स्पोर्ट्स के एथलीट्स रहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी गई थी। एंड आई लव दिस फैक्ट, क्योंकि देखिए मोस्टली जो फाइटिंग गेम्स होती हैं, वी नो इट, अगर हम ड्रीम हैक की बात करें, दे हैपन विद पीपल राइट नेक्स्ट टू ईच अदर, वो एक प्रॉपर एक फिजिकल अपीयरेंस के साथ होता है। बट खैर ऑनलाइन के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सिचुएशन होता है, मुझसे इट्स अ वेरी वन ऑफ द बीस्टली इनिशिएटिव्स जो यहाँ पर निकल कर आता है, एंड आई वुड से इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जिस तरीके से चला है। प्लस it's all because of the audience, the lovely audience that just comes in, that chimes in for everything, and I would say I just love the way जिस तरीके से सब चीजें चल रही है, and coming up with the fact जो surprises रहने वाले हैं, it's going to be first match Mortal alongside Mamba. So given or taken the fact क्या इन लोगों ने पहले गेम खेला है या नहीं खेला है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, coming as a first person, कौन सा कैरेक्टर डू यू थिंक वुड बी द इजीएस्ट टू कंट्रोल एंड वुड बी द मोस्ट वर्सेटाइल टू कंट्रोल? वर्सेटाइल तो पता नहीं, आई वुड स्टिल गो, अगर आपको इजी गेम चाहिए, गो विद एडी एंड कैटरीना। काफी आसान आपके लिए रह जाता है अगर आप एक
बहुत ही फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं गेम के लिए, बट वो डिपेंड भी करता है कि आई मीन उनके ओपोनेंट से कितना खेला। आई एम प्रीटी श्योर टेकन एक ऐसी गेम है जो सबने बचपन में खेली है, एक ना एक बार सबने खेली है। अगर मैं एडी का नाम ले रहा हूँ, सबको पता है एडी क्या करता है, सबको पता है कि मतलब टेकन 3 के अंदर एक बहुत ही नोटोरियस मूव होता था जो कभी भी आप आर्केड में पहुंच रहे हैं कोई ना कोई एक शक आपको करता हुआ दिख जाता था, दैट इज जस्ट एक के बाद एक के जो आपके दोनों इनपुट्स होते 3 और 4 को लोग स्पैम करते थे, स्टिक को हाथ भी नहीं लगाते थे कभी कभी। तो वैसी चीजें सबको एक ना एक चीज एक बार याद आ जाती है। तो ये दो कैरेक्टर्स हो गए जो काफी ज्यादा आई थिंक हमारे जो नए प्लेयर्स आज हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। आई मीन मेरे को पता नहीं कितना ज्यादा खेला, हम थोड़ी देर में बात करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना एक्सपीरियंस है, और उस बेसिस पे आई थिंक हम थोड़ी बहुत रिकमेंडेशन दे सकते हैं। पर मॉर्टल और माम्बा के बाद हमारे साथ जो दो दिग्गज जुड़ेंगे, स्काउट और रेबल भी आज एक शो मैच उनका होगा हमारे टेकन सेगमेंट के बीच पे आफ्टर वी आर डन विद हमारे फर्स्ट राउंड के मैचेस। उस चीज के लिए भी आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा हमारे साथ, बट उस मैचअप में आई मीन स्काउट के साथ हम लोग कल जुड़े थे एंड आई थिंक कल के बाद उनको आइडिया हो गया है कि कमांड इनपुट्स किस तरह से रहते हैं, और कल बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने दिखाया था। तो उनके लिए आई वुड से एक जो कैरेक्टर है वो खेल सकते हैं, दैट्स गोना बी अकूमा, थोड़ा सा एक अच्छा पिकअप रहेगा। No, but I have told Scout लिली खेलना है उनको, and this is what happened. Scout asked me 3-4 different characters, और उसके अंदर से मैंने 3-4 characters बताया, और मैंने उनको बताया क्यों कोई character अच्छा है, क्यों कोई character खराब है, और उनको उसके अंदर से खैर लिली पसंद आया भी है, और मैंने उनको पूरी प्रॉपर सेटिंग्स बता रखी है किस तरीके से इस्तेमाल करना है उसको। आपके पिकअप्स है तो आई एम प्रीटी श्योर देयर इज गोना बी अ हाई रिस्क सिचुएशन, क्योंकि रेबल गेम को बहुत अच्छे से खेलना जानते हैं। Exactly. Now that comes in, because रेबल की अगर बात आती है, रेबल has played the game and रेबल ने सर्किट डोमिनेट किया है। I mean, not a lot of people will be knowing it out here. It's a true story. सर्किट होता है। But it's a true story. Rebel knows the game in one of the best ways. Like Rebel is like, अगर आप Rebel को मैं एक बात बोलना चाहूंगा, Rebel competitive scenario में भी जाते हैं ना, वो जरूर कुछ ना कुछ बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। That's how good Rebel actually is with the game. डेफिनेटली आई मीन, और एक और चीज हमारे दर्शकों को बता दूं कि जिस चीज का आपको इंतजार था, जिस घड़ी का आप वेट कर रहे थे, वो घड़ी फाइनली यहाँ पे आ चुकी है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड प्लीज गिव अ वेरी वार्म वेलकम दो हमारे जो सेलेब्स हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, मॉर्टल एंड माम्बा का। वेल हियर दे आर गाइस, बहुत बहुत थैंक यू आपका आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड एक सवाल रहेगा, क्या आप दोनों तैयार हैं टेकन 7 के एक्शन के लिए? भाई तैयार तो क्या, मजे करने आया, पहली बार खेल रहा हूँ एकदम, पता नहीं कैसा होगा। एंड आते ही सबसे पहले तो उसने पूछा कंट्रोलर कनेक्ट करो, हम बोला वो तो ना होगा। वो फिर पता चला ठीक है कीबोर्ड पे भी खेल सकते हैं। अब उसका ए और इसका ए सब ढूंढ रहा हूँ बैठ के, हो नहीं पा रहा मतलब थोड़ा सा, लेकिन वो अगर मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता होगा फिगर आउट करने में आई थिंक 2 से 3 मिनट तो लग जाए। 2 से 3 मिनट नहीं, मैच स्टार्ट होने के टाइम पे भी आप फिगर आउट कर सकते हैं। माम्बा, आपका 1-2 राउंड्स में आपको क्या एक्सपीरियंस है टेकन के साथ? मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मॉर्टल के लिए खराब सा लग रहा है। मामा फिर आपने मतलब पहले कब से लाइक टेकन अगर खेला है तो कौन सा लाइक सबसे पहला इंस्टॉलमेंट अगर आपको याद हो, कब से खेला या क्या चीज? मेरे को याद है मैं पहले मतलब घर से बाहर ज्यादा निकलता नहीं था, दोस्त जबरदस्ती पकड़ के ले गए थे तो हत्ते पे खेलते थे हम। थोड़ा दिन खेला था लेकिन फिर ज्यादा खेला नहीं, तो आज वापस लौट के आए हैं हम टेकन 7 में, लेकिन खराब तो अब भी लग रहा है मॉर्टल के लिए। अच्छा हेलो, चलिए फिर मैं थोड़ी मदद कर दूं। मामा क्या खेलेंगे आप यहाँ पे, कौन सा कैरेक्टर पिक? कौन सा कैरेक्टर? चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं सेटअप कर लेता हूँ बुलाने का इसको। मैं तो सोचा था योशिमित्सु से खेलूंगा मैं। मॉर्टल कोई हैक्स है आपके पास माम्बा को हराने के लिए अगर राउंड बाय राउंड सिखाना हो तो? एंड बातचीत मॉर्टल दूसरे कॉल पे आओ, बातचीत कर लेते हैं। वैसे तो कुछ नहीं है, बट लेट्स सी क्या होता है। क्रिएट सेशन कर दिया मैंने। मामा को इनवाइट अच्छा तो गाइस रूल समझा दे तो एक बारी रेफरी का काम यहाँ पे मैं करूंगा। 1 to 10 की रेस रहेगी आप दोनों की, मतलब 10 मैचेस जो भी दोनों में से पहले जीतेगा वो आप दोनों के बीच में विजेता बन जाएगा। और कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल आई मीन इंट्रोड्यूस किया गया था थग और स्काउट के द्वारा कि उन्होंने डिसाइड किया था कि पहले कुछ मैचेस वो रैंडम कैरेक्टर्स के साथ खेलेंगे। तो क्या आप दोनों कंफर्टेबल रहेंगे सेम रूल सेट यूज करने के लिए कि नहीं योशिमित्सु का पिक ही माबा प्रेफर करेंगे यहाँ? क्या बोल रहे हो आप लोग? मेरे को तो एकदम देखिए योशिमित्सु एक कैरेक्टर है बेसिकली। आप आई मीन रैंडम सिलेक्शन होती है तो आपको कोई भी कैरेक्टर मिल सकता है। योशिमित्सु
which I would say is one of the most dominating characters जो story line में आता है टेकन की. अच्छा. And अगर माम्बा वो ले रहे हैं और माम्बा confident है, मैं ये बोल सकता हूँ शायद माम्बा first to 10 में सीधा 10वें पर ही जाकर रुकने वाले हैं. पहले से एक्सपेक्टेशन रेज मत कर दो, कहीं हम फिल आ गया तो और बेइज्जत. देखो मेरे को बिल्कुल नहीं आता है, माम्बा ने खेला है, माम्बा को आता है, कैरेक्टर नाम पता है, सब पता है उसको. मेरा तो बाजा फटने वाला है. ऐसा ना हो कल थग ने भी एक्चुअली बोला दूसरे मैच में थग ने डोमिनेट किया था गलत लेवल का. जी हाँ. ऐसा है क्या? खराब लगा स्काउट के लिए. ऑलराइट. आर यू रेडी माम्बा? स्काउट ओवरऑल जीत गए थे बट स्टिल. अच्छा फिर थग के लिए खराब लगा. अच्छा तो कुछ ही देर में मैच स्टार्ट हो रहा है. चलिए वैसे एक बात, हम Yes. फर्स्ट टू 10 तो लेकर जा रहे हैं. फर्स्ट टू 5 के बाद एक हल्की फुल्की बेट रख देते हैं. लाइक कोई चीज आप करना चाहें, कुछ बुलवाना चाहें, बट स्टिल लेट्स कीप इट फैमिली फ्रेंडली. बट हाँ, कुछ अगर आप करवाना चाहें, अगर कोई आदमी फर्स्ट 5 तक पहुंचा, वो दूसरे वाले से कुछ करवा सकता है, अगर ऐसा कुछ आप चाहो तो. मॉर्टल अगर मैं फर्स्ट 5 में पहले पहुंचा ना तो स्वाइप अप दे देना. 1 मिलियन पहुंचना है थोड़ा. ओह माय गॉड. और मॉर्टल अगर आप पहले फर्स्ट 5 पहुंचे तो आप क्या चाहेंगे माम्बा से? ये तो चाहेगा कि भाई मैं इसके आने वाले सारे उसके लिए बस जो है पार्टी स्पॉन्सर करता रहूं, क्योंकि खुद तो पार्टी देता नहीं है किसी. क्या करूं? जो जनता चाहेगी वो करेंगे. जी हाँ, जो जनता चाहेगी वो करेंगे. चलिए जनता जवाब दे देगी लगता है हमें थोड़ी देर में कि क्या करवाया जाएगा माम्बा से. एंड गुड लक टू बोथ यू गाइस सबसे पहले मैच के लिए. एंड उम्मीद करेंगे कि मॉडल आपके लिए भी उम्मीद करूंगा कि आप थोड़ा सा मामा से थोड़ा दूर रह के खेलें, क्योंकि मामा योशिमित्सु के साथ कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल लग रहे हैं. He's already there. Okay, माम्बा तू आ चुका है. Let's begin. ठीक है? ओके. सो टेकन की कास्टिंग भी बहुत अलग होती है, वो कास्टिंग करने में यहाँ पे मजा आएगा. बाकी पबजी वगैरह की कास्टिंग से बहुत डिफरेंट जॉनर में हम लोग जाते हैं. सो इट्स गोना बी आउट देयर. द फर्स्ट मैच स्लोली एंड स्टेडीली जो निकल कर आएगा, माम्बा वर्सेस मॉर्टल. ओह माय गॉड. अच्छा चलिए मॉडल को एक चीज बता देता हूँ. मॉडल आसान कैरेक्टर खेलना है. कैटरीना पिक कीजिए. लात के आपके 2 बटन रहेंगे, उन दोनों में से उन दोनों पे आप खेल सकते हैं. हेलो ऐसे नहीं चलेगा. मॉर्टल इफ यू वांट टू गो फॉर अ डोमिनेटिंग कैरेक्टर, मैं डेविल जिन चूज करता हूं जब भी खेलता हूं. डेविल जिन इज आई वुड से अ गुड डोमिनेटिंग कैरेक्टर. लाइव ठीक है. आई मीन ओ भाई ये क्या है, ये यूज कर रहा है ये भाई, ये क्या है ये माम्बा? ये एलियन शिट है ब्रो. एलियन यूज कर रहे हो तुम. अच्छा बिकॉज़ योशिमित्सु कैन रीजनरेट इट्स हेल्थ. डिपेंड करता है वो कैसे आता है. सो विल हैव टू सी हाउ इट जस्ट कम्स अप. बट वेल फर्स्ट मैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है. बट मैं देखना चाहूंगा कि मामा किस तरह से खेलता है, क्योंकि योशिमित्सु इज अ कैरेक्टर जो अगर आपको नहीं खेलना आता आप डिसएडवांटेज में आ जाएंगे. अगर आप स्पैम करते हुए खेल रहे हो और गलती से वो जो आपका स्पिन होता है ना वो आगे आपकी हेल्थ जाती है. जॉनी I'll tell you one thing. खैर मैं चैट जरूर पढ़ रहा हूँ यहाँ पर. मेरे सामने 3-4 चैट्स खुल रखी हैं और चारों चैट्स में ये बोला गया कि जो पहले फर्स्ट 5 तक पहुंचा ठीक है, दूसरे को ट्वर्क करना पड़ेगा. ये ट्वर्क होता क्या वैसे? वेल ट्वर्क आई मीन शुरुआत करके दिखाएंगे. आपने करी थी तो आपके चैनल पे एक क्लिप मैंने किया था, लेकिन मेरे जो जज्बात होते ट्वर्क वाले वो बहुत छोटे थे. मेरे भी वो काफी ज्यादा, मतलब मैं था ही नहीं वीडियो के अंदर. आपका चैनल था तो आई थिंक आपका ट्वर्किंग समझाना काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट चीज. मेरा चैनल यार, लेट्स सी हमारे जो कंटेंडर्स हैं उन्हीं से पूछ लेंगे कि जब बेस्ट ऑफ 5 तक हम पहुंचेंगे, अभी रिवील नहीं करेंगे हम. 5 पहुंचने के बाद हम उन्हें बताएंगे, लाइक सरप्राइज बताएंगे कि एक्चुअली होता क्या है और क्या करना पड़ेगा. आई मीन देखना पड़ेगा खैर वो क्या होता है क्या नहीं. बट वेल विद ऑल दोस थिंग्स आई वुड वांट टू सी कि मैच जो शुरू होगा क्या चीज निकल कर आएगी. बिकॉज वही चीज हम लोग ट्वर्किंग बोला, मेरे को कल का फैंग याद आ गया. ओह या आप में से जिन लोगों ने कल वाला मैच नहीं देखा, स्काउट वर्सेस थग, उसमें स्काउट ने एक कैरेक्टर चूज किया. पहले थग ने चूज किया, फिर स्काउट ने चूज किया. उसमें फैंग था और वो स्ट्रीट फाइटर का जॉनर आता है. स्ट्रीट फाइटर में डिफरेंट कैरेक्टर होता है. तो फैंग was a very weird character जो स्काउट ने खेल के स्काउट ने बहुत तारीफ करी है उसकी बाद में. खैर वो तारीफ मैं नहीं बता सकता बट बहुत अच्छी थी. इट्स नॉट अ न्यू प्लेयर वाला कैरेक्टर. नए अगर आप खेल रहे हैं फैंग नहीं पिक करना चाहिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. और वो चीज आई मीन एक चीज तो एडवांटेज सिर्फ क्योंकि फैंग का एक एबिलिटी रहता है जिसमें वो सामने वाले को पॉइजन कर देता है. अच्छा योशिमित्सु के साथ भी मतलब उसका एक रिवर्स चीज है. आप सामने वाले को पॉइजन करने की जगह आप खुद को हील कर सकते हैं. वो चीज अगर योशिमित्सु देखना चाहूंगा ओशन हमें पता है कि मॉर्टल को ये चीज रियलाइज करने में थोड़ा टाइम लगेगा और उनका रिएक्शन में जानना चाहूंगा मैच के बाद कि जब अगर मामा हेल्थ हील करनी चालू कर देता तो क्या होता है रिएक्शन. बिकॉज आई वुड वांट टू सी क्या मामा पहले तो अपना पॉइंट ऑफ फोकस बदलेंगे मॉर्टल की तरफ से, वो पीछे की तरफ जाएंगे और उसके बाद वही जो he'll take his time to do all those things and उसके बाद वो अपनी हेल्थ रीजनरेट कर रहे होंगे. अगर उसमें उनकी लाइक मॉर्टल की नजर जाती है मामा की हेल्थ पर इफ ही सीइंग लाइक टाइम टू टाइम वो हो रहा है, बट क्या वो उतना टाइम दे पाएंगे? इफ ही स्मैशिंग
तो टाइम नहीं मिल पाएगा। बट योशिमित्सु के ज्यादा क्लोज जाना एक बहुत वायलेंट डिसीजन हो सकता है उनकी तरफ से। प्लस मैं बोलता हूँ इनको पहले R1 के बारे में बता देना चाहिए था, रेज आर्ट के बारे में बता देना चाहिए था मेरे ख्याल से। मॉर्टल को बता देना चाहिए था। माम्बा सीम्स कंफर्टेबल, और माम्बा एक आर्केड प्लेयर है, तो आप अगर उस टाइम पे गेम खेलते थे आपको गेम के बेसिक्स पता है, तो इसलिए आई मीन थोड़ा संभाल के यहाँ पे मॉडल को चलना पड़ेगा, थोड़ा अपनी जो पेस है गेम में उसको थोड़ा धीमा रखना पड़ेगा। सबसे पहली टू द ऑडियंस मैं एक बात बताना चाहूंगा, देखिए टेकन की कास्टिंग बहुत डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू ऑल अदर कास्टिंग्स जो हम करते होते हैं। सो हम टेकन लोग के अंदर एरेस नहीं है ओशन, हम लोग एरेस नहीं बन सकते, वी कांट बी but still if there's one thing मैं एक ही चीज बता, see if you want to you can, I mean it all comes to you, the practice and all, but खैर एक ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट आएगी, everyone will have to be on their toes with all the adrenaline rush, क्योंकि बहुत पहली चीज तो बहुत जल्दी राउंड्स आते हैं, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, लेकिन वो जो जल्दी जल्दी राउंड्स निकल कर आते हैं उसमें भी एक चीज आती है कि आपको देखना पड़ेगा किस तरीके से गेम चलता है। एंड वंस अगेन वी हैव आवर दिग्गज पीपल। यस, हमारे एथलीट्स हमारे सामने वापस आ चुके हैं फुल फोकस के साथ। अभी मैच स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे दोनों बहुत वेट कर रहे हैं। और माम्बा, आपसे मेरा सवाल रहेगा, योशिमित्सु की एक एबिलिटी रहती है जिसमें मतलब मॉडल को आप बहुत ही ज्यादा सरप्राइज कर सकते हैं। देखो एबिलिटी कुछ नहीं पता मेरे को, सिर्फ लाते और घुसे चलेंगे। मत बोलो माम्बा, हेलो नहीं रहने दो भाई। माम्बा सबसे बेस्ट चीज कुछ बता देता। माम्बा सबसे बेस्ट चीज, आप अपनी हेल्थ रीजनरेट कर सकते हो अगर आप योशिमित्सु यूज कर रहे हो, और बस उसके बीच में आप देखना पड़ेगा मॉडल अगर आपके मॉडल आपके करीब ना, और मॉडल अगर आपकी हेल्थ बार रेड पर जाते, लाइक देयर विल बी अ रेड हेल्थ बार बहुत कम होती है, उस टाइम आप अपना रेज आर्ट यूज कर सकते हो। वो मेरे को पता है PS कंट्रोलर्स में R1 से होता है, अब आपको देखना पड़ेगा कीबोर्ड में किससे होता है। बट इफ यू यूज दैट बटन, if you use that button, you can actually take down Mamba's health from like 100% to 50% in just one good hit. ओशन मुझे जितना इन्फो थ्रो इन करा तुम उससे 10 टाइम ज्यादा मॉडल को। नो ऐसा कुछ नहीं हुआ मामा, फेवरेटिज्म चल रहा है भाई, ये ऐसा नहीं चलेगा। चलिए थोड़ी हेल्प मैं मामा की भी करते हैं। मामा बैक और पंचेस का बटन एक साथ नहीं दबाना उस टाइम पे, मतलब आप स्विच करने के लिए उसको मतलब 3D में मूव करने के लिए यूज कर सकते हो, बट उस पे हेल्थ भी जाती है, तो संभल के वो चीज का यूज करना है। हेल्थ रीजनरेशन का जो इनपुट होता है वो मेरे को इस टाइम पे याद यार, it's like L1 and triangle. I still remember योशिमित्सु में फिनिक्स के अगेंस्ट खेला था 2-3 दिन पहले। It's like L1 बाइंड यहाँ पे कीबोर्ड पे अलग होंगे ना वो। हाँ यार, कीबोर्ड बाइंड थोड़े अलग, लाइक वो देखना पड़ेगा। अगर इनके पास कंट्रोलर कीबोर्ड मैपिंग रहती है तो उसमें पता चल सकता है कि L1 और ट्रायंगल जब आप दबाओगे तो आप वो चीज कर सकते हो। बट वेल, मैं मॉडल का कोच हूँ, आप माम्बा के कोच हो, सिखाओ। ऑब्वियसली माम्बा को पहले से ज्यादा मशवरे पहले थे। बाप रे बाप, माम्बा इनवाइट सेंट। बाय द वे ऑडियंस ने एक चीज बोली है, जो बेस्ट ऑफ 5 चला गया पहले, वो बाद में अपनी स्ट्रीम पे जाके कुछ ट्वर्क करे, तो आप जरा बताइए ट्वर्क होता क्या है? भाई ये वो नशा चढ़ गया है ऑडियंस को, मतलब लॉन्डो का ट्वर्क देखने का ऐसा क्या नशा है भाई? छोड़ दो, निकल आओ बाहर भाई इस चीज से। मैं नहीं, आई एम आउट ऑफ इट। हां मैं भी नहीं भाई, मुझे अपना पिट्ठू बहुत वो है भाई, मैं नहीं दिखाऊंगा। ओके या ओके, I guess we'll be starting really soon, and अब मैं देखना चाहूंगा कि कैरेक्टर्स क्या चीज बनकर आते हैं। मैं मॉडल का कैरेक्टर देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आई मीन दोनों ही हमारे जो एथलीट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए। जानना चाहूंगा कि मतलब पहले चलिए आप मैं अपने एथलीट से बात करूंगा, ओशन आप अपने एथलीट को टिप्स देना। मामा, हम पहले गेम में से वॉच आउट करेंगे कि कौन सा कैरेक्टर खेला जाएगा। ओके ब्रो, विल बी पेशेंट। ओके ब्रो। मैं तो भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस बटन स्मैश करते रहने हैं। मैं तो लॉ चूज करूंगा। Alright, नाम अच्छा लगा मुझे उसका बस। Yeah, Law actually will be a good character. I mean आप ज्यादा उस पर फोकस कर सकते हो। प्लस लॉ की I would say रेज आर्ट बहुत ज्यादा बेहतरीन है, लेकिन हाँ लॉ की रेज आर्ट यूज करने के लिए आपको पहले बहुत मार खानी पड़ेगी। I'll be hoping आप मार ना खाओ, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। Just spam the buttons. Just spam the buttons. And for all the audience out there, वो भी चीज है कि आप भी स्पैम कीजिए। The first match, आज तक मेरे से एक मैच नहीं जीता है। I hate you. The first match that's going to be out here. The first match that's going to be out here, if you're talking about it, Law versus Yoshimitsu. And Yoshimitsu,
I mean, it's first Jan. दोनों के लिए obviously it's new characters, so first Jan ही रहने वाला है. मेरा 8th क्यू पर चल रहा है. खैर अगर बात करें योशिमित्सु, this is going to be the character जो health regenerate करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम आता है. Plus ज्यादा करीब नहीं जाना है mortal को. Mortal on the left using law, and this is going to be Yoshimitsu on the right by Mamba. As you can see the names out there. दोनों बहुत धीरे शुरुआत करें. Mamba की तरफ से first punches आते हैं, first kicks आते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है. उसके मॉडल को बहुत ज्यादा यहाँ पर bleed out करने पे फोकस किया जा रहा है. काफी अच्छे किक्स का प्रदर्शन. मॉडल को पीछे रहना पड़ेगा something comes up, because Yoshimitsu आगे जाकर के he can just take down a lot of damage if anything comes to it. Mortal अभी भी थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन बन चुकी है. मांबा बहुत अच्छा मैच अपने लेकर जा सकते हैं विद एवरीथिंग कमिंग आउट इन द सिचुएशन. लेकिन मॉर्टल ने बहुत बेहतरीन दो जंपिंग किक्स. ओह माय गॉड, दिस इज गोइंग अमेजिंग. मॉर्टल एक कोने में पिंचर डाउन कर चुका है. मुझे मॉर्टल माइट जस्ट टेक द मैच इन हिज फेवर. रेड एचपी. मॉर्टल अगर अल्टीमेट यूज करते माइट जस्ट गो विद एवरीथिंग, बट नो. ओके, नाइस वन. वहाँ पे असिस्ट का यूजेज किया जा रहा है. देखिए मॉर्टल एक चीज तो समझ चुके हैं कि असिस्ट थोड़ा बहुत इनको इस मैच में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि नए प्लेयर्स के लिए वो अच्छा होता है. बट माम्बा भी आई मीन असिस्ट के साथ आपका इनपुट पे थोड़ा सा डिले चले जाता है, तो सामने वाले के लिए पनिश करना काफी आसान रहता है. अब माम्बा की तरफ से ये जो स्पिनिंग किक्स आ रही है ये बहुत ज्यादा दिक्कतें क्रिएट कर सकती है. नो, बट चार्ज अप किक यहाँ पे आती हुई और काफी बेहतरीन आई मीन मॉर्टल कोशिश कर रहे हैं. देखिए अब धीरे धीरे करके आगे मूव करते हैं और उस चीज का फायदा मामा को मिल जाता है कि वो स्टेप बैक लेते हैं, अटैक वेफ होने की कोशिश करते हैं. ओ पावर अप, यहाँ पे पावर क्रश आता हुआ, बट मामा लेकर जाते हैं हमारा दूसरा राउंड इसी के साथ. मॉडल को आपको बोलना पड़ेगा अगले मैच से पहले कि वो L1 का जो इनपुट है उसको सारा टाइम दबा के ना रखे. एग्जैक्टली वो एक चीज इंपॉर्टेंट बन चुकी है. लेकिन यहाँ पर साथ के साथ मामा के लिए मुश्किल हो चुकी है. इसी को गो फॉर द रेज आर्ट. यहाँ पर रेज आर्ट हो सकती है, उनकी एबिलिटी डिप्लॉय पूरी हेल्थ खा सकते हैं अगर यहाँ पर रेज आर्ट के लिए जाते हैं वो. लेकिन अभी भी वो वेट कर रहे हैं काफी बेहतरीन तरीके. लेकिन मामा कम बैक मानना पड़ेगा, बहुत बेहतरीन तरीके से निकलकर आया. एंड देयर इट इज, Mamba with a clean sweep in the round, in the first round, and Mamba wins in one of the most incredible fashions, if anything. जी हाँ, वो ट्रैकिंग मूव्स जो चल रहे थे स्पिन किक्स के साथ वो काफी ज्यादा क्रूशियल हो गए थे. उनके साथ डैमेज भी काफी पड़ता है, प्लस नॉकबैक्स जो देखने को मिले. यस, खुशी की आवाजें हमारे को तो सुनाई दे रही है, बट जो हमारे एथलीट्स है वो भी हमारे साथ कुछ ही देर में हमारी स्क्रीन्स पर आ जाएंगे. और काफी ज्यादा इंटेंस था. थोड़ी चीजें हमारे जो कंटेंडर्स है उनके लिए आई मीन ओशन टिप्स आप भी दे सकते हैं. डबल डैश, डबल टैप फॉरवर्ड डैश के लिए, डबल बैक डैश के लिए जो एक इंपॉर्टेंट मूव रहता है डिफेंसिव टाइप पे. ब्लॉकिंग एक इंपॉर्टेंट चीज रहता है. मामा भी अग्रेसिव काफी ज्यादा जा रहे थे, बट वो जो लोज थे वो बहुत ज्यादा एक दिक्कत क्रिएट कर रहे थे. प्लस उसके अलावा आई मीन इट्स ऑल अबाउट जस्ट बीइंग पेशेंट, क्योंकि ज्यादातर हमने यहाँ पे विफ्स होते हुए देखे. हमारे नए दर्शक काफी ज्यादा जुड़ रहे हैं तो उनके लिए भी बता देते थोड़े बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजीज किस तरह की होती है. बैक डैशेस जब आप पीछे बहुत ज्यादा तेज जाते हैं, फॉरवर्ड डैश आप आगे काफी तेज जाते हैं, डबल टैप जब आप फॉरवर्ड करते हैं. ओ ड्रैगन ऑफ का मैचअप एक बहुत अच्छा बेसिक कैरेक्टर रहता है. आई मीन बेसिक टूल के ड्रैगन ऑफ की तरफ से काफी ज्यादा अच्छी है अगर आप अर्ली स्टेज में गेम को खेलना सीख रहे हैं और आपके फंडामेंटल्स गेम के इसके साथ हो सकते हैं. बट यहाँ पे वही बात आ जाती है कि एक प्लेयर को गेम थोड़ी बहुत आती है, दूसरे प्लेयर इज कंप्लीटली फ्रेश ऑन द बोर्ड. तो वो जो एक पेशेंस वाला फैक्टर है वो यहाँ पे थोड़ा मॉडल को पिकअप करना पड़ेगा. बिल्कुल, लेकिन इस वाले राउंड में देखते हैं अब यहाँ पर क्या चीज बनती है. जब योशिमित्सु की तरफ से जो विन निकाली थी, ऑलरेडी एक विन इनके हिस्से में जा तो चुकी है, लेकिन अब बात की चीजें रहेंगी. फर्स्ट टू 10 की जो रेस चल रही है काफी बेहतरीन यहाँ पर किक्स का प्रदर्शन इन्होंने किया जो है, लेकिन इनको अपने डिफेंसेस को भी देखना पड़ेगा. मॉडल के लिए डिफेंसेस थोड़े से मुश्किल हो चुके हैं, लेकिन वो अटैकिंग साइड पर अच्छा जा रहे हैं. आई थिंक ही इज स्टिल ट्राइंग टू गो फॉर द गुड स्पैम्स आउट देयर. और इस सब के बीच में मांबा की रेज आर्ट तैयार है. आई मीन ही इज स्टिल नॉट गोइंग फॉर द रेज आर्ट सिचुएशन अभी के लिए, देखेंगे अगर निकल कर आती है. बट ही इज स्टिल रिलाइंग ऑन द किक्स एंड बहुत बेहतरीन तरीके से दोनों तरफ से किक्स है. और ये फिर से Mamba is looking confident in any way, shape or form. और फिर से एक और मैच निकालते हुए Mamba is going for the clean sweeps with round by round. लेकिन अभी तक grapple कोई भी देखने को नहीं. They are still waiting for the kicks only. I would say कि ये kicks के ऊपर ही रिलाइड है. पंचेस भी उतने ज्यादा ऐसे देखने को नहीं मिले. डेफिनेटली आई मीन एक चीज बोलना चाहूंगा कि if Mortal loses can he blame his coach? I hate you in every way, shape or form right now. But well, Yoshimitsu once again just going with everything. और मैं यही बोलूंगा कि मेरे को बीच में टाइम आउट के बीच में बात करने का मौका नहीं मिला. खैर अब वापस से मांबा इस बार बहुत बेहतरीन तरीके से मांबा ने गेम को होल्ड ऑन कर लिया. आप देख सकते हैं ये वाली जो विन निकल कर आई थी, मांबा ने कोई चांस नहीं दिया मॉर्टल को और बैक टू बैक उनके ऊपर चलते रहे. बट लेफ्ट साइड पर वंस अगेन मॉर्टल रहेंगे, ड्रैगन ऑफ का कैरेक्टर यूज करते हुए आ जरूर, लेकिन इस बार पहला फर्स्ट ब्लड निकालते हुए मॉर्टल अपने हिस्से से और फिर से किक्स के ऊपर रिलाय करते हुए. बट ओह माय गॉड दैट वाज अ गुड वन. पैरी करने की कोशिश, बट एक बहुत अच्छा ग्रैपल, बट ग्रैपल के बाद आगे कोई चीज यहां पर नहीं करी. वंस अगेन गोइंग फॉर द स्पिनिंग किक्स इज व्हाट ही इज डूइंग. लेकिन योशिमित्सु अभी भी वंस अगेन
यहाँ पर हेल्थ जनरेट करने का इनके पास टाइम नहीं हो सकता, सो इनको पता है कि इनको सिर्फ और सिर्फ आगे जाकर के सारे किक्स के ऊपर जाना है. Once again, he's back to the rage art, but as of now, I think the game can once again go in Mamba's favor और उनके लिए 2-0 का स्कोर लाइन वो इकट्ठा कर सकते हैं if something comes onto it. Yeah. वेल 2-0 बहुत ही तेजी से आता हुआ और यहाँ पे माम्बा एक बहुत बहुत बेहतरीन लीड ले चुके हैं अपने लिए. आई मीन मैं बोल रहा था कि मतलब मॉडल अपने कोच को ब्लेम कर सकते हैं, आप काउंटर ब्लेम कर रहे हैं कि टाइम आउट में बात करने को नहीं मिल रहा. लीजिए टाइम आउट मिल गया आपको. बह गए. मॉडल 6 गुड जॉब माम्बा, बी कॉन्फिडेंट, ऐसे ही खेलते रहिए. सुनो यार, ये प्रैक्टिस करके आया है यार. ये प्रैक्टिस करके आया है. अरे नहीं ब्रो. 6 chances. You had 6 chances of rage at and there was one match जब आपने बहुत आगे आप लेकर चले गए थे गेम को, बट माम्बा का कमबैक आउट से was very OP in that one. हाँ देखा मैंने वो वाला, याद है मुझे यार. ये फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग मतलब ये कीज यार. UIKJHPO फर्स्ट But टाइम. Mortal, if you have to go for it, देखो आप अगर दो बार फ्रंट बटन को दो बार दबाओगे वो आपको डैश लेकर जाता है और वो आप ग्रैपल कर सकते हैं. जैसे अभी माम्बा ने ग्रैपल किया था, बट माम्बा ने उसके बाद कोई मूव यूज नहीं किया, सो वो ग्रैपल करके वहीं पर रह गए. या सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स इज व्हाट कैन एक्चुअली बी. एंड मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा, आप दोनों मुक्कों पर ही क्यों जा रहे हो? सिर्फ लाते ही वापस पैम हो रहे हो. हाँ, मेरी टांग मतलब मेरे कैरेक्टर की टांग लंबी है इसलिए पहले पहुंच. बट अगर आप तलवार मारोगे तो एक्चुअली अगर आप हाँ यार, वो मारोगे लौंडा यार तलवार यूज नहीं कर रहा है. बड़ी देर से मैं यही सोच रहा था क्या शो आप 4-5 और फ्रेम्स आगे जा सकते हैं एक्चुअली अगर आप तलवार मारोगे. अच्छा ऐसा है क्या? रुको मॉडल, इस बार तलवार खाना. ओके रेडी करो, चलो आओ बताते हैं तुम्हें हम. अरे यार देखो अब हम प्रैक्टिस करके आएगा नेक्स्ट टाइम. ओके ओके से लास्ट शॉट. मामा एक चीज कर रहे हैं, अगर आप लीड पे चले गए 5 गेम्स के साथ तो फिर हम कोचेस स्वैप कर लेंगे, फिर आपको ओशन मिलेगा तो फिर थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा. सुनो मेरा तब तक माम्बा सीख चुका है. माम्बा मैं बता रहा हूँ, मैं इसीलिए मॉडल को हरवा रहा हूँ ताकि माम्बा मेरे पास आ सके. But we'll have to see how it just comes up, because अब characters obviously योशिमित्सु तो I would say माम्बा योशिमित्सु को नहीं हटाना चाहेंगे, बट आई वांट टू सी कि मॉर्टल कौन सा कैरेक्टर लेते हैं. एंड आई सीरियसली वांट, अगर वो किंग या आर्मर किंग लेते हैं तो उनको पंचेस और किक्स से ज्यादा ग्रैपल्स पर जाना पड़ेगा. बट इफ एनीथिंग अगर वो डेविल जिन, बिकॉज़ सी माय पर्सपेक्टिव इट ऑल जस्ट कम्स टू डेविल जिन ओनली, सो लेट्स जस्ट सी हाउ इट कम्स आउट. ओके मिरर मैचअप यहाँ पे देखने को मिलेगा. आई मीन मॉर्टल भी वापस आते हुए योशिमित्सु के साथ. लेट्स सी क्या होने वाला है. अच्छा एक और सिनेरियो यहाँ पे बता देता हूँ कि किंग आर्मर किंग थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स हैं फॉर न्यू प्लेयर्स, क्योंकि ग्रैपल्स आपको चेन करने पड़ते हैं, स्पेशली किंग. आई मीन वो अगर आप ग्रैपलिंग गेम आपके सामने वाले जो ओपोनेंट है उन्होंने गेस कर लिया, हाँ किंग के बेसिक अटैक्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ते हैं, बट अगर वो जो ग्रैपल से एस्केप कर लिया तो फिर आपके गेम के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं, आप रिकवर नहीं कर पाएंगे. यू गेट इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल. इसलिए एडी और कैटरीना एक अच्छे पिकअप्स रहेंगे. बट ये देखिए लाते ही लाते आई मीन वो स्पिन किक जो है काफी ज्यादा डैमेज दे रही है और मॉडल को यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा कि कितनी किक्स एक के बाद एक आ रही है. द नंबर्स इज 3. तो 3 आपको ब्लॉक्स करने, उसके बाद ऑफेंसिव. यहाँ पे बहुत ही अच्छा असिस्ट मूव आया था जो कि आई थिंक L14 था यहाँ पे मॉडल की तरफ से देखने को मिला था. बार बार नहीं कर सकते, उस चीज के लिए थोड़े ज्यादा टाइम लगता है आपको एग्जीक्यूशन के लिए. एनिमेशन इज टू लॉन्ग, तो मॉडल को थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा चार्ज के लिए. अब यहाँ पर दिक्कत थोड़ी सी बन सकती है. वापस से मॉर्टल ने शुरुआत करने की कोशिश करी जरूर थी, लेकिन वही जो असिस्टेड डैश रहता है इट वाज जस्ट लुकिंग आउट देयर. लेकिन मॉर्टल उनको अब एक भी शॉट नहीं यहाँ पर खाना. अगर एक बार भी दिक्कत होती है, ही इज जस्ट सर्वाइविंग ऑन मैजिक पिक्सल, नॉट एनीमोर. ही गोस ऑन. बट इस बार एक थोड़ी सी कड़ी फाइट उन्होंने दी जो थी. 2 विंस माम्बा के पास फिर से बैक टू बैक आ चुकी हैं. इस बार फिर से शुरुआत मॉर्टल ने करी, लेकिन वही बात आती है, मॉर्टल जिस भी गेम में फर्स्ट ब्लड निकाल रहे हैं, फर्स्ट वहां पर पंचेस या फिर किक्स दे रहे हैं, उसके बाद से वो उस पर कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे. मॉर्टल की हेल्थ फिर से थोड़ी सी कम हो चुकी है. बट इट ऑल जस्ट कम्स डाउन टू वन थिंग कि माम्बा के पास एबिलिटीज अपने यूज करते हैं वो आराम से लेकर जा. देखिए वो नीचे के एरियाज पर अगर वो नीचे की साइड पर किक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मॉर्टल को नीचे का ब्लॉक करना पड़ेगा. ही इज नॉट गोइंग फॉर द डाउन स्टैंड ब्लॉक. वो अगर वो बिकॉज इट्स वन थिंग इन द गेम, अगर आपको सीधा मुक्के पड़ रहे हैं तो आपको पीछे का बटन दबाना है, अगर आपको नीचे के मुक्के पड़ रहे हैं तो आपको नीचे का बटन दबाना है, बट उसके ऊपर फोकस नहीं हो पा रहा है सच. चलिए आई मीन हमारे जो एथलीट्स है एक बारी आई थिंक वापस आ चुके हैं. एंड यस
दे यार मेरे को बटन ही नहीं पता कौन सा दबाना है। अच्छा मॉडल, एक चीज बोलूंगा। अगला जो मैच स्टार्ट होता है, सबसे पहले आप पीछे जाइए हल्का सा, एक चीज फिगर आउट कीजिए कि कौन से टेकन के 4 बटन्स रहते हैं। एक से आपका राइट हैंड आगे जाता है, दूसरे से लेफ्ट हैंड, एक से राइट किक, चौथे से लेफ्ट किक। वो बटन आपको फिगर आउट करना है और उसके बाद आपके लिए गेम थोड़ी आसान हो जाएगी। आप एक एक करके प्रेस करेंगे, अगर स्पैम करेंगे तो आप वही चीज हो रही है कि आप माम्बा को ओपनिंग दे रहे हो, और आप माम्बा क्योंकि गेम खेलना जानते हैं और शेड्स पहन तो वो क्या सिर्फ स्पैम कर रहा है क्या? Mamba is already in thug life. यस, हालात खराब है भाई। Look at Mamba. I mean, alright, Mamba. If anything, I'll make a sticker out of it. I love this one. I love this one. This pose. Yeah. But alright. So Mortal, एक बात बताओ, आपने क्या सोच के वैसे इस बार योशिमित्सु लिया था कि आपको भी लाइक लंबे ताने मारने सीधा निकालने का? हाँ बस सेम ऐसे ही। मोटल कैटरीना ट्राई कीजिए, कैटरीना पिक कीजिए। एक लेडी होगी, चश्मे पहने होंगे और किक के जो बटन है, हाँ किक के बटन आपके हो जाएंगे। आपका किक का पूरा एकदम सफल रहेगा सब कुछ। ठीक है चलो वो वाला कैटरीना, ठीक है ढूंढेंगे उसको हम अब। और हाँ एक और चीज, आपका जो असिस्ट वाला एक कॉम्बो आप दबा रहे हैं, उसके बाद मेरे को आपके इनपुट्स नहीं पता, मेरे को आपके पॉइंट्स नहीं पता। जिसमें योशिमित्सु तलवारों पर चलने लग गया था एक तरीके से, आपको उसको आगे फॉरवर्ड लेकर जाते हुए ट्रायंगल। भाई मैं योशिमित्सु खेल रहा हूँ, 9 मैच हो गए भाई, ये पहले मैच में केकड़े की तरह भागने लगा, मेरी फट गई। हाँ वो रेज असिस्ट रहता है, वो आप डैश असिस्ट रहता है, आप डैश करते हो पहले डैमेज तो फिर असिस्ट करते हो, वो तलवारों के साथ डैमेज देते हो। उसके बाद अगर आप आई डोंट नो ट्रायंगल का इनपुट कीबोर्ड में, बट अगर आप ट्रायंगल स्पैम करते रहते हो तो वो मारता रहेगा। उसे यूज नहीं करना है, स्टिक टू बेसिक्स। माम्बा की स्टाइल, सुनो माम्बा, टू बेसिक्स। यस ब्रो माम्बा, तो तुमने हमें भी गुस्सा दिला दिया। हम भी कोशिश करेंगे कुछ नहीं दिख रहा, छोड़ो। साला मुझसे कहता है माम्बा इस बार ट्विस्ट है कैरेक्टर, मैंने कहा क्या है, साला वही लेकर आया। मैंने कहा साला कितना डेस्परेट है, मेरे कैरेक्टर से घुस गया तू। Alright, so actually थग और स्काउट पिछले कल एक चीज कर रहे हैं जो बहुत अच्छी थी, मैं बोलूंगा वो रैंडम कैरेक्टर्स पर जा रहे थे। आखिरी के 3 राउंड होंगे, मैं बोलूंगा हम लोग रैंडम कैरेक्टर्स कर देंगे। लाइक आपको फिर माम्बा, फिर आपको योशिमित्सु नहीं रहना, आप बस रैंडम बटन दबाओगे, या फिर मॉर्टल आपको कैरेक्टर देंगे और माम्बा आप मॉर्टल को कैरेक्टर दोगे, ऐसे करके कुछ कर सकते हैं। ये अभी जो होने वाले मैच है उसकी बात हो रही है, आपने अब सिलेक्ट हो गया आखिरी मैचेस में, आखिरी के 3-4 जो मैचेस बचेंगे उस टाइम। भाई मैंने कोई लड़की ले ली, पता नहीं भाई मेरे पास कोई मौलाना आ गया। Let's see how it comes up. देख चलिए, हमें पता चल जाएगा मैच स्टार्ट होते कि कौन से कैरेक्टर्स यहाँ पे पिक करे गए हैं। और मैं अल हबीबी के साथ आऊंगा गाइस, अल हबीबी है मेरा कैरेक्टर को देखना। गाइस वंस अगेन, खैर ऑडियंस में जो भी देख रहा है लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप लोग नए आए यहाँ पर, एंड ऑब्वियसली हमारे सोशल्स नीचे आप लोगों को मिल ही रहे होंगे, तो वहां पर भी आप लोग जा सकते हैं। एंड एट द एंड इट्स ऑल अबाउट हैविंग फन। आई मीन मॉर्टल चाहे हार रहे, बट इट्स ऑल अबाउट हैविंग फन, राइट मॉर्टल? राइट एब्सोल्युटली, मजे के लिए आए, वरना तो प्रैक्टिस करके आए होते। ओके, मैचअप यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कौन सा। ओके, शाहीन का दिस इज नाइस। शाहीन अगर इन्होंने वो जो एक स्वाइप किक्स होती है वो मारनी सीख ली, तो आई थिंक काफी ज्यादा दिक्कतें क्रिएट कर सकते हैं अपने ओपोनेंट के लिए। I mean शाहीन का यही चीज बहुत अच्छी रहती है। शाहीन इज वेरी गुड विद द किक सिस्टम एंड विद द पंचिंग सिस्टम इफ एनीथिंग। शाहीन का आना, या दिस इज व्हाट इट्स कमिंग आउट टू। ऑलराइट, आना हमारे जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं वो भी काफी ज्यादा आना खेलते हैं, और शाहीन भी एक मेटा में एक्चुअली एक हाई लेवल मेटा में एक अच्छा पिक है, दोनों के दोनों ही। Like look at the kicks. This is where Shine actually starts, and Shine लेकर के kicks के ऊपर मैं बोलूंगा यहाँ पर माम्बा को बहुत बड़ा फायदा, योशिमित्सु से ज्यादा बड़ा फायदा इस राउंड में माम्बा को मिल सकता है। I mean coming back on to it, हाँ मॉडल को इस तरीके से अपनी डोमिनेंस सर्ट करनी पड़ेगी, बट will it be enough? I mean आप देखिए डैश करते हो आ गया, किक सीधा मार रहे हैं, डैश करते हो पूरा अपना फोकस रख रहे हैं, एंड किक्स के ऊपर ब्लॉक अच्छे तरीके से मॉडल ने किया था, लेकिन अब किक थोड़ी सी चेंज हो जाती है, यहाँ पर फिर से ब्लॉक करने की कोशिश बहुत बेहतरीन तरीके से, लेकिन अब मॉडल की बारी आती है। I mean he could have used a combo or something, लेकिन अब रेज एट once again, if मॉडल goes for रेज एट माम्बा यहीं पर फिनिश हो सकते हैं। मॉडल शुड गो फॉर इट। आई मीन दैट्स वेयर इट कैन कम अप टू, बट मॉडल यहां पर पहला राउंड मोस्टली जीत सकते हैं। काफी अच्छा यहां पर अपने लिए डॉज बना रहे, बट वंस अगेन ऑलराइट दिस कम्स डाउन टू इट, मॉडल ये राउंड निकाल सकते हैं। दिस राउंड कैन बी मॉडल्स डॉज बहुत अच्छे तरीके। मॉडल इज डूइंग गुड विद द डॉज सिचुएशन, बट उनको आगे कुछ ना कुछ पंचेस निकालने पड़ेंगे, बट दिस इज वेयर इट कम्स अप। शाइन ही नोज हिज कॉम्बोज, एक बार मारा दूसरे मारा, बट व्हाट इट कम्स डाउन टू इज मॉडल टाइम अप उन्होंने वहां पे बहुत ज्यादा टाइम किल कर दिया, उसकी वजह से हेल्थ डिसएडवांटेज थी, तो राउंड वहां पे माम्बा के पास गया। बट
ये देखिए मामा को भागना आता है, मैं बोलूंगा उस चीज का एडवांटेज इनको मिल जाएगा, क्योंकि मॉर्टल का वही चीज है, जब शाहीन अपने अटैक्स मिस कर देते हैं तब मॉर्टल गैप क्लोज नहीं करते, वो नॉर्मल वॉक करके आते हैं। अभी देखिए मॉर्टल सो रहे हैं, व्हाट इज ही डूइंग, मॉर्टल सो रहे हैं अभी के लिए। मॉर्टल वेट कर रहे हैं जब शाहीन बाद में आ जाएगा तब उनको सीधा नीचे से एक एक स्वीप मार के गिराया जा सकता है, वहां से कॉम्बो यूज किया जा सकता है। आई मीन ही कैन गो फॉर द यूटिलाइजेशन, बट नाउ हो गए ही नोस कि वापस से अगर टाइम अप हो तो यहाँ पर फिर से वो टेक डाउन हो सकते हैं, सो ही हैज टू वेट फॉर इट। बट शाहीन वापस से अब आगे अगर डैश करते हुए जाते हैं, नो ही इज गोइंग फॉर द लोअर लेग अटैक्स एंड उसके ऊपर काफी तरीके डाल रहे हैं। बट मॉर्टल उनको डॉज करना इस तरीके से है कि वो पीछे वाला बटन कॉन्स्टेंटली प्रेस कर रहे हैं, बट उसी के कारण आप देख सकते हो नॉर्मल मूव्स के ऊपर वो आ चुके हैं। बट एक और रेज आर्ट की सिचुएशन यहाँ पर बन सकती है माम्बा के अगेंस्ट, बट मॉर्टल ही इज वेटिंग फॉर इट once again, and एक और अच्छा शॉट this game will be Mamba's once again. There it is, KO straight away coming up with 7 seconds on the clock. डेफिनेटली आई मीन, पर एक चीज है, मॉर्टल इस बार काफी अच्छे से फाइट अप दे रहे हैं। ये देखिए वेकअप करने ही नहीं दे रहे, एक और अगर खराब वेकअप रहता है तो यहाँ पे पड़ेगी। एक और कॉर्नर में वॉल प्रेशर बना रखे और KO, यस फाइनली यहाँ पे मॉर्टल अपने लिए एक राउंड ले जाते हुए, आई मीन एक ही इनपुट उन्होंने स्पैम किया, बट हे इफ इट वर्क्स, इफ इट्स नॉट ब्रोकन डोंट फिक्स इट। अब दोबारा से वो चीज यहाँ पे नहीं करने देंगे, क्योंकि पिछली बार वही चीज एक्सप्लॉइट करी थी मॉडल ने। ऑलराइट, वंस अगेन गैप क्लोज करना थोड़ा एक इंपॉर्टेंट डिसीजन बन जाता है यहाँ पे। ओ काफी अच्छा लो आता है मॉडल की तरफ से, बट अब माम्बा थोड़े बहुत प्रेशर में वॉल के पास ले जा चुके हैं मॉडल को पूरा पंचेस के साथ ही, और 3-1। चलिए मैं खुश हूँ, एटलीस्ट एक राउंड यहाँ पे लेकर गए। बट एक राउंड लिया जरूर, लेकिन यहां पर बात वही हो गई, उनको सेम चीज कर सकते थे। माम्बा साथ के साथ समझ गए अगले राउंड में कि एक कोने में जाना यहां पर शाइन के लिए खराब हो सकता है। I mean, बहुत हाई लेवल टैक्टिक्स हम लोग सोच रहे हैं, बट वी हैव टू ब्रिंग लाइक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। नए प्लेयर हैं, नए प्लेयर के लिए एक राउंड कुछ भी करके ले जाना अगेंस्ट लाइक माम्बा, जो एक्चुअली लग रहा है मेरे को इनको पता है इनको एग्जैक्टली क्या करना है। पहले जा रहा है, फ्लॉलेस पेल दिया हरामजादा। वो माम्बा को एग्जैक्टली पता है क्या करना है गेम के अंदर। देखिए मेरे को तो एक कॉम्बो कोई मिल गया था, पता नहीं कैसे मैं वही दबा रहा था और वो गेम जीत गया मैं। फ्लॉलेस पेला मॉर्टल आपके पास फिर से चांसेस है। देखिए आपने वो वाला राउंड अच्छा निकाला, लेकिन एक बात आती है, जब आप रेड एचपी पर हो जाते हो आपको बस एक देखना पड़ेगा आपकी बटन मैपिंग L1 कहां पर है और R1 कहां पर। अगर आपने R1 प्रेस कर दिया जब आप रेड एचपी पर हो और शाहीन यानी माम्बा कैरेक्टर आपके बहुत करीब है, आप एक ऐसा कॉम्बो मार सकते हो जिसमें आप 50% हेल्थ लेकर जाओगे माम्बा की, 50% हेल्थ बाय प्रेसिंग R1। ठीक है अच्छा। इसमें एक सवाल आ जाता है कि गेम की भी कुछ सेटिंग्स रहती है। अगर आपने मैचअप टूर्नामेंट मोड में लगाया तो सेटिंग्स आई थिंक लॉस के बाद ही चेंज होती है। अपनी कंट्रोलर सेटिंग्स में जाइए, ये चीज हमें पहले करनी चाहिए थी। कंट्रोलर सेटिंग्स में जाइए और दो ऑप्शन रहते हैं वहां पे, एक रहेगा आपका रेज आर्ट का, उसका बटन देखिए कौन सा है, दूसरा रहेगा एक असिस्ट का का बटन देख लीजिए कौन सा है। वो दो बटन आइदर वेज अब मैं देखो कॉम्बो पता चल गया कैसे यूज करना है थोड़ा थोड़ा, तो अब मैं माम्बा एक तरीके से रेडी हूँ। मैं आपसे माम्बा एक चीज पूछना चाहूंगा, योशिमित्सु या शाहीन, क्या आपको पसंद आया दोनों में से? योशिमित्सु भाई अपना एलियन भाई टाइट है भाई, लौंडा किधर है लड़की? एलियन पूरा टाइट एक्चुअली जिस तरीके से, क्योंकि इन्होंने बहुत राउंड निकाले। बट योशिमित्सु और शाहीन में डिफरेंस ये आता है, शाहीन अपनी टांगों के लिए फेमस रहता है। योशिमित्सु से स्टार्ट किया, बट योशिमित्सु इज फेमस फॉर हिज हेल्थ रीजनरेशन एंड ऑल्सो अगर आप तलवार वाले मूव्स निकाल दिए आपने उसके, फिर आप आराम से लाइक 3-4 कॉम्बोज के अंदर ही मॉडल को परफेक्टली आप सीधा टेक डाउन कर सकते हो। वेल अब हमारी बारी हो चुकी है जाने के अपने एथलीट से थोड़ा दूर, जो अब कुछ ही देर में जंग के मैदान पे एक बार फिर से उतरने जा रहे हैं। और देखते हैं क्या वापस योशिमित्सु देखने को मिलेगा। और मॉर्टल ने कहा था कोई और पिकअप हमारे साइड से आएगा। यस, कैटरीना आ चुकी है। लातों पे रिलाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो 4 का जो इनपुट रहता है आपकी किक का, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 3 का किक का इनपुट काफी इंपॉर्टेंट होगा। लेट्स सी यहाँ पे क्या मॉर्टल एक और राउंड या फिर एक मैच ले जा सकते हैं या नहीं, या फिर माम्बा की तरफ से भी डोमिनेशन देखने को मिलेगा। आई थिंक हाफ वे ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। यस, 4 ऑलरेडी जीत चुके हैं, 5वां सेट रहेगा। ओ ट्रैकिंग मूव, बट माम्बा जंप करते हुए उसके ऊपर से एक अच्छा यहाँ पर अब आउट से कि अनडाउटेडली पेरी यहाँ पर कर लिया, उन्होंने बचा लिया खुद को। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या चीज होती है जब माम्बा फिर से प्रेशर बनाए। लो दैट वाज अ गुड वन। मॉर्टल माम्बा को अपनी एचपी अमाउंट पर लेकर आ चुके हैं, लेकिन सीधा डैश करते ही नोस की डैश ही यहाँ पर काम आ गया। सो इज गोइंग गुड विद द डैश एंड किक्स।
in the situation. But खैर blockage के लिए Mortal तैयार है. He's constantly spamming those buttons. अगर मैं बोलना चाहूँ, पीछे की तरफ को जाते हुए constantly वो बटन स्पैम कर रहे हैं, लेकिन अब बारी आती है किस तरीके से आगे Mamba डैमेज डील कर पाते हैं या नहीं. टाइम इज अ क्रूशियल 120 सेकंड्स के अमाउंट के अंदर हम कहीं ना कहीं बचे जरूर हैं. 24 सेकंड्स ऑन द क्लॉक राइट नाउ, लेकिन बचना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर. उसने अगर टाइम वेस्ट किया तो जरूर यहाँ पर Mamba जीत सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर मैं बोलूंगा लक्षण दिख रहे हैं ऑब्वियसली इस गेम के. लेकिन आगे जाते एक बहुत बेहतरीन डैश यहाँ पर जाता है. एंड दिस गेम, आई मीन, विल ही गो फॉर इट, विल ही गो फॉर द रेज आउट दिस टाइम? जिस तरीके से बोला गया था, ही इज स्टिल नॉट ऑन टू इट. एंड Mamba. जी आप कोशिश काफी अच्छी थी वहां पे. इनपुट जो है अभी भी वो असिस्टेड कॉम्बोज यूज किए जा रहे. फाइनली एक काफी अच्छी शुरुआत होती हुई पंच पे रिलाय किया. एक और स्पिन के आते हुए वो ऑर्बिटल्स काफी ज्यादा डेडली साबित हो सकते हैं, बट मामा वेकअप का टाइम नहीं दे रहे. अब आई थिंक वो एक इनपुट कॉन्फ़िगरेशन जो होती है ना आपकी, कि आपने बटन मैपिंग किस तरह से कर रखी है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा. आपको असिस्टेड कॉम्बो से थोड़ा दूर रहना है. अगर नए स्टार्ट कर रहे हैं मैच के अंदर, असिस्टेड कॉम्बो से दूर रहिए. Have a look at this. Yoshimitsu is relying on those perfect pixel utilizations. जैसे ही उठते थे Mortal, उसी टाइम सीधा जाते थे. Mortal यहाँ पर ज्यादा aggressive नहीं जा रहे हैं. Once again, this can go for the rage art. I mean, are they gonna go for it? Not yet. And यहाँ पर Mortal के लिए और मुश्किल हो सकती है अगर एक और perfect shot यहाँ पर लग जाता है. Connect होती तो, oh my god. Okay, दोनों ने सही तरीके से शुरुआत करी. बट Mamba फिर से गेम अपने लेकर जाते हैं. परफेक्ट पिक्सल. अब देखिए उठने का मौका नहीं देंगे. ही वाज गोइंग फॉर इट, एक अच्छा डॉज यहां पर मॉडल की तरफ से निकल कर रहा, लेकिन फिर से ये डैश करने की कोशिश. एंड डैश के ऊपर रिलाय करते हैं Mamba अपनी शुरुआत में. एंड फिर से 3 स्पिनिंग किक्स इज वेयर ही इज गोइंग फॉर. एंड आई वुड से ये मैच Mamba आराम से निकाल सकते हैं, बहुत ज्यादा आराम से. रेड एचपी इज वेयर इट वाज, बट डजंट मैटर. Mamba 5th राउंड अपने हिस्से में. 5th राउंड, आधा रास्ता, आधा जो सफर था वो यहाँ पे Mamba ने तय कर लिया है हमारे फर्स्ट टू 10 की दौड़ का. और ये योशिमित्सु का पिक बहुत ज्यादा अनोइंग हो चुका है बेसिक्स अटैक्स के साथ ही. Look at Mamba. He's like, मैं सोते हुए खेल रहा हूँ तब भी जीत रहा हूँ. That's one thing Mamba is doing right now. मैं खेल नहीं रहा था. हार गया. बट Mortal एक राउंड बहुत बेहतरीन अभी निकल कर आ सकता है जिस तरीके से. Look at that what Mamba is doing. He's like very happy with everything. भाई Mamba पता नहीं भाई ये कब खेला है इस गेम को, क्या मालूम यार. हम इंस्टॉल करके बैठ गए. Mamba कब खेले? फुल एकदम बॉट. मैं बचपन में खेला था गाइस. Mamba is like जब Mortal आप सोते होते थे, मैं गेम की प्रैक्टिस कर, क्योंकि मुझे पता था एक दिन जाके मुझे KO फाइट नाइट में हराना है Mortal को. बाप रे. मेरे तो लिटरली समझ के बाहर है. खैर Mamba, एक बात आपसे पूछना चाहूंगा. 5 राउंड हो चुके, तो 5 के बाद के कोई बेट है जो आप Mortal को देना चाहेंगे? अरे यार अब ये सब यार छोड़ो. मतलब लड़का अभी जब सीख जाएगा उसके बाद हम ये वाला रेस टू फाइट. ओह माय गॉड. इक्वल टर्म्स पे होगा. Mortal ने बोला था कि अगली बार प्रैक्टिस करके आएंगे. और क्या भाई, फर्स्ट टाइम था ये. फर्स्ट टाइम के लिए आई थिंक आपके अगेंस्ट मेरे को मैंने लग रहा है कि मैंने टेकन टू बी ऑनेस्ट कभी नहीं. टेकन मेरा फर्स्ट टाइम ही है एकदम. मेरा भी. वेल फिर आपसे आई थिंक फर्स्ट टू 10 के बाद हमारे सवाल काफी ज्यादा होंगे कि एक नए प्लेयर के पर्सपेक्टिव से आपका क्या कहना रहेगा, लेकिन वो रेस के बाद हम उनसे पूछेंगे. अभी के लिए वापस से कुछ ही देर में हमें आई मीन Mamba की तरफ से तो हमें पता है क्या देखने को मिलेगा. इट इज गोना बी दैट योशिमित्सु. आई मीन आई म्यूजिशियन एक प्लेयर है जो इंटरनेशनल लेवल पे काफी ज्यादा जाने जाते हैं योशिमित्सु के अपने एक्शन के लिए. और यहाँ पे आई थिंक Mamba on his way to be the next आई म्यूजिशियन. Probably he might be out there. I mean, वो बोल तो रहे कि यहाँ पर obviously पहली बार खेल रहे हैं with all those things, but he kind of knows how to grasp the game in the best ways, और वो grasping उन्होंने कर लिया है. Now so that's a very good thing, very good scenario जिस तरीके से यहाँ पे चलता हुआ. अब देखते हैं कि यहाँ पर योशिमित्सु के against कौन आता है, या फिर योशिमित्सु खुद चेंज हो जाएंगे. No, okay, this looks decent. हमारे एक मित्र हैं जिनको ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद है. हावरैंग बहुत ज्यादा पसंद है उनको. मजे की बात है वो भी आज तक मेरे से एक बार भी नहीं जीते. whatever. खैर अगर बात करें योशिमित्सु फिर से स्टार्ट कर सकते हैं डैश के साथ या फिर किक्स के ऊपर. लेट्स सी. एक बहुत बेहतरीन Mortal ने भी शुरुआत करी, लेकिन Mamba ने ज्यादा डैमेज डील किया. वो डैश के लिए एक अच्छा मोमेंटम बना चुके थे. यस देयर इट इज. Mamba लुकिंग गुड विद द डैशेस. लेकिन एक काउंटर, एक बहुत अच्छा काउंटर यहां पर आता हुआ. ये जो पावर क्रश मूव्स है ये काफी ज्यादा एक इम्पैक्ट देते हैं, बट पावर क्रश का सिनेरियो ये रहता है कि अगर सामने वाला मार रहा है तो आपका अटैक फिर भी जाके उनको पड़ेगा, लेकिन आपको भी डैमेज इनपुट हो रहा होता है. मतलब आपने मारा तो वो जो असिस्टेड कॉम्बोज आप देख रहे हैं ना, इट इज L1 PS4 का इनपुट इज गोना बी L1 प्लस
L1 plus X is the input power crush के लिए आपका, अगर assisted combo से ज़्यादा आप वहाँ पे खेल रहे हैं तो but वही जैसा मैंने बोला कि डैमेज आपको पड़ेगा ही। हावरैंग एक ऐसा कैरेक्टर है जो रिएक्शंस पे काफी ज्यादा रिलाई करता है आपके, यू हैव टू बी क्वाइट स्विफ्ट विद हिम। वो किक्स के इनपुट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और माम्बा आई मीन बेसिक्स पे खेल रहे हैं, बेसिक फंडामेंटल्स एज इन आप डायरेक्शन दे, आप एक इनपुट दे, और स्पैमिंग यहाँ पे उतनी नहीं चल रही। देखिए अगर उनको एक अटैक पता चल जाता है जो मॉडल को पड़ने ही वाला है, जिसके अगेंस्ट मॉडल मतलब थोड़े से लॉस्ट रहते हैं, वो अटैक माम्बा बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं। एक तो वो स्पिन किक हो गया और एक वो आपका ट्रिपल किक का जो कॉम्बो आता है, ये देखिए ये वाली स्पिन किक। एग्जैक्टली आई मीन यहाँ पर माम्बा पिक्सल्स पर आ जाता है। देखिए जब मॉर्टल अपना अटैक मार करके हट रहे होते हैं उसके जस्ट एक बार, और यहाँ पर रेज आर्ट यूज हो सकता है। बहुत दूर थे, हल्का सा अगर क्लोज होते एक अच्छा रेज आर्ट यूटिलाइजेशन यहाँ पर कर सकते थे। उनको बस क्लोज होना था एंड ही वुड हैव एक्चुअली टेकन एवरीथिंग। ओह माय गॉड, दैट वाज अमेजिंग, दैट वाज वेरी गुड। जो यहाँ पर योशिमित्सु, ओह माय गॉड, स्टाइल पॉइंट्स टू माम्बा। बहुत ढेर सारे स्टाइल पॉइंट्स दिए जाएंगे उसे एक फिनिश के लिए। ओह माय गॉड। I want to talk to Mortal after this one. I actually want to talk to Mortal. Mortal, आपने रेज आर्ट बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट किया था, बट वो क्लोज, अगर आप हल्का सा क्लोज होते, बिकॉज़ रेज आर्ट में समझ गया वो, मेरे को अब समझा वो क्या है रेज आर्ट। आपको क्लोज होना था एंड आप उनकी प्रॉपर एचपी लेकर जाते, बट उसी का काउंटर करते इन्होंने स्टाइल पॉइंट्स के साथ जीता है माम्बा ने। यस माम्बा, एक्स्ट्रा यू गेट एक्स्ट्रा स्टाइल पॉइंट्स मैन। और हमारी तरफ से, दोनों की तरफ से, कास्टर्स की तरफ से, ऑडियंस की तरफ से, वो जो फिनिश था दैट वाज एपिक। दिल जीत भाई, थैंक यू भाई, हमसे ना हो पाएगा। मॉर्टल, अगर आपका ये रेज आर्ट लग जाता, अगर आप थोड़ा सा क्लोज होते, आप जिस तरीके से आप फिनिश कर सकते थे गेम, दैट वुड हैव बीन अमेजिंग टू बी ऑनेस्ट। बट अब मॉर्टल को पता चल चुका है कि रेज आर्ट कैसे करना है। मे बी नेक्स्ट मैच के अंदर रेज आर्ट देखने को मिल सकता है। यस, मॉर्टल धीरे धीरे करके ही सीखी जाती है और आप बहुत ही सही ट्रैक पे चल रहे हैं। आई मीन कैरेक्टर्स आप एक एक करके पिक कर लें, आई थिंक अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी होते जा रहा है कि क्या एग्जैक्टली करना है। But let's see, I would want to see कि अब अगर रेज आर्ट होता है तो कौन से कैरेक्टर से होता है और योशिमित्सु उसको कैसे काउंटर करता है। अच्छा, एक चीज पूछना चाहूंगा, मॉडल जब ये तलवार घुमा के उड़ने लग गए थे, आपका क्या रिएक्शन था उस टाइम? अबे मेरा रिएक्शन क्या था? नहीं, वो एक्चुअली मैंने जब लिया था ना, जब मैंने भी सेम कैरेक्टर लिया था, तब भी वो चीज हो रहा था। नहीं हो रहा जे नॉट रेडी, मतलब मेरे एंड से रेडी नहीं हो रहा। जे के पता नहीं, आई यू दबाओ, रेडी हो जाएगा। सब दबा दिया। बाप रे, कंट्रोलर पे शायद फिर भी समझ आ जाता मुझे। जी हाँ, लेकिन कीबोर्ड पे तो बाप रे हो गया। That's what me and Varun always do. Like हम जब भी खेलते हैं, मैं और वरुण, हम लोग हमेशा कंट्रोलर्स के ऊपर रिलाई करते हैं और हमेशा हमारा वही चीज आती है कि those are some less number of buttons plus easy spamming रहती है। I mean कीबोर्ड पे वही सिनेरियो रहता है कि आप अगर आप मॉर्टल आपके लिए I mean बहुत ज्यादा मुश्किल होगा कीबोर्ड पे एडजस्ट करना, क्योंकि बिल्कुल आप जैसे बताया फ्रेश आ रहे हैं और कंट्रोलर पे थोड़ा बहुत इजी रहता है गेम को पिकअप करना। कीबोर्ड पे आपको इनपुट्स पता रहने चाहिए, तभी आप थोड़ा एडजस्ट कर पाएंगे। बट अभी तक जैसा परफॉर्मेंस चल रहा है, बेस्ट ऑफ लक आने वाले मैचेस के लिए। और वंस अगेन इट्स अबाउट हैविंग फन। हम लोग कितना भी कम्पिटिटिव बात कर ले, बट मजे करना यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आई एम प्रीटी श्योर मामा तो मजे कर ही रहे हैं, बट साथ ही साथ मॉर्टल भी थोड़े बहुत अपना एंजॉय कर रहे होंगे मैचेस को। नए कैरेक्टर्स खेल रहे हैं हर बार। आई रियली लाइक दैट, जो जज्बा है उनका टू जस्ट ट्राई आउट द गेम, यही होना चाहिए। जब आप द अपॉर्चुनिटी जब आपको प्रेजेंट की जाती है टू बी इंट्रोड्यूस टू न्यू अमेजिंग टाइटल लाइक टेकन 7, लाइक स्ट्रीट फाइटर, आप बस अलग अलग कैरेक्टर्स खेलिए, आप गेम को एंजॉय कीजिए, जस्ट ट्राई एंड हैव फन विद द थिंग्स। जीतना जो आपकी विक्ट्रीज होती है, वो टाइम के साथ आप जब गेम खेलेंगे तो आप सीख जाएंगे चीजें, आपको गेम समझ आ जाएगी, आप बेसिक्स फंडामेंटल्स आपके स्ट्रांग रहेंगे, तब आप थोड़ा बहुत गेम को पिक करना स्टार्ट करेंगे और आप मैचेस भी जीतना स्टार्ट करेंगे। इन द इनिशियल स्टेजेस चाहे कोई भी गेम की बात कर ले, इट ऑल स्टार्ट्स विद द पीपल दैट आर प्लेइंग। Johnny, I want to see a sledgehammer coming up, because यहाँ पर sledgehammer का बहुत अच्छा इस्तेमाल मॉर्टल कर सकते हैं, बट क्या वो कर पाएंगे, वो एक चीज बनती है। लेकिन ट्रिपल किक्स के ऊपर वापस से रिलाई करते हुए अब बड़े कैरेक्टर्स की बात ही आती है। अब देखिए, दिस इज द थिंग नाउ, चार्जिंग इन वाज वन थिंग जो मॉर्टल करना चाहते बट नहीं हो पाया। देखते अब क्या चीज होती है, एंड दिस वुड हैव बीन समथिंग डिफरेंट आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। लेकिन बहुत अच्छे हैवी आई वुड से अटैक्स के ऊपर रिलाई करते हुए मॉर्टल यहाँ पर आ जरूर रहे हैं, बट एट द एंड एक अच्छा डॉज यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड फिर से काफी अच्छे तरीके से वाइड ग्रिप हैमर रश यहां पर करने की कोशिश उनकी तरफ से आ रही है, और रेज आर्ट पर लेकर आ चुके माम्बा को, एंड सेम ही चीज स्पैम करते हुए मॉर्टल इज गेटिंग विंस। फाइनली मॉर्टल यहाँ पे स्टेप अप करते हुए और एक काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ब्लॉक्स, ये देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है।
नहीं, जो नए प्लेयर्स आते हैं वो ऑफेंस पे बहुत ज्यादा फोकस कर जाते हैं, और ब्लॉकिंग एक ऐसी चीज है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है फाइटिंग गेम्स के अंदर भी। आई मीन हमने थोड़ी देर पहले स्ट्रीट फाइटर देखा, वहां भी हमने बात करी थी इसी बारे में, और ये हम हाई टियर गेम्स की बात कर रहे हैं कि ब्लॉकिंग काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है। बट No, 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 मामा no. Go for रिटेलिएट the करते rage हुए art. काफी लो लेकर आ गए थे, वो जो लोज थे वो वहां कनेक्ट हो रहे थे। I was wishing. Imagine अगर यहाँ पर आखिरी इंच पर भी रेज आउट होती, कितना ज्यादा एक डिफरेंट चीज होता। I'm a sucker for रेज आउट, I'll have to say। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैमर रश डालने की कोशिश वापस से जाते हैं। मॉर्टल एक ही कॉम्बो के ऊपर जा रहे हैं, दैट्स गोइंग टू बी हैमर रश, लेकिन पीछे वापस यहाँ पर साइड स्वैप हो चुकी हैं। योशिमित्सु को पीछे की तरफ को देखना पड़ेगा, मॉर्टल हल्का सा पीछे जा रहे हैं इन सब से, बट एट द एंड दिस लुक्स अमेजिंग, दिस लुक्स वे अमेजिंग द वे ही इज गोइंग फॉर इट। और हैमर रश यहाँ पर निकालते हुए फिर से हैमर्स के ऊपर ही आ चुके। योशिमित्सु इज आउट देयर ऑन द रेज, बट नो, मॉर्टल ये राउंड फिर से मॉर्टल के जाता है, ये एक डिसाइडर राउंड बन जाता है मॉर्टल के लिए। सो नाउ इट जस्ट कम्स अप टू वन थिंग, what's going to happen in all the strategies? I mean, dodge अच्छे तरीके से कर रहे थे, but Yoshimitsu, we know कि Yoshimitsu can go for some cheeky plays. Oh my god, once again trapped out there. विफ वहां पे हुआ, अटैक हल्का सा डिले किया गया माम्बा के द्वारा, जो वेकअप था उनका वो वहां पे पनिश हुआ। बट नो, ये जो ट्रैकर्स है ये काफी ज्यादा डेडली साबित हो रहे हैं। और देखिए अगर एक स्टेप एक्स्ट्रा पीछे ले लेते हैं ना यहाँ पे मॉडल, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बट टाइमिंग परफेक्ट करी उन्होंने। Rage art, this is going good, this is looking good। Rage art coming up from Yoshimitsu, oh my god, this is a game ending situation। oh no, अब क्या यहाँ पर ये अपने रेज आर्ट पर जाएंगे? is he going to go for it? Go for it Mortal, he is also in the good area, he might go for it, he's still not using it, he could have used it। now what's going to happen? One final KO and there it is। 2-2। जी हाँ, पहले एक राउंड जीता था, अब 2 राउंड निकाले। वहां पे एक चीज सी रेज का फायदा मामा ने उठाया कि हेल्थ थोड़ा सा करीब लेकर आ गए अपने, बट मॉडल के पास फिर भी हेल्थ एडवांटेज बहुत बढ़िया बिल्ड किया था। और ये देखिए, ये जो अपॉर्चुनिटीज होती है ना, आप अपने ओपोनेंट को बिल्कुल वल्नरेबल सिचुएशन में पकड़ते हैं, वो एक बहुत ही बेसिक चीज होती है जो आपको टेकन के बारे में सीखनी होती है, कि आपको रियलाइज करना होता है कब आपका ओपोनेंट सबसे ज्यादा वल्नरेबल रहेगा, कब आपके पास एडवांटेज रहेगा। और ये चीजें आई मीन काफी बेसिक टर्म्स में, अगर हमारे जो नए दर्शक है जो गेम देख रहे हैं, क्योंकि मॉडल भी स्ट्रीम कर रहा है, और उन लोगों को बताओ कि अटैक जब आप करते हैं तो अटैक जाने का एक एनिमेशन होता है, उस टाइम पे आपका हिट बॉक्स बाहर आता है, और दूसरी चीज होती है हर्ट बॉक्स। हर्ट बॉक्स आपका तब आता है जब आपका अटैक वापस जा रहा होता है। लाइक इमेजिन कीजिए आपने घूसा मारा, तो जब आपका हाथ आगे जा रहा है और तब आप एक थ्रेट होता है ओपोनेंट के लिए, लेकिन जब आपका हाथ वापस आ रहा है तब आपको डैमेज पड़ता है। ये तो पड़ेगा, ये तो बहुत ज्यादा पड़ेगा। परफेक्ट एग्जीक्यूट होता है मॉडल की तरफ से, हेल्थ एडवांटेज अपने लिए गेन कर लिया। बस टाइम किल कीजिए, 7 सेकंड बचे, टाइम किल कीजिए। बट नो, KO Mortal wins this one। Finally, oh my god, Mortal Kickers versus Yothi Mishu। Finally Mortal एक सेट जीतते हुए। Let's bring our athletes back। साला भैंस क्या पेला में यार, घुमा घुमा के पेलना में ही। हमारे को साउंड नहीं आ रही यहाँ पे हमारे एथलीट्स की। यार वेटिंग टू सी कि क्या चल रहा था सिनेरियो में। ऑलराइट मॉर्टल, हाउ आर यू फीलिंग? कैसा लगा? कोई कैरेक्टर तो समझ आया? जी भाई यार, ये हम नहीं मानता भाई, ये कहाँ से मोटा भाई चलने लग गया भाई एकदम से भाई। क्या? वेल लेट्स सी। अभी एक पिकअप तो काफी अच्छा था, और यहाँ पे माम्बा को जो चैलेंज फेस करना पड़ा वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने देखा है। बट अब एक सिचुएशन रहेगी जहाँ पे हमें ये देखना होगा कि किस तरह से जो है माम्बा कमबैक करेंगे इन सिनेरियोस के अंदर। और मामा अब एक राउंड आप हार चुके हैं, एक सेट इनफैक्ट मॉडल ने यहाँ पे पिक किया आपके अगेंस्ट 6-1 के जो सिनेरियो है वहां पे। प्लान, आगे का प्लान। ऑलराइट, अगेन छोटा सा माइनर सा आई थिंक टेक इशू यहाँ पे चलता हुआ विद द ऑडियोज। लेट्स सी, उम्मीद करते हैं जल्दी फिक्स हो जाए ये सिनेरियो, और हम जल्दी से वापस से जुड़ पाए हमारे जो कंटेंडर्स हैं उनके साथ भी। और मैचेस तो यहाँ पे चलते रहेंगे इन दोनों के बीच में। गिगास का पिक आई थिंक मॉडल के लिए काफी ज्यादा लकी रहा, और उसके साथ ही यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करने की इनकी कोशिश रहेगी। लेट्स सी कि क्या वो पिक इनके लिए काम करता है या नहीं, या फिर हमें। और माम्बा कैसा लग रहा है फाइनली? माम्बा इसके साथ जो इनका योशिमित्सु का कमबैक बोलते, अब मेरे को ये यूज करना आ गया। हमें म्यूजिशियन के साथ लड़वाना चाहिए। सॉरी
ओके अरे आई क्या क्या बोला उन्होंने? पता नहीं। Well, let's see how things work out. अभी के लिए we are still going to be moving into the action and Ocean मेरे साथ बिल्कुल साइड पे बैठे हुए हैं. Alright, Ocean is on this side of my I'm screen. here. I'm with, yeah. दूसरी side, yes. दूसरी side. No, the other side. Yes, there it is. Ocean वहाँ पे High मौजूद five है. me. Okay, let's high five. Yes. Never Okay, mind. wait, where is it? High five चले गया. But alright. फाइनली हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं एंड कुछ ही देर में मैच स्टार्ट होने वाला है. सो लेट्स सी हाउ थिंग्स वर्क आउट. Yeah. वंस अगेन काफी अच्छा ओशन काफी ज्यादा लकी पिक रहा था यहाँ पे गिगस. I would say it was quite a weird kind of a gaming scenario अभी के लिए. अगर मैं बोलूँ जो चीजें बनी है, yeah. Basically that's what happened. So do you think a comeback might just happen from Mortal? Yes. I mean अगर माम्बा ने फिगर आउट नहीं किया कि वो जो स्वीप्स है वो 2 लो ब्लॉक्स और फिर I mean अगर बैकस्टैप भी कर लेते 3 बार तो भी चल जाएगा. वो चीज यहाँ पे फिगर आउट करनी पड़ेगी जल्दी. देखते हैं जिस पॉइंट तक वो फिगर आउट करते हैं तब तक मॉर्टल कितना एक्सप्लॉइट कर सकता है उस एक कमांड को. I mean, it is out there, लेकिन वही है. अब जा करके रेजा का यूटिलाइजेशन इन लोगों को पता चला है कि हाँ, इफ नॉट एनीथिंग आपकी खुद की हेल्थ तो क्रिटिकल होती है, बट आप दूसरे प्लेयर की भी हेल्थ क्रिटिकल कर देते हो. एंड माइट बी अगर दोनों की हेल्थ क्वाइट उस एरिया पर है, आप फिनिश भी कर सकते हो. सो इट कम्स टू दैट, वो एक चीज भी आ रही है. प्लस डैशेस का अच्छा यूटिलाइजेशन आप ये लोग कर रहे हैं, और डैशेस आता है ब्लॉक भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट इट कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपकी उंगलियां कैसे काम कर रही है, आप ब्लॉक पर जा पा रहे हो, नहीं जा पा रहे, आप सिर्फ एक ही अटैक यूज करो. सो हाँ, काउंटर अटैक्स भी अच्छे हो रहे हैं. जी और वो काउंटर्स इंपॉर्टेंट होता है. आई मीन चल हमारे एक कंटेंडर तो बिल्कुल नए दावेदार है और उनको भी हम काफी बेसिक समझा ही रहे हैं गेम के. हमारे जो व्यूअर्स है, अगर कोई नए व्यूअर हमारे साथ जुड़े हैं जिनके लिए बहुत ही फ्रेश एक्सपीरियंस है टेकन 7 का, तो उनको भी हमारे बेसिक्स बताए देते हैं. 4 इनपुट्स रहते हैं आपके. एक होता है आपका राइट पंच, एक लेफ्ट पंच, एक राइट किक, एक लेफ्ट किक. उसके साथ आप अपने जो डायरेक्शन इनपुट्स है वो यूज करते हैं. वहां से आपके कॉम्बोज निकल कर आते हैं डायरेक्शन विद आपके पंचेस और किक्स के जो कॉम्बोज होते हैं. ये सारी चीजें आप ट्रेनिंग मोड में जाके सीख सकते हैं. प्रैक्टिस करने में आई मीन बहुत ज्यादा टाइम लगता है लोगों को. एक कैरेक्टर को पढ़ के वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसे जाके खेलते हैं, ऑनलाइन फिगर आउट करते हैं. बेसिक स्ट्रैटेजी अगर आपको स्टिक कर रहा है, मूवमेंट पे सबसे पहले काम कीजिए. अपने बैक डैशेस, फॉरवर्ड डैशेस थोड़े से फिगर आउट कीजिए और उसके बाद आप अपने बेसिक पंच और किक कॉम्बोज के साथ वहां पे खेल सकते हैं. फिर अगर आप मॉडल की साइड पे देखते हैं तो वहां पे एक 4 बटन्स के इनपुट्स बने हुए आ रहे थे. वो रहता है असिस्टेड कॉम्बोज. गेम स्टार्ट करते हैं बाय डिफॉल्ट आपको आपकी कमांड जो सेटिंग्स होती है वहां पे जाके वो मिल जाएगा. अगर आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हैं, नहीं करना तो आप उसे हटा सकते हैं और बिना उसके खेल सकते हैं. जो ज्यादा हाई टियर प्लेयर्स खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि हाई टियर प्लेयर्स एक चीज होती है टेकन के अंदर, दैट इज जगलिंग. अगर आप एक प्लेयर को लॉन्च कर देते हैं, जैसे कि प्लेयर आप हवा में उछाल देते हैं, तो उसके बाद प्लेयर को आप जमीन पे नहीं आने देते. यू जस्ट जगल देम और उसके बाद आप मैक्सिमम डैमेज आउटपुट देते हैं. So there's one more thing जो कि मैं आपसे Yes. पूछना चाहूंगा, बिकॉज ये बात होती है जब भी हम खेलते हैं, there's one thing that you always go for, लेफ्ट साइड चाहिए मुझे, राइट साइड चाहिए. Obviously coming up as new players वो इतना नहीं रहते क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं खेल सकता है. बट why I would like to ask you, why do people prefer it as such? And जैसे हम कल बात करें रॉक पेपर सीजर भी होता है उसके लेजेंडरी, कभी कभी बाकी गेम्स के लिए भी अगर बात करें तो. I mean, वो एक बहुत पुरानी कहानी है. I mean, ये एक सेम सिचुएशन है कि लोग, आप अगर प्लेयर्स देखे हाई लेवल पे, why do they play on sticks? It's not like कि arcade sticks, yeah. यस, आर्केड स्टिक्स जो हमारे रहते हैं, लोग ऐसा नहीं है कि जो लोग पैड्स पे खेलते हैं वो लोग हाई लेवल पे कम्पीट नहीं कर सकते. कई बार पैड पे खेलने वाले, पैड मतलब कंट्रोलर जो आपका रहता है, पैड प्लेयर्स जो है वो जीत भी चुके हैं और बहुत हाई लेवल तक परफॉर्म कर चुके हैं. इट्स ऑल अबाउट प्रेफरेंस. इट्स ऑल अबाउट आपने कब किन सिचुएशंस में गेम खेली थी. पुराने प्लेयर्स जितने भी है जो सब आर्केड जाके वो मशीन जो होती थी उन पे खेलते थे, उनको उन्हीं चीजों का आदत था. और ज्यादातर जब लोग अभी स्विच किया लोगों ने, जब लोग घर पे खेलना स्टार्ट किया, लोग प्रैक्टिस ट्रेनिंग रूम में बैठते थे, तो सब लोगों ने प्रैक्टिस आई मीन बाय डिफॉल्ट लेफ्ट आता है और आप जल्दी जाना चाहते हैं, सो एवरीवन जस्ट पिक द लेफ्ट साइड और उसी पे लोग प्रैक्टिस करते थे. तो मसल मेमोरी इज सेट इन. अब जब साइड स्विच होके आप राइट आ जाते हैं, टेकन एक अच्छी गेम इसलिए मेरे को लगती है कि अगर आप ऑनलाइन खेल रहे हैं, जैसे ये दोनों प्लेयर्स ऑनलाइन खेल रहे हैं, हमारी स्क्रीन में क्योंकि हम मॉडल का पीओवी देख रहे हैं, तो हमें
मॉर्टल नजर आते हैं लेफ्ट साइड पे, माम्बा की स्क्रीन पे माम्बा भी लेफ्ट साइड हो सकते हैं, वही दोनों चीज के प्लेयर्स सेम साइड पे खेल सकते हैं। या उनका पीओवी वैसा रहता है, जस्ट लाइक अगर हम बाकी किसी भी गेम की बात करें, सो इट्स लाइक हमारे लिए हम उस एरिया पर रहते हैं, बट ओवरऑल इट्स लाइक प्लेयर सिनेरियो रहता है, जब जैसे बहुत बड़े लैंड इवेंट से if you remember, yeah, exactly. If you remember, if you're talking about, all right, let's go to Lil Margin versus JDCR. भाई, obviously we are going for iconic matches. Russell and Nash के जितने matches अगर आपने देखने हैं कुछ पे, there are some moments जब when it all happens कि वो right side से शुरुआत करते हैं और वहीं से धीरे-धीरे निकल गए. So yeah, there are some moments जब आपको directional अपना भी एक directional PO भी देखना पड़ता है, अपने साथ भी, audience के साथ भी, and overall तब कहीं ना कहीं एक चीज रहती है कि हाँ, you might just go for a jump and just दूसरी साइड जाना and all those things. I mean, but हम फाइटिंग गेम की बात कर रहे हैं, और अगर आप मतलब एक ऐसा एक्चुअल IRL फाइटिंग स्पोर्ट है बॉक्सिंग में साउथ पॉ नाम की एक चीज होती है। साउथ पॉ होते हैं जो आपके लेफ्ट हैंड डोमिनेंट फाइटर्स होते हैं। साउथ पॉज आर कंसिडर्ड प्रीटी डेडली क्योंकि उनका टाइमिंग जो होता है वो अलग होता है राइट हैंडेड फाइटर से। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल अराउंड द ग्लोब राइट हैंडेड है, ज्यादातर फाइटर्स भी राइट हैंडेड रहते हैं, तो जब कोई साउथ पॉ आपके सामने आता है आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है फाइट करने में। सेम गोज विद फाइटिंग गेम्स एज वेल। अगर आप अपना राइट हैंड साइड पे खेलने में अगर प्रैक्टिस करते हैं तो, और अगर आप उसको मास्टर कर लेते हैं, आप बाकी सारे प्लेयर्स को थोड़ा दिक्कतों में डाल सकते हैं क्योंकि कंपैरेटिवली साइड स्वैप पे परफॉर्मेंस में थोड़ा सा ड्रॉप तो आ ही जाता है। बट हियर वी गो अगेन, गिगस जो कि मॉर्टल के लिए काफी एक अच्छा पिक रहा था, एक बार फिर से मॉर्टल उसको उतारते हुए जंग के मैदान में। लेट्स सी हाउ दिस गोस। 1-6 का अभी तक स्कोर लाइन चल रहा है। क्या माम्बा इसको 7-1 कर पाएंगे या फिर 2-6 से मॉर्टल कमबैक करने की कोशिश करेंगे? ही वाज गोइंग फॉर अ गुड वन, वो फिर से हैमर यहां पर क्रश करना चाहते हैं लेकिन वो असिस्ट नहीं हो पाया। योशिमित्सु अपनी लेग्स के ऊपर काफी अच्छा यहाँ पर स्वीप निकाल रहे हैं, लेकिन अब यहां पर दिक्कतें आती हैं। बहुत अच्छे तरीके से पकड़ा और बाय स्वीप हैमर रश बार-बार देते हुए ही इज गोइंग फॉर इट, पिक्सल बाय पिक्सल अगेन, बट नो, caught off from the back ends is what Yoshimitsu is doing, लेकिन अब उनको गिरेंगे और यहां पर चांस मिल सकता है, बट रेजार्ट क्या यहां पर निकल कर आ सकती है? नॉट गिविंग एनी चांस टू हिम। रेजार्ट might go for it. No, Mamba once again he said एक राउंड जीतने देना चाहता था, वो मैंने दे दिया है, अब मेरी बारी आती है। और माम्बा अब फिर से एक अच्छी डोमिनेशन पर आ चुके हैं। बट ये चीज अब देखिए, जब यहां पर योशिमित्सु अपनी लेग स्वीप यूज करके गिर जाते हैं, वहां पर बहुत अच्छा पिक्सल यूटिलाइजेशन यहां पर उठ के कर सकते हैं मॉर्टल, लेकिन वही चीज उसका चांस नहीं दिया। एक परफेक्ट राउंड, विल गो फॉर अ परफेक्ट वन, माइट जस्ट गो फॉर अ परफेक्ट राउंड। माम्बा एक परफेक्शन। 7 गोल्डन लेटर्स आ चुके हैं हमारे आगे। 6-1 का स्कोर लाइन चल रहा है और अभी माम्बा आई थिंक इसी के साथ लीड भी ले गए। उड़ते हुए घुटने सीधा दिए गए वहां पे मॉडल को, जिसके चलते डैमेज दिया गया, बट डाउन बैक ब्लॉक काफी बेहतरीन। पता था लोज आने वाले। बट ये जो मुक्का पड़ा इससे बहुत ज्यादा डैमेज दिया गया। Everything's just changing out है, लेकिन देखते हैं अब आगे क्या चीज होती है। I mean, माम्बा को उनका एक सिग्नेचर मूव मिल चुका है, मैं ये चीज बोलना चाहूंगा। He's going good, लेकिन क्या यहाँ पर अब रेजार्ट आ सकती है? He's going for the hammer grip only, लेकिन वाइस हैमर ग्रिप काम में नहीं आई। एंड आई वुड से कल से स्काउट और थक भी जब खेले थे, दिस इज द फर्स्ट परफेक्ट राउंड जो हमें एक पहला परफेक्ट राउंड यहाँ पर आया। दो 7 golden words is coming out there। कल ऑलमोस्ट पहुंच गए थे वो परफेक्ट निकालने के लिए। स्ट्रीट फाइटर में थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड रहता है, बट माम्बा परफेक्शन, फर्स्ट एवर परफेक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिला है। भाई मेरे को उस मोटे का ब्रेक मिल गया भाई, इसको फोड़ना कैसे भाई? इतना बड़ा काला हल, लाल हल। साला मेरे को गेम खेलने का ब्रेक नहीं मिल रहा है, इसको अंदर का स्ट्रेटेजी तोड़ने का ब्रेक मिल रहा है। मेरे को सिर्फ इतना पता चल जाता है, ठीक है ये 2 बटन अब दबाने हैं मुझे और मैं मारूंगा इसको बस। मॉडल ऐसे गहरी सांस लीजिए। हाँ वो तो मॉडल एक बात बता दो, जब माम्बा वैसे जब आपको वो स्वीप मारते हैं, उसके अंदर अगर आपने एक फ्रेम मिस कर दिया, उसके बाद आप ग्रैपल करके माम्बा को बहुत अच्छा वहां पर पैरी कर सकते हो। बट हाँ वही चीज है, बस आपको उस पहले वाले वो जो बवंडर बनाते हैं ना माम्बा, उसमें कॉट ऑफ नहीं होना, क्योंकि अगर वो बवंडर में आ गए फिर माम्बा। ग्रैपल कैसे करते? ग्रैपल चीटिंग नहीं भाई, एग्जाम में पंच एंड किक इकट्ठा प्रेस करके, पंच और किक एग्जाम प्रेस कीजिए। मॉडल रेजार्ट साले चीटर करना देना। वेल मामा, आपको मेरे को नहीं लगता आपको मदद की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि आप जैसे मॉडल ने भी कहा, आप तो स्ट्रैटेजीज तोड़ना चालू कर दिया अब और अपनी बिल्ड कर रहे हो। भाई तो अभी रुको तो। Mamba is looking way confident with everything. I mean, वो जो हंसी है ना, वो ऐसी है कि अब तो 10 पे जाके रुकना है।
I mean, जिस हिसाब से एंट्री भी वापस ली थी वो भी काफी ज्यादा एक इम्प्रेसिव चीज था कि सीधा गाना गाते हुए वापस आए थे। परफेक्ट, आई मीन परफेक्ट निकाल रहे हो आप मैच के अंदर, तो ओ, क्यों नहीं गाने के फिर साथ से वापसी। यहाँ पर सेम पिक्स लेते हो डेविल्स पिट में, एंड डेविल्स पिट के अंदर फाइट होने वाला है। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट एरियाज बिकॉज़ ऑफ डेविल्स इन, यू नो, सो डेविल्स पिट बिकम्स माय फेवरेट एरिया आउट हियर। और देखते हैं कि क्या यहाँ पर ब्रेकेज हो सकती है। अगर ब्रेकेज हो गई तो वो भी एक अच्छी चीज देखने को मिल सकती है यहाँ पे। जी हाँ, आई मीन चलिए दर्शकों को एक बार फिर बता देते हैं, ये हमारा शो मैच चल रहा है, दिस इज जस्ट फॉर फन। इसके बाद ये हमारी एक फॉर फन रेस टू 10 है, माम्बा वर्सेस मॉर्टल की। मॉर्टल एक बहुत ही फ्रेश प्लेयर है हमारे टेकन 7 के। वी आर जस्ट ट्राइंग टू गेट हिम यूज्ड टू द गेम एंड इंट्रोड्यूसिंग हिम टू द वर्ल्ड ऑफ टेकन। और उन्हीं के साथ हमारी जो नई ऑडियंस है उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है टेकन 7 को एक्सपीरियंस करने की। मामा थोड़ा सा आई मीन गेम खेल चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं उनको एग्जैक्टली पता है कि क्या करना होता है मैच के अंदर, और उस चीज को परफेक्टली यूज कर रहे हैं। बट बहुत बहुत लंबे समय बाद गेम में वापसी करते हुए, और योशिमित्सु के साथ सुबह से खेले जा रहे हैं। एक बारी बीच में गलती से इन्होंने स्विच किया था, बट उसके बाद वापस से योशिमित्सु पे आ गए। शाहीन खेला था इन्होंने एक टाइम। बिल्कुल। और नई ऑडियंस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बहुत ही एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दी गई है नॉडविन गेमिंग और एयरटेल इंडिया ई स्पोर्ट्स स्टोर के द्वारा, ये जो हमारे को भी प्रोवाइड करेगी टू वॉच दीज एथलीट्स प्ले एंड टू देम एज वेल टू एक्सपीरियंस टेकन 7, एन अमेजिंग गेम। कल स्ट्रीट फाइटर 5 देखा था। ओह, बात करते करते मॉडल यहाँ पे राउंड ले गए। और एक और चीज हमारे दर्शकों को बता दूं कि जो हमारे टेकन 7 के मैचेस हैं, वो जो एक्चुअल मैचेस है हमारे फाइनल्स के फिनाले के, वो स्टार्ट होंगे इस रेस टू 10 के बाद, जिसमें एक्चुअली स्कोर माम्बा हेवीली अपने फेवर में ले माम्बा Oh my घुटनों के God. लिए जा रहे थे और मॉडल बस जंप बैक कर रहे थे। नाइस नाइस, आई लाइक दिस। दिस लुक्स लाइक अ गुड वन। लेकिन क्या यहाँ पर दूसरा राउंड इनमें से कौन निकालेगा वो जरूर देखना चाहेंगे। मॉर्टल वंस अगेन वो लेट चुके हैं, लेकिन अब आते हैं, उनको एक वॉल एरिया पर पिंचर डाउन किया जा चुका है, और अब यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से माम्बा ये राउंड बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। रेज आर्ट अभी भी नहीं डिप्लॉय की गई है, लेकिन अब बारी आती है मॉर्टल की। ही इज लुकिंग गुड विद द चार्जेस, लुकिंग गुड, बट एक अच्छा सिचुएशन यहाँ पर चल रहा है। ग्रेटनेस जस्ट कमिंग अप एज माम्बा, ओह माय गॉड, बट ये पिट टूटेगा, पिट टूटेगा। दिस लुक्स लाइक अ फॉलिंग एरिया, दिस इज लुकिंग गुड, लेकिन अब इनको इसके ही ऊपर सारी फाइट बनानी पड़ेगी, एंड द वन हु लूजेस gets taken down into the wall, KO as of now. आई मीन वो अरीना ट्रांजिशन यहाँ पे देखने को मिला। मॉर्टल काफी ज्यादा सरप्राइज होंगे अगर क्योंकि मतलब जैसे मेरे को पता है कि उन्होंने भी बताया कि अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने शुरू किया खेलना, तो वो तो उनका रिएक्शन मजेदार होता है इस टाइप पे देखने के लिए। बट नो, यहाँ पे काफी अच्छा एक न्यूट्रल किक आता हुआ। पावर क्रश एक बार फिर से लगाते हुए, ज्यादा नहीं जाना उसके लिए, आपको डैमेज भी पड़ सकता है, बट फिर से पावर क्रश के लिए गए। लो स्पिन्स, स्पैम, अरे यार, Go for the rage, go for the rage, don't spam. No, all right, if it works, it works. All right, so yeah, yes, there it is. It works. I mean, Mamba once again don't fix going for a good round. Yoshimitsu भगवान है अब proper. जिस तरीके से यहाँ पर खेला जा रहा है, Yoshimitsu is like the end of everything. I mean, वही एक चीज है ना, भाई, तो लेकिन जो आर्केड्स में फील भी आया हमको भाई, अब देखने को तुम्हें मिलती थी। सेकंड मैच मामा, क्या इस आपने चीज कहा में था बात हत्ते पे फटोगे कैसे क्या ऐसा लगा, सेम वो हाइट हत्ते वाला वाले दिन लेगा। याद आ गए क्या, जब कारकेड में लोग नीचे करके बटन दबाते थे। एक बार पॉल लेके देख। Paul. Well, still waiting to hear what he has to say. Let's see. I think इनको तो याद आ ही गया होगा कि आर्के नए प्लेयर्स होते थे ना। ओशन, आपको बता दो एक ट्रिप डाउन द मेमोरी लेन, जब आप आर्केड में जाते थे, आप गेम खेल रहे होते थे फॉर द फर्स्ट टाइम, आपके अगेंस्ट भी आपके दोस्त रहते थे, आप लोग पहली बार जा रहे हैं टेकन खेलने के लिए, उस टाइप में होता था। किसी ना किसी एक बंदे ने फिगर आउट कर लिया, एनालॉग स्टिक हल्का सा नीचे करके किक के बटन दबाने, और वो जो नीचे के लोअर टैक्स पड़ते हैं उसमें आपका रेंज काफी बढ़िया रहता है, लोग बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं उसको। अभी हमने प्रेजेंटेशन देखा यहाँ पे काफी अच्छा। मॉर्टल के लिए यहाँ पे आई मीन गिगस अभी भी चूज कर रहे हैं। गिगस के बेसिक्स 2 मैचेस के लिए, क्या एक हुआ? इनको स्टार्ट कर पावर क्रश पता चल चुका है किस तरह से यूटिलाइज करना है, और वो जो स्विंग्स है उनसे मामा को बहुत दिक्कतें स्टार्ट हो गया जा ब्रो। रही हैं। लेट्स सी मैंने कि किया। आगे के सिनेरियोस में बोला गया क्या क्या? हो पाता है। पता नहीं ब्रो, ये तो आवाज ही नहीं आ रहा किसी का। मेरे Still को भी नहीं waiting आ for the रहा। next match to start. और हो रैंक भी ले सकता है, अभी पॉल भी भी ले हम सकता है। बस इंतजार कर रहे हैं। अरे अगेन अनदर भाई स्लाइट जो ऑटोमेटिक आया वो किंग भी ले सकता है। ये सब किंग चीजें बहुत चलती रहती खतरनाक है, still किंग और can't पॉल। hear किंग जो है or टाइगर वाले शक्ल का or एक guess. लौंडा। Ocean is back with me though. Ocean is back with me, and let's hope Ocean figures out that I need No, him I to can speak hear you. I was to just pretending that I cannot. Ocean. यहाँ पे कास्ट करेंगे। Oh yes, Ocean can hear me. Ocean can hear me apparently. I can hear me, but I'm just pretending that I cannot. Because I hate you right now, because you actually.
looking good. I mean, he's not even losing anything, and that's kind of a stuff that's kind of something जो हो रहा है. लेकिन यहाँ पर अब रेज आर्ट डिप्लॉय होगा या नहीं, वो थोड़ा सा उससे प्लस एंड माइनस में चला जाएगा. एंड उसी के चलते यहाँ पर एक चीज आती है कि मॉर्टल अभी भी ड्रैगनऑफ के ऊपर जाना चाहेंगे, कुछ ना कुछ करते हैं. बट योशिमित्सु अब थोड़ी सी क्रिटिकल कंडीशन में आ चुके हैं. ये वाला राउंड माम्बा हार भी सकते हैं, बट वेल हिल हैव टू सी. आई मीन वो वापस उसी चीजों के ऊपर आ चुके हैं. स्पैमिंग बहुत अच्छी चलते हुए, बट स्टिल गिवन और टेकन एवरी फैक्ट आउट हियर. दिस लुक्स लाइक मॉर्टल्स गेम. अगर यहाँ से कमबैक होता है माम्बा का, इट विल बी अ वेरी गुड वन. बट स्टिल वेटिंग फॉर एवरीथिंग, वेटिंग विद एवरीथिंग. अब ये टाइम यूटिलाइज हो जाता है. अगर टाइम यहाँ पर फिनिश हो जाता है, मॉर्टल आराम से राउंड ले जाएंगे. एक अच्छा डैश और देयर इट इज a great one coming out there for Mamba. Well, okay, so this is a critical situation if you're talking about everything. खैर अगर बात करें और करते रहे यहाँ पर, माम्बा अब थोड़ी सी और मुश्किल आ चुकी है. मॉर्टल अपने लिए राउंड बना जरूर सकते हैं, बट बात यही बनती है, बारी यही आती है कि क्या चीजें यहाँ पर बन पाएंगी. एक और बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से रेज आर्ट अगर यहाँ पर डिप्लॉय होता है, अभी तक एक बार देखा, बट oh my god, this is very close. Oh, this is a good rage art, a very good one. This Yoshimitsu might just fall down. An impressive ending in style. There it is, and look at that one. Mortal, going godly with everything. Whatever is happening, it's just going amazing with mortals. I mean, उनको बीच में थोड़ा सा रहेगा जरूर, but yeah, it is looking amazing the way the things are going on. But अभी के लिए आती है बारी वापस ड्रैगन ऑफ दिस राउंड. if it comes up to Mamba, वो फिर से एक और जीत जाएंगे. 9-1 का स्कोर लाइन बनाते हुए जीतेंगे अगर होता है. बट ड्रैगन ऑफ देखेंगे कि अगला राउंड भी अपने लिए बना सके. I mean, मॉर्टल देखेंगे अगला राउंड अपने लिए बना सके. He's looking good, but ये he is generating health on one side. Oh my god, rage art. Will it go for a rage? Will he go for a rage? I mean, he's looking for it. क्या सही एरिया रहेगा? It connects once again. It connects on the best ways. कितनी हेल्थ खा पाएंगे यहाँ पर, वो चीज आ जाती है. He's going for a good one. All right. लेकिन अब योशिमित्सु भी अपनी रेज आर्ट एक्टिवेट कर सकते हैं. Will he go for it? He's going for the sweeps. An easy win coming out there. Will it be? And yes, it is. Mamba. He is looking, I would say, good with everything. I mean, the things are looking amazing the way it's happening, and I mean, it's nice. Well, it is nice indeed. It is really nice, and we'll see how things work out और कैसे situation रहेगी. माम्बा, I mean, बहुत हर एक मैच के साथ, आपको नहीं लग रहा हर मैच के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते जा रहे हैं. बट दूसरी चीज यही बोलना चाहूंगा कि मॉर्टल भी चीजें फिगर आउट कर रहे हैं धीरे-धीरे. Actually, he's actually figuring out quite a few stuff. I mean, अगर वो होते खैर उनको यही बता सकते कि स्पेस से आप ग्रैब कर सकते हो. अगर उस सिचुएशन में बात करें, if you're talking about it, I mean, I got my notes late, but yeah, I got it. If I have to say, but खैर ड्रैगनऑफ ने लास्ट गेम में 2 बार रेज आर्ट डिप्लॉय किया और पहली बार he had an absolute great win. So with all those things coming up, okay, this was a good comeback game, but not as better. But Mamba at the end, being Mamba, he just won the game cheekily. I mean, Mamba का वही है ना, आप एक बिल्कुल like not seasoned, I would say, एक experienced player को आप खिला रहे हैं. And once again, he's not veteran, but yeah, he knows it. Yes, he knows. वो पता है उन्हें कि क्या करना है किन सिचुएशंस के अंदर और सिनेरियोस क्या डेवलप होते हैं गेम के अंदर. ज्यादातर अगर बात करें, जो वो बेसिक्स हम लोग समझा रहे थे थोड़ी देर पहले, विफ्स जो होती है, विफ मतलब आपने अटैक किया, आपका अटैक मिस हो गया, हिट नहीं हुआ, उसे विफ बोला जाता है टर्मिनोलॉजी के अंदर. वो उसको अगर आप उस विफ को पनिश करते हैं, वेल दैट्स कॉल्ड विफ पनिश. वो एक चीज रहती है, तो उस चीज पे माम्बा काफी ज्यादा रिलाय करते हैं. पीछे स्टेप बैक करते हैं, मॉर्टल का अटैक विफ होता है, मिस करते हैं, क्योंकि अगर आप थोड़ा अपने ओपोनेंट की तरफ से चीजें बेट आउट कर सकते हैं, स्टेप फॉरवर्ड करके उनकी रेंज में जाके बेट किया और स्टेप बैक कीजिए, वो चीज यहाँ पे काफी देखने को मिलता है. और उसी के चलते वहां पे माम्बा अपने लिए एडवांटेजेस क्रिएट कर रहे हैं. बेसिक स्ट्रैटेजी, बहुत ही वाटर डाउन स्ट्रैटेजी, बट बीइंग यूज्ड टू गेट द विक्ट्रीज. And the victories are actually coming up in the best ways, if I have to say. I mean, the way Mamba is playing round by round. हाँ, एक बार उनको दिक्कत हुई थी क्या जब उन्होंने शाहीन लिया था, बट उसके बाद वापस से अगर योशिमित्सु की बात करें, I mean, he has the best track record with Yoshimitsu. So far, so good, so best if anything it comes up to it. But Mortal, all right. So I would say Dragonov, not so good, is a bit decent, but he still has to figure out कि क्या यूज करें, क्योंकि I would say Mortal ने सबसे ज्यादा character switches यहाँ पर किए. We have seen him using a number of characters, including Yoshimitsu as well. Yes. But he has to understand. I mean, बात भी आती है, this is a fun event if anything, but he has to understand कि अगर बाद में भी अगर खेलते हैं कुछ भी,
he'll get the gist of it very easily. I mean, वही एक चीज है, आप अलग अलग कैरेक्टर्स खेलते हैं, आप अलग अलग कैरेक्टर्स के प्ले स्टाइल देखते हैं, और फिर आपको वो एक दो कैरेक्टर्स तो आपको खेलते टाइम ही समझ आ जाएंगे कि मेरे को ये प्ले स्टाइल पसंद है, मेरे को ये कैरेक्टर बहुत पसंद आया। Yeah. मैं बॉब एक्चुअली बस एक ही चीज की वजह से खेलना स्टार्ट किया था। बॉब का जो पावर क्रश है, दैट्स लाइक वो अपना पेट ऐसे मारता है लोगों को, मेरे को वो बहुत फनी लगा, मैंने उसी लिए बॉब खेलना स्टार्ट किया था, एंड देन फेल इन लव विद द कैरेक्टर। Let's just वैसी leave चीजें Bob. रहती है। Let's just leave Bob aside. Let's talk about Yes. one of the OPS characters which is broken but not broken but OP all at the same time. Let's talk about Panda. पांडा एक वैसे पॉकेट पिक रहता है, हमने इसके बारे में बात करी थी जब मेरे साथ मधुरा थी उस टाइम पे, और ये हमारा प्लेऑफ्स का मैच था उस टाइम पे, मैं था और मधुरा कास्ट करते वो गेम, आरकूल ने पिक किया था पांडा उस टाइम पे। एक अनएक्सपेक्टेड पिक रहता है। उस दिन हम स्टोरी लाइन की भी बात कर रहे थे, जो हमारे एक बहुत ही हाई लेवल प्लेयर है रैंक चू, उन्होंने पांडा के साथ मतलब एक टूर्नामेंट में पूरा धमाका मचाया था। एंड बहुत ही आई मीन एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो आपको ऑनलाइन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कहीं पे खेलने जा रहे हैं, आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन जब देखने को मिलता है दैट मींस जो प्लेयर आपके सामने खेल रहा है वो जानता है वो क्या करने वाला है, एंड यू बेटर बी स्कैर्ड, और थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। Exactly. So वही चीज आती है कि आपको कैरेक्टर्स अपने बेसिस पर रखने पड़ते हैं। अब देखते हैं कि क्या यहाँ पर माम्बा एक विक्ट्री पूरी सील करते हैं। I mean, he can go for it. We'll have to see how it just comes up because this is going to be one of the most deciding factors. As all right, he's going for a good one, I would say. यस, एडी आता हुआ एक आखिरी गेम है ये हमारा, और इसी में एडी का प्रयोग किया जाएगा। वंस अगेन की बाइंडिंग्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। अगर मेरे को पता होती कि मॉडल की की बाइंड्स क्या है, तो फिर एक ही वो क्वेश्चन रहता है कि दो लाते I'll हैं tell you. तो बातें चले I'll जाएगी। tell you. Yeah, if he has to grab or something, he goes for the space. उसके बाद U और O उनके लिए किक्स के लिए यूज हो सकता है, तो वो U यूज कर सकते हैं, O यूज कर सकते हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर खैर उनको रेज आर्ट भी दिला सकता है। रेज आर्ट में तो वो आ चुके हैं। Let's see how it just goes. I mean, he's still not using it, and there it is. Mamba, I would say अगर हल्की सी मिस्टेक ना होती, एक और परफेक्ट राउंड यहाँ पे बना सकते थे। यस, आई मीन एक ना एक तो हिट तो पड़ेगा ही। ये देखिए, एक स्वीप आया वहां पे, उसके बाद एक लो के लिए जाने की कोशिश, बट माम्बा पेशेंटली वेट कर रही है। स्पिन किक जो है ना, ये मतलब बहुत दिक्कतें क्रिएट कर रही है। ग्रैपल काफी अच्छा क्लोज रेंज में आने के बाद, बट मॉडल की तरफ से लॉन्च रहा था, फिर से जाने की कोशिश, बट वो अलग मूव था। वो पावर क्रश एक बार फिर से काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस पे आ चुके हैं अब। रेज आर्ट अवेलेबल है यहाँ पे, लेट्स सी इफ इट कनेक्ट्स, एंड इट विल। फिनिश यहाँ पे मिलेगा, राउंड जाता हुआ मॉडल की तरफ। आखिरी सेट हो सकता है, बट स्टिल मॉडल के लिए एक चीज तो बोलना चाहूंगा, काफी 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 अच्छे से इन्होंने अडेप्ट किया है। अलग अलग कैरेक्टर्स खेले, और अलग अलग कैरेक्टर्स में फन के लिए खेल रहे हैं यार। फन तो करने के लिए आप अलग अलग चीजें खेलेंगे, और गेम सीख भी रहे हैं धीरे धीरे, जैसे हम इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं इनकी तरफ से कॉन्स्टेंटली। I mean, have a look at one thing. अब खैर इसके अगले राउंड में डेविल स्पिरिट भी यहाँ पर ब्रेक हो जाएगी, और फिर से वही एनिमेशन यहाँ पर देखने मिलेगा। बट लेट्स से कि क्या यहाँ पर ये गेम बना सकते हैं अपने लिए? नो 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 नो। माम्बा फिर से गेम बना दो। डेविल स्पिरिट बीइंग ब्रोकन, ये एनिमेशन आती है। अब इनको फिर से फाइट आगे इससे मिलनी पड़ेगी। देखते हैं कि अब क्या फाइट बनती है। क्या ये माम्बा का आखिरी गेम होगा, या फिर इस बार एडी मॉर्टल वापस से अच्छी गेम अपने लिए बनाएंगे? He went for a rage out in the last round as well, the previous one, but well, माम्बा की लातों से बचना मुश्किल हो चुका है, नामुमकिन हो चुका है। मैं बोलूं स्वीप्स कमिंग अप, हर तरीके से चकमा देने की कोशिश यहाँ पर बनती हुई, बट वंस अगेन माम्बा हैज टू गो फॉर सम चीकी प्लेस, और यहाँ पर हेल्थ एडवांटेज माम्बा का इस समय। रेज आउट वापस से बन चुके हैं इनके लिए। He has to win, and there it is, माम्बा winning up the first to 10, winning up everything out in this one. Well, विनिंग और डोमिनेशन हमको देखने को मिला माम्बा की तरफ से। वापस आने वाले हमारे जो दावेदार है कुछ ही सेकंड्स में हमारे साथ, एंड कांग्रेचुलेशंस टू माम्बा। पता था क्या कर रहे हैं, योशिमित्सु पहले ही बोल दिया था खेल रहे हैं। कैरेक्टर बताते ही मैं समझ गया था कि ये इंसान पहले गेम काफी ज्यादा खेल चुका है, और बहुत पहले से खेल रहा है, क्योंकि बहुत ही पुराना कैरेक्टर है। तो उनके लिए तो आसान रहेगा। मॉडल के लिए मैं मॉडल से पूछना चाहूंगा कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था टेकन 7 के साथ। आई नो हारना किसी को पसंद नहीं है इतना ज्यादा, बट फिर भी मजे तो आते हैं आप जब कोशिश कर रहे होते हैं। खासतौर से ये एक ऐसी गेम है कि एक बहुत पर्सनल टच रहता है। आप अगर किसी ओपोनेंट के साथ खेल रहे हैं, इवन व्हेन यू आर प्लेइंग 10 मैचेस, तो उसमें भी एंटरटेनमेंट काफी मिलता है आपको देखने के लिए, एंड स्पेशली इफ यू आर ट्राइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स। ओ ये एबिलिटी इसकी नहीं है, ये कैरेक्टर ये चीज अलग कर सकता है, ये उसके टूल किट में अवेलेबल नहीं थी। योशिमित्सु आप हवा में उड़ सकते हैं अपना हेलीकॉप्टर बना के, जो बाकी कैरेक्टर्स नहीं कर सकते, वो सिंपली बस जंप करते हैं। गिगस के साथ आपके जो
अटैक्स होते हैं, रेंज आपके पास काफी ज्यादा रहता है जस्ट बिकॉज ऑफ हाउ बिग ही इज, बट फिर वहां पे डाउन साइड आपके पास ये भी रहता है कि आपको पड़ती भी काफी ज्यादा है। वो सारी चीजें एडी के साथ लॉन्चर्स जो निकाले उन्होंने लो से, वो भी लॉन्चर्स लेकर गए। तो काफी ऐसे अलग अलग पेचीदे चीजें होती है गेम के बारे में जो आप बहुत आगे जाके समझेंगे, बट ये चीजें आप रियलाइज करनी बहुत पहले से स्टार्ट कर देते हैं। मॉडल के लिए आई थिंक ये उन्हीं चीजों के रियलाइजेशन की एक जर्नी होगी, तो उनसे कुछ ही देर में हम बात करेंगे एंड उनसे जानेंगे कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग टेकन 7। Well, I would love one thing कि मैं चाहूंगा एक्चुअली हम लोगों ने काफी बात करी गेम के बारे में, हम लोगों ने बहुत चीजें करी हैं। I would want a segment जो कि अगर अभी हो सके, I would like to ask production if some segment can come out जिसमें वो एक दूसरे के सामने आमने सामने ही बात करें एंड हम लोग I mean we can just go out from here and वही आपस में बात करें to understand like because Mamba को obviously game पता है and Mortal भी वहां पर अभी काफी अच्छा एक्सपीरियंस, so if their experiences comes up एक दूसरे के आमने सामने just talking and a questionnaire जो आपस में निकाल सके कि क्या था क्या नहीं था पहले राउंड से 10वें राउंड आई मीन 11वें राउंड तक ट्रांजिशन कैसे रही, क्योंकि एक राउंड मॉडल भी जीते थे, उसके अंदर क्या चीज हुई और शाहीन चूज करना वर्सेस योशिमित्सु चूज करना किस तरीके से फायदा में, और मॉडल के इतने सारे कैरेक्टर्स की ट्रांजिशन कैसे रही, ऑल दोस थिंग्स। अच्छा, एक चीज मेरा ओशन आपसे भी सवाल रहेगा जितनी देर में हमारे जो गेस्ट है वो हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले मेरा आपसे सवाल रहेगा, आप भी गेम से काफी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए, आई मीन बैक इन मार्च आई थिंक टेकन 6 खेलना स्टार्ट किया था जब हम लोग उस टाइम पे एक और इवेंट कास्ट कर रहे थे और पीएसपी कैरी करते थे। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस लाइक? I would say starting from March, हाँ टाइम मेरे को स्टिल ठीक ठाक हो चुका है, I'm still not that much of a new person क्योंकि सब चीजें पता है, बट हाँ as of that time and as of now time I would say it has been quite a lot of better journey, क्योंकि जब मैंने मार्च में स्टार्ट किया तब से अभी तक ओके। तो स्वागत है आप दोनों का एक बार फिर से। हेलो मांबा, हाउ आर यू डूइंग? हाय। वो तो अभी वेरी गुड बोल, वेरी गुड बोल। आई एम डूइंग वेरी गुड। यार मॉर्टल आपने इतने सारे कैरेक्टर्स यूज किए, मैं पहला सवाल मेरे रहेगा आपका फेवरेट कौन सा राउंड सब में से? मेरे ख्याल से वो जो अभी मेरे को नाम भी नहीं मालूम उसका, तो वो कौन सा है ब्लैक वाला जो हम निंजा को यूज कर रहा था, एक वो स्प्रोन करके जो आता है एंट्री में, ड्रैगन ऑफ। हाँ वो मेरे को कंपैरेटिवली सबसे अच्छा लगा बाकियों से। ड्रैगन ऑफ एक एक्चुअली अच्छा कैरेक्टर है अगर आप गेम स्टार्ट करें, बट मॉर्टल मैं आपसे जानना ये चाहूंगा कि ओशन का एक्चुअली ये सवाल था कि फर्स्ट राउंड से लेके आखिरी राउंड तक आप, हमने भी देखा कि आप थोड़ी बहुत चीजें समझ रहे थे गेम के बारे में। माम्बा से तो मैं पूछूंगा नहीं, उनको गेम खेलना आता है ये। योशिमित्सु बोलते ही मैं समझ गया था ये काफी गेम खेल चुके हैं पहले, बट आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस था, व्हाट वाज इट लाइक? अमेजिंग था। तो मतलब वही है कि देखो मेरे को बेसिक की बाइंड्स पता थे इसके, KIUJONP, वो हम लोग का R1 L1 था, तो बस मेरे को कॉम्बोज तो मेरे को बस कॉम्बोज के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था, और वो उसका इस गेम का जो मैकेनिज्म है वो नहीं पता था, बट वो सब अब पता चल गया। इसके आगे तो मतलब वो जो प्रॉपर टाइमिंग पे जो दबाते हैं वो नहीं पता था मेरे को। साला मैं भी दबा रहा हूँ किक, मांबा भी दबा रहा है किक, उसका मेरे को लग रहा है, मेरा उसको नहीं लग रहा है। फ्रेम रेट्स पर बात आ जाती है, वो हल्के फुल्के फ्रेम्स पर बात आ जाती है, बहुत कम, बट हाँ अच्छा पता नहीं, फिर वही चीज है वो जो मेरे को अब समझ आ गई कैसे करना है या जो भी है। दिस फाइटिंग गेम मोस्टली कम्स ऑन टू फ्रेम्स, क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा एंडिंग होती थी बहुत स्लो मोशन में, क्योंकि उस टाइम आप दोनों ने सेम टाइम पर फ्रेम निकाला होता था, बट जिसका लगा वो वहां पर पहुंच जाता है भाई। लाइक वो छोटी मोटी चीजें वो बहुत बड़ा कैलकुलेशन बन जाते हैं कभी कभी। गॉट इट, राइट, ऑल राइट, बट ओवरऑल बहुत ज्यादा मजा आया, और आई एम प्रीटी श्योर कि ये गेम कभी स्ट्रीम पे हम लोग खेलेंगे फिर से, और नेक्स्ट टाइम मैं प्रैक्टिस करके आऊंगा। इस बार तो ऐसे ही घुस गया मैदान में जंगली शेर जैसे। वेल मामा, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके मामा विनर्स थॉट्स क्या है? विनर थॉट्स देखो ऐसा था, मेरे को कोई बहुत खास नहीं पता था। मेरे को ये पता था जब मॉर्टल नॉर्मल ब्लॉक करता था ना तो मैं उसको लो मारता था, हाँ, और जब वो लोअर जो है ब्लॉक करता था तो मैं ऊपर मारता था, तो उसका ब्लॉक फूट जाता था, फिर मैं इसकी पिटाई करने ही निकल जाता था, फिर ऐसा होता था। जब बताया नहीं उसको, वरना तो ये फिर अपना गार्ड जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेता। ये बेसिक्स के बारे में ना, यही चीजें मैंने ओशन को भी बताई थी कि मामा को एग्जैक्टली पता है कि काउंटर कैसे करना है। एग्जैक्टली हो ये रहा था कि मैं ब्लॉक तो बराबर कर पा रहा था क्योंकि वो आ रहा था और मैं ऐसे ही खड़ा हूँ पहले से, बट देन जब मैं अटैक के लिए जा रहा था तो इसका अटैक मुझे लग रहा था, मेरा लग ही नहीं रहा था। मतलब इनिशियली एक बार मैं कनेक्ट कर गया तो वो गया एक फ्लो में थोड़ा सा, लेकिन वो फ्लो ही मिलता ही नहीं था, वो फ्लो मुझे।
चलिए, जैसा मॉडल आपने हमें बताया, आपने एंजॉय किया स्ट्रीम पे, आप कभी टेकन 7 खेलेंगे, हम लोग भी जुड़ेंगे आपके साथ, 100%। उम्मीद हाँ रहेगी यार, कि मजा आएगा। जल्दी हो वो भी। यस अपना समय देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो उम्मीद होगी मच। फिर से जल्दी मुलाकात हो। मॉडल, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर मामा, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन थैंक द यू सो विक्ट्री मच, थैंक यू डोमिनेशन सो के लिए। मच, फिर से मिलेंगे एक बार फ्यूचर में, तब तक के लिए थैंक यू थैंक यू, फॉर बाय। जॉइनिंग अस। बाय बाय। बाय बाय।
Hello and welcome back once again to KO Fight Night Arena. This is of course season 5 ka finale that's about to get started, and for that we just had a show match where indeed it was Mortal going against Thug. And kya introduction diya hai, kya perfect 101 class thi wo to understand what the game has, the capabilities of the game, and as a new player what can you expect and what can happen and cannot happen, of course, is what you're talking about. Along with that, of course, joining me on the NSS kit is none other than Ocean to talk more about Tekken 7. Yes, Tekken 7 वही चीज़ अभी हम करके आए, एंड अब देखना पड़ेगा कि जो शो मैच नहीं हो एक मुझसे मोरल बिल्डअप किया है नए प्लेयर्स के लिए भी, दैट वुड बी अ वेरी गुड वन. एंड खैर वहाँ पे माम्बा बहुत बेहतरीन तरीके से जीते वो पूरा सिचुएशन के अंदर, एंड 10-1 का स्कोर लाइन जरूर निकल कर आया, बट एट द एंड मॉर्टल वाज लाइक जब बाद में आता है लाइक कि इट वाज अ वेरी गुड वन, जिस तरीके से उन्हें जो एक्सपीरियंस मिला. Exactly, because after all it does not matter आप first time खेल रहे हो कि कितनी बारी खेल चुके हो पहले, because it's about just having fun, and that's exactly what was showcased in that wonderful showcase match. But with that, of course, let's also have a look at the prize pool. That is what these players are of course competing for, and that is the 4 players that are in the finals right now for Tekken 7 prize pool is 1 lakh rupees. 50,000 उसके अंदर से of course first position holder को, 25,000 second position holder, 15,000 third, and for the fourth it is 10,000 INR. बिल्कुल ये टॉप 4 का रहेगा जरूर, लेकिन एक बार ब्रैकेट्स भी हम देखना चाहेंगे कि प्लेयर्स का सिचुएशन सिनेरियो क्या रह चुका है. आप देख सकते हैं Rcool, बहुत नाम सुना है, बहुत चीजें जानी है. Lionhart, बहुत नाम सुना है, बहुत चीजें जानी है. So yeah, it's going to be out there. Absolutely, and उसके बाद में of course when you move on down to the losers semi-final or the lower bracket, we're looking at Rohit going against Tejan. Yeah. And ये भी काफी interesting match होने वाला है, because I do know for a fact that, or rather I remember that Tejan ने काफी interesting plays दिखाए हैं पहले. But nevertheless, moving along with the schedule for today, we are looking at the semi-final and the winner final. That'll be the grand final, जिससे हमें मिल जाएगा हमारा champion for Tekken 7. I mean, that's one thing we are looking for out here. जैसे टाइम प्रोग्रेस हो रहा है, I mean, जब से शुरू हुआ है KO Fight Night, तब से कहीं ना कहीं टाइम प्रोग्रेस हो जाता है. Now we are down to, I would say, some of the penultimate seconds or something, and यहीं से सब चीज बनेगी अब. बिल्कुल सही बात है. Of course, it's those 60 seconds that will make or break, so to say, their careers as far as this season is concerned. With that, of course, let's also have a look at the head-to-head between Rcool going against Lionhart. And अभी तक हम देख रहे हैं, again, I'm looking at the stats, Ocean, they look pretty similar. Yeah, pretty similar. I mean, both of them had 2 losses. Someone will be having the third one in this one, लेकिन वो नहीं चाहेंगे कुछ भी करके, because it's 8-6 and 10-8 for both of them. So Rcool and Lionhart might just go for it. अगर बात करें सुपर स्मैश ब्रोस की, वहाँ पर कोई और दूसरे Lionhart नाम से जीते थे, क्या यहाँ पर ये वाले Lionhart भी वो चीज करेंगे? Well, let's find out if he's going to be genuinely taking that glorious step or not, because after all that's not the end, right? There's just the match number 1. यहाँ से हमें पता चलेगा ग्रैंड फाइनल के अंदर कौन जा रहा है, and lower bracket के अगेंस्ट कौन खेलने वाला है. Nevertheless, let's get introduced with both of these players, Rcool as well as Lionhart, as we do have a few interviews lined up with these two. Ladies and gentlemen, boys and girls, स्वागत आप सबका. मेरा नाम है ओशन शर्मा, और अभी तक जिस तरीके के मैचेस, अगर हम KO Fight Night की बात करें, यहाँ पर सुपर स्मैश ब्रोस, स्ट्रीट फाइटर, टेकन, हर एक गेमिंग जॉनरा के अंदर, हर एक गेमिंग टाइटल के अंदर प्लेयर्स ने अपने आपको बहुत ऊपर रखा है. ऐसे में एक एविड गेमर से मिलने वाला है, जिनका मुझसे बहुत सारे लोग फेयर कर रहे हैं नाम, because he is actually dominating the circuit. So we have Simranjit Singh with us. Simran, first of all, वेलकम अबॉर्ड. सो मैं आपसे जानना चाहूंगा, सबसे पहला सवाल रहेगा आपका इंट्रोडक्शन, कि आप कहां से बिलोंग करते हो, आप अगर स्टडी करते हो तो क्या करते हो, अगर आपका जॉब है तो क्या चीज है, एंड लाइक ऑल दोस थिंग्स. Yeah, I'm basically from Mohali, that is part of Chandigarh, like, and I work in like Punjab government. आप अपने गेमिंग जॉनर में कितना टाइम पहले आए, एंड तब से अभी तक कॉम्पिटिटिव में आप किस तरीके से घुसे हो? Well, I used to play, it's been 15-20 years. So I used to play very seriously in Tekken 6 and maybe some part of Tekken Tag 2. Then I kind of quit in Tekken 7. Then I came back in like almost one and a half years. हर किसी के अपने कोई ना कोई फेवरेट कैरेक्टर्स होते हैं. So मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा रहता है, and like why do you plan to choose one? I basically play with Mishimas. That was my playing style. It is basically like aggressive 50-50 playing style. And then I recently switched to a new character, but I basically used to play with Mishima playstyle. Coming to the question of KO Fight Night, मैं जानना चाहूँगा कि आपको competition किस तरीके का लग रहा है KO Fight Night? Well, the good players, the top players of India are playing this tournament, so the competition is quite high. But do you think sometimes ऐसा होता है, because पहले भी मैंने जिन लोगों से बात करी, some of them were saying कि वहाँ पर पिक्सल का कुछ moves का भी difference आता है, because हल्का सा lag अगर online के तो do you think that kind of gives somebody else an advantage or something? Yeah, that is the main reason that online tournaments are not held like
more. So it is the lag factor makes a very big difference. So आप future goals कहाँ पर देखते हो अपने Tekken के साथ? Well, I used to dominate in Tekken 6 and Tekken Tag 2, a part of Tekken Tag 2. But after now, I'm not that serious gamer. But maybe I'm trying to be. Maybe let's just talk about one more question. That's going to be the Atel India Esports Tour का जो national leaderboard रहता है. I'm sure आप उससे aware हो गई कि वहाँ पर nationally हर एक player को rank किया जाता है. तो वहाँ पर आप अपने आप को किस तरीके से देखते हो by the end of this tournament? Playing it for the winning, I think I'm looking for first place. You never know whoever beats you. Is there any message that you want to give to this community? कुछ ऐसे players जो अभी आना चाहते हैं, कुछ ऐसे players जो 2-3 साल से अभी इस community में हैं. Like, is there any message you have for them? In Tekken 7, the community has really evolved. There are a lot of good players have come up, and I think Tekken is going to get very popular in maybe 1 or 2 years down the line. I would just say one thing, all the best for all the future endeavors जो भी आपके रहने वाले हैं. And if anything, I hope कि आप ये tournament जीते and maybe अगली बार जब आप बैठे हुए तो trophy आपके पास हो. So yeah, that's one of the things. Ladies and boys and girls, स्वागत है आप सबका. मेरा नाम रोहित शर्मा और टेकन के जिस तरीके से मैचेस हमने देखे बहुत ऑपरेटर रेटिंग मैचेस रहे. I mean, प्लेयर्स को पता है कि उनको अपने ऑपोनेंट्स को किस तरीके से टेक डाउन करना है. उसकी बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पे चल रही है क्यों फाइट नाइट के अंदर. क्या ऐसे प्लेयर से हम लोग बात करने वाले हैं. हितेश Rcool इनका नाम रहता है. एंड एट द एंड अगर मैं बताना चाहूँ ये वन ऑफ दोस पीयर्ड कंपेटिटर्स बन जाते हैं टेकन के हमारे क्यू फाइट नाइट के यूनिवर्स के. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर. एंड सबसे तो आपका इंट्रोडक्शन में जानना चाहूंगा कि आप कहां से हैं और आप क्या करते हैं और वो सब चीजें. Hello everyone, my name is Hitesh. I'm 23 years old and I'm training Laura. So आपने टेकन खेलना कब से शुरू किया और वहां से आपकी कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में एंट्रेंस किस तरीके से लाइक कितना टाइम हो चुका आपको कॉम्पिटिटिव? I started playing Tekken from Tekken Tag 2 and I'm playing Tekken from around 6 years. जी काफी सही तरीके से ऑब्वियसली आपने ये बताया. बट अब मैं ये जानना चाहूंगा इतने टाइम स्पैन के अंदर बहुत लोगों के कुछ ना कुछ फेवरेट कैरेक्टर्स बनते हैं. तो आपका पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर कौन सा और क्यों आप उसको चूज करना है. व्हाई डू यू थिंक लाइक द कैरेक्टर इज वर्थ इट? My favorite character is Leroy and I think he is really cool and he is one of the strongest character in the game. अब अगर हम बात करें कैरेक्टर्स की क्योंकि एक टेकन यूनिवर्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं तो आपके अकॉर्डिंग कौन से कैरेक्टर्स होंगे जिनको आपके अकॉर्डिंग नर्व किया जाना चाहिए या बफ किया जाना चाहिए? I think Akuma, Leroy, Fakumram should be nerfed and all the low tier characters should be buffed. टेकन को लेकर के पर्सनली आपका फ्यूचर गोल आपको किस तरीके का लगता है? लाइक अगर आप टेकन की बात करो और टेकन के साथ अपने फ्यूचर की बात करो तो आपका क्या आपको लगता है एक पर्सनल गोल रहेगा? My future goals with the game is to improve more and compete at higher levels. आपके अभी तक की जर्नी किस तरीके से आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में आने के बाद से कॉम्पिटिशन वाइज आपकी जर्नी किस तरीके की रही? My journey was really good and all the community are really good and supportive. देखिए क्यों फाइट नाइट में बहुत बेहतरीन ओपोनेंट्स एक दूसरे के सामने आपने बहुत सारे फेस किए. बहुत सारे लोग को आपका नाम एक तरीके से फेयरफुल तरीके में भी देखने को आता है. सो आपके अकॉर्डिंग आपका पर्सनल एक स्ट्रॉन्ग राइवल अगर मैं पूछना चाहूं तो कौन सा ऐसा प्लेयर होगा जिसको आपको लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग राइवल है? My strongest rivals are Abhinav Tejan, Lavneet Dogra and my brother Shubham. They are my training partners as well. अब एक चीज आती है कि वो फाइट नाइट के अंदर जितने भी मैचेस चल रहे हैं उनका एक नेशनल लीडरबोर्ड पे एयरटेल इंडिया स्पोर्ट्स शूट पे वो अपने आप को रखते हैं. तो आप टूर्नामेंट के एंड तक अपने आप को एयरटेल इंडिया स्पोर्ट्स शूट के नेशनल लीडरबोर्ड पे कहां पर देखते हो और किस स्ट्रेटजी से आप प्लान करते हो? I just want to be in a winners bracket. I don't want to go in a losers bracket because I'm just looking forward to win this tournament. Is there any message जो आप अपने फैंस को देना चाहो, अपने इस कम्युनिटी को देना चाहो और अपने दोस्तों को देना चाहो जो कि टेकन की कम्युनिटी के अंदर आना चाहते हैं या फिर जो आपके दोस्त हैं इस कम्युनिटी के अंदर? Keep playing Tekken, support other players and compete more in the tournaments. Well, there you have it, guys. अगर हम बात करें हितेश Rcool की काफी कूल तरीके से आपसे अपना इंटरव्यू दिया जरूर है एंड यहाँ पर काफी बातें उनके बारे में भी जानने को मिली एंड काफी अच्छी चीजें इनके थ्रू हमें ऑब्वियसली इनकी जर्नी के लिए जानने को मिली. सो आई वुड जस्ट से ऑल द बेस्ट टू यू फॉर ऑल फ्यूचर एंडेवर्स एंड प्रोबेबली अगली बार जब मैं आपको देखूंगा ऑन स्क्रीन उस ट्रॉफी के साथ होगा. सो या थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग आउट योर प्रेशियस टाइम एंड सी यू अराउंड.
Hello everyone, and once again welcome back to KO Fight Night Season 5. My name is Warren Super Johnny John, being joined by Muzra again with me. और हम लोग रहेंगे आपके casters for the intense Tekken action that's about to begin. शुरुआत हमारी होगी जैसा कि आपने इंटरव्यूज भी देखे अपर ब्रैकेट यानी विनर्स सेमीफाइनल के साथ जहां पे इट्स गोना बी Rcool वर्सेस Lionhart. मुद्रा, क्या कहना है आपका इस मैचअप के बारे में? I'm just super excited. मतलब mirror match तो like I'm hoping mirror match देखने पड़ेगा हम लोग को क्योंकि both are Leroy's players as far as we know. But Rcool was the one who pulled a we can call it a rank chew up his sleeve because he suddenly went panda against Akuma. But I feel like against Leroy he will pick a Leroy. Oh god, now I'm like too much Leroy in my head. So yeah, I'm just really excited because by far I feel like these two players have been the strongest in the tournament. Yeah. And it's just waiting to see how both will play the mind games and work each other out. I mean, definitely. These two players, as you said, did look pretty strong. And these two players are the reason that one of the strongest names in the Indian Tekken scene has been eliminated, with Rcool just sending Loveneath down to the lower bracket. Rohit Jain being in the lower bracket is also surprised, along with Tejan, because those two names, Rohit Jain versus Tejan, that is the matchup that we have lined up for you guys next after this one. That's going to be the losers bracket semi-final. And no one expected that. Everyone was thinking, all right, like we have the brackets in front of us, so everyone was thinking, all right, Rohit, Jain, Loveneath, they were in the same group. One of them is gonna come to the low bracket, and the other one is gonna make to the top bracket. But Rcool just ruining that plan, and then Lionheart comes in pool 2 and just sends Tejan down to the lower bracket in the very first match. I mean, that last match with Tejan versus Shubham, it was so intense because, he was down to like 2 sets and we were all like biting our nails watching that. Like, come on, Tejan Bhaiya, come on, we need you. We need you up there in the top 4. And finally, he played so well with his Nina and he just got up, and now we are, I would say, about to witness some of the best matches in Tekken, and just super excited here, Varun. Definitely. I mean, excitement is going to be on its peak because today we are going to find out who is going to take home that 50,000 rupees और उसी के साथ कौन, I mean, Airtel India eSports store में भी अपनी जगह first position पे solidify करेगा, वो भी एक चीज रहेगी. But along with that comes the title of being called the champion of KO Fight Night Season 5 Tekken 7. And that in itself, I mean, FGC, it has something special wherein, all right, the prize money, it's there, but it's more about the bragging, right? So it's more about calling yourself the champion and proving that you're better than the rest of the people that participated in the tournament. And as I said, in the end, we are going to find that out. But before that, we are going to have to go through these intense matches. First, as you said, I mean, it might just be a mirror match of the first one that we have lined up, but I would still want Rcool to come up with something really cheeky, something really sneaky to surprise us, and once again spread happiness to everyone who is watching, because that partner matchup, that was insane. Well, by far I've been like reading up, and right now, as we all know, that Leroy बहुत broken character है वो, मतलब nerf के बाद भी वो अभी भी broken है. So I feel like best counter against Leroy even now is a Leroy. Like to play a panda against Akuma, that was a very good move from Rcool. So I know that this guy, he does his homework. He knows how to play a character against his opponent. So depending on that, I am still expecting him to play a Leroy only against Leroy, but who knows? Anything is like, this tournament is full of surprises, so anything can happen. Definitely, it is full of surprises, as you said. I mean, today also, even just like giving our viewers a recap of what happened earlier, was like the day started off with Street Fighters finishing off, wherein Ayan was the person from Street Fighter 5 who became the champion today, beating out Dark Lord in a really intense series. Then we recently just had a show match where we were just introducing some of India's biggest esport personalities to the world of Tekken 7. It was a lovely introduction, a little bit annoying for the person on the losing end because the other guy just ended up knowing the game a little bit more. But now finally we are stepping into the Tekken 7 action that, I mean, all the viewers who love the game so much have been waiting for. And
it is going to be. I mean, I'm still excited because more than this one, I mean, we definitely want to find out who moves forward and who goes down to the lower bracket. But I'm pretty sure everyone is also going to be watching out for that loser semi-final match, right? Because Rohit Jain versus Tejan, the man who took Tejan down time and time again, is going to be looking to do it once more. Because this time it's going to be straight up elimination. But Tejan, he doesn't go out easy. He's going to put a tough fight. Yes, definitely. And if you look at the characters, like we have two Leroy mains, Yeah. and then we have Rohit Jain, who has been playing Eliza, a very, I would say, different character to pick in Tekken. Like not many people take Eliza, because she's not, she's a DLC character. And then we have Tejan playing with Asuka. So it's interesting. Like we have a Leroy, and then we have an Asuka and an Eliza, hopefully. So I would say, pretty interesting matches coming up. तो देखा जाए क्या होगा. एग्जैक्टली आपने कहा देखा जाए क्या होगा. कुछ ही देर में मैच यहाँ पे लाइव होने वाला है, कुछ ही सेकंड्स और बस बचे और उसके बाद हमें देखने को मिल जाएगा कि आई मीन सेट्स किस हिसाब से जाने वाले हैं और कौन अपने लिए ओपनिंग सेट के अंदर ही एडवांटेज क्रिएट करेगा. एंड विद दैट लेट्स टेक अप our viewers through the game क्योंकि अब कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है. I mean हम वर्सेस स्क्रीन पे तो all right let's go. मेरा फेवरेट कैरेक्टर यहाँ पे मेरे को फाइनली देखने को मिल रहा है. Bob is gonna come in. Oh, I want to see the excitement from your side now, Varun. It's your character, so are you rooting for Bob? I guess. I'm always rooting for Bob. बहुत कम देखने को मिलता है कम्पिटिटिव सिनेरियो के अंदर, लेकिन अगर कोई पिक करता है मैं बहुत ज्यादा खुश रहता हूँ हमेशा से. बट आई हैव टू से Rcool यहाँ पे थोड़े ज्यादा डेडली मैच के अंदर देखेंगे. लेट्स सी इफ रोहित जैन एक्चुअली मेक्स मी अ हैप्पी मैन एंड gets the victory for himself. Still waiting for the match to actually start. Syncing screen पे अभी वेट कर रहे हैं. टूलकिट की अगर बात करें, I mean Bob सब लोग जानते हैं is known as the another Mishima style का जो प्ले कैरेक्टर का प्ले रहता है क्योंकि just because of the sweeps जिस स्टाइल के happen होते हैं काफी एक फास्ट पेस इंटेंस एक्शन देखने को मिलेगा. एंड शुरुआत होते ही देखिए इसलिए अब यहाँ पे फुल कॉम्बो इम्पैक्ट पड़ता हुआ. स्पिन किक यहाँ पे जो है डिनाई कर दी गई. ब्लॉक वहाँ पे Rcool की तरफ से काफी ज्यादा प्रिसाइज. ये जो स्वीप है ना, इसके साथ आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि आपका थोड़ा सा स्लो इम्पैक्ट रहता है और सामने वाले के लिए ब्लॉक करना काफी आसान रहता है. Lionhart last year भी Bob खेला था, so he knows Bob, and I feel like, I mean, he was the only guy in the tournament who was really playing Bob well. And it's like, Rcool here, he is really killing it with Leroy. I mean, he knows the counters. That's a nice sweep there. Goes for the orbital, gets that combo through the wall, gets that break. He's just gonna go for it with this one and get max damage. Oh, and then there comes the sweep. Beautiful play there. Nice blocking. Oh, and sidestep. Gets a wall and beautiful KO with that counter. Oh my god, lovely play by Rcool there. I mean, I feel like, Lionhart, he should have stuck with Leroy. He had a big disadvantage here with Bob. Gets the wall again, Rcool. And he cancelled that with the Leroy. But like, this is why Leroy, I don't know how people can still say that buff Leroy. He's still so much broken right there. I mean, that's the only character who does low mid parries with his hermit stance. So, I mean, the only thing I feel like they have nerfed is, the range of the orbital. But look at Rcool. He knows his research. Like, he knows the distance he needs to keep to get into that orbital combo. And he just did not give Lionhart a chance to get up. I feel like if Lionhart wants to change the game, he should stick to Leroy right now. Definitely sticking to that matchup is going to be advantages. मैं इतना ज़्यादा excited हो गया था, भावनाओं में मैं इतना बह गया था कि मैं भूल ही गया था कि Lionhart वहाँ पे खेल रहे हैं. But वो जो pick था, I was excited to see it. बट मैं आपकी बात से मुद्रा कंप्लीटली एग्री करता हूँ कि इस मैचअप में आई मीन थोड़ा सा डिसएडवांटेज तो रहने ही वाला है. स्पीड आपकी साइड रहेगी बॉब की तरफ से और उन्होंने कोशिश भी वही की. उनका स्ट्रैटेजी वही था कि अगर हाइपर अग्रेसिव जाते ओपनिंग देते ही नहीं वहाँ पे अपने सामने वाले प्लेयर जो Rcool थे लीरॉय स्मिथ के साथ, उनको अगर ओपनिंग ही नहीं देते तो फिर शायद वो राउंड्स वहाँ पे पिक कर पाते. बट वैसा हमें देखने को नहीं मिला. एंड well again Lionhart जो है यहाँ पे फिर से बॉब के पिक के साथ ही स्टिक करेंगे. लेट्स सी, आई होप इस टाइम पे उनके लिए काम कर जाए.
maybe वो थोड़ा research कर रहे थे first round कि अपन कैसे खेलते हैं, वो भी हो सकता है. Might be. पर judging by that play, like Rcool, he is really, really strong here. So, I really don't know. I think he has to really push up. Like Lionhart really needs to push up with Bob and just play aggressive, but it's still a high risk against a player like Leroy. Definitely, and well, with this one, Lionheart is going to be under some pressure. Oh, nice switch over there, and with the power crush as well. Again, here it comes. But वहाँ पे running 2 के लिए जाने की कोशिश थी. Sort of एक ground pound punch रहता है. But थोड़ा सा वहाँ पे whiff होता हुआ. But इस बार I think Lionheart is going to be able to take it. Full combo execution. हल्का सा drop हुआ था, but by then it was too late for Rcool to recover. And Lionheart finally getting himself on the board. First round for him. Second one, can he take this? Rcool off to a good start over here. Pushing it to the wall, but drops the combo there. Didn't really get that, but nice sweep there. They're playing a very nice block game, but Bob coming in with the big punches. Like, look at that. Like, that both of these players are top level players because they're not, like, even if they miss a block, they're getting the 2-1. Lionheart going in for the wall with that nice combo launcher. Oh, price for the rage drive, but does not land. Can he finish this? Come on, Lionheart. Let's show that Bob players can do it. Oh, big slow-mo with the low there. Nicely done, Lionheart. Now it's 2-0. What do you have to say about your favorite player, Varun? I mean, I love it. He's playing it to perfection. I mean, those sweeps are always going to be key, but need to keep the distance. So, with Bob, you have to be really swift, right? In and out. You have to play him like that. You get too close against Leroy, that's going to be super deadly. Goes in with the sweep again, just knocking off it feet. And see, keep him down perfectly. Wall carry has been successfully done, just going in for those chip hits. And just like taking the advantage. And neutralizing the overall score. 1-1 is going to be the See, score. I told you, Bharat. मुझे लग रहा ही था कि वो homework कर रहा है क्योंकि Lionheart, he's an old player, he's an experienced player, and I think even last year KO Fight Night he went till top 8, top 4, and I think he took Bob also against Tejan. Not really sure, but I have seen his Bob play, and whichever character, he always goes for uncanny characters and he knows what he's doing. And that was a beautiful sweep and power crush play right into the wall. Like, he did not let Leroy stand. Like, this is what I was talking about, and I feel like, a lot of players, they do this. Matlab, pehla match chhod do na. I have still 3 matches to get back. So, analyze. It's all mind games. Like, people think that fighting games are just button mashing, and no, it's so much more complicated than that. So, it's I would say this was a lovely start. Like, it's 1-1 down. It's brilliant match is about to come. Now I'm wondering if Rcool is gonna stick to Leroy, or are we gonna see a panda right now? See, that just makes it more exciting because we were initially expecting the Leroy versus Leroy matchup to come in, but no, did not happen. We got to see a Leroy versus Bob matchup. And as you said, I completely agree with you. Fighting games are more than just you moving the analog stick and pressing the buttons. It's more about mind games. It's more about dealing with pressure and putting the pressure on your opponents. It's about being in certain situations and realizing which situations are going to be advantageous to you, and if you're in a bad one, how do you get out of it? Right now, see, just trading hits, just going for those slight chips and not just trying to go for those brutal combos, because those are going to be, if he drops it and Rcool recovers, this is what happens. Oh, yes, but there we have Lionhart with his rage, but it's too late. He already had a lot of damage on the meter. दोनों players ही बहुत close range में खेल रहे चाहते हैं क्योंकि they're both aggressive players, and I feel like Lionhart has understood that if he's not aggressive with Bob and if he gives Leroy the chance to do this counter into this orbital combo, it's over for him. Tries to sweep, nice block there, but again gets that orbital. That orbital of Leroy is so dangerous, and with Bob's style of play, it is risky because you have to be in close range unless you get that sweep, but it's really a tough call there. I mean, this still can be anyone's game, but Lionhart does have more health advantage, but then comes back Rcool, brings out the Kin, nice block there, trying to play safe.
स्पोक गेम चल रहा है अब, क्या कहूँ, मतलब दोनों प्लेयर्स ही बहुत नर्वस है मुझे लग रहा है। I completely agree. I mean, finals का pressure है तो nervousness तो दोनों players के बीच में रहेगी, but Rcool थोड़ा सा कम nervous Lionhart के ऊपर capitalize कर रहे हैं और एक और set ले जाते हुए अपने तरफ. We were talking about this. We were talking about the character switch that might come in, and it feels like he doesn't want it. He just wants to play Leroy, and he just wants to get that victory. So 2-1 is the overall scoreline right now. Now the opportunity comes actually to the side of Lionheart. Did have a victory with the Bob pick, but Mudra, do you think he actually needs to change right now if he needs to come back in the series? Because let's talk about this as well. Right now, being in the upper bracket, he does have the opportunity to drop down to the lower bracket if he loses and then come back from there. But even there, that is going to be a pressurable situation. You always prefer to be in the upper bracket. Do you think the character switch should happen, or is the Bob pick just going to work out? I mean, it totally depends. Like, you know, a lot of people don't really do their homework and, you know, they might not know how the enemy character plays. That's why, you know, taking uncanny characters like Bob also gets in favor of you, considering your enemy knowledge. But then, I mean, against a broken character like Leroy, it's still very difficult to say. Like, you've noticed how, you know, I feel like, you know, Rcool, he saw that Lionheart, he changed his play style, was playing more aggressive, more front. But that also comes to an advantage against Leroy because, you know, he has his parries, he has frame advantages, so he can always turn that fight around. So I feel like Lionheart, you know, I've seldom seen him change characters mid-game, so that's why he's gonna stick with Bob. Maybe what he's gonna try is to change his play style, but doesn't seem to be working on right now. Rcool gets the nice first blood, almost. Health is down for Lionheart. Oh, and he gets that nice health sweep into the combo, but Lionheart changes up the game. He's gonna get the wall. He has his rage. Goes for the rage drive, but blocked there by Rcool. This can still go anywhere because Lionheart, his health is still way lower than Rcool. Oh, and Rcool just gets into that up for a 3-4 plus 1 plus 2. That is a very good combo ending for Leroy as well, and he just used that into a short combo. Rcool, like, you know, he's really getting into that low attack and then jumping out into a nice combo, but for Bob, I feel like he has to really play a little defensive and get into the side steps and get where, you know, Leroy's weaknesses are. Yeah, definitely. I mean, even in that last round, I think he did try and capitalize perfectly. Apart from the drop on the last hit of the combo from the side of Lionheart, everything was going according to him. But this time, just survives with the pixel, comes up with a good wake up, goes for the rage drive again, second time. Not on Camera point. angle, your worst enemy. Yeah. That camera switch just cost him that drive, but very well attempting. It's all neck and neck, but Rcool, I feel like he's gonna take the lead with Leela. Nice sweep, goes into the combo there, going to go full into the wall, but I don't think he will reach it. He doesn't push forward, brings out the cane. Lionheart with his rage now. Oh, but he fails those blocks. Oh, nice crush there into the sweep. Gets the rage drive. Oh, is this it for Rcool? Oh! Oh my god, that was a very nice play by Lionheart there. Very nicely he damage controlled that last part and got that round, but you know, Rcool is starting with a power punch. He knows he needs to get this first hit from Leroy into the wall to really get this round, and you know, there he goes. I feel like he's gonna finish this. Ho gaya khatam, or it ends with the 7 golden letters for me. I mean, that was a statement. How dare you? How dare you win a round off me in that matchup? This is my victory, and well, Rcool just taking it home. A pretty dominant performance in that last set as well from Rcool, but I have to say, Lionheart, big ups to him. An amazing fight being put up. Right now, things are still not over. Is going to move to, well, the disadvantageous side of the brackets. That's going to be the lower bracket side, but it's going to be the lower bracket finals. He's going to face off against whoever wins between Rohit, Jain and Tejan. Yes, it's risky indeed. I feel like Lionheart, you know, he is feeling the pressure right there. But hats off to Rcool, man. I mean, this player, he comes out of nowhere. Itna acha hai iska analysis. Matlab, I'm really impressed by him. Like, you know, he stuck with Leroy. He knew
he could have, turned this around. I feel like, Lionheart, that's what I was telling you, like, it still depends, but I feel like going for a Leroy in that match, mirror, और हम लोग को भी देखना है mirror match. We want Leroy mirror match. It's hype. Like, पूरा Evo था Leroy mirror match. So yeah, but let's see. Hopefully, there are few more matches left, so we can still see that. Yes, exactly. We still have more matches left, and more matches means more opportunities to see weird stuff just happen. But for now, चलिए डेस्क के पास वापस चलते हैं और देखते हैं उन लोगों का क्या कहना है इस पहले मैच के बारे में. All right, well, thank you so very much, casters. Indeed, what a wonderful match that was coming in from this lad, Rcool. Lionhart fell a bit short, but indeed, that was a cool gameplay because there was just no momentum going in favor of Lionhart. Yeah, actually, 3-1 is the scoreline that just right now, Rcool is leading by that and Lionhart was out there. But मेरे को एक बात दोनों की अच्छी लगी, like the way Mudra actually said कि इनका analysis बहुत बढ़िया तरीके से Rcool ने जो अपना किया था, plus जो जॉनी ने बोला कि क्या weird situations आगे बनेंगी, वो जरूर देखना चाहिए क्योंकि अभी तो एक चीज बन चुकी है. एक टाइम पर लगा कि Lionhart जीत सकते हैं, almost like he was going good for the comebacks, but at that time Rcool ने उनको कोई भी चांस नहीं दिया. हाँ, बाद में गेम 4 में भी उन्होंने एक राउंड निकालने की कोशिश करी, but then it was not worth it because when you have 3-1, you know who the winner is out there. Exactly. I mean, honestly, the way the game was played by Rcool, he was in control throughout. There was no two ways about it. I mean, there was a question that was raised during the cast as well. Should Lionheart maybe go ahead and switch Bob perhaps? But then again, did he? No, not at all. Because again, that was a debate that casters did get really involved with because there's no two ways about it. There's no way, not even one way about it, the way it was happening. But well, अब आती है Rcool की बारी कि वो बस बैठेंगे, चिल करेंगे. चिल करेंगे. लेकिन Lionheart जा चुके हैं लूजर्स फाइनल के लिए. लेकिन अब अगर हम बात करें रोहित जैन और तेजन, अब उनकी तरफ से देखना चाहूंगा मैं कि क्या आता है क्योंकि रोहित जैन तेजन ये भी अच्छे खासे नाम रह चुके हैं. लेकिन इस टाइम पर, इस मोमेंट पर जरूर इनको अपनी सिचुएशंस और स्ट्रेटजी समझनी पड़ेगी बिकॉज एज ऑफ नाउ व्हाटएवर हैज हैपेंड वी नो के Rcool just sitting out there. He's chilling, and once again just one step away from, just grabbing the trophy. Exactly. He's just that one match away from grabbing that trophy. Whereas on the other side, when you look at that loser bracket or that lower bracket, there are still 2 matches remaining within that. After which, Rcool will also get to know who is he supposed to play against when it comes to the grand final and be called the champion. So, yeah, there's still that few matches remaining for him. But nevertheless, now we move on to the lower bracket where indeed, of course, it was Tejan going against Rohit. And this time around, it is once again a very heated matchup because once again, why? It is a lower bracket, it is a loser bracket. That means these players were at one point in time part of that upper bracket circuit and they were looking really good unless they were brought down. So now they are going to try and come back with a vengeance and prove that, hey, you know what, we cannot be back down that easy. I mean that's one of the speculations जो अब रख सकते हैं, but last time हमने speculations रखी थी कि क्या बॉब सही रहेगा यानी वो भी एक तरीके से बस्ट आउट हुई थी और वो भी अच्छे तरीके से. बट खैर अब यही चीज आती है कि अगर आप पहले से लूजर ब्रैकेट में हो, यू आर ऑलरेडी अंडर अ बिट ऑफ प्रेशर. बिल्कुल. वहां से लूजर फाइनल में जाना वो भी एक हल्का सा प्रेशर रहता बिकॉज यू आर स्टिल नॉट, आई मीन यू आर विनिंग बट यू नॉट विनिंग ऑन दैट ग्रीन सिग्नल. यू स्टिल हैव जो एक बोलते हो तलवार तब भी लटक रही होती है आप पे. इट्स अ वेरी थिन लाइन दैट यू आर ऑन बिकॉज एक गेम आपकी तरफ नहीं गई एंड यू आर ऑलरेडी इन द लोअर ब्रैकेट. वेल हाउ लो आर यू गोना गो? इट्स द एंड बेसिकली इज व्हाट यू टॉकिंग अबाउट एंड दैट इज अ वेरी strenuous position to play in. And again, when you're talking about a game like Tekken 7 where it's just those 60 seconds, whereas in those 60 seconds itself, you're talking about those microseconds. वो microsecond difference पड़ जाता है अगर आपने controller दबा दिया and well that's it. अगर नहीं दबाया, well maybe GG's you might be able to block, but that's what the stakes are. The stakes are certainly high and they ought to be. I mean, this is the final, mate. It has to be. And with that, of course, let's also have a look at the head-to-head between these two lads that are coming in from the lower bracket where Rohit Tejan has not lost a single game, whereas on the other side, Tejan has had a bit of a loss. I mean, when I talk to both of them, I mean, Tejan, obviously, he wants to, I mean, obviously, in interviews with him, he wants to represent himself, but Rohit, he is, I would say, one-man army. When he wants to go out there, he wants to go out there. Like, he has 0 losses, that just shows. So, ये एक चीज़ भी show करता है कि, dominance बनाने के लिए रोहित हैं, dominance रखने के लिए रोहित हैं, लेकिन वो यहाँ रख पाएंगे नहीं क्योंकि वही चीज़, तलवार अब भी लटक रही है. बिल्कुल दोनों प्लेयर्स पर अटक रही है एंड वो दोनों प्लेयर्स का जो आंसर है वो इस गेम के अंदर ही हमें पता चलेगा दैट व्हिच वन इज गोइंग टू बी एबल टू मूव अलोंग इन दैट लोअर ब्रैकेट इटसेल्फ एंड देन फाइनली होपफुली मूव ऑन इनटू द फाइनल्स एंड compete against the incredible to well basically 50,000 on the line, dude. 50,000 INR on the line is not easy.
Yes. He's sitting. He's like, I'm cool. I'm cool. Exactly. That's exactly what Rcool's entire saga has been about throughout. You look at the stats. He's looking pretty cool and chill. But then on the other side, the heat is just getting started in the low bracket. With that, let's get busy with this match and quickly throw it to our casters. Hello, hello. Once again, welcome back to KO Fight Night Season 5 and straight up into the losers semi-final that is going to be between Tejan and Rohit Jain. So, Mudra, we have been waiting for this one for a long time. Definitely, Varun. I've been waiting this for a long time. I mean, we already saw in qualifiers that, Rohit Jain beat Tejan and he advanced. So, this is going to be interesting because like I was saying before, we have two different type of characters. One is Eliza, who comes with the DLC. So you won't be seeing many players, buying Eliza and playing her separately. So, that's the thing. We don't really see Eliza players. It's difficult to pick her. She's a very high risk character as well. Meanwhile, Rohit Jain, despite all this, वो इतना अच्छा performance किया Eliza को लेकर. I mean, I'm just so impressed. That means, he took his time into really learning this character, and I feel like what his key points are is he's gonna use that, advantage over enemy knowledge to win this. But then on the opponent side, अपना तेजन भाई है, उसके पास तो सब knowledge है. So and he's also playing Asuka. I'm really, I don't know, like yesterday I was very hyped up. I wasn't casting for that, but I was hyped up because I used to be a Nina main in Tekken 6. So, I was so happy to see Tejan winning with Nina, but I feel like Asuka is still his strongest. So still, I don't know which character he will go with, but either ways, seeing Tejan in his art is amazing. And, I'm just really excited to see this match. I don't want this to be like a 3-0 or a 0-3. I want it to go to like, 3-2 at least. So yeah, really, really hoping forward to that. I completely agree with that. I mean, this is the sort of matchup that in a normal scenario would have been a final, would have been the grand final. But this KO Fight Night Season 5 is anything but normal. I mean, we have had so many surprises, and here it is. All right, Tejan, Leroy. With Leroy, yes. So, looks like Tejan is not going to back down in this one. Goes forward with that forward 3 jump. Both the players playing a very nice block game. Eliza gets that hit into the launcher. Beautiful, beautiful range to the wall with that dive kick, but nice comeback from Tejan there. Tejan gets that counter in, but he doesn't go for the combo. I think there was a misinput there that might cost him the round because Rohit Jain is not going to back up and again will hit Tejan to the wall with that dive kick and just a little short on finishing it. Will Tejan take this opportunity to get back up with that much help? I feel like it's going to be difficult. He still has his rage though, he's trying to play it safe, but got a little impatient there and lost that. Yeah, I mean, Rohit Jain on the comfort pick, Tejan coming with the Leroy. I mean, I know he has played this one before and he's played this one quite a lot. And as you said, this man has a lot of experience that helps him adapt to situations really, really fast. I mean, you don't get to be called the god of Indian Tekken for a really long time if you don't deserve it, right? And Tejan, I mean, that is something that a title I would give to him up until recently was a literal god. The man was unstoppable. And look at this, again, just performing like the word that I used for him. God just brings down Rohit Jain really, really low, and with that high is gonna finish him off as well. Beautiful, beautiful low punish there. And, just look at both these two players. I just love seeing Tekken matches like this. दोनों को ही पता है कि, these people know what I'm gonna do, so I need to play very carefully. And beautiful low parry combo by Tejan there, but Rohit Jain comes back with that uppercut from Eliza, uses the meter as well, but could not go for it into a combo, and Tejan takes that lead into the wall with that beautiful KO. Oh, Tejan bhaiya, bahut acha khel liya overall around. I feel like Rohit Jain is missing some pointers. There were a lot of misinputs by him before. He really needs to get that beautiful combo he got the first 2 rounds. But yeah, I feel like these people, they're so nervous to go against each other. They're dropping few combos here and there. Yeah,
I mean, nervousness तो रहेगी because this is like where it all counts, right? And अगर यहाँ पे एक गलती की बाहर हो गए या फिर एडवांटेज दे दिया और ज़्यादा स्टैमर करने लग गए तो दिक्कतें बहुत बढ़ जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे एक गलती और उसके चक्कर में यहाँ पे रोहित जैन बहुत हैवी फिनिश करते हुए 2-2 पहला ही जो सेट है वो 2-2 पर आ चुका है। आखिरी राउंड पे हम पहुंच चुके हैं। तेजन यहाँ पे इनिशियल हिट्स लेते हुए एक हेल्थ एडवांटेज हल्की सी रोहित जैन को दी, बट ट्रेड ऑफ यहाँ पे निकाला एक विफ और रोहित की तरफ से पनिश आएगा एक फुल कॉम्बो के रूप में। लेट्स होप ही डजंट ड्रॉप दिस। Oh, that was a nice into the wall. But will he get that? Oh, beautiful meter play right there by Rohit Jain. That was so great there. You know, like Eliza, like I was saying, she's such a difficult character. Her moves are very risky because, you know, they are quite easily punishable. And I feel like that's what Tejan played on the first 2 rounds. But then Rohit Jain, he just that last round, he got that very, very nicely. And I'm very impressed. एक और चीज थी जो मेरे को विशाल ने बताई थी. What he told me was Tejan has this tendency 90% of the time वो अपना पहला सेट जो है जानबूझ के हार जाता है just to see what the opponent is doing. अगर यहाँ पे वो चीज करी और उसमें भी वो बिल्कुल फाइनल राउंड तक लेकर गए हैं, that means कि अगले जब हम देखेंगे तेजन को अगले सेट में जाते हुए, and if he's on a comfort pick or depending on if he's coming back with the Leroy, he is going to start going for that domination, because if you just need one game to study, you have gotten that one game, you have dropped that first match, and now it's time to go for a comeback. Definitely. Let's see, you know, if that is the mind game Tejan is playing. Could be, or, you know, usually people don't really read on the first match too much. So, you know, it still can be anyone's game at this point. But, you know, I'm just so happy that both these players are giving us such great matches. बहुत मजा आया वो वाला match देखने में. So, you know, if that's just the base, I just, you know, really excited for what the real big deal is gonna be. Definitely. Yeah, even I am excited. I mean, as I said, एक ऐसा मैचअप जो लोग नॉर्मली प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ऑलमोस्ट ये तो चलिए ये तो ग्रैंड फाइनल्स की तरफ जाएगा, वो हमें बहुत ही पहले देखने को मिल रहा है. और उसमें भी इतना हाई प्रेशर सिचुएशन है क्योंकि अगर आप हारे यू गेट एलिमिनेटेड, आप आगे नहीं जाएंगे. इवन तो आपने टॉप 4 का जो प्राइज मनी है वो तो गारंटी कर लिया है, बट टॉप 4 से बात नहीं बनती. यू हैव टू विन, यू हैव टू फिनिश ऑन द फर्स्ट पोजीशन. वही एक प्राइड होती है जो यहाँ प्लेयर्स जिस चीज के लिए लड़ रहे होते हैं, और अभी भी उसी की तरफ यहाँ पे बढ़ने की जर्नी जारी. और वापस से आते हुए तेजन अपने कंफर्ट पिक के ऊपर गोस फॉर द लॉन्चर. यहाँ पे देखते हैं वॉल कैरी तो मिल जाएगा, बट कितना आगे तक ये डैमेज को ले जा सकते हैं. ओह, अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं रोहित जैन के पास. एक इनिशियल हिट लिया था तेजन ने और उसके बाद से उनको खड़ा भी नहीं होने दिया. Tejan is back with his main and he's showing that he's not backing down, but now Rohit Jain also trying to get that read. Gets the combo. Is he gonna go through the wall with this and again gets the wall advantage? Can Tejan roll back out? But then comes a throw. Oh, Rohit Jain. Tejan is still a little low on HP, but has his drive. Will he get with the drive this one? But no, blocked. The drive is blocked. Now Rohit Jain has the drive, and there comes that meter up kick. I mean, uppercut, and you know, that's just it. Rohit Jain played that round very beautiful with the reads. I mean, both players at this point, you know, they're just trying to get the reads on their opponents and just trying to utilize on that. Asuka, Eliza, like, both very difficult character. Tejan gets that parry very nicely. Will he push it into a wall? But it gets cancelled by that tower of uppercut from Rohit Jain. Oh, this is going so interesting right now. Cancels that dive. Tejan, what's going on in your mind? But he gets caught up with that hell sweep, and there comes another huge combo from Eliza into the... Oh, doesn't reach the wall. Still trying, but gets parried, and the rage drive hits from Tejan. Will he get this? Oh, he gets it! Nice. I think that was a big mistake from Rohit Jain there, going for that high shot, and Tejan just taking that advantage with Asuka's mid. डेफिनेटली बहुत ही बड़ा एडवांटेज. और इस बार जिस तरह से शुरुआत करी है, इट लुक्स लाइक द वेरी फर्स्ट राउंड जो हमने देखा था, लो के लिए जाने की कोशिश पहला मिस हुआ, दूसरा वहां पे कनेक्ट होता हुआ और परफेक्ट ले जाते हुए तेजन
जैसा आई मीन आई थिंक विशाल वाज राइट, ये जो इंसान है तेजन, ये पहला राउंड कुछ भी करके ड्रॉप कर देंगे, और जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऑलराइट आपने एक अच्छा कैरेक्टर लिया, आप क्लोज तक लेकर गए, आई थिंक वो जो क्लोज फिनिश इन्होंने दिया रोहित जैन को, दैट वाज बिकॉज वो सारी चीजें पुल कराना चाहते थे। ही वाज लाइक आप दिखाइए मेरे को आप किस हद तक जा सकते हैं अपने एलाइसा के पिक के साथ, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जब मैं पिक लेकर आता हूँ व्हाट कैन एक्चुअली हैपन, एंड ही शोकेस दैट perfectly this time. एकदम एकदम। और one thing you if you haven't noticed, he took Leroy in the first match. Yeah. मतलब वो नहीं बोलना चाहते कि मैं Asuka, मतलब he doesn't want his opponent to get the read on his Asuka, so he took Leroy, and now Rohit Jain is in a little bit of trouble because even though that first round he did get a little bit of that read, but Asuka, if you get that first combo of hers into the wall, you can really punish in the wall with that for 1+4 and then 1+2. So you know that's what Tejan did, and that worked out so well for him. But it was so nice to see the rage arts and the rage drives being used very well by our pros here. Just waiting to see if Rohit Jain is gonna change or stick to his main with this one. Definitely, I mean, I would love to see that as well because now the scoreline has been tied up. एक का overall scoreline हो चुका है. तेजन ने वापसी कर ली काफी अच्छे से. रोहित जैन के पास अब एक opportunity रहेगी change करने के लिए. Let's see. Well, अभी हमें पता चल जाएगा. And no, just goes for the stage switch. Yes, Tejan coming in strong. Both players just getting one poke, one defense. Tejan goes for that 1+2, does not land. The low hit lands, doing the cartwheel. Tejan just looking for that opening there. Pushed Rohit Jain into the wall, and I think tries the wall advantage, but Rohit Jain luckily goes out of it. Tries to dive kick punish, but both players get staggered back from that. It could still be Tejan's game here, but Rohit Jain coming back with the bang, gets that wall. Oh, but Tejan, it's a nice recovery. Both have rage now, but Tejan. Tejan's like, I don't need to use my rage art to get this round, okay? I'm really good. Oh, but that's a dangerous start from Rohit Jain right there. Will he get max damage on this? But no, Tejan does the side roll and gets back up. But there comes a double uppercut from Rohit Jain. Oh, those players don't have rage right now, but Tejan has it, and I feel like he's gonna go for the drive. What? And look at that. Beautiful play. Yes, it was a beautiful play. शुरुआत जिस हिसाब से वहाँ पे रोहित जैन ने करी थी, I thought ये तो चलो एक राउंड तो इनके नाम जाने वाला है, बट आई गेस मैं भूल गया था कि किसके अगेंस्ट ये मैचअप खेला जा रहा है. तेजन की तरफ से कमबैक आपको देखने को मिला. यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन पनिश आता हुआ रोहित जैन की तरफ से, एक बार फिर से कैरी करते हुए. बॉल थोड़ा दूर थी बट ले जा चुके हैं ऑलमोस्ट कोने तक, बट नहीं, एक ओपनिंग चाहिए होती है इस इंसान को. वो यहाँ पे आई थिंक शायद मिली थी इनको कुछ सेकंड्स के लिए. रोहित जैन काफी अच्छी वापसी करते हुए मैच के अंदर. हाँ, एकदम wall push तो कर लिया, but Tejan tries to get that counter against another wall. That rage drive was cancelled by Rohit Jain. Oh, Tejan's in a bit of a mess here. Will he be able to clutch this? What? And he does Again? it! Amazing clutch there by Tejan. I mean, did you see that rage drive cancel that Rohit Jain did? After that, I mean, अगर मैं होती तो like I would have just been done for him. It's like I wouldn't have known what else to do back then. But just look at the amount of composure Tejan has, and he insane clutch that was right there, and that got him the entire match. And that's our boy Tejan right there. I mean definitely. जिस तरह से I mean वो फिनिश निकाला है, वो इंटरप्शन जो आपने बताया, that was crucial. बट उसके बाद रोहित जैन को भी रिकवर करना था और फिर he had to go in with a combo of his own. तेजन ने अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छे से यूटिलाइज करी. एक चीज अगर बात करें तो ये मैच काफी ज्यादा बैक एंड फोर्थ हमको जाता हुआ नजर आया था. एक टाइम पे तेजन की तरफ से हमें ड्रॉप देखने को मिला, फिर रोहित जैन ने ड्रॉप किया, और दोनों ने अपने ओपोनेंट्स के मिस्टेक्स का काफी बखूबी से फायदा वहां पे उठाया था. बट इन द एंड तेजन अब एक अच्छी लीड अपने ले चुके हैं इस मैच के अंदर. 2-1 से यहाँ पे लीड कर रहे हैं. फिर से एक बार रोहित जैन के पास अपॉर्चुनिटी रहेगी टू like throw something at Tejan and to just throw his game off. वरना जिस हिसाब से I mean अगर बात करें, चलिए मैच 1 हमने ले लिया कि तेजन रीड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर मैच 2 से मैच 3 की अगर बात करें, जितना ज्यादा ये कंफर्टेबल होते जा रहे हैं रोहित जैन के अगेंस्ट खेलने में, उतना ज्यादा दिक्कतें अपने ओपोनेंट को दिए जा रहे हैं. और उस चीज से बाहर निकलने के लिए तेजन हैज टू कम इन विद अ सरप्राइज.
डेफिनेटली। अरे मुझे तो लग रहा है कि तेजन भाई अब ऑडियंस के साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं। थोड़ा स्टार्टिंग में वो दिखाया कि नहीं मैं आउट ऑफ फॉर्म हूँ, पर अभी तो लग रहा है मतलब वो बहुत इन शेप है, बहुत वेल इन्फॉर्म्ड है अपने एनिमीज के बारे में, एंड ही इज जस्ट गोइंग फॉर इट, नॉट बैकिंग डाउन। वेल डेफिनेटली बैक डाउन तो बिल्कुल नहीं कर रहे, बट अभी भी यहाँ पे रोहित जैन के पास अपॉर्चुनिटी हो सकती है, गोस फॉर द लॉन्च। और अब देखते हैं कि कितना I think he has to go for it। अगर एडवांटेज नहीं क्रिएट किया तो यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिलता है उनकी तरफ से कॉम्बो में। ओह डबल अपरकट पनिश राइट देयर, गोस फॉर द थ्रो, बट तेजन के साथ तुम थ्रो नहीं कर सकते, वो कैंसिल करना जानते हैं, बट तेजन that was a bad paddy there. He just went into that early Alyssa Asuka paddy stance, and you know that cost him that round. I feel like he mistimed it there, but he's coming in strong again this game, trying to push through the wall, but gets hit with that crazy dive kick. Both players playing very defensive right now, but Tejan, he's just going for it with that little pokes and the sweep, and he gets that power crush very nicely, but that doesn't land with the wall, and Rohit Jain trying to take it back up. Tejan still has the health bar advantage. Can he do this? Rohit Jain with his rage, but Tejan just playing mind games and going for that low kick to the finish. आई मीन एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज वहाँ पे गेन कर लिया था, उसके बाद तो फिनिश आना इनके लिए प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी, बट अभी भी वो जो लोज है उन्हीं के साथ थोड़ा थोड़ा चिप करके पुश तो कर दिया इन्होंने प्रेशर के साथ रोहित जैन को वॉल पे, बट रोहित जैन बाहर निकलने में सक्सेसफुल हुआ था, ग्रैब के लिए जाने की कोशिश, और अब तेजन की तरफ से हमें कॉम्बो देखने को मिल सकता था, बट अब वापस से रोहित जैन रेज भी आ चुका है, बार बिल्ड कर रहे हैं धीरे धीरे करके, और वो चीज भी एक एडवांटेज इनको दे सकती है ऐसे कैरेक्टर के साथ। लेट्स सी, काफी चिप डैमेज तो प्रोवाइड कर दिया, बहुत ज्यादा लो ड्रॉप करते हुए अब तेजन को। हाँ, अभी तो दोनों प्लेयर्स का ही एचपी सेम है, पर तेजन एडवांटेज ले लिया बहुत अच्छे से वो वाला। अब 2-1 डाउन है, क्या होगा पता नहीं। तेजन अगेन गोज इन फॉर दैट फर्स्ट ब्लड एंड नॉट बैकिंग डाउन। ओह, गेट्स दैट कार्टव्हील कॉम्बो एंड इज गोना पुश थ्रू दैट वॉल एंड पनिश Rohit Jain, but can he come out of this? No, another perfect finish, and there we have it. Sadly, we have to say goodbye to our young blood, and Tejan bhaiya dikha diya ki I still got it. Okay, I still got it. वेल हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी अभी जुड़ने जा रहे हैं, इन्होंने ही इज गोना बी आवर एनालिस्ट, सो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर डैन, द मैन फ्रॉम अप अबव इज बैक. Hello guys, how are you guys doing? It's been a while. Yes. Yeah, definitely. The time to come in, and I managed to join in from game 1 towards the end of game 1, and I watched Rohit pretty clearly take the game over Tejan. Really good use of Eliza there and her tools to close out that game, but then Tejan had to go and switch over to Asuka, and from there he just started showing Rohit that no, you have to sit down, it's my game, please just calm down, slow down. And literally almost after the first game it felt like he'd put the fear into Rohit, and really catching all of his options at that point, just waiting for him to do something. So really solid play from Tejan. I think Rohit was rattled, but it happens unfortunately, and Tejan's that caliber of player that can do that. I mean, I feel like if Rohit, he dropped a few combos there. Like whenever you saw him execute that full Eliza combo, that was so good. But I feel like it just wasn't his day. Well, it wasn't his day. Good luck to Tejan and congratulations to him for moving forward in the tournament. But now it is time, for us to head back to the desk and see what they have to say about the match. Thank you so very much, analysts as well as casters. Dude, that was a good game. Now, that was a really good game, especially जैसे हम पहले बात कर रहे थे, you're on the edge. You are on the edge, and उस time पे first game of course was taken over by the incredible Jain. But as you move on along, Tejan ने जो snow flow बनाया was just smacking through. I mean, Tejan did some good stuff out there, like back-to-back जब games निकालने की शुरुआत करी, and there were some moments, one great moment just coming out there, बहुत अच्छे थे, perfect moment भी बहुत बार आए थे, खैर वो अच्छे तरीके से निकले, but at the end में दाद देना चाहिए जिस तरह Dan ने समझाया, because obviously whenever Dan actually comes up there on screen, so Dan बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातें वहाँ पर बताते हैं और बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें यहाँ पर निकाल कर लाते हैं, लेकिन अब इसका यही मतलब बनता है कि Tejan की यहाँ से जर्नी एक तरीके से आगे जाती है,
Tejan goes for a kickstart, but Rohit, that's where I would say the things will be looking a bit hazy. जो हम brackets में भी देखकर discuss करेंगे. Absolutely. When we get a look at the brackets, we know for a fact that Rcool is just chilling there, waiting for his opponent to be figuring out. But right now, that question is going to be forced down upon Lionhart and Tejan. ये दोनों क्या कमाल निकालते हैं इन दोनों के गेम के बेसिस पे Rcool will finally have his opponent. He will be having it now. Like he's still waiting. Like imagine he's just waiting, just looking at his watch and just thinking like, when's the time? Like लेकिन यहाँ पर तेजन आगे गए हैं. दूसरी तरफ से अगर मैं बात करूँ Lionhart, he has another chance to rectify the mistakes जो उन्होंने Rcool के against करी थी. And maybe वापस से Rcool को face करने का मौका हो सकता है. लेकिन Lionhart के सामने अब तेजन नाम की एक चट्टान रहेगी. बिल्कुल सही बात है. And उस चीज के लिए हम सारे के सारे भी बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे हैं and anticipated हैं. And then of course there are predictions. That is the story. So again, hashtag करिए KO Fight Night and let us know in chat, on Twitter, on Facebook, whatever suits your boat. What player are you looking forward to when it comes to the lower bracket? We know already Rcool हैं final के अंदर, but who is going to be facing them is what I'm asking you guys. With that, what we're going to do right now is showcase a couple of interviews that were of course taken by Ocean himself. So let's get ourselves acclimated with what the player's life has been like up until now. Ladies and boys and girls, स्वागत है आप सबका. मेरा नाम है ओशन शर्मा और खैर अगर हम बात करें KO फाइट नाइट के मैचेस की, बहुत जोरों शोरों पर मैचेस ये वाले जा रहे हैं. लेकिन इन सब के बीच में टेकन के अंदर बहुत धुरंधर अपने आप को ऊपर असर्ट कराने के लिए डोमिनेंस कोशिश कर रहे हैं. और उनके बीच में एक ऐसे दिग्गज हमारे साथ रहेंगे, रोहित जैन इनका नाम है. और इनसे हम लोग बात करेंगे, जानिए कि इनकी स्ट्रैटेजी और सिनेरियोस क्या रहे अभी तक और आने वाले फ्यूचर एंडेवर्स के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रोहित, वेलकम आउट, थैंक्स फॉर गिविंग आउट योर प्रेशियस टाइम. मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि आपका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या लगेगा, आप हो कहाँ से और वहां से अभी तक आपने स्टडीज वगैरह में क्या क्या चीज करी एंड आप इस गेम में किस तरीके से आए? मैं दिल्ली से हूँ और मैंने ये गेम स्टार्ट करी थी 15 इयर्स पहले स्टार्ट करा था टेकन 3 से. देन टेकन टैग में मैंने काफ़ी टाइम दिया है टेकन टैग में. उसके बाद अभी 2018 से मैंने टेकन 7 स्टार्ट करी है और मतलब अब थोड़ा इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो गया है. और मैंने सारे टूर्नामेंट्स खेले हैं दिल्ली में जितने भी हुए हैं ऑफलाइन. ड्रीम हैक भी खेला था लास्ट टाइम जो हुआ था. तो काफी अच्छे तरीके से ऑब्वियसली आपने अपनी जर्नी बताई. ड्रीम हैक भी आपने खेला है लेकिन अभी KO फाइट नाइट के अंदर आप आए हैं. तो आपकी कॉम्पिटिटिव जर्नी बेसिकली किस तरीके से स्टार्ट हुई? क्योंकि इससे पहले आप कैजुअल भी खेल रहे थे, लेकिन वहां से कॉम्पिटिशंस के अंदर आप कैसे आए? कंपटीशन के अंदर मेरा फ्रेंड था एक, वो टैग 2 खेलता था, उसी ने मुझे मतलब टेकन 7 के लिए बोला था कि मतलब टेकन 7 भी खेलनी चाहिए, स्टार्ट करनी चाहिए. फिर उसने एक मतलब पार्लर अपनी शॉप खोली एक गेमिंग, उसमें टेकन 7 लगाई थी. वहाँ से हमने 1-1.5 साल खेला. मेरे पास पीसी भी नहीं था जब. अभी 2-3 महीने पहले ही मैंने सिस्टम बनवाया था अपना और फिर मैं थोड़ा सा इम्प्रूव होने लगा. जैसे फ्रेम डेटा वगैरह का मुझे नहीं पता था पहले, अब मुझे पता लगने लग गया वो कैरेक्टर नॉलेज. हाँ जी. तो कैरेक्टर नॉलेज जैसे आपने बताया एंड इफ यू नो अबाउट इट, ऑब्वियसली आप बाकी प्लेयर्स के भी गेम प्ले देखते हो. वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स जो रहते हैं, JTCR हो गए, वहां पर लिल माजिद हो गए अगर हम उनकी बात करें. एंड वेल उनके बहुत बेहतरीन तरीके के अपने अपने फेवरेट कैरेक्टर्स रहते हैं. तो आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन से रहते हैं और क्यों आप उनको चूज करते हैं? फेवरेट कैरेक्टर तो मेरी एलाइजा ही है, 2D कैरेक्टर है. और सेकंड नंबर पे मेरी वो काजुया से भी खेलता हूँ मैं. एलाइजा से मैंने मतलब 1 साल हो गया मुझे खेलते और काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख रही है एलाइजा से खेलते हुए, इसलिए मैं एलाइजा से कंटिन्यू रखता हूँ. और अभी भी नई चीज़ें मैं सीख रहा हूँ एलाइजा की, काफ़ी नई स्ट्रेटेजीज बना रहा हूँ एलाइजा की मैं. तो KO फाइट नाइट के अंदर आप अपने आप को किस तरीके से देखते हो? जो अभी टूर्नामेंट ऑब्वियसली चल रहा है एंड फाइनल्स भी हमारे पास रहेंगे, तो आप अपने आप को किस तरीके से इस टूर्नामेंट के अंदर आगे डोमिनेंस करवाते हुए देखते हो? वही धीरे इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ. अभी मैंने लवनीत को हराया है, सेकंड नंबर पे है वो इंडिया में, पूरे टॉप 2 है. और पहले तेजन को भी हराया था मैंने क्वालिफायर्स 1 में, आपने देखा होगा जी. तो मतलब अब मुझे लग रहा है कि मतलब मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ. So is there any message जो आप इस कम्युनिटी को पूरा देना चाहिए? क्योंकि आप इतने टाइम से इस कम्युनिटी के अंदर हो, तो इतने टाइम से अभी तक जिस तरीके से आपने इस कम्युनिटी को देखा भी है, इसका बाहर भी संभाला, so is there any message जो आप देना चाहेंगे अपने फैंस को, फ्रेंड्स को, फैमिली को? मैं यही देना चाहूँगा, सबसे बड़ी टिप मेरी यही है, मैसेज यही है कि एक कैरेक्टर पे फोकस करो इस गेम में, 1 या 2 मैक्स. मतलब
1 या 2 में सेटअप्स वगैरह बंदा ठीक से देख सकता है। जी, so काफी अच्छे तरीके से आपने ऑब्वियसली काफी बातें बताई एंड आई विल बी होपिंग वन थिंग ओनली कि जिस तरीके से गेम प्लेस आगे बढ़ते रहेंगे एंड आपके मैचेस आगे जाते रहेंगे, आई होप कि आप फाइनल तक पहुंचे, मे बी जस्ट मे वहां पर भी आप डोमिनेट करें। सबने आपने रैंक 2 को हराया, बट एट द एंड रैंक 1 हमारा एक एंड गोल रहता है। सो आई विल जस्ट से ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द फ्यूचर एंडेवर्स एंड सी यू ऑन द अदर साइड। Ladies and boys and girls, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम रोशन शर्मा और KO फाइट नाइट के मैचेस जिस तरीके से चल रहे हैं, टेकन के मैचेस स्पेसिफिकली जिस तरीके से चल रहे हैं, आई मीन हर कोई एक प्लेयर को कहीं ना कहीं प्लेयर अप करता है। या सो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे रहेगा कि आप अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहां से हैं और आप अगर जॉब करते हैं तो क्या करते हैं, आपका अगर स्टडीज है तो क्या चीज है। I live in Delhi and I'm not doing any job. I'm trying to pursue a career in esports actually, but so far I'm not that successful. But you know, like I started playing this game like Tekken. I played Tekken and I started playing this game like 10 years ago competitively. I used to play it as casuals, you know, with my brother and my friends. Do you think like transitioning from a normal player to a competitive player, was that hard for you? Like how was that journey for you? I actually started winning tournaments legit. Like I started defeating, you know, good players, Lavneet, Simran, and Lionhart. You know, he's in the top 4 as well. And Lavneet, they are, you know, veterans of Tekken. So yeah, that's when I basically started winning the tournament 2014-13. I want to ask you one thing. उस टाइम का competitive scenario versus आज का scenario आपको कैसा लगता है competition? काफी नए प्लेयर्स आ चुके हैं। पहले कम्युनिटी काफी लिमिटेड थी, लेकिन अब बहुत नए बहुत अच्छे प्लेयर्स आ चुके हैं। जैसे कि आप टॉप 4 देख रहे हैं, रोहित जैन आई थिंक ही स्टार्टेड प्लेइंग 2 years ago. I am not sure, but he started in Tekken 7. He's not an old player. And Rcool is in top 4 as well, and Shubham as well, who made it into top 8. They are also new players. They started around 2015-16 at that time. So अब competitive scene काफी अच्छा हो गया है इंडिया का और लोग बहुत ही अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं और मेरे हिसाब से हम वर्ल्ड रैंकिंग में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आप यहाँ से KO फाइट नाइट जो इस बार का KO फाइट नाइट है, इसकी कंपटीशन आप अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से कैसे देखते हैं? लाइक ऑब्वियसली आप बोलेंगे कंपटीशन टफ है, बट व्हाट डू यू थिंक इज चेंजिंग विद दीस सिनेरियोस? फर्स्ट टाइम इतना बड़ा टूर्नामेंट हुआ है जो कि ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन में एक लैग का फैक्टर आ जाता है जो कि जिसे कि मुझे अडेप्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट, मुझे बहुत दिक्कत हुई इसे अडेप्ट करने में कि वो लैग का फैक्टर, देयर इज अ डिले बिटवीन। आपका पर्सनल फेवरेट क्या रहता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दीस थिंग्स? मेरा पर्सनल फेवरेट एक्चुअली एक ऐसा कैरेक्टर है जो इस टेकन इटरेशन में नहीं है, टेकन 7 में नहीं है। उसका नाम है बेग डू सान। ही इज ए taekwondo you know martial artist. And after that, it's Asuka. I'm playing Nina and Asuka because my main is not in the game. So you know these three are my main favorite characters. Not my main, I would say. Like Nina, Bake, they are my favorite characters. एयरटेल इंडिया esports टूर का एक नेशनल लीडरबोर्ड बनता है जिसके अंदर हमें सारे प्लेयर्स को रैंक किया जाता है। एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट आप अपने आप को वहां पर कहां देखते हो? मैं चाहता हूं कि मैं टूर्नामेंट जीतूं। ऑफ कोर्स मैं फर्स्ट पोजीशन के अलावा किसी और पोजीशन के लिए खेलता नहीं हूं टूर्नामेंट। आई एम ऑलवेज लाइक if I'm playing this tournament, I'm gonna win. So is there any message जो आप इस कम्युनिटी के लोगों को देना चाहेंगे जो आपको लगता है ऑब्वियसली उन लोगों को बहुत अच्छा रहेगा आगे फोकस करने के लिए अपने गेम पे? Tekken is a very deep game. Like it's a really deep game. You need a lot of learning. You know, every character has around like 100 moves in this game, and every move has 7 to 8 properties which you have to basically remember, okay, and apply in the match at the exact same time. You know. एक ही चीज बोलूंगा इससे पहले बिकॉज़ आपका जो कॉन्फिडेंस है बहुत अच्छे तरीके से उभर कर रहा है। सो pretty soon if not anything मैं आपको ट्रॉफी के साथ ही पाऊंगा KO फाइट नाइट की एंड एक्टिव में ही बोलूंगा ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द फ्यूचर एंडेवर्स एंड सी यू ऑन द अदर साइड। लेडीज एंड बॉयज एंड गर्ल्स, स्वागत है यहाँ पर आप सबका। अगर मैं बोलना चाहूँ KO फाइट नाइट का जो दौर चल रहा है, सेशन चल रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से अभी तक मैचेस जा रहे हैं। मैचेस अलग, शो मैचेस अलग जा रहे हैं और यहाँ पर मेरा नाम है रोशन शर्मा और मेरे साथ रहने वाले हैं मेरे दोस्त हो सकते थे जो वरुण जॉन। यस, बट राइवल बन चुके हैं हम क्योंकि मैं आपसे बेटर हूँ उस गेम में जो हम अभी कुछ ही देर में देखेंगे। दैट इज टेकन 7। वो सिर्फ एक घमंड रहता है खैर अगर मैं बोलना चाहूँ, लेकिन
अगर हम बात करें शो मैचेस की, Yes. मैं चलो हमने मॉर्टल से बात करी थी, हमने माम्बा से बात करी थी, बट आपके हिसाब से आपको कैसा लगा था वो शो मैच? आई मीन काफी ज्यादा एक्साइटिंग था और शो मैच था, फन मैच था दोनों के लिए। माम्बा से हमारी बात हुई जीत के बाद, उनको समझ आ गया था, उन्होंने स्ट्रैटेजी बिल्ड कर ली थी कि उन्हें पता था मॉर्टल अगर लो ब्लॉक करेंगे उन्हें मिड्स मारने हैं, वहां पे वो कनेक्ट हो गया। अगर मॉर्टल नॉर्मल स्टैंडिंग जो हमारा न्यूट्रल ब्लॉक होता है उसके लिए जाएंगे तो वो लो कनेक्ट कर देंगे। अब वही चीजों का फायदा माम्बा वहां पे बार बार उठा रहे थे। मॉर्टल जो कि गेम पहली बार खेल रहे थे, उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस था और उन्होंने भी बताया काफी ज्यादा फन आया। और टेकन के मजे, जो चीज उन्होंने बोली कि अभी स्ट्रीम में साथ में बैठ के खेलेंगे हम लोग, साथ में जो जितने उनके गेमिंग हाउस में लोग मौजूद है वो सब खेलेंगे, उसी चीज में तो मजा होता है। आई मीन आप अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, गेम एंजॉय करते हैं, और दैट्स हाउ थिंग्स गेट स्टार्टेड। अभी आपने तो इंटरव्यूज लिए थे प्लेयर्स के साथ, आई थिंक एक कॉमन चीज आपको भी पता चली होगी उन इंटरव्यूज के अंदर, मोस्ट ऑफ देम जस्ट स्टार्टेड आउट फॉर फन, और उसके बाद खेलते खेलते दे स्टार्टेड गेटिंग बेटर। वो कंपेटिटिव स्पिरिट उनके अंदर लाइक वो जुनून जागने लगा, दैट्स हाउ दे स्टार्टेड गेटिंग इनटू द कंपेटिटिव सीन। आई मीन मैं सिर्फ एक गेम की बात नहीं करूंगा, मैंने ऑब्वियसली स्मैश के भी इंटरव्यूज लिए थे, मैंने टेकन के भी इंटरव्यूज लिए थे, मैंने स्ट्रीट फाइटर के भी इंटरव्यूज लिए थे। तो स्मैश के बारे में तो मेरे को सबसे अच्छे तरीके से लायन हार्ट ने बताया था कि स्मैश इंडिया करके एक पूरी जो कम्युनिटी है, वन ऑफ द बिगेस्ट कम्युनिटीज दैट इज आउट देयर फॉर द गेम इफ एनीथिंग। और अगर मैं स्ट्रीट फाइटर की बात करूँ, स्ट्रीट फाइटर की कम्युनिटी इट्स अ वेरी गुड कम्युनिटी, वेरी पॉजिटिव वाइबिंग कम्युनिटी। वहां पर जब प्लेयर्स से बात करी, दे वर लाइक कि हम अगर आगे बढ़ना चाहते हैं अकेले नहीं, एक दूसरे के साथ बढ़ना चाहते हैं, दैट्स वन थिंग। और जैसे ही अगर यहाँ पर बात करें, जैसे Rcool की बात हो गई, रोहित जैन जिनका अभी हमने मैच देखा, तेजन की बात हो गई, दीस प्लेयर्स आर आल्सो शोकेसिंग वन थिंग कि एंथुसियाज्म है इनके पास गेम के लिए। सो इट कम्स अप टू वन थिंग, गेमिंग जॉनरास बहुत, अगर हम KO से भी हटकर गेम्स देखें, देयर आर a lot of FPS गेम्स रहती हैं वहां पर, ऐसी फाइटिंग गेम्स होती है। अगर हम इनकी बात करें, KO की बात करें, KO फाइट नाइट के अंदर जितनी गेम्स हैं, सो गेम्स अलग अलग जॉनरा की होती हैं, बट प्लेयर्स का एंथुसियाज्म सेम लेवल का होता है। वो होता है कि हमें खुद को बेस्ट बनाना है, अपनी कम्युनिटी को ऊपर लेके जाना है। दैट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट गेमिंग। एग्जैक्टली और यहाँ पे भी मतलब प्लेयर्स जो कम्पीट कर रहे हैं वो रहेगा KO फाइट नाइट सीजन 5 के चैंपियंस बनने के लिए, प्राइज मनी जो एलोकेट किया गया है उनके लिए, और एयरटेल इंडिया ई स्पोर्ट स्टोर में अपना नाम जोड़ने के लिए। लेकिन जैसा ओशन ने बताया था, एक बार फिर से हम शो मैच की तरफ आ चुके हैं, और शो मैच के अंदर अगर हम आपको बता दें हमारे दूसरे शो मैच के कंटेंडर्स के बारे में, तो एक तो हमारे कंटेंडर जिनको आपने कल भी देखा होगा, उन्होंने कल स्ट्रीट फाइटर 5 एक्सपीरियंस करी थी और जीते भी थे वो स्ट्रीट फाइटर 5 के उस शो मैच के अंदर। तो स्काउट यहाँ पे वापसी करेंगे और उनके अगेंस्ट रहने वाले हैं रेबल, जो आई मीन मल्टीपल ई स्पोर्ट्स टाइटल में हाईएस्ट टीयर पे खेल चुके हैं। Yeah. टेकन के बारे में भी हमें अपने सूत्रों से जानकारी मिली थी दैट ही इज एक्चुअली प्रीटी डिसेंट एट द गेम। He's pretty good at the game. Decent is if Yes. you're putting it generously, मैं बोलूंगा he's pretty good at the game. Plus मेरा स्काउट से सबसे पहला सवाल ये रहेगा, कल आपको याद होगा थर्गो स्काउट ने एक बात बोली थी कि हम रात को बैठकर सारे पैक्स खरीदेंगे स्ट्रीट फाइटर के। मैं पहला सवाल तुमसे ये पूछना है कि उन्होंने पैक्स कोई खरीदे हैं स्ट्रीट फाइटर के या नहीं, बिकॉज वो रहेगी स्ट्रीट फाइटर की बात। वहां से आएंगे अगर टेकन के अंदर, तो टेकन के अंदर तो मैं बोलूंगा बोलबाला ऑब्वियसली रेबल का किसी ना किसी तरीके से रहेगा, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से, बिकॉज दैट गाय नोज द गेम, दैट गाय नोज द थिंग्स। एंड आई वुड से एक ऐसा सिनेरियो मान सकते हैं, मॉर्टल को हमने देखा, मॉर्टल स्टार्टेड फ्रॉम डे वन, दिस वाज हिज डे वन। देन कम्स अप माम्बा हु पिक्ड अप फ्रॉम वेयर ही लेफ्ट, एंड मैं बोलूंगा आज माम्बा ने जहां से उठाया है, माम्बा की कमान ही रेबल आगे लेकर जाए, बिकॉज ही एक्चुअली नोज ऑल द स्टफ। यस एग्जैक्टली, वही एक आई मीन स्टोरी लाइन तो यहाँ पे बिल्ड हो गई है। स्काउट से भी मैं जानना चाहूंगा, उन्होंने कल बताया था कि बहुत बहुत पहले टेकन एक्सपीरियंस करी थी, तो थोड़ी बहुत गेम नॉलेज तो उनको भी होगी। फेवरेट कैरेक्टर भी उन्होंने बताया था, लॉ उनका एक कैरेक्टर है जो उनको याद है अलॉन्ग विद पॉल, तो वो जो पुराने टेकन 3 के कैरेक्टर्स है वो शायद से वापस हमको देखने को मिले उनकी तरफ से। और लेट्स सी किस तरह से यहाँ पे परफॉर्मेंस रहेगा। कुछ ही देर में हमारे जो दावेदार है दोनों हमारे पास हमारे साथ जुड़ेंगे, और देयर दे आर, स्काउट वर्सेस रेबल, ये रहेगा हमारा शो मैच। एक और बार फिर से दौड़ होगी फर्स्ट टू 10। आई मीन फाइटिंग गेम्स कम्युनिटी के बीच में इट इज ऑल अबाउट दीज ब्रैगिंग राइट्स। आई मीन फर्स्ट टू 10 एक ऐसी चीज होती है, आप अपने ओपोनेंट्स को समझ भी सकते हैं, काफी टाइम होता है आपके पास, क्योंकि ऐसा नहीं है इट्स नॉट अ बेस्ट ऑफ 10, इट्स अ फर्स्ट टू 10। पहले 10 राउंड जीत रहे हैं, ऐसा नहीं है 10 में से 6 जीतने होंगे फिर काम हो जाएगा। Yes. That's totally true. It's a race, but उस रेस के अंदर भी आपको माइंड से भी खेलना पड़ता है, एंड आई वुड से ये प्लेयर्स उसके ऊपर पूरा जाना चाहेंगे। आई मीन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दीस टू प्लेयर्स, अगर मैं बात करूं रेबल की और अगर मैं बात करूं स्काउट की, इट ऑल कम्स अप टू वन थिंग कि किस तरीके से वो यूटिलाइज करते हैं हर एक चीज को। Exactly, and here they are. आपका बहुत बहुत स्वागत है स्काउट, once again welcome back KO फाइट नाइट सीजन 5 में। रेबल आपका भी स्वागत है, कैसा लग रहा है आपको? आज एक नई गेम खेलने को मिलेगी। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये गेम मैंने बहुत पहले खेली है काफी।
मैं तो सीधा बोलता हूँ, काफी कम खेला है। भाई देखो यहाँ पे अभी सीन ऐसा होने वाला है, एक प्रोफेशनल है जो गेम में और एक कंप्लीट बिगिनर। तो भाई देख लो पिटाई किसको होने वाली है। देखो भाई मैं पूरा बिगिनर हूँ, पहली बार खेलने वाला हूँ, क्योंकि टेकन 2 मैंने खेला था, मेरे को अच्छे से याद, टेकन 2 खेला था वो भी 3rd 4th स्टैंडर्ड पे, और अभी सीधा टेकन 7 खेल रहा हूँ। तो भाई बहुत बड़ा डिफरेंस है। और भाई इसने तो टेकन 6 में एकदम फुल ग्राइंड कर रखा है। वही रेबल के बारे में हमें भी सुनने को बहुत मिला था कि मतलब बहुत ज्यादा मारते थे लोगों को, अगर बात करें हमारे यहाँ के सर्किट के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखते हैं स्काउट पता नहीं कैसा ग्राइंड करके बैठा होगा, पता चला मेरे को ही मार दे वो। भाई मैं पहली बार खेल रहा हूँ ट्रस्ट में। स्काउट पर आपका पहली बार भी काफी डेडली रहता है, ये बात ओशन और मैंने कल देख ली थी। एग्जैक्टली। एडेप्ट करना पड़ता है, क्या कर रहे हो। बट बात इन सब में एक चीज की बात आती है। रेबल तो अगर आपने पहले वाला मैच देखा जहाँ पे मॉर्टल और माम्बा थे, ऑब्वियसली वो मैच बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से खेले हैं। आई एम प्रीटी श्योर स्काउट आपने भी वो वाला मैच देखा, तो उसके अंदर माम्बा बहुत अच्छा डोमिनेट किया था, एंड वो एक ही रन पे वो सिर्फ एक मैच हारे थे वहां पर। बट रेबल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप यहाँ पे अपनी क्या स्ट्रेटेजी रखें, क्या वही पुराना वाला रेबल हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, या फिर बिकॉज आपका गेम से थोड़ा सा होल्ड दूर रहा है एक तरीके से। खैर काफी दूर रहा है, काफी ज्यादा दूर रहा है मेरा होल्ड, बट लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि मेरे को याद है बहुत ज्यादा डोमिनेशन दिखाई है मैंने तो टेकन 7 में खासकर। लेट्स सी अब क्या होता है स्काउट, देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। एंड स्काउट आपसे मेरा एक सवाल रहेगा, कल की स्ट्रीट फाइटर वर्सेस आज की टेकन, सो वो जो डिफरेंस दो गेम्स में अलग अलग तरीके से निकल रहा है, ऑब्वियसली है फाइटिंग गेम्स, जॉनरा वही रहता है, बट यू थिंक कि वो सिमिलैरिटी रहेगी या कुछ डिफरेंस आप ऑब्वियसली आप देखोगे खेलोगे जिस तरीके से वो नोटिस करोगे? तो मेरे को जो लगता है कि सिमिलरिटी तो क्या ही रहेगा, मतलब फाइट है बट यहाँ पे कॉम्बिनेशन ज्यादा है, तो या यहाँ पे थ्रेड भी ज्यादा है। थ्रेड तो काफी ज्यादा रहेगी। एंड ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा आप दोनों को मैच स्टार्ट होने से पहले। उम्मीद करूंगा काफी एक अच्छा टफ कंपटीशन स्काउट आपकी तरफ से हमको देखने को मिले। अब कंपेटिटिव स्पिरिट जो है कल भी आपने दिखाया था और बहुत ही बेहतरीन तरह से विक्ट्री निकाली थी, बट आज थोड़ा मुश्किल मैचअप होने वाला है आपके सामने। होपफुली मैं जल्दी अडॉप्ट कर लूँ इस चीज को और एटलीस्ट एक कंपटीशन दे बना, मतलब डोमिनेशन तो नहीं, एटलीस्ट टो टू टो खेल पाऊँ। ब्रो रेडी कैसे होना है इसमें? मेरे भी ग्रीन सिग्नल है। रेडी होने के लिए अभी हम लोग वेट करेंगे और जैसे ही मैच के अंदर जाते हैं we'll find out. Okay. So everyone will be live. आप सबकी आवाजें खैर आप सारी जनता जनार्दन को सुनाई देगी, तो एक ही चीज हम लोग बोलेंगे। खैर कल भी ये बात हुई थी, आज भी पहले मैच के आसपास ये बात हुई थी। मैं वापस से पूछना चाहूंगा स्काउट, आपने कल एक बहुत अच्छी प्रथा शुरू करी थी, विल इट बी अ रैंडम कैरेक्टर सिलेक्ट, और आप अपने कोई कैरेक्टर्स पे जाना चाहेंगे? ऑनेस्टली मेरा रैंडम कैरेक्टर लेने का तो कोई प्लान नहीं, क्योंकि मैं पहले एडी से खेलता था बहुत ज्यादा, मेरे को अभी याद है टेकन 2 के टाइम पे, तो मैं इस बार भी एडी लेके ही ट्राई करूंगा। अब देखते हैं कि ये मूव्स मुझे सीखने में कितना टाइम लगता है। So, Rebell, what's your favorite? My favorite is Lucky Chloe. Lucky Chloe. Starting से. Lucky Chloe with a lot of lows. Am I? Yes, you're right. You're right. यही क्योंकि जब मैं और जॉनी भी जब खेलते हैं, मेरी और जॉनी की लाइक हर शाम को हम लोग बैठ करके खेलते होते हैं टेकन, तो अब यही बात आती है कि हमें पता है किसका किस टाइप से फेवरेट रहता है। तो जब उन्होंने बोला लकी क्लोई विद लॉट ऑफ क्लोज, तो हाँ मैं समझ गया कि क्या चीज होने वाली है। ये इन्फॉर्मेशन एक्चुअली एक म्यूचुअल फ्रेंड ने हमको दी थी, जिनके साथ आप काफी ज्यादा खेलते थे, तो ही वाज लाइक प्रेडिक्शन मेरी यही है, रेबल कंफर्टेबल पिक बहुत ज्यादा। और भाई ये तो देखो भाई मारे जा रहा भाई बंदा, अरे मेरा कैसे मारेगा इसको। मैच स्टार्ट हो चुका है एंड देयर इट इज, रेबल बीइंग रेबल, पूरी शुरुआत बेहतरीन तरीके से कर चुके हैं। रेबल रुकना ही नहीं चाहते। आई थिंक दिस माइट जस्ट बी अ परफेक्ट शॉट, नो इट्स गोइंग ऑन। ऑलराइट, लेट्स सी हाउ दिस कम्स अप। ओह माय गॉड, स्काउट इज कमिंग अप विद अ गुड वन फॉर हिमसेल्फ एज वेल, बट आई डोंट थिंक सो कि इस पे रुकना चाहिए। रेबल एक मौका, बस एक गलती कर देती रेबल ने और बाकी सारा राउंड अपने हिस्से में। मुझे लगता है हमें रेबल को एक हैंडीकैप देना चाहिए, वरना ये काफी वन साइडेड हो जाएगा। भाई इसको कंट्रोल से आता है भाई, ये प्रोफेशनल इसमें है। ऐसा कोई गेम रहा ना भाई जिसमें जो दोनों को नहीं आता हो। Rebell, what are you doing? I mean, I know you are winning, but what are you doing seriously, man? ये देखिए रेबल थोड़ा टाइम लेके खेल रहे हैं। अब ऑलराइट, स्काउट को एक ओपनिंग तो मिलती हुई, बट वो ग्रैब के लिए वेट कर रहे थे रेबल, और बस वही बात,
dash to I lose. love the way Rebel क्या कर रहे हैं, Rebel हर तरफ से चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं, पहले वो नीचे की तरफ से स्वीप करते हैं, उसके बाद वो मिड्स पर भी जाते हैं अच्छे तरीके से। पता है कौन सा मूव्स किधर है। Exactly, Rebel knows everything with the mids and oh my god, Rebel एक HP छोड़ा है Rebel आपने, अगर आप टाइम भी जाने तो तब भी स्काउट राउंड हार जाएंगे, बट नो ये वर्थ इट है ही नहीं भाई, ये तो वन साइड मैच हो रहा है। कोई नहीं भाई क्या मैं एक मेरे को बात बताओ, इसमें इसका क्या लॉजिक है? एक बंदा जिसको पूरा गेम आता है, एक बंदा जो बिगिनर है, लॉजिक ही नहीं बनता गेम का। रेबल को हमें हैंडीकैप देना पड़ेगा। सब कुछ आता नहीं है, बस बेसिक क्लियर है मेरे, मैं भाई खेला हूं भाई। देखो जिस बंदे को पावर्स पता है, जिस बंदे को ये पता है कि कौन से बटन से क्या हो रहा है, भाई वो बंदा बोल रहा है चलो जल्दी खत्म करते हैं। अच्छा ठीक है, रेबल चलिए बैठे, चलो जल्दी रेबल कोई ना रेबल चलिए हम लोग विल हेल्प स्काउट लर्न फास्टर। भाई तो मुझे बताओ तो आप ये भी आई कैन डू वन थिंग, ओके लेट्स आप मुझे या तो स्काउट या तो कास्टर्स, दोनों में से मुझे कोई एक हीरो दे सकते हैं, मैं वो खेल सकता हूँ क्योंकि आए हैं। सुनो मेरे Let's just give him Panda or something like नहीं अरे वो नहीं ब्रो, मेरे को सिर्फ कंट्रोल्स बता दो, इसको जो भी हीरो है मेरे को बताओ कि कौन सी चीज से क्या होता है भाई। स्काउट स्क्वायर से आप PS4 कंट्रोलर पे है ना? हाँ PS4 का। यस, तो स्क्वायर से जाएगा आपका राइट हैंड, ट्रायंगल से लेफ्ट हैंड, सर्कल से आपकी रहती है राइट किक और एक्स से रहती है आपकी लेफ्ट किक। ये चारों आपको कंट्रोल्स है। उसके बाद आपका जब आप नोटिस करेंगे आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा लो चली जाती है, आपका कैरेक्टर लाल कलर में फ्लैश करता है। उस टाइप पे मतलब आपके कैरेक्टर के पास रेज अवेलेबल होता है, तो आप R1 दबा के अपना रेज आर्ट मार सकते हैं, और अगर वो कनेक्ट किया तो वो बहुत ज्यादा डैमेज देता है, एक एनिमेशन शॉट पे चले जाता है। संभल के रहना पड़ेगा क्योंकि अगर ब्लॉक हुआ तो आपको बहुत ज्यादा फटके पड़ेंगे रेवल की साइड से। और एक चीज पे बेसिक्स पे आप एडी के खेल सकते हैं, सर्कल और एक्स पे ध्यान रखना ज्यादा डायरेक्शन इनपुट्स के साथ। बैक सर्कल आई थिंक आपका एक एडी का एक ऑर्बिटल वो मारता है, उससे आप एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। बटन स्मैशिंग अवॉइड करनी है, थोड़ा डिस्टेंस लेके खेल लीजिए आप। अच्छे से आप अडैप्ट करते हैं, मेरे को पता है आप अडैप्ट कर लेंगे बहुत जल्दी। एक चीज आएगी, मैं स्काउट को एक चीज बोलना चाहूंगा, रेज आर्ट मारने के लिए आपको बस डिस्टेंस देखना पड़ेगा। अगर आपने बहुत दूर से मारा तो वो रेज आर्ट भी आपका इन वेन चला जाएगा। सो आपको देखना पड़ेगा कि कितने पिक्सल्स आप करीब हो। एंड हाँ, रेबल आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी चीज की जरूरत होगी यहाँ पर। आप बस ये बता दीजिएगा आप कब जीतने वाले हैं। लॉजिक नहीं बनता उसको बताना, उसको पहले से पता कि भाई कौन से सर्कल से क्या होता है। तो मैं मतलब मेरा बेसिकली स्क्वायर से आई वुड वांट रेबल, आप पांडा लेकर के खेल सकते हैं क्या ये राउंड? मैंने पिक कर लिया, बट नेक्स्ट टाइम पक्का आई विल गो फॉर, बिकॉज़ आई वुड से रेबल को ब्रोकन कैरेक्टर्स देने चाहिए, उसके साथ देखना चाहिए रेबल क्या करते हैं क्या नहीं। अरे ब्रो एटलीस्ट मुझे ब्रोकन कैरेक्टर को भी अगर उसको चलाना आता है ना भाई, ब्रोकन कैरेक्टर उसको पता ना पंच किससे मारता है, मुझे तो ये भी नहीं पता पंच किससे होता है। मैं तो फिगर आउट कर रहा हूं अभी। बढ़िया, लेट्स सी भाई फर्स्ट मैच में देख रहा हूं भाई बंदा कॉम्बो पे कॉम्बो दे रहा है भाई, मतलब हेलो ये क्या है भाई, ये तो कॉम्बिनेशन याद रखा है पूरा एकदम। But I would say अगर रेबल अभी भी आता ना कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में, he might just go for KO फाइट नाइट का फिनाले को। फिनाले के अंदर जिस तरीके से प्लेयर्स खेल रहे हैं, that's the same mentality जो रेबल एक्चुअली दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये इसमें इससे पंच मारा भाई, ये तो भाई फुल मतलब ब्लॉक भी नहीं होता इसमें। ओके दिस इज स्टार्टिंग गुड, दिस इज स्टार्टिंग ब्लॉक से होता है। बैक करना पड़ेगा आपको, पीछे स्टेप करेंगे तो ब्लॉक, या आप पीछे स्टेप करेंगे तो वो ब्लॉक होता है। पर आपका रेज आर्ट अवेलेबल था, बट उसका मौका नहीं मिला आपको, और साथ में यहाँ पर फिनिश किया। लेट्स सी सेकंड राउंड में क्या होता है। दिस वाज अ गुड स्टार्ट, दिस वुड हैव बीन अ गुड स्टार्ट, बट भाई मेरे को समझ में, मैं तो भाई ब्लॉक ही नहीं पा रहा, लगातार मारे जा रहे भाई। ये कैसे नहीं देखो, आप अगर पीछे वाला बटन दबाओगे तो आपको हल्का सा ब्लॉक करता है। अगर आपको नीचे वाले अटैक्स को ब्लॉक करना है तो आपको नीचे वाला बटन दबाना पड़ेगा, डिपेंड करता है आपको किस साइड को ब्लॉक करना है। नाइस गो फॉर द रेज आर्ट, नाइस वन, दिस कुड हैव बीन अ नाइस वन। एक अच्छा रेज आर्ट यहां पर मारते हुए, बहुत बेहतरीन रेज आर्ट। को क्या रेज आर्ट भाई, मैं तो कुछ दबा दिया भाई। हेलो आपने R1 दबाया, दिस इज व्हाट हैपेंस फ्रॉम R1, बट ये आपको एक ही बार मिलता है, आपको सिर्फ अपने बाकी कॉम्बोस पे रिलाई करना पड़ेगा। तो इससे ब्लॉक होता है, इससे पंच मारता है, इसमें मेरे को मारना पड़ेगा। देखते ये राउंड, आई मीन रेबल के चांसेस तो हैं निकालने के, बिकॉज़ शुरुआत उन्होंने फिर से अच्छी करी। आई मीन लकी कलर इज एक्चुअली वेरी लकी फॉर रेबल। डेफिनेटली। ओह पावर क्रश के लिए जाने की कोशिश, स्काउट ने मोमेंट को अच्छे से यूटिलाइज किया वहां पे, और लो पैरी भी किया। This was a good one. Another time, I mean, Scout अब थोड़े से अच्छे मूड में लग रहे हैं जिस तरीके से गेम यहाँ पर चल रही है, but oh, that was a good one. But रेज आर्ट यहाँ पर क्लोई का बन चुका है। क्लोई का रेज आर्ट एक बहुत अच्छा रेज आर्ट बन सकता है। It might just take Scout down to 20-ish HP अगर बात करें, but डिस्टेंस अभी बहुत सारा डिस्टेंस क्लोज इन करने की कोशिश। एंड ब्रो मतलब इसमें ब्लॉक कैसे होगा भाई, इस गेम में ब्लॉक ही नहीं हो रहा भाई। माउस का कोई भी बटन दबाना नहीं है। हाँ भाई ये तो स्कैम है ब्रो। हेलो
वही सेंस ही नहीं बनता है गेम भाई। ये भाई अगर दोनों सेम लेवल पे होते ना तो एक चीज होता है भाई, एक बंदे को ऑलरेडी मतलब बुक पढ़ रखा है, एक बंदे ने, एक बंदा बुक पढ़ रहा है, बंदे को पता नहीं भाई कहानी में क्या चल रही है, भाई कैसे मारेगा भाई बंदा। ठीक है अब मैं ये वाला कैरेक्टर नहीं खेलता क्योंकि मैं सच्ची बताता हूँ, मैंने बस यही कैरेक्टर खेला भाई एक मेरे को सच्ची में बोल रहा हूँ। एक मेरे को लॉजिक, एक सिंपल लॉजिक बताओ। अगर आपको पंच मारना आता है, लात मारना आता है, ब्लॉक करना आता है, आपको कोई भी कैरेक्टर में आप उतना तो कर ही सकते हो ना भाई। भाई कल सिनेरियो क्या है, कल सीन ऐसा था कि अगर में दोनों नए थे तो हम लोग साथ में सीख रहे थे क्या चल रहा है, तो है कि कौन जल्दी अडॉप्ट करता है। यहाँ पे एक बंदे को पहले से पता है भाई किससे क्या होता है। मैं एक बात बोल सकता हूँ, रेबल अंदर से बहुत खुश है, बस वो कैमरा के सामने दिखा नहीं रहे हमें जिस तरीके से। अच्छा कैरेक्टर व्हिच कैरेक्टर शुड आई गो फॉर? बॉब नहीं देंगे इनको, नॉट बॉब। लिली अगर आप ले रहे हैं तो प्रीसेट भी देख लीजिएगा, आप कौन सा प्रीसेट चूज कर सकते हैं लिली का। हमें काफी सारे प्रीसेट्स रहेंगे। खैर आई डोंट नो कि मैंने कौन सा कैरेक्टर चूज कर लिया है, बट वो हो गया बस। आई डोंट नो, ऐसा ना हो काजुया मिशिमा कुछ ऐसे लेकर आ गए और वो सीधा आई डोंट नो, वो टाइमर कम था और खुद सिलेक्ट हो गया लास्ट में। ओके ऑलराइट चलिए मैच स्टार्ट होने में आपको पता चल जाएगा। और स्काउट की तरफ से तो लिली आ रही है, काफी एक डिसेंट पिकअप है। डॉजेस स्काउट, आप डॉज काफी ज्यादा कर सकते हैं लिली के साथ। क्या चूज हुआ रेबल? भाई तो देखेंगे तो पता चलेगा, ये हीरो मैंने कभी नहीं खेला। Why am I thinking कि इनको या तो नीगन या कुछ ऐसा कुछ मिला है या समथिंग। इसको कुछ भालू मिला कोई, ये क्या है? भालू माइट बी पांडा। और ये तो भालू वाला लड़ रहा है इंसान से, पांडा या तो कुमा। हाँ इट माइट बी कुमा और समथिंग, विल हैव टू सी। ओह या भाई हेलो, हाय हक दे दो ब्रो। Oh my god, oh this is something. Bear hug, proper bear hug आता है यहाँ पर कुमा की तरफ से बहुत अच्छे तरीके से। बट Rebell is looking very good in every situation। सिर्फ हक करके ही यहाँ पे फिनिश करने की कोशिश में काफी अच्छा डैमेज बेयर हग दे देता है। लेकिन अब देखते हैं रेज आर्ट लिली की रेज आर्ट आती हुई और बहुत अच्छी रेज आर्ट ये जाएगी। दिस विल डू अ लॉट ऑफ डैमेज बट नॉट इन, ऑफ कोर्स 50 एचपी के आसपास अभी भी ये बचेंगे। नाउ इट कम्स बैक टू दिस थिंग कि यहाँ पर I would say Akuma, it will try and go for the ending of the game. And एक और चीज, अगर टाइमर रन आउट हो जाता है जिसकी हेल्थ कम रहेगी वो सबसे पहले वहां पर हार जाएगा। बट अब देख समझ कर खेलना पड़ेगा। स्काउट की तरफ से कोशिश काफी अच्छी थी, मैं ये बोलना चाहूंगा। उन्होंने एक पॉइंट पे बहुत अच्छा ट्राई किया था जब पुश बैक कर दिया था, बट रेबल फिर से ग्रैब के लिए जाते हैं। ऑलराइट स्काउट, अगर आपको ग्रैब से बचना है तो आपके जो स्क्वायर और ट्रायंगल है, घूसे वाले बटन जो है उनसे आप बच सकते हैं। उनको आपको प्रेस करना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया शुरुआत मैच की। भाई क्या मार दिया। रेज आर्ट के ऊपर लेकर आ चुके हैं ये आई वुड से अकुमा के, लेकिन रेज आर्ट यहाँ पर दोनों की बन चुकी है। अगर एक भी रेज आर्ट डिप्लॉय करता है दिल विन। इट्स अकुमा आउट है, साथ में लिली की भी रेज आर्ट हो चुकी है, किसी पे लगेगी। ओह माय गॉड, एक्चुअली रेज आर्ट लग चुकी है यहाँ पर अकुमा की। दिस वाज अमेजिंग द वे इट हैपेंड। ओह माय गॉड, दोनों की रेज आर्ट सही टाइम पर डिप्लॉय हो गई थी, बट पिक्सेल्स के मामले में अकुमा जीत गया। यस, टाइमिंग एक्चुअली टाइमिंग वहाँ पे थोड़ी सी फ्रेम्स पहले उनके हिट हो चुके थे। बटन पहले दबाया था तो ऑब्वियसली वहाँ पे थोड़ा सा स्काउट के तरफ से लेट आई। बट थॉट प्रोसेस में बोलूँगा बहुत स्लो है ये कैरेक्टर। आई मीन वही चीज मैं यही सोच रहा था, अगर आप अपना पिछला कैरेक्टर इसके अगेंस्ट खेलते तो आपको वहां पर नहीं, अगर स्काउट आपका वाला पिछला कैरेक्टर खेलते तो उनको एडवांटेज रह सकता कहीं ना कहीं मूवमेंट्स पे। ब्रो मेरे को तो इसमें लिली माइट विन द शॉट। ब्लॉक इट वाज ब्लॉक। भाई इसमें तो भाई मेरे को ब्लॉक करना भी नहीं आ रहा भाई क्या ये। ब्लॉक करने पे तेरे को कोई अटैक नहीं करना है, सिंपल लाइक तू उसको कोई अटैक नहीं और बस पीछे का बटन दबाना है। पीछे का बटन जैसे हाँ पीछे का बटन दबाना है। अगर तेरा हाथ कहीं भी आगे होगा तो वो तेरे को पूरी लगेगी। एग्जैक्टली। तो मेरे को देखो, मेरे को समझ, स्क्वायर से पंच है, ट्रायंगल से पंच है, यस, एक्स और सर्कल से किक्स है, यस। R1 R2 L1 L2 से क्या है? R1 से रेज है, L1 दबा के आपके असिस्टेड कॉम्बोज आ जाते हैं, उनसे आप कॉम्बोज आसानी से मार सकते हैं। मगर उसका डिसएडवांटेज ये रहता है कि वो थोड़ा सा रेबल के पास ओपन स्पेस आ जाएगा। जब तक आप कॉम्बो का बटन दबाएंगे रेबल के पास ओपनिंग रहता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा दूर जाके वो बटन दबाने पड़ेंगे। L1 सर्कल, L1 स्क्वायर, कुछ भी पढ़ सकता है वो। अभी अगर मेरे को ये करना है, क्या बोलते हैं उसको, समझ लो मेरे को पंच किक करना लगा था इन अ रो, तो वो कैसे कर सकता हूँ मैं? अच्छा, जैसे आपने एडी लिया था तो एडी का एक सबसे बेसिक कॉम्बो पंच किक का जो है वो है स्क्वायर ट्रायंगल सर्कल।
उसमें वो 2 घूसे मारेगा और फिर एक जंप किक देगा, ड्रॉप किक एक मारेगा ठीक है, ओपोनेंट तो को। मेरे को अभी इस कैरेक्टर में वो तो कॉम्बोज बनेंगे यार। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि इसमें जब मैं पंच और किक मारता हूँ तो एक सेकंड में पॉज करके रुक जाता है, तो वो मेरे को वो चीज हटा के मैं नॉर्मली मेरे को फाइट लेना है, लेकिन मैं पंच मार किक मार कॉम्बिनेशन यूज कर रहा हूँ। अच्छा, उसके लिए स्काउट क्या आपने बटन है? एक और चीज नोटिस करी होगी, जो आप कह रहे हैं कि वो रुक के जो मार रहा है वो एक्चुअली डैमेज चार्ज अप करता है, तो उसे ना क्रश बोलते हैं। उस टाइम पे आपका जो अटैक है वो तो रेबल को पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन उस टाइम पे रेबल के पास ओपनिंग रहती है, वो भी आपको थोड़ा बहुत डैमेज देता है, हैवी डैमेज वहां पे रेबल को पड़ेगा, बट आपको भी हिट्स मिलेंगे। तो वो अवॉइड करने के लिए मल्टीपल बटन्स आपको बस एक साथ नहीं दबाने, आपको एक एक करके इनपुट देना है। ब्रो मैं रेडी क्यों नहीं हो रहा हूँ? हेलो दैट आई गेस वो प्रोडक्शन आपको जरूर बताएगी पीछे से, बट अभी तक रेडी। अरे मैं भी पूछ रहा हूँ रेडी कैसे होते हैं? एक्स 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 मैं मेरा प्रोफाइल खुल जा रहा है इसमें, उसको लीव कर। लीव करूँ क्या प्रोफाइल को? यस लीव क्या? लीव द सेशन आ रहा है। नो नो सेशन लीव नहीं करना है तेरे हाँ को। तो वही तो बोल रहा हूँ। ओके हाँ वो रेडी। ready ओके ओके अबे लीव नहीं, इसको बैक करना था सर्कल वाला। अच्छा अब कौन सा हीरो ट्राई करना है? मेरे को एक पहले जल्दी 10 सेकंड्स है मेरे पास। आई वुड से एक बार डेविल जिन लीजिए, बिकॉज़ डेविल जिन मेरा कज़ुया आई वुड से गो फॉर कज़ुया या डेविल जिन, जो भी आपको सही लगे। मेरे को एडी सीख लेने दो। ओह शिट, आई थिंक आई पिक लायन। King, not lion, not king. Sorry. King is very good with grapples. King is actually grapple king. आपको grapple moves बहुत अच्छे लगेंगे। कैसे करते हैं इसमें? अच्छा ग्रैपल आपके 2 ग्रैपल मूव्स होते हैं, एक है स्क्वायर और एक्स, एक साथ दबाओगे तो ग्रैपल होगा, और दूसरा ट्रायंगल और सर्कल एक साथ दबाने से ग्रैपल होगा। और ग्रैपल से बचने के लिए स्काउट दोनों जो घूसे वाले बटन है ना, उन दोनों में से कोई भी एक दबाने से ग्रैपल निकलता है। अब वो चीज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको देखना पड़ेगा रेबल के कैरेक्टर को, अगर राइट हैंड से ग्रैपल आ रहा है तो आपको स्क्वायर दबाने से छूटेगा, अगर लेफ्ट से आ रहा है तो ट्रायंगल से छूटेगा। बट आप गेसिंग गेम में राइट पंच, लेफ्ट के लिए लेफ्ट पंच, उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। मतलब मैं इतने छोटे पिक्सल वाली फाइट्स में मैं देखूं कि कौन सा भाई चैलेंज तो रहेगा, बट एडी सामने आ चुके हैं एक बार फिर से स्काउट की तरफ से। और किंग इसको लात इतना पावरफुल कैसे भाई? दिस इज एक्चुअली द किंग जो लिल मार्जिन यूज करते हैं। दिस इज द प्रॉपर किंग जो लिल मार्जिन का एक प्रीसेट रहता है, बट देखते हैं कि यहाँ पर ग्रैपल का इस्तेमाल करेंगे या नहीं। ही इज गोइंग फॉर इट, ही इज ट्राइंग टू गो फॉर इट, लेकिन पहले सीधा पंचेस और किक्स के ऊपर ही जा रहे हैं। ग्रैपल करने की कोशिश थी, बट खैर वहां पर हल्के से फ्रेम्स मिस हुए जरूर थे, लेकिन अब आती है बारी आगे की। ही इज वंस अगेन, दिस इज अ गुड ग्रैपल, अ वेरी गुड ग्रैपल। रेज आउट डिप्लॉय, R1 coming out here, naked dodge, a good coming out here. रेज वहां पे ब्लॉक हो गई, उसकी वजह से थोड़ा सा फ्लस्टर अप, बट वो बहुत ही बेहतरीन लॉस। This started good. Scout is looking really good, लेकिन भाई ग्रैपल से बचना एक चुनौती बन चुका है यहाँ पर। 2 अलग-अलग ग्रैपल मूव्स कर यहाँ पर रहने वाले किंग के, बट एडी नॉट स्टॉपिंग अप। एडी यहाँ पर ऑब्वियसली, आई मीन स्काउट यहाँ पर रेबल को टेक ऑन, लेकिन देखते हैं इनका रेज कैसे निकल रहा है। विल ही गो फॉर इट? ओह स्काउट की हेल्थ कम होती है धीरे-धीरे, लेकिन स्काउट रेज विल इट बी अ गुड डिप्लॉयमेंट? यस इट इज, दिस इज अ वेरी गुड वन। रेज से पूरी हेल्थ उड़ जाती है क्या? रेज काफी ज्यादा एचपी जाती है। आई मीन आई थिंक 40% कैरेक्टर की मैक्सिमम 60 भी जाती है। इट डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर्स एज वेल। किंग के डैमेजेस बहुत पड़ते हैं, तो किंग एक थोड़ा सा स्लो कैरेक्टर है, बस उसका ऑन हिट और ग्रैपल गेम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एडी दूसरी तरफ काफी ज्यादा तेज और बहुत ज्यादा मोबाइल है, रेबल को काफी ज्यादा दिक्कत में डाल दिया। एंड यस स्काउट बहुत बढ़िया, एक राउंड ले जाते हुए ये अच्छा राउंड निकाला स्काउट ने एक्चुअली। जिस तरीके से नाउ इज द टाइम, मैं बोलूंगा कि स्काउट का एक तरीके से आप बोल सकते हो कि हार्ड बैटर है कंट्रोल्स के ऊपर। ही इज अ वेरी गुड लर्नर इन द थिंग्स, एंड वो चीज आ रही है। और रेबल को थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती हैं। दिस राउंड माइट बी स्काउट्स एज अ होल, जिस तरीके से अंटिल अनलेस रेबल यहां पर ऑलराइट नॉट गिवन अ चांस। आई वाज थिंकिंग कि अगर रेबल यहां पर फिर से रेज आउट करते तो जरूर चांस होता है, बट एक फाइनल राउंड दिस विल बी अ डिसाइडर वन। इसके अंदर 3-0 से रेबल अभी आगे लीड कर रहे हैं। दिस माइट गो फॉर अ 3-1 और मे बी अ 4-0 द वे इट्स गोइंग ऑन। एंड स्काउट के लिए और मुश्किल है। रेबल ही माइट जस्ट विन इजी विन यहां पर बन सकती है। आई मीन नॉट गिविंग अप इनफ टाइम, बट आई वुड से किक्स का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल यहां पर स्काउट के द्वारा किया जा रहा है। बट नो, नाउ इट्स कमिंग डाउन टू रेज के सही पिक्सलाइजेशन पर रहेगा। पिक्सेल्स भी वहां पर मिस हुए, एंड दिस इज अनदर वन जो रेबल लेकर जाते हैं। इसमें अगर मुझे लोअर किक मारना है तो लोअर किक मतलब बॉटम एंड स्क्वायर, नहीं बॉटम एंड सर्कल। यस या ओके, बॉटम एंड सर्कल, ठीक है। धीरे-धीरे चीजें फिगर आउट हो रही है यहाँ पे। अब रेबल एक राउंड निकाला नहीं बोल सकता कि आप कोई भी कैरेक्टर ले लो, रेबल जो भी कैरेक्टर लेके वो जीत ही रहेगा।
ये अरे उसको बहुत खेलना आता है ना ब्रो, अब क्या करें। वही चीज स्काउट की बात से सहमत रहूंगा, बेसिक्स अगर होते हैं तो एक Basic- कंफर्टेबल पोजीशन तो रेबल के पास रहेगी। ऑब्वियसली बात है ना। अभी अभी मैं ऐसा कोई गेम ले लूंगा जो मेरे को आता है, रिबेल को नहीं आता, तो रिबेल का उसमें कुत्ता बन जाएगा ना ब्रो, वही सीन है। अब क्या करें। अच्छा, अब नया कैरेक्टर। Okay. मेरे को मैं ये एडी को सीखूंगा तेरा, मतलब मेरा I would say- एक I में would समझ say में आया Scout- L1 और स्क्वायर जब दबाता हूँ कुछ मतलब लेट के कुछ या टॉर्नेडो को मारता वो है। विनिंग या हाँ वो एक मारता है, फिर और एक L1 और एक स्क्वायर दबाने से वो आगे की तरफ ऐसा कुछ गुलाटी मार के मारता है। दो टाइप का इसका मैं सीखा अभी। आई वुड से रेबल अब आपको रैंडमली जाना चाहिए, आप रैंडम के ऊपर ही रहिए जो हाँ, मैंने character select random- हुआ हुआ। यस पर मेरे को मतलब नॉर्मल पंच एंड किक इसमें इफेक्टिव रहता है कि नहीं रहता? बॉब। एक चिप डैमेज के लिए काफी ज्यादा। Yeah. हाँ। मेरा हीरो I mean, अब थोड़ा थोड़ा करके सामने वाले बंदे को चिप कर सकते हैं, उनको एक हेल्थ के बीच में लाके फिर आप कॉम्बोज के लिए एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, बेसिकली चलो, इसमें one कॉम्बोस thing. मतलब इसमें आपको कॉम्बोस से ही पूरा ये गेम रहता है इसमें, है ना? जी हाँ। यस। स्ट्रेटेजिक और कॉम्बो लाइक उनके बेसिस पर फाइट्स रहेंगे, लेकिन मेरे रेबल को ने इसमें- अगर आपने सुना हो, रेबल इज मेरे को यूजिंग इस- बॉब राइट नाउ। मेरे को इसमें है ना मेन है कि जो ग्रैपल को है ना ब्लॉक करना वो बहुत डिफिकल्ट है। समझ ही नहीं आ रहा कि ग्रैपल को ब्लॉक कैसे होता है। बॉब आता है यहाँ बॉब पे। कमिंग अप, आई मीन बॉब इज लाइक ऐसे कैरेक्टर जो भाई ये कैसे गेम है? ये कैसे गेम है? आई वुड से चैंपियंस यूज करते हैं जो निकल कर आते हैं। देखते क्या चीज होती है यहाँ पर। अच्छा अच्छे तरीके से बचे और ये बहुत बेहतरीन मूव यहाँ पर निकल कर आता हुआ द वे ही एक्चुअली डिड इट। आप देख सकते हैं दोनों प्लेयर्स को उनके कैरेक्टर्स की साइड पर बॉब यहाँ पर रेबल यूज कर रहे हैं और स्काउट एडी को मास्टर करने की कोशिश अपनी तरफ से निकालते हैं। बट एक अच्छा कैनन बॉल, वेरी गुड कैनन बॉल कमिंग अप फ्रॉम बॉब साइड, बट काफी अच्छा मैं बोलूंगा किक्स का इस्तेमाल करते हैं। बट एक अच्छी रेज आर्ट डिप्लॉय हो जाए तो बहुत बढ़िया हो सकता है। एंड देयर इट इज, अ गुड रेज आर्ट कमिंग अप, बट अ गुड वे वेयर ही जस्ट वेंट ऑन एंड रेबल को यहाँ पर डिफीट करते हुए स्काउट आई वुड से बहुत अच्छा ब्लॉक किया उन्होंने रेज आर्ट का। I mean, काफी अच्छे से खेल तो रहे, बट मैं अपने फेवरेट कैरेक्टर को यहाँ पे हारते हुए देख रहा हूँ तो मेरे को तो काफी बुरा लग रहा है। बट फिर भी स्काउट बहुत जल्दी अडेप्ट कर रहे हैं और वो जो एक स्वाइप्स मार रहा है अपनी लातों के साथ वो काफी ज्यादा इफेक्टिव उनको पता चल चुका है। बट ओ एक थ्रो बैक के लिए जाने की कोशिश, लॉन्चर यहाँ पे आता है और उसके बाद रेज आर्ट भी मिस होता है, मिड एयर थे या मिड उसकी वजह से वहाँ एनिमेशन पे रेज miss आर्ट हो गया। नहीं लगती है। बट लेट्स सी काफी क्लोज। स्काउट के पास रेज अवेलेबल नहीं है, रेबल बेट कर रहे हैं। स्काउट आई होप ब्लॉक के लिए रेडी हो। यस, ब्लॉक कर लिया उन्होंने और फिनिश फाइनली 2 राउंड्स का एडवांटेज स्काउट लेते हुए अपने लिए। दिस वाज अ वेरी गुड वन। आई मीन दोनों राउंड जो निकाले, ये वाला राउंड में बोल सकता हूँ कि अगला भी अगर निकालते हो तो 4-1 का अपने लिए एक टैगलाइन बना लेंगे और फिर से शुरुआत अच्छी कर ले। कैनन बॉल की कोशिश जरूर थी लेकिन एक अच्छा डॉज यहाँ पर निकालते हैं। लेकिन अब आते हैं रेबल और वो भी एक डैमेज स्टार्टअप के लिए अच्छा बना रहे हैं। लेकिन डॉज की बारी है कि रेज आर्ट डिप्लॉय हो चुका है, एक अच्छा ब्लॉक अगर रहता देन इट विल बी अ गुड वन। ब्लॉक कमिंग आउट देयर, रेबल गोइंग ऑन विद अ गुड राउंड फॉर हिमसेल्फ। ये काफी बेहतरीन तरीके से वहाँ पे राउंड निकाला उन्होंने। एंड अब इस बारी तो शुरुआत रेबल ने काफी अच्छी की। आई थिंक वो भी समझने की कोशिश कर रहे थे बॉब को 2-1 हो चुका है, 2-2 पे कभी भी आ सकते हैं। बट स्काउट कम बैक करने की अभी भी तैयारी चल रही है उनकी तरफ से। Yes, Bob is the kind of character मैं बोलूंगा, you know, just like आपने बोला कि आपका favorite character and actually winners choose it for a reason and यही जो comeback की situations रहती हैं Bob बहुत अच्छे तरीके से comeback करवाना जानते हैं। Like that's where it is. ऐसे heavy kicks and सब रहते हैं जो बिल्कुल भी रुक नहीं सकते। And once again, all right, a good dodge coming from both the sides. I mean, they are playing aggressive plus उनको अपने defenses को भी अच्छे तरीके से समझना आ रहा है। But this is where it's going to be a lot of damage. दो और अगर normal chip damages पड़ जाते तो भाई ये तो scout के लिए यहाँ पर लॉजिक, इसको तो भाई खेलना ही आता भाई, क्या ही मतलब खेल के भाई। अरे क्या मैंने पहली बार बॉब खेला है सच्ची में, मेरे को अडैप्ट करने में टाइम लग रहा था कि क्या घंटा ऐड हो गए थे तो खेलना। तो अब मेरे को एक बात बता, मेरे को बस मूव्स पता है, सुपर मारियो खेलने मेरे को बस पता है। एक परफेक्ट राउंड रेबल, दैट वाज गुड। बट स्काउट आपका जो पहले 2 राउंड से वो बहुत अच्छे थे। मैं एक्चुअली आपसे जानना चाहता हूं पहले 2 राउंड मैं तो रैंडम स्पैम कर रहा हूं, हो रहा अपने आप, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, मैं स्पैम कर रहा हूं, जो हो रहा होने जा रहा है। मैं थोड़ी खेल रहा हूं, मैं तो डाल रहा हूं, स्पैम डाल रहा हूं, हो जाए। वो 2 राउंड्स बहुत अच्छे थे एक तरीके से जो आपने मेरे को इतना पता करी कि भाई पीछे आने से ब्लॉक करता आदमी और L1 दबा के स्क्वायर और X मार दो, कुछ ना कुछ हो जाएगा वही बस। आगे पीछे भाई वो एक एडी समझ में मेरा हालत टाइट हो जा रहा है इसमें। क्या भाई मैं यही बोलूंगा, ये भी एक स्ट्रेटजी अभी के लिए और ये स्ट्रेटजी आपके लिए 2 राउंड तो काम करी अच्छे से। मैं क्या बताऊं भाई, जैसे कितना राउंड से गेम्स और एक्चुअली ये फर्स्ट टू 10 है जैसे कल हुआ था। तो अगर जो पहले 10 पहुंचा तू 10 गेम जीत जाए ना भाई साथ में, तू मेहनत क्यों करवा रहा है इतना? भाई फालतू है 10 गेम, इतना मेहनत कौन करेगा भाई? उससे भाई तू मार ले भाई, खड़ा रहता एक जगह।
तूने अच्छा मारा था, मैं थोड़ा सा ना देख रहा था कि क्या बॉब की मूव्स है, तब मैंने उसके बाद बट रेबल ओके, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा क्योंकि आप पहले भी खेल चुके हैं, तब से आपकी ट्रांजिशन कैसी लग रही है आपको? क्योंकि बहुत टाइम बाद आप वापस से आए, हाँ आपको बेसिक्स पता है, बट उस टाइम की टेकन में और अभी की टेकन में क्या डिफरेंसेस आपको लग रहे हैं? डिफरेंस, पहले रेगुलर खेलना था, ये सब मतलब कि अपना कर दिया, सब साथ में खेलते थे जितने भी, नॉडविन के भी काफी लोग हैं उसमें जिसके साथ सब खेलते थे। उसके बाद अब अचानक टच गया तो उसके बाद अब अलग सा ही लग रहा है कि ओके ओल्ड स्कूल टाइप इज बैक। वो जो पहले आपस में दोस्तों में एक होता था ना कि एक चैलेंज होता था कि अब कौन जीतेगा कौन कंट्रोलर देगा हार के, तो वो एक बहुत अच्छा फील वापस से आ चुका है। मैंने नया कैरेक्टर ट्राई किया और ये मेरे को बिल्कुल ही नहीं आता। पॉल फीनिक्स, ऐसा तो मत बोलिए रेबल, पॉल बिल्कुल नहीं आता। बहुत पुराना कैरेक्टर है गेम में। वेरी गुड कैरेक्टर है। इतना फैमिली फ्रेंडली स्ट्रीम चल रही है कि मेरे मुंह से कुछ निकलवाना चाहता है। अरे पॉल नहीं खेला मैंने, मेरी मूव्स देख के पता चल जाएगा। देख तेरे को पता, मैं बोल दूंगा, मेरे को नहीं, मैं समझ तो शांत है, इसलिए तो संभाल के मेरी मूव्स देख के पता चल जाएगा कि मैं पॉल का कि तू मेरे मुंह से निकलवाना चाहता कुछ। ठीक है वेल यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें आती हुई, आई मीन रेबल को दिक्कतें जरूर हुई थी, बट आप देख सकते हैं दोनों का भाई मेरा बंदा तो भाई पंच क्या है भाई, ये ब्रोकन गेम है भाई, तो वन साइड मार रहा है भाई। भाई ब्रोकन गेम भाई, क्या क्यों खेल रहा है भाई? ओह, एंडिंग इन स्टाइल आई वुड से। इससे ये मार रहा है, ट्रायंगल से क्या करता है? I mean, this is one भाई thing I मेरा would बंदा say उछल ही रहा है भाई। भाई देखो ये मैं कुछ किया नहीं है, मैं नॉर्मल L1 दबा, ये तूने अपर, हाँ दोनों ऊपर की कीज दबाई है, लेफ्ट एंड अप। This is a good one जो स्काउट ने खैर यहाँ पे किया। I mean, इसको डॉज कर सकते हैं रेबल, बट वही चीज ये क्या किया मैंने भाई? हेलो कैरेक्टर को अभी, हाँ ये कैसे हो गया? ये तू दबा रहा है भाई, मैं कुछ तो दबा, रुक जा। ऑलराइट, अरे भाई खड़ा हो जा भाई, बंदा खड़ा भाई, क्या कर रहा है मेरा बंदा? I mean, ये स्टैंसेस रहते हैं, जैसे अगर हम बात करें हर एक कैरेक्टर के 2-3 स्टैंसेस होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स के एक ही स्टैंस रहता है, तो दिस इज वन ऑफ द स्टैंसेस जिस तरीके से चीज चल रही थी। बट या इट्स स्टिल इफ यू आर फिगरिंग इट आउट, यहाँ पर एक अच्छा गेम आई वुड से रेबल के अगेंस्ट निकाल सकते हैं स्काउट, जो भी सिचुएशन लग रही है। लेकिन जिसका रेज आर्ट लगा उसका रेज लग सकता है, उसका लग माइट गो फॉर इट। ओह, दिस वाज अ वेरी गुड वन। रेबल ने थोड़ा पहले अपना जो रेज आर्ट है वो दबाया था। ओके, इसका हुआ कैसे था भूल क्या, भूल गया मतलब रेबल ने पहले खेला खेल रखा, या ही सही भूल गया, रेबल ने सही भूल गया भाई। यहाँ अब तो सच बोल दे रेबल, अब तो सच बोल दे। अबे पॉल नहीं खेला, पॉल ऐसी जैसे ऐसे चैलेंज में खेला है। ओके अब रेबल को पता चल गया था, इट्स लाइक रेबल की मेमोरी फ्रेश हो रही है, अब रेबल जरूर जाना चाहेंगे आगे। लेकिन स्काउट अगर एक अच्छा रेज आर्ट आप यहाँ पर डिप्लॉय करते हैं, नहीं मिड एनिमेशन है, मिड एनिमेशन अगर आप रेज आर्ट डिप्लॉय करते हो वो वेन में जाती है, बट स्टिल ही इज लुकिंग गुड एंड ओह माय गॉड दैट वाज अ गुड वन। काफी अच्छे तरीके से राउंड निकाला, और ये पावर क्रशेस के ऊपर काफी ज्यादा रिलाई कर रहा है, उनके लिए काम भी कर रहा है वो, अगर रेबल के काफी करीब पहुंच जाते हैं तो। ऑलराइट, एक हेल्थ एडवांटेज तो गेन कर लिया, फिर से काफी पीछे फेंक दिया गया, बट मिड एनिमेशन जंप के बीच में पता है क्या, एंटी एयर और फिर थ्रोबैक वॉल यहाँ पे मिलती हुई रेबल को। रेज आर्ट यहाँ पे स्काउट के पास आ चुके हैं, रेबल ज्यादातर बेट करते हैं इस रेज आर्ट को, तो स्काउट को थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। अच्छा डिसीजन ग्रैपल के लिए जाने का, क्योंकि रेबल बस न्यूट्रल में थे और वहां पे अगर रेज आर्ट आता तो ब्लॉक कर लेते। अब देखिए डिस्टेंस गेन किया जा रहा है, तो वही रेबल माइंड गेम्स खेल रहे हैं, जो वो चीकी सी हंसी देखी उनके मुंह पे। भाई रिबल का तो ये भी पता है कि पावर शॉट्स कैसे मारते हैं भाई, ये तो भाई स्कैम। पावर शॉट्स, पावर तो सबका एक ही है। अरे तो देखो पता नहीं भाई, वो कुछ पंच वंच तुम्हारा जिससे आदमी दूर उड़ के गिरता है, वो कैसे करते हैं वो मुझे नहीं पता, मैंने बस सर्कल घुमाया और बी दबा दिया। वाह भाई सच्ची में मैं राउंड घुमाया और बी दबा दिया, मेरे को नहीं पता। मैं सेम मूव एक बार मुझे होती तो मैं सेम मूव एक और बार ट्राई करता, बट नहीं कर पा रहा। मैं मतलब कितना झूठ रिबेल। अब मतलब पता रिबेल, अच्छा अब तो सच बोल दे का एक वर्ड आता पता रिबेल। भाई मैं बोला मैं बस लकी क्लोई के अलावा कोई नहीं खेला, लकी क्लोई, बस लकी क्लोई, सच्ची बोल रहा हूँ। भाई तू रेडी कर आजा। ठीक है। और कितने गेम जो भी खेल रहे सब उनके लिए लकी जा रहा है एक तरीके से। बट नहीं, स्काउट ने काफी ज्यादा चीजें पिकअप करी है। एक चीज बोलना चाहूंगा, रेबल जो है वो थोड़ा बहुत माइंड गेम्स खेलता है, क्योंकि स्काउट आपने ध्यान दिया होगा, रेज एक बार आपके पास आ जाता है। अरे माइंड गेम का उसको गेम ही पता है भाई, माइंड गेम कहाँ आ गया, उसको तो पता है गेम कैसे। अरे मतलब मुझे ये पता है सब कैरेक्टर क्या करते हैं, किस टाइम पे ब्लॉक करना है, बस मुझे ये बात क्लियर है भाई। ये सब इसको पता है भाई। हाँ ये सब, अरे मैं खेला हूँ इतना तो
पता होगा ना कि कौन कैरेक्टर बट क्या स्काउट ने मारता है। बहुत जल्दी पिक करा है इस गेम को, लाइक 4-5 राउंड में हुए तो भी स्काउट ने बहुत जल्दी पिक करा। दैट आई वुड से दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ये पता कैसा हो रहा है, आदमी जब डूब रहा है ना उसको बोल रहा है भाई ये उंगली पकड़ के आ जा भाई ऊपर भाई उंगली पकड़ ले ब्रो, आ जा ऊपर भाई। देखो मुझे पता है बहुत बुरी तरह पिटाई हो रही है, आई नो इट। नहीं बट एक चीज ट्राई करें, वो जो आप पावर क्रश आते हैं ना जब आपके टांगों पे ग्रीन ग्रीन का सा चमकता है और रेबल को मतलब डैमेज पड़ता है चाहे वो घुसे मार ले। भाई मेरे को नहीं पता कैसे हो रहा है, मैं खाली L1 आई थिंक L1 सर्कल भाई मैं सब दबा देता हूं एक साथ, जो एक फॉर्मूला लग जाता तो लग जाता है। वही चीज होती है, लेकिन आप सब दबा देते हैं उनमें से कोई एक लगना होता है, वहां पर रेबल एक दबाते वो उनको एक का पूरा वो रहता है। आप देखते हैं रेबल क्या चीज करते हैं। ओके ये कैरेक्टर थोड़ा मुश्किल है। रेबल आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं, आप रहने दीजिए ऐसे, बट चल ठीक है। यस नहीं अरे फिर क्या लॉजिक है ऐसा वेल लेट्स सी यहाँ पर क्या चीज बनती है। जिस तरीके से ऑब्वियसली सारी सिचुएशन बन चुकी है एंड रेबल पिटाई पर उतर कर आ जरूर चुके हैं, बट स्काउट कोशिश अपनी करते हुए रेड यहाँ पर डिप्लॉय करने की कोशिश बन सकती है, बट नाइस वन स्काउट, नाइस वन। भाई ये नहीं पता मेरे को क्या किया, मेरे को नहीं पता, मैं नहीं खेलता ये। इसने अपना मुंडी निकाल के मेरे फेंक दिया, व्हाट द हेल। हां ये एक्चुअली किया जाता है, ये होता है इस कैरेक्टर के साथ। ये इस कैरेक्टर का ये हाथ गए मेरे। अब भाई क्या ज़ॉम्बी भी खेल रहा है भाई मैं क्या कह रोबोट साइबॉर्ग या अ साइबॉर्ग सिचुएशन इसके अंदर आती है। खैर देयर आर डिफरेंट कैरेक्टर्स। एक कैरेक्टर ऐसा जो अपने साथ शेर लेके आता है, अगर हम लोग बात करें वो सब चीजें होती है इसके अंदर। बट अब देखना पड़ेगा स्काउट यहाँ से कैसे कम बैक करते हैं। आई मीन ही इज लुकिंग गुड, दोनों की रेजाट है बट दोनों को डॉज करना भी अच्छे से आता है, सो हम ये भी नहीं बोल सकते रेजाट यहाँ पर अवेलेबल है। बट स्काउट ने बहुत कम विल इट बी आउट देयर। ओ डॉज, बहुत परफेक्ट डॉज यहाँ पर निकला है रेबल का। रेबल इज जस्ट सर्वाइविंग विद अ स्लिथर ऑफ पिक्सेल्स, बट नो मुश्किलें अभी भी बन रखी है, बट एक अच्छी किक यहाँ पर। भाई इसका क्या है भाई। आई मीन ये जो सर निकालने वाला मूव है ओशन, आपको पता है आपको भी काफी दिक्कतें हुई थी जब पहली बार आपके अगेंस्ट किया गया था। एग्जैक्टली मेरे को परसों की बात है जब खेल रहे थे और मेरे को बहुत दिक्कतें हुई थी उसके अगेंस्ट। वही थोड़ा मैं समझ सकता हूँ यहाँ पे स्काउट की जो दिक्कत है, क्योंकि हमें भी होती थी जब व्हेन वी वर स्टार्टिंग आउट विद द गेम, बट स्काउट यहाँ पे काफी अच्छे से रिटेलिएट कर रहे हैं। अभी रेबल के अगेंस्ट 2-0 की लीड चल रही है राउंड के टर्म्स में। रेबल थोड़ा सा पैसिव जाते हुए, क्योंकि आई थिंक ये भी फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि चेन सा बाहर कैसे आती है हाथों से। सही में, क्योंकि मेरे को नहीं, अरे मुंह क्यों दिखा रही है ये। भाई इसको भाई ये ग्रैपल तो भाई मेरे को सीखना पड़ेगा भाई ग्रैपल। अरे राइट एंड अप Right and up is what he has said and yes, oh this was a good one। जिस तरीके से किया यहाँ पर रेबल ने चेनसो का इस्तेमाल, एक अच्छा इस्तेमाल यहाँ पर। ये कैसे कर दिया मैं, ये क्या हो गया। very good combo, a very good combo, very good combo। भाई कैसे हो मुझे बताओ ये मैंने क्या किया। भाई मैंने क्या किया मुझे बताओ। एडी के स्पिन्स आई थिंक बैक सर्कल या बैक एक्स से निकल के आता है जब वो उल्टा हो जाता है और अपनी टांगों पे घूमता है, उसके बाद आई थिंक सर्कल पर। भाई मुझे बताओ क्या था ये, कैसे हुआ, कैसे मुझे बताओ कोई। अरे मैं ब्लॉक हो गया था, बॉल जो भी था यही कर बॉल डैमेज लग गया, वॉल स्प्लैटर और प्लस जो वॉल कैरी किया था वो भी एक काफी अच्छा था स्पिन्स के साथ। भाई मेरे को बिल्कुल ब्रेक तो नहीं है बट स्टिल हाँ हम वही बोल सकते हैं, बट स्टिल इफ एनीथिंग अगर टेबल स्पिट होती है तो हाँ वहां पर जरूर चीजें थोड़ी सी बदल सकती हैं अगर बात करें विद द एनिमेशंस। बट स्काउट की एक बात मैंने देखी, स्काउट जब भी अपनी रेजा डिप्लॉय करते हैं वो कभी कभी वेन में जाते हैं, क्योंकि जब उनके ओपोनेंट या तो गिर रहे होते हैं या मिड एनिमेशन होते हैं, तब अगर आप रेजाट करोगे तो वो रेजाट नहीं लगेगी कभी भी। तो अगर आपका ओपोनेंट गिर रखा है कुछ भी, तब आपका रेजाट करने से आपका वो रेजाट वेस्ट हो जाएगा। ओके ब्रो ऑनेस्टली बोल तो ये गेम में ना मेरे को ज्यादा मजा आ रहा है आज, क्योंकि इसमें ना जो मार तो पड़ रही ठीक है, बट इसमें जो मूव्स है ना काफी कूल, मतलब ऐसा लग रहा है देखने में एकदम स्वाद आ रहा है। टेकन यूनिवर्स इज वेरी अमेजिंग। मैंने फिर से कोई अलग कैरेक्टर लिया है जो मैंने शायद अभी तक नाम भी नहीं सुना। खाली मेरे को गुस्सा रिबेल पे क्यों, रिबेल झूठ जो बोल रहा है, मुझे ये नहीं आता, मुझे आता है, मैं चलेगा मैं मार खाऊंगा, मेरे को अच्छा लग रहा है वो एनिमेशन। भाई मेरे को कैरेक्टर नहीं पता मैंने कौन सा। भाई कसम से अगर एक फीचर रहता ना कैमरा में हाथ डाल के मारने तो कभी लाइफ में मारता। अच्छा स्काउट रिएक्शन पूछना चाहूंगा, जब खोपड़ी निकाल के मारी गई तो कैसा लगा? भाई वो तो मेरे को कसम से लगा कि मैंने उसको मार दिया, जैसे खोपड़ी की तो मेरे पे गोली पड़ रही है भाई। ये कौन सा कैरेक्टर है अब? I don't know the name। भाई बर्फीला कैरेक्टर लग रहा है मेरे को। बर्फीला कैरेक्टर मैं बर्फीला तो नहीं है ऐसा। मेरे को लगा मॉर्टल कॉम्बैट में आ चुका सब जीरो आ गया, पता नहीं मेरे माइंड में सब जीरो क्यों आया फॉर सम वियर्ड रीजन। बहुत ही अलग गेम बट ओके ब्रो ये गेम तो मैं ज्यादा ग्राइंड करने वाला हूं भाई, मेरे को मजा आ गया देख के।
अगर आप खेलोगे तो तेरे पास बताना advan- जरूर। Okay, which character? I Which think character? Leo, yes, Yes. Leo. Leo. Okay, इसके moves पता नहीं क्या है. अरे. It's kind of a martial artist-ish kind of situation जो इसके साथ आती है, जैसे आप देख सकते हैं, बट हाँ यहाँ पर मैं बोलूंगा स्काउट की फुर्ती थोड़ी सी काम में आ सकती है, बट वही है कि काम में आ सकती है। हेलो, मैं तो मारने से पहले वही रेबल आपको मौका देंगे तब, बस बात वही आती है, रेबल आपको मौका देंगे तब, बिकॉज़ रेबल इज वो उनको वही है ना, वो बेसिक्स को अच्छे तरीके से जानते हैं, तो वो रुकना नहीं चाहेंगे यहाँ। बट यहाँ पे आई मीन वही चीज, लियो जो है थोड़ा सा ज्यादा तेज रहेगा यहाँ पे इस मैचअप पे एडी के कंपैरिजन में, बट अभी भी अपॉर्चुनिटी है लोस के साथ जाने के। आई मीन लो अटैक्स यहाँ पे की बन सकते हैं स्काउट आपके लिए। या स्काउट का लेग्स वाला जो नीचे का बटन दबा के फिर सर्कल या फिर एक्स। भाई नीचे बटन सोचते मेरे पास आ जा रहा है भाई। Let's see how this one just comes up. I mean, Scout अपनी रेज आर्ट पर आ जरूर चुके हैं, बट अभी डिप्लॉय नहीं किया है। I mean, डॉज भी, रेबल इज ऑलरेडी रेडी फॉर अ डॉज अगर कुछ भी रेज आर्ट की फॉर्म में यहाँ पर आता है, बट ये वाला राउंड भी रेबल निकाल सकते हैं, बट एक अच्छा रेज आर्ट बन सकता है यहाँ पर। नो, एक अच्छा डॉज रेबल नो, उसके डॉज कैसे करना और उसके बाद फिर डॉज के बाद का जो फ्रेम रहता है उसी पे सीधा अटैक कैसे करना। रेबल बस चीजें बेट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं वापस स्काउट से। वो भी अभी मेरे को जिस तरह से खेल रहे हैं, जो चेंज हुआ है आई थिंक अभी वंस अगेन वो अलीसा वाला जो मोमेंट था उसी की तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हो क्या रहा है इस लियो के साथ। नहीं पता मेरे को। लियो एक्चुअली काफी कंफ्यूजिंग है, ये बात तो मैं मानूंगा, ये कैरेक्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। जी हाँ, Leo is kind of like not versatile, but yeah, it kind of confuses some people. So yeah, that just comes up. But देखते हैं कि आगे क्या चीज़ बनती है, क्या निकल कर आता है। अगर बोले इस वाले मैच के अंदर रेबल को अब दिक्कत हुई है, ऑलमोस्ट नहीं तो परफेक्ट जा सकते थे, पहले भी कर चुके हैं पिछले राउंड्स के अंदर, बट अब यही है कि दोनों किक्स पर रिलाई कर रहे हैं। स्काउट वापस स्काउट की किक्स पर अच्छी जा रही है और स्काउट ये वाला राउंड बना सकते हैं अपना, फिर फाइनल राउंड में देखना पड़ेगा क्या बनता है। I mean, look at this one, yes, रेबल goes down and स्काउट के हिस्से में 2-2 आते हैं। सो फाइनल राउंड ये एक डिसाइडर फैक्टर बनेगा, क्या 6-2 होगा या फिर 7-1 ही बनेगा। स्काउट ने सबसे पहले प्रहार किया है और उसके बाद अच्छा डॉजेस भी निकाले और अच्छा यहाँ पर मूव अपने हिस्से में लेकर जाते हुए, बट अब आते हैं रेबल की जो फुर्ती रहती है वो, लेकिन इसके अंदर स्काउट की एचपी धीरे धीरे कम हो रही है। दोनों ऑलमोस्ट सेम एचपी पर आ चुके हैं अब, बट नाउ इज द टाइम फॉर रेबल टू शाइन एंड ही इज एक्चुअली लुकिंग गुड फॉर दिस वन। ओके, इंटरेस्टिंग तो हो चुका है। लो के लिए गए, फिर एक टॉप आता हुआ और अब रेज अवेलेबल है। थोड़ा सा संभल के रहना होगा। दोनों की रेज पहले एग्जीक्यूट किया, आई थिंक प्रो ब्लॉक होगा। ब्रो ब्लॉक क्यों नहीं हुआ मेरा? अगर ये जब मारा मेरे को, मैंने ब्लॉक पे दबाया तो ब्लॉक क्यों नहीं हुआ? मैंने तेरी एनिमेशन में मारा तेरे उसके वो भी प्लस रेज आर्ट अगर ब्लॉक हो जाता है, जो रेज आपने R1 दबा के मारा ना, अगर वो ब्लॉक होता है तो उसके बाद नेगेटिव फ्रेम्स, मतलब रेबल के पास एक एडवांटेज रहता है सिनेरियो में आप पे अटैक करने का। तो अगर मैंने रेज आर्ट मारा और मेरा ब्लॉक हो गया तो मतलब उसका रेज मेरे को कंफर्म लगना है फिर। यस, अगर मैंने टाइमिंग पे मारा तो तेरे एनिमेशन पे क्योंकि रेबल ने ब्लॉक किया और फिर सीधा अपनी रेज आर्ट दबाया, तो उस टाइम आप नेगेटिव फ्रेम्स में, वही चीज है कि आपकी उसकी ब्लॉक के बाद की एनिमेशन चल रही है और उसके पीछे उसका ही फायदा उठा करके रेबल ने उस टाइम के अंदर ही पूरा एग्जीक्यूट कर दिया। ओके वो रेबल बार वही चीज बेट करते हैं आपसे। हाँ, तो रेबल बहुत अच्छा बेट करते हैं। नहीं, अभी जब ये ब्लॉक करा, मेरे को उसको ग्रैपल करा, तो ग्रैपल के में उसको क्लोज जाना पड़ता है। तो इसमें जब अपन कल खेल रहे थे स्ट्रीट फाइटर, उसमें मुझे पता था कि हाँ मैं लोअर किक मारूंगा तो उसको ग्रैपल तो उसको डैमेज बढ़ेगा, फिर मैं अपर मारूंगा, पर इसमें लोअर मार ही नहीं पा रहा मैं। मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि लोअर किससे मारते हैं भाई। इट विल बी अ ट्विस्ट जो मैंने देख किया है। ट्विस्ट, ओके। लोअर के लिए डाउन होल्ड करके फिर आपको वो दबाना है। नहीं, वो कर रहा हूं। रेबल ने एडी पिक कर लिया। एडी व्हाट ट्विस्ट बताओ क्या फीलिंग आ रहा है? रेबल ने एडी तो नहीं पिक कर लिया कि एडी वर्सेस एडी होगा, जब उन्होंने बोला इट विल बी अ ट्विस्ट। मिरर मैचअप में आई थिंक मिरर मैचअप हमें बहुत पहले कराना चाहिए था, ताकि स्काउट को एडी के साथ इंट्रोड्यूस करा पाते रेबल, इन गेम ही कुछ बता पाते टिप्स और ट्रिक्स की इससे ऐसे आप एग्जीक्यूट स्टार्ट कर सकते हैं। हां, एडी लिया इसने। यस, मिरर मैचअप। रेबल, इट्स टाइम टू बी अ कोच नाउ, इट्स टाइम टू ट्रेन स्काउट, लेट्स गो। तो मैं रेबल एक्चुअली ट्रेन स्काउट इन दिस वन। एक L1 दबा के जो स्क्वायर है उससे फ्रंट किक मारता है, वो एक है, और एक में वो कुछ लेट का 360 स्पिन मारता है, वो एक है। दो चीज मैं अब तक सीखा हूं बस, और बाकी तो भाई बहुत ज्यादा टफ कंट्रोल से।
पता नहीं. I'll try to use Eddie as Lucky Chloe. Oh, let's see. अब यहाँ पर एडी वर्सेस एडी क्या होता है. I mean, एक स्काउट का एडी, एक रेबेल का एडी, दोनों चीजों में रहेगा. बट यहाँ पर जो नंबर्स दिख रहे हैं, जो स्टैट्स दिख रहे हैं, वो रेबेल के एडी के सबसे अच्छे दिख रहे हैं. जिस तरीके से वो रुकना नहीं चाहते हैं सब चीज के अंदर. वेल रुकना तो नहीं चाहते, ओपनिंग भी नहीं दे रहे, काफी ज्यादा लोज के लिए जाते हैं. बट स्काउट फाइनली ओपनिंग निकाल ली उन्होंने. एंड यस, अब उनकी तरफ से रिटेलिएशन देखने को मिल रहा है. बट नो, नॉट फॉर लॉन्ग. आई मीन यहाँ पर स्काउट अपने मैं बोलूँगा रेड एचपी में आ चुके हैं. रेजार्ट देखते हैं, लेकिन रेजार्ट उनका ऑब्वियसली यहाँ पर ब्लॉक किया जा सकता है एंड ब्लॉक हो चुका है. मतलब अब चांस मिलते हैं यहाँ पर रेबेल को एंड ही माइट जस्ट गो फॉर द गेम इन दिस वन. पहला राउंड रेबेल एक्चुअली ही गेट्स इट फॉर हिमसेल्फ. ब्रो ये जो स्पिन जो मार रहा है, इसको तो पता है कि किस होता है? कुछ नहीं पता मुझे. मैं बस डबल बटन पे मेरा वो चल रहा है. हाँ, स्ट्रीम एडिटिंग पे सोचेगी. एक सेकंड मेरा कैरेक्टर कौन सा है? दिख रहा हूं मैं. आपका कैरेक्टर जो लाइट पर नहीं पहना जिसने वो है, जिसने ब्राउन कलर का वो कोट पहना, वो आपका कैरेक्टर है. तो हाँ, टेक्निकली आप पिट रहे थे उस टाइम, बट हाँ अब आप पिट रहे तो इस तरीके से मैं बोलना चाहूंगा. लेकिन रेजार्ट यहाँ पर स्काउट के पास है. जो व्हाइट पर वाले जो एडी है वो स्काउट रहेंगे. सो लेट्स सी अगर वो रेजार्ट यहाँ पर, बिकॉज रेजार्ट एक ही बार कनेक्ट हुई है तो दोनों की, उसके बाद से दोनों के रेजार्ट ब्लॉक करने आ गए. ये मेजर फोकस ब्लॉक पर ही दे रहे हैं एक दूसरे. भाई ये तो भाई अनफेयर फाइट है भाई. अनफेयर? ओ ब्लॉक, ये तो ब्लॉक है. बस मेरे को पता है तू कब मार सकता है उसी टाइम पे. अरे नूब, तेरे को गेम पता है. हाँ ये तो है. तब तेरे साथ मैं मार्शल आर्ट खेल लूंगा तो मजा आएगा. ओ भाई रेबेल एडी के साथ भी यहाँ पे काफी कुछ आई थिंक एक्सपेरिमेंट करने थे इन्होंने, कर लिए. अब अभी के लिए तो कर लिया खैर, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या चीज होती है. इनको जो भी चीज में अच्छे से किया है. आई मीन अगर यहाँ पर इनकी रेजार्ट लग भी जाती तो भी दिक्कत नहीं होता, बिकॉज़ रेबेल की एचपी बहुत ही ज्यादा है और वो 8वां राउंड अपने नाम करना चाहेंगे. लुक एट दिस, ऐसा लगा कि टॉन्ट कर रहे हैं रेबेल आराम से वहां पर बैठ करके लेट. भाई इसमें मेरे को समझ में लोअर मार ही नहीं पा रहा हूं. तब से नीचे दबा के मार रहा हूं, लेकिन आप L1 भी दबा रहे हैं उसके साथ. दोनों लोअर दोनों अपर. नहीं L1 नहीं दबाना है. L1 छोड़ के L1 के साथ आपकी असिस्ट ऑन होती है. L1 नहीं दबाना स्काउट. तो L1 के बिना मारना नीचे का. हाँ. क्योंकि आपने नोटिस किया होगा आपके मूव्स फिर लिमिटेड हो जाते हैं अगर L1 के साथ आप स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल मारते हैं. अगर बिना L1 के यूज करें तो फिर आप अलग-अलग मूव्स में ट्रांजिशन कर सकते हैं. एक्चुअली क्योंकि अच्छा L1 के साथ भी एक सिनेरियो है स्काउट. अगर आपने पहला हिट कनेक्ट कर लिया तो L1 के साथ एक इजी फुल कॉम्बो जो यूटिलाइजेशन रहता है वो L1 स्क्वायर अगर आपका लगा ना बल को, उसके बाद L1 दबा के ही ट्रायंगल और फिर X पूरा कॉम्बो पड़ेगा. एटलीस्ट 40 से 50 का डैमेज पड़ेगा रेबल को. बस L1 स्क्वायर पड़ना चाहिए सबसे पहला. ओके, तो L1 स्क्वायर का L1 ट्रायंगल दबाना है मेरे को. L1 स्क्वायर, L1 ट्रायंगल और फिर L1 X. भाई ये सब बताओ ना भाई पहले. मैं भाई आधा घंटा कंफ्यूज कौन सा दबाना भाई L1 के बाद. मैं एक ही मूव 2 बार कर रहा होता हूँ. चलिए अब लो मारने के लिए L1 छोड़ के डाउन और फिर X और सर्कल में से दोनों में से कोई एक. ओके लेट्स गो. अगला मैच रेबेल कैरेक्टर कौन सा रहेगा आपका? रेबेल एक बार डेविल जिन यूज कर लीजिए प्लीज, क्योंकि वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर अगर आप यूज करना चाहते हैं तो. ठीक है एक बार. मैं अभी लॉ ट्राई कर रहा हूँ. लॉ इज अ गुड वन. आई थिंक आई पिक ली. आई डोंट नो क्या लिया मैंने. बस लास्ट में जो टाइमर पे जो रुकता है वो वही. इसने वो ली लिया. ली ओके. ली भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो यहाँ पे आई थिंक लेट्स सी मैं मैच देखना चाहूंगा कि क्या सिचुएशन रहती है. अभी थोड़ी बहुत चीजें स्काउट को बता दी है कॉम्बो के मामले में. स्काउट L1 स्क्वायर पढ़ना चाहिए किसी तरह से, बस कोशिश करें. ट्राई करता हूं. या दैट विल बी अ क्रिटिकल वन अगर बोले तो. खैर देखते हैं इस मैच में क्या होता है. द मैच स्टार्टिंग विद बोथ ऑफ देम और 9th इंस्टॉलमेंट यहां पर रेबेल के लिए हो सकती है अगर वो जीतते हैं तो. ली वर्सेस एडी का यहां पर फाइट रहने वाला है. एंड ओह दैट वाज अ गुड स्टार्ट रेबेल. दैट वाज अ वेरी गुड स्टार्ट. तो भाई एकदम रपारप मारे जा रहा भाई लौंडा. मेरा ये पड़ेगा रेज आर्ट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि एनिमेशन के बीच में था रेबेल भी.
ओह Dude, L1. Okay. नाइस नाइस। स्काउट को कुछ तो हिट हुआ बहुत जल्दी। स्काउट को कुछ हिट हुआ, मैं जानना चाहूंगा क्या था। That was a very good one. अब देखते हैं स्काउट उसको वापस नहीं यहाँ पर कर पाते हैं। नहीं, these good moves coming up from स्काउट जिस तरीके से चल रहे हैं वापस से अब मेरे ख्याल से स्काउट के पास एक अच्छा इंस्टेंस बन सके। एक रेज आर्ट जरूर पड़ी है वहां पर ली के पास, बट क्योंकि वो इतना यहाँ रहेगा और स्काउट बचने के लिए पीछे भी जा रहे हैं। अब उनसे दैट्स अ गुड वन। जिस तरीके से स्काउट कर रहे हैं उनको बस एक और ओपनिंग चाहिए जिसको ब्लॉक ना करे रेबेल, लेकिन यहाँ पर रेज आर्ट डिप्लॉय होती है। ओह माय गॉड, रेज आर्ट लग चुकी है। काफी अच्छा डैमेज इस रेज आर्ट से निकलकर आएगा जरूर, लेकिन स्काउट के पास अभी भी इंस्टेंस रह सकते हैं, बट नाउ इट्स स्काउट्स टाइम। बट नो, ओह दिस वाज अ गुड कमबैक गेम फ्रॉम रेबेल। वेल डेफिनेटली आई मीन वो एक चीज समझ गए थे कि ये देखिए ये जो मूव है ना, इसमें पहला हिट आपने ब्लॉक किया तो अगला हिट जो है वो हाई पे जाता है, तो डक करके आप क्राउच करके उसे विफ करा सकते हैं, और वो चीज वहाँ पे रेबल को समझ आ गई है। उसी चीज का वो एडवांटेज उठा रहे हैं थोड़ा सा। अबे क्या होगा लेट्स सी ये वाला राउंड भी एक डिसाइडर राउंड हो सकता है। दोनों के पास 1-1 का सिचुएशन है, बट अभी भी फिर से ब्लॉक। रेबल इज वे गुड विद द ब्लॉक्स एंड उन्होंने एक भी रेज आर्ट अपने ऊपर लगने नहीं दिया। उल्टा लास्ट राउंड में उन्होंने एक रेज आर्ट अपना यूज किया था, जिसके कारण मैं बोलूंगा स्काउट के अगेंस्ट पूरा गेम बदल गया था। पहला राउंड सबसे पहला इस वाले गेम में स्काउट जीते थे, बट उसके बाद से इट हैज काइंड ऑफ बीन एन अप्स एंड डाउन सिचुएशन अभी के लिए। बट अब स्काउट वापस से वही शुरुआत कर रहे हैं। आई मीन ही इज गोइंग गुड विद द कॉम्बो मूव्स, लेकिन ली वो एक अच्छा डैमेज पिंचर डाउन कर रहे हैं, बट स्काउट वंस अगेन अपनी लातों का अच्छा इस्तेमाल यहाँ पर करते हुए आ जरूर रहे हैं। बट इट कम्स डाउन टू वन थिंग, अब क्या फिर से एक ब्लॉकेज मिलेगी यहाँ स्काउट को या इस बार वो रेज आर्ट लगा पाएंगे? बट नो, एज ऑफ नाउ गुड केओ कमिंग। बट मैं काफी खुश हुई इस बार स्काउट ने जो चीजें ट्राई करी। आई थिंक अब स्काउट आपने कुछ तो फिगर आउट किया था जिस टाइम पे आप काफी खुश हुए थे राउंड वो मतलब एक पंच वाला कॉम्बिनेशन कुछ था L1 और ट्रायंगल से, जैसे लाइक वो एटलीस्ट बंदे को कुछ तो डैमेज दे पा रहा है rather than getting wrecked। अच्छा, वो चीज पर रेबल ने फिगर आउट कर ली कि वो आपने देखा था वो क्राउच करके उसको विफ कराने लगा आपके अटैक। नहीं वो तो मैं टाइमिंग बिगाड़ रहा था। वो शॉट्स अगर ऑन पॉइंट डाल रहे थे तो अच्छा खासा डैमेज देता था। जी हाँ, और आपने लो भी इस बार फिगर आउट कर लिया क्योंकि मैंने देखा था लास्ट में एक स्वीप आपकी तरफ से लगा था। यस, तो चलिए थोड़ा चीजें अब फाइनली आप भी पिकअप करना स्टार्ट कर चुके हैं। आई थिंक अब जो एक आखिरी हमारा मैच है वो थोड़ा और एक्साइटिंग रहेगा आपके लिए भी। रेबल कैरेक्टर, सेम सवाल, कैरेक्टर रेबल। इसमें दिक्कत खाली ये है ना कि वो जो ब्लॉक्स थोड़ा टफ है। सरप्राइज कैरेक्टर लेट्स सी सरप्राइज पे क्या वापस से एडी वर्सेस एडी या फिर वापस से लकी क्लोई लेकर आएंगे रेबल। आई मीन जस्ट टू एंड थिंग्स इन स्टाइल, इट कैन कम टू दैट। लेट्स सी, सरप्राइज बोला है तो सरप्राइज देखते हैं कौन सा सरप्राइज होगा यहाँ पे रेबल की तरफ से। ये तो भाई इसका नाम याद नहीं आ रहा, मेरे को पता है क्या नाम है रेबल का। जिन। I'm seeing it. Finally, ओशन खुश है। मैं खुश हूँ। मेरा फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक आता हुआ टेकन के यूनिवर्स में जिन, एंड दिस इज गोना बी अ गुड वन। आई मीन जिस तरीके से ये यूज होता है कैरेक्टर, आई मीन दिस इज नॉट डेविल जिन दो, बट हाँ जिन के पास भी बहुत बेहतरीन तरीके से उससे मूव्स रहते हैं। नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड ऑफ अ कैरेक्टर, बट हाँ जब से टेकन यूनिवर्स स्टार्ट हुआ उसी की शुरुआत से कैरेक्टर रहा है। एंड अब उससे रेबल अगर अपने सारे कार्ड सही खेले तो यहाँ पर परफेक्ट जा सकते हैं, बट स्काउट ने उसका मौका नहीं दिया। अच्छा खासा डैमेज डिश आउट किया, बट नाउ जिन इज ऑन टू हिज बेस्ट मोड्स एंड ही इज डूइंग गुड विद द ग्रैपल्स। एक अच्छा ग्रैपल यहाँ पर निकाला जरूर था, बट अब एक अच्छी एंडिंग की जो रेबल यहाँ पर दे जरूर सकते हैं जिस तरीके से सब चीज हो रही है। बट नाउ दिस इज वेयर इट इज एक अच्छी किक यहाँ पर। वेल डेफिनेटली, और अब देखते हैं कि किस तरह से होगा। लास्ट टाइम जो है स्काउट ने कोशिश तो बहुत बढ़िया करी थी, बट इस बार जिन के साथ थोड़ा आई मीन मिशीमास थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हमेशा से रहते हैं। तो लेट्स सी, रेबल बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग पे यहाँ पे खेल रहे हैं पूरा, ये बोलना चाहूँगा स्टार्टिंग। ये तो है, बट देन वही है मिशिमा अगर कैरेक्टर्स की हम बात करें, हाची और जिन के भाई भी यहाँ पर वहाँ पर होते जरूर है, बट वही चीज आती है, इट्स अ फैमिली फ्यूड गेम। खैर with all those things, but सितारे यहाँ पर रेबल के काफी बुलंद प्रकार अगर हम HP वाइज देखें, बट एक बहुत बेहतरीन किक यहाँ पर आती है और रेबल को अपने ही एरियाज पर लेकर आ चुके हैं। बट ओ माय गॉड,
This is looking a good one, but what's gonna happen? No. Mid animation use पर करना मिड पड़ा एनिमेशन वो उड़ रहा था, लगा कैसे नहीं उसको? नहीं तेरे को लैंड करने देना था मुझे। लैंड करते हैं तो उसको वापस उठने देते आप। लो से स्टार्ट होती है इसलिए। या क्या? तेरी जो अल्टीमेट है वो नीचे से बढ़ती है ना, तो तेरे को मेरे को लैंड होने दो तब परफेक्ट टाइम पे मारता है। वही वो थोड़े से फ्रेम्स, हल्का फुल्का फ्रेम्स का दिक्कत वहां पर आया। ओके लेटी रेबल अभी फिर से काफी पेशेंटली यहाँ पे खेल रहे थे, अभी भी जिनके साथ थोड़ा वही समझने की कोशिश, एक दो चीजें फिगर आउट कर ली है, उन पे खेला जा रहा है पूरा मैच। नाउ इफ यू आर टॉकिंग यही चीज हो रही है, लेकिन रेबल अब दोनों वापस अपनी रेजार्ट लेकर आ चुके हैं। देखिए यहाँ अब यहाँ पर रेजार्ट लग पाती, यानी ओह that was a good one, that was a thing of beauty। इस तरीके से स्काउट ने यहाँ पर वापस किया, बट क्या ये रेजार्ट लग पाई? नहीं, थोड़े से दूर रह गए। ये पड़ेगी। But this is where he shines, this is where Scout shines। मुझे पता नहीं था इसकी रेजार्ट क्या है, इसलिए ट्राई करना था। बट डिस्टेंस में आप थोड़ा सा मार खा गए, लेकिन स्काउट ने यहाँ पर रेजार्ट बहुत अच्छे तरीके से डिप्लॉय करी है। या काफी बेहतरीन, कब मैं टाइमिंग वहाँ पे सही थी, और रेबल ने बताया भी कि वो ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे कि देख के लेके क्या रेंज रहता है, क्या रेंज आउट रहता है। Well, if the numbers just come up यहाँ पर अब देखते हैं क्या चीज बनती है। I mean, ये आखिरी मैच हो सकता है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा, बट स्काउट इस बार नहीं कर पाए। रेबल और स्काउट ये शायद आखिरी राउंड हो सकता है इस गेम का भी, फर्स्ट टू 10 का भी। I mean, जिस तरीके से ये पूरी जर्नी अभी तक रही है, एंड शुरुआत स्काउट ने करी, that was a good one the way it just started, and रेबल की थोड़ी सी हेल्थ कट डाउन हुई। दूसरी बार सेम टू सेम चीज करते हुए डैश करके आगे जाने की कोशिश हल्की से उनकी थी जरूर, और फिर से किक्स के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, बट एक अच्छी ओपनिंग यहाँ पर रेबल निकालते हुए डेविल जाना चाहेंगे इस पूरी फाइट में, बट जिनको देखना पड़ा कि वो किस तरीके से अब आगे सिचुएशंस बनाते हैं। और रेबल एंड इफ यू आर गोइंग फॉर इट, रेबल एंड स्काउट यहाँ पर काइंड ऑफ सेम एचपी सिमिलर एचपी पर आ चुके हैं, लेकिन अब रेबल के पास देखते क्या इस बार अगर वो रिजल्ट एक सही रिजल्ट बन सकती है, बट इफ ही गोस फॉर इट काफी क्लोज विल बी ब्लॉक्ड आउट। ऑल ओके, दिस इज नॉट ऑल ब्लॉक्ड, एंड दिस इज वेयर जिन एक्चुअली आउटशाइंस, एंड दैट्स अ केओ। वेल 10-1 यहाँ पे ओवरऑल स्कोर लाइन, बट मैं एक बात से खुश हूँ, स्काउट ने जैसा बोला कि इवन दो हारे फाइट्स उनको मजा काफी ज्यादा आया खेलने में, ये बात सुन के मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। अब मुझे पता है स्काउट की एक आदत है, जैसे कोई गेम इसको पसंद आ जाएगा, इसको पता है कि डोमिनेशन हो रही है थोड़ी सी, तो अब ये लग जाएगा इस गेम पे। अब थोड़े दिन में प्रॉपर बस सीख के उसके बाद बोलेगा आ जाओ। वो कॉम्पिटिटिव एथलीट्स का रहता है ना। यस ये मेरे को पता है। ऐसे चाहूंगा मैं एक रीमैच कभी आगे इन नियर फ्यूचर, मे बी इन द फ्यूचर, जब वहां पर स्काउट वर्सेस रेबल एक बार वापस से मैं जरूर देखना चाहूंगा, एंड वो एक बहुत अच्छा बन सकता है। 1 week Alright, that's a good one, that's actually a good one। रेबल आपकी टिप्स क्या रहेगी स्काउट के लिए गेम जल्द कप करने के लिए? टिप्स तो नहीं रहेगी, I don't need tips, I'm a figure। वेल स्काउट यहाँ पे डेफिनेटली मेरे को पता है प्रैक्टिस काफी करेंगे। क्लो ही जाऊंगा, ठीक है? अरे आ जाइयो। चल ठीक है, लेट्स सी। वर्सेस एडी हो सकता है हफ्ते बाद अगर हम बोले इस गेम के सबसे, बट खैर इससे पहले भी जो मैच हुआ था मंबा और मॉर्टल का, वो भी 10-1 की स्कोर लाइन पर गया था, मतलब 10-1 की स्कोर लाइन पर गया। पर वहां पे दोनों को नहीं पता था गेम। वहां पे थोड़ी बहुत आती थी, मामा भी थोड़ी बहुत आती। रेबल को मैं बोलूंगा मामा से काफी ज्यादा। मामा योशिमित्सु लेकर खेल रहे थे, और योशिमित्सु की एक चीज होती है उनकी हेल्थ को रीजनरेट कर सकते हैं, और मामा ने 2 बार यूज भी किया था योशिमित्सु की, और कम भी कर सकते हैं। मैं तो मेरे को याद है जब मैं खेला था तो मैं कम कर रहा था अपनी। नहीं इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका ब्लॉकिंग एंड अटैकिंग कब करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइमिंग सब कुछ टाइमिंग का खेल रहा था। बट चलिए स्काउट और रेबल बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। आई एम प्रीटी श्योर आप दोनों को मजे आए इस मैचअप के अंदर। स्काउट जैसा आपने कहा एक हफ्ते उम्मीद रहेगी वो मैचअप देखने को मिले आपको, मजे काफी आए। और रेबल ने भी बताया कि कंपेटिटिव स्पिरिट प्रैक्टिस चलती रहेगी, फिर से मिलेंगे फ्यूचर में कभी। बट अभी के लिए चलिए हमारे दर्शकों को वापस से डेस्क पे लेकर चलते और देखते हैं कि वहां पे जो स्टार्ट होने वाला है टेकन का मैच अगला हमारे लोअर ब्रैकेट फाइनल्स का, वो किस हिसाब से जाएगा। All right, thank you so very much indeed, casters, and thank you very, very much to all the celebs as well who did tune in to play that incredible game. And finally, I mean,
Yes. That was incredible to see. Rebel जिस तरीके से वो अपना पूरा का पूरा फिर से flow के अंदर आए, to be able to get back into that dominating streak was incredible to witness. And on the other side, perfect play coming in from Scout also, I would say, because he was not demotivated. Rather, he was very intrigued and wanted to try and understand the game that much more better. So, of course, we can all expect him to get back in the groove and perhaps even stream the game another week or two. He tried his best basically because he just wanted to win a single game and he got that game. But you know what, Rebel know the basics, and that's why he can he won. That's why I think so, because basics are necessary in every single game. Any game, any game, dude. I mean, whatever you pick up, you do need to kind of have your own 30 minutes to an hour to just understand the basics of the game before you get into a competitive spirit. But nevertheless, it was fun, and I certainly do hope you guys enjoyed as well. But with that, of course, back in the swing of things, this is of course KO Fight Night Season 5, जहाँ पे हमारे पास कल Smash Brothers का ultimate champion mil gaya. But now as we move on along, this is time to step into, of course, with the brackets we shall showcase what is it time to step into. It is of course the massive prize pool that we're looking at, 1 lakh INR. That is what is at stake, and for that, of course, Rcool is chilling and is on the spot, right? He's like very close to that 50,000 INR, and along with that, of course, the trophy that could be his, but he's still waiting to get his opponent. And the opponents, of course, they have a fight of their own. Lionhart going against Tejan. And this match is going to be very, very interesting because both the players are very experienced and they know each other, and they know that how the players are going to play. But let's see who is going to win. But if I want to predict, I think so Tejan is going to win. All right. Well. That is A-okay as well. After all, everybody gets to choose, and for that, you guys get to choose as well. Amongst these two lads, who would you want to see go on forth into the finals against Rcool? Because that is the final match that everybody's been waiting for and everybody's been rooting for. And along with that, of course, अभी ये जो match होने वाला है, इसके अंदर आपकी क्या expectation है? Who are you wanting to win? Hashtag करिए उनका name along with, of course, KO Fight Night, and let us know. Use chat, use Twitter, use Facebook, whatever suits your boat. But yes, the stakes couldn't have gotten any higher, and along with that, it is incredible to witness all of these celebs take in that part of, well, Street Fighter, Tekken. It's a new game, but just showcasing that, you know, it doesn't matter kaun si game hai. It's about the spirit that you start a game with. It is the spirit, and that is just wonderful to see throughout the day. And of course, that's not the end show match, because there's still one more show match that is remaining, and of course, that is going to be between Regaltos coming in to go against Thug. Do stick around for that match that will take place later. But for now, it is time to get into the lower bracket match. Jump, of course, it is a very tough competition. You expect Lionhart to win? Yes. No, I would say Tejan. I just accept Tejan to win. You win? All right. You want Tejan to win? I want Tejan to win. But then again, Lionhart, well, he has certainly been moved on from the upper bracket down to the lower bracket. So he has a vengeance-full game that he's hopefully going to showcase. Let's find out. With that, of course, we do have the head-to-head wherein we can see Lionhart ne 2 game haare among the 10 games that he has played in total, and for Tejan, again the same number of losses, but he's played 1 game less. So stats kind of favoring Tejan, maybe. I think so. दोनों के almost same ही है. Same ही है, yes. दो ही game they lost. So I think so still have a chance, but how they are going to play? Because यहाँ पर काफी ज़्यादा pressure होगा उन पे. Because everyone just need that first place, want to get that title for the KO Fight Night. And at this moment, Tejan is going to be quite confident because उनके लिए अभी थोड़ा path difficult होगा, because Lionhart is a very, very difficult player. बहुत experienced है basically. Right. But at this moment, Rcool is going to be a little bit confused. कि मतलब वो भी थोड़ा देखेंगे कि who is going to play, और उनके पास एक अच्छा chance होगा play style समझने का. Well, that is so true as well. After all, he is going to be facing one of those two lads, and it would certainly be expected of him to just sit there, sit back, relax. And dude, that is another thing. I mean, the way Scout was just chilling in that gameplay through and through. He had his coffee, he had the popcorns around, you know. I'm just chilling along with the vibe and absolutely loving it. And with that sort of gameplay, I do expect we get into this action-packed game now, where this time around we should hopefully move all the way into game number 4 or 5 itself, because it is a BO5, and of course the stakes couldn't have gotten any higher. Yeah, I think so. We are going to witness the 5th game between these two lads. We ought to. That's what I'm expecting as well. That is so true, mate. Because again, Lionhart, he has been part of the entire community for a very long time. So is Tejan as well. But Lionhart, मेरे को याद है. मैं पहले भी पिछले साल भी जब उनका stage पे host किया था, it was a wonderful synergy all across the entire community. And that point of time as well, Lionhart did stand out with his gameplay. He did stand out with his humble approach to the entire game and the entire community. But right now, Tejan is not wanting to back
back down. So the question will still be lingering over both of their heads. And along with that, of course, wanting to be the champion of not only the KO Fight Night, but also get their name on top of the Airtel India Esports Store. That will be another feat. That's true, and you know what? That prize pool is also insane. If you're going to get the first place, you're going to get 50,000 INR. You know what? It's a massive prize pool. But let's talk about their characters. I Right. think so. We are going to witness a mirror match, and both the players maybe they are going to choose Leroy. Okay. And for a change, maybe another player, maybe Lionhart, going to go for Eliza. Maybe. Okay. And you've seen those players do that? Yeah, I saw. Oh, And you know alright. what? These two players are so experienced. And the thing is, the first game, when both the players are going to play the first game, Right. वो play style सबसे पहले check करते हैं. Because सबसे पहले मैं यही चाहता हूँ कि I just want to throw that how the another opponent is going to play. Right. Then they're going to showcase the perfect gameplay that they are going to show, and the second and third game, that what Ayan showed in the Street Fighter fight. That is so true as well. With that, of course, let's quickly get started with this lower bracket match and throw it to Acostas and get busy with this BO5. Hello, everybody. Welcome back to KO Fight Night presented by Nodwin Gaming and powered by Airtel India Esports Store. I'm Wallflower and I have two lovely casters with me. Everybody knows Vishal Gupta, our Tekken Freak community caster, and our analyst, Danish Iqbal. How is it going for you guys? Did you enjoy the tournament? कैसा लग रहा है आप लोग को? ऑब्वियसली एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर मुद्रा. डेफिनेटली इतना प्यारा टूर्नामेंट चल रहा है यहाँ पर. एंड इवन नॉट इवन टेकन 7 जो भी पीछे स्मैश ब्रोज और स्ट्रीट फाइटर 5 का भी जो अभी ग्रैंड फिनाले हुआ है वो भी हमने विटनेस किया, वो भी काफी शानदार था. एंड टेकन की अगर मैं बात करूँ तो अब लूजर्स फिनाले के यहाँ पर ब्रैकेट जो वो चलने वाले हैं. आई मीन मुद्रा, एक लग रहा था कि लाइन आर्ट ने जैसे तेजन को पहले बाहर किया था, यानी कि लूजर्स ब्रैकेट में उन्होंने तेजन को भेजा था, और अब लूजर फाइनल में वो फिर से तेजन को जो वो फेस करने वाले हैं. आई मीन मुश्किल बहुत होने वाला है, क्योंकि अभी जो पिछली बार गलतियां की होंगी तेजन भाई वो नहीं करेंगे. एकदम मुझे तो लग रहा है तेजन भैया थोड़ा, और ये फाइनल के लिए बहुत पावर पैक थे. मतलब लास्ट जो प्लेऑफ्स था उसमें उसका पावर उतना ज्यादा नहीं दिखा, पर लास्ट जो मैच था रोहित जैन के साथ उसने वो एकदम धमाकेदार खेला. एंड डैम, व्हाट डू यू हैव टू से फ्रॉम एन एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू? जी हाँ, आई कम्प्लीटली अग्री विद विशाल, क्योंकि हमने लास्ट मैच में भी देखा रोहित जैन तेजन को पहले क्वालिफायर में भी एक बार हरा चुके हैं, लेकिन तेजन ने जब रन बैक का मौका आया तो बिल्कुल उनको हरा करके दिखा दिया और लूजर्स फाइनल्स में आकर के पहुंचे. सेम चीज लायन हार्ट के साथ भी हो सकता है, और लायन हार्ट एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है तो मैं बिल्कुल डाउट नहीं करूंगा उनके स्किल पे, बट तेजन का हंगर अभी दिख रहा है लास्ट मैच के हिसाब से. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मैच अ लॉट. So, you know, if we talk about the characters, Tejan to Asuka, I think, you know, he will go with Asuka. He's really strong with Asuka in this game. And Lionheart also, he is sticking to Leroy. So, I just wanted to ask, मतलब क्या लगता है, क्या इस दोनों characters के बीच playoffs कैसे होंगे? मैं एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर मुद्रा, लाइक तेजन के बारे में आपने बताया आस्का वो यूज करेंगे. आस्का के अलावा सपोज डेट अगर चीजें वर्कआउट नहीं करती हैं तो नीना उनका सेकेंडरी पिक हो सकता है, और फिर ओके तो जैसा कि आप देख रहे हैं गाइस, पहला गेम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है एंड लीरॉय वर्सेस नीना यहाँ पर देखने को मिल रही है. तेजन भाई ने यहाँ पर नीना को उतारा है, जबकि लाइन आर्ट की तरफ से यहाँ पर लीरॉय आया है. देखते हैं गेम स्टार्ट हो चुका है. डाउन टू 12 जरूर था, लगा भी था वहाँ पर पूरी स्ट्रिंग चलाते तो शायद फायदा हो सकता है, लेकिन फॉरवर्ड टू से बढ़िया कॉम्बो निकाला है और स्क्रू तक गए. हालांकि बॉल पीछे है बट अच्छा कैरी करेंगे, बॉल के ऑलमोस्ट पास पर लेकर आ गए हैं. फॉर्मलाइज किया वहाँ पर, लेकिन अच्छा साइड स्टैप इंस्टेंटली पर किया वहाँ पर, बॉल पे फंसाया. अच्छा यहाँ पर लॉन्च मिलता है, डेफिनेटली क्या होगा. तो जैसा कि हम बोल ही रहे थे यहाँ पर कि तेजन भाई अब प्रिपेयर्ड है यहाँ पर. मुद्रा देखिए पहला राउंड कितनी आसानी से निकाल दिया उन्होंने. एकदम विशाल, मतलब वो साइड स्टेप से बैक पनिश हुआ कितना अच्छा था, पर लेकिन लायन हार्ट भी अभी पुश कर रहे हैं. we're seeing both the players playing it, but you know Lionheart, he has an advantage because Tejan is almost low, but he's trying to pull it through. Oh, but then Lionheart एक बहुत खतरनाक किक था लीरॉय के साथ और वो दिखा गया उनको.
डेफिनेटली लूजर्स फाइनल तो इतना आसान तो किसी भी प्लेयर के लिए नहीं होने वाला है। बेहतरीन वापसी करते हुए यहाँ पर लायनहार्ट 1-1 के साथ गेम बराबर पे आ चुका है। अच्छा ब्लॉक, लेकिन इसके बाद स्ट्रिंग को यहाँ पर कंटिन्यू करते हुए फंसाया 50-50 में तेजन भाई ने। अच्छा वॉल डैमेज लेते हुए यहाँ पर पूरा कैरी किया, लेकिन बढ़िया पैरी आते हुए यहाँ पर। डेफिनेटली लीरो एक ऐसा कैरेक्टर है, आप ज्यादा घुसकर नहीं खेल सकते हैं क्योंकि उनके पास टूल्स अवेलेबल है, पैरी कर सकते हैं वो, आपको जो है वो काउंटर हिट कर सकते हैं। एक और बढ़िया यहाँ पर लाइफ लीड और सेकंड राउंड भी लायनहार्ट के खाते में जाता हुआ। लीरॉय का पैरी तो है ना, वो बहुत डेंजरस है। मतलब आपने जो किया था पिछले बार कि वो हर्मिट स्टैंड पे ही कैन ब्लॉक बोथ मिड एंड लो पैरी इजीली, एंड लुक एट दैट push through the wall, but that was a nice comeback from Tejan, going in strong. Both the players defensive कर रहे हैं, थ्रो के लिए push किया पर cancel हो गया। अब क्या होगा? Again going for the wall push, but Lionhart coming back with those pokes. Both players have rage now. Tejan went for the rage drive और वो ही wall के हेल्प के साथ निकल गया वो राउंड। बहुत ही शानदार तरीके से रेज ड्राइव का यूटिलाइज किया। एक्चुअली रेज ड्राइव जब प्लेयर यहाँ पर हिट करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं फ्रेम एडवांटेज होता है। ओ फॉरवर्ड 2 मारा था, आई थिंक वहाँ पर 50 लॉन्चर उनको मिल सकता था, ब्लॉक किया बट लॉन्च पनिश नहीं करा वहाँ पर तेजन भाई ने। थोड़ी सी गलती हुई थी, उसका पूरा फायदा उठाया। बेहतरीन स्टूट चलाते हुए यहाँ पर इंस्टेंटली यहाँ पर कैन भी देखने को मिली है, हालांकि कैन का कोई फायदा नहीं मिला। थोड़ा सा अगर बाद में चलाते तो मे भी उसका यूटिलाइजेशन थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। लाइफ लीड अभी अवेलेबल है, लेकिन बराबरी होती है। ग्रैब बहुत ही प्यारा थ्रो, ग्रैब इंस्टेंटली काउंटर निकालते हैं वहाँ पर, बैक पर बढ़िया काउंटर निकाल। ओ थ्रो ब्रेक आता हुआ यहाँ पर, दोनों प्लेयर अच्छा थ्रो ब्रेक कर रहे हैं। पावर प्रेस जरूर मारा था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ वहाँ पर। एंड तेजन भाई फॉरवर्ड 4 अच्छा एंडर, अच्छा पिकअप, एंड लास्ट में ये देखिए की चाहते रेस्पेक्ट ही दिया है उन्होंने। एकदम शानदार मैच था वो तो। विशाल, मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस चॉइस ऑफ नीना? मतलब तेजन भैया जो नीना को चूज किया लीरॉय के अगेंस्ट में, मतलब इसका क्या कमेंट करना है आपको? एक्चुअली इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा मुद्रा, लाइक लीरॉय के अगेंस्ट वो आस्का भी खेल चुके हैं, बट कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि आस्का एक अच्छा पिक नहीं हो सकती है, क्योंकि अब क्या है कि लोगों को उनके मैचअप की नॉलेज धीरे धीरे होती चली जा रही है। एंड जब सामने वाले को पता होता है कि आप किस तरीके से खेलने वाले हैं तो ऑब्वियसली लूजर फाइनल है, किसी भी तरीके का चांस वो नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर हारे तो सीधे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। इतनी प्यारी जो जर्नी वो तय कर आए हैं वो पूरी बेकार हो जाएगी। उनको जाना है ग्रैंड फाइनल। तो और जैसा कि इंटरव्यू भी हमने देखा था, यहाँ पर तेजन भाई ने एक क्लियर स्टेटमेंट दी थी अपने अपोनेंट को कि मैं टूर्नामेंट खेलता हूँ तो मैं अपने आप को सिर्फ फर्स्ट प्लेस पर देखता हूँ। तो वेल ये जो एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म भी तो करना है, वरना कैसे काम चलेगा? सिर्फ स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होगा, और वो परफॉर्मेंस देखने को भी मिल रही है। आई मीन नीना एक अच्छा पिक है। लाइक अगर आस्का लेते गेम हार जाते तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी ये चल रहा होता कि काश नीना या फिर फकुम राम को वो ले सकते थे, जो कि उनका थर्ड पिक है, क्योंकि पिछले कुछ राउंड्स में हमने देखा था कि तेजन भाई ने यहाँ पर फकुम राम को भी उतारा था। पर फकुम राम ने तो वो एक डिसएडवांटेज हो गया, पर नीना is working out really well for Tejan right now, and then we see with a nice start both the players playing defensive, goes for the sweep but nice punish by Tejan there. वो दोनों कैरेक्टर बहुत टेंस थे, कॉम्बो तो नहीं निकल पाया उससे। कॉम्बो वहां पर जरूर निकली, कॉम्बो वहां पर जरूर नहीं निकल पाया, लेकिन ट्राई जरूर किया जा रहा है। एक चीज और यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूंगा, लाइक सपोज दैट लायनहार्ट को वो बाहर कर देते हैं तो Rcool के अगेंस्ट जब वो फाइट करेंगे तो वहां पर भी उनको लीरॉय से ही फाइट करनी है, यानी कि बैक टू बैक 2 लीरॉय उनको फेस करने हैं। फिलहाल यहाँ पर एक अच्छी लाइफ लीड, बढ़िया यहाँ पर हेल्प और उसका पूरा फायदा मिला यहाँ पर लायनहार्ट को। बेहतरीन राउंड यहाँ पर उनके खाते में जाता हुआ एकदम, और स्टार्टिंग भी काउंटर से किया। लीरॉय बहुत डेंजरस कैरेक्टर है और वो अभी भी बहुत ब्रोकन है। पैचेस के मतलब मौजूद भी वो कितने अच्छा, लाइक ही जस्ट पिन्स यू टू द ग्राउंड एंड इफ दोस moves hit you then you are done for। अच्छा कोशिश था तेजन भैया का ग्रैब के साथ, पर नहीं वो काउंटर भी हो चुका था। बात यह है कि जब दोनों बेहतरीन प्लेयर आपस में फाइट करते हैं, ओ बेहतरीन रूप का वहां पर सिलेक्शन लायनहार्ट की तरफ से। एंड क्योंकि सेकंड राउंड है, उनको भी पता है कि इतनी आसानी से जो वो गेम देना नहीं है, इतनी आसानी से गिव अप नहीं देना है। 2 बैक टू बैक स्ट्रेट राउंड आ चुके हैं, ये राउंड अगर जाता है तो गेम आपका बराबरी पर आ जाएगा। ऑर्बिटल से ट्राई किया लेकिन कोई फायदा नहीं होता, वो इंस्टेंटली पूरा ऊपर आया। ये कैरी चाहिए डेफिनेटली, बढ़िया स्ट्रिंग, बढ़िया कॉम्बो स्ट्रिंग वहां पर पिकअप करते, स्लाइड जरूर लिया, मूव मिला था वहां पर, लॉन्च मिला, लेकिन वहां पर कॉम्बो ड्रॉप होती हुई देखा। ओ हो यहाँ पर अगर वाइल्ड स्टैंडिंग 2 मारते तो
शायद कॉम्बो पिक कर सकते थे यहाँ पर लॉयनहार्ट, लेकिन कोई बात नहीं, पहला राउंड लग रहा है कि तेजन भाई के खाते में आ सकता है, लेकिन चूंकि रेस में अवेलेबल है, बेहतरीन तरीके से पैरी वहां पर इंस्टेंटली डाउन और +2 का काउंटर, लेकिन रेस ड्राइव आती हुई तेजन भाई की तरफ से एक राउंड यहाँ पर उनके खाते में आता हुआ इतनी आसानी से, जैसा कि मैंने कहा मुद्रा कि कोई भी इतनी आसानी से गेम तो नहीं देने वाला है अपने अपोनेंट को एकदम। और तेजन लास्ट गेम में हम देख रहे हैं का ये रेज कर अस्तूफा का रेज ड्राइव, दोनों का टाइमिंग भी वो बहुत अच्छे से कर रहा है, पर लेकिन अब तो लग रहा है लायनहार्ट वॉल और स्टार्टिंग एडवांटेज ले लिया, पर अभी भी तेजन कोशिश कर चुका है, लेकिन बहुत कम एचपी है, रेज ड्राइव में जाते हैं पर नहीं लगता है क्या वो ये कर पाएगा। वेल रेस ड्राइव के बाद एक्चुअली 50-50 के लिए वो जाने के लिए कोशिश कर रहे थे और कहीं ना कहीं उसमें सफल भी हुए, जैसा कि आप देख रहे हैं अच्छी खासी लाइफ लीड अवेलेबल थी यहाँ पर लायनहार्ट के पास, लेकिन कहां पर लेकर आ चुके हैं बेहतरीन में यहाँ पर रेस आते हुए लायनहार्ट की तरफ से, उनको पता था। इसका एक बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ मुद्रा, क्योंकि लीरॉय की रेस ड्राइव ऐसी है, अगर हिट होती है सपोज दैट आप ब्लॉक भी करते हैं एंड पीछे वॉल अगर पास में अवेलेबल है तो थोड़ा सा आपको वॉल डैमेज मिल जाता है, तो वही प्रेशर क्रिएट करने के लिए उन्होंने इंस्टेंटली जो है वो रेस ड्राइव को ट्रिगर कर दिया। एकदम। तो डू यू थिंक मतलब नी जो है हमारा बहुत मतलब ये दिस नेम इज सो फेमस इन टेकन, नी राइट, ही Yep. मेड अ कमेंट आफ्टर दिस इवो जापान दैट ही थिंक्स लीरॉय शुड बी बैंड फ्रॉम टूर्नामेंट, सो आपको ये स्टेटमेंट में क्या कहना है? एक्चुअली मैं इसमें एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा यहाँ पर मुद्रा, कि अब जैसे नी कह रहा है कि लीरॉय को बैन कर देना चाहिए, जैसे कि आपने मुझे बताया, वही थोड़े दिन पहले यहाँ पर एक रूमर चल रहा था, ट्विटर पे ही वो चीज आई थी, अर्सनल एस यहाँ पर जो पाकिस्तान के सबसे बेस्ट प्लेयर माने जाते हैं, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में एक्चुअली फकुम राम को ही बैन किया हुआ है उन्होंने हर टूर्नामेंट के लिए। तो अब आप मुझे एक चीज बताइए यहाँ पर मुद्रा, अगर ऐसे सेलेक्ट करके हम एक एक कैरेक्टर ब्लॉक करते जाएंगे तो लोग खेलेंगे किससे? आई मीन ये 3D गेम है, कैरेक्टर अगर आपको दिया गया है डजंट मैटर वो ओवर पावर्ड है या फिर वो नॉर्मल कैरेक्टर है, डिपेंड करता है आपके प्ले स्टाइल पर। वहीं पर लीरॉय की जैसे कि आप कह रहे हैं कि काफी सारे पैचेस भी आए, लेकिन अभी भी लीरॉय जो है वो ब्रोकन है, एक्चुअली वो ब्रोकन नहीं है, उसके बाद उसके पास वो टूल्स अवेलेबल है एंड डिपेंड करता है गेमर के प्ले स्टाइल पर कि वो किस तरीके से उन टूल्स को यूटिलाइज करते हैं। इसी के साथ तीसरा गेम हमारा स्टार्ट चुका है गाइस, 1-1 के साथ यहाँ पर दोनों ही प्लेयर गेम को बराबरी पर कर चुके हैं, बेहतरीन तरीके से काउंटर यहाँ पर निकाला, लेके लॉन्च मिलता हुआ बढ़िया कॉम्बो ड्रॉप हो चुके हैं यहाँ पर। तेजन भाई की थोड़ी सी मुझे मोराल लग रहा है, हिला हुआ लग रहा है मुझे पहले राउंड निकलने के बाद, क्योंकि जिस तरीके से इस राउंड में कॉम्बो भी ड्रॉप हुई और कहीं ना कहीं गलतियां वो करते हुए नजर आ रहे हैं, ट्राई जरूर कर रहे हैं, देखते हैं वो वापसी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। Tejan holding it strong, but then gets hit by that forward kick from Leroy. Trying their best, both players, but Lionhart does have the health advantage, and there he takes the first down so easily. अगर first down में इतना early on वो health disadvantage हो जाता है ना, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है दूसरे player को कम बैक करने के लिए। डेफिनेटली अगर स्टार्टिंग में ही आपके पास लाइफ लीड अवेलेबल होती है तो कम बैक करना वहाँ से काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि टाइमर भी आपका ऊपर चल रहा है, आपको सारी चीज़ें जो वो एक निर्धारित समय के अंतराल में जो वो करनी है। फिलहाल ट्राई काफ़ी अच्छा किया जा रहा है, बहुत प्यारे पनिशेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ब्लॉक जरूर किया था वहाँ पर, डक किया एंड इसी के साथ ओ हो ये नहीं होना चाहिए, आई मीन गेम कंटिन्यू होना चाहिए, लेकिन ऑनलाइन गेम है, कुछ भी हो सकता है एंड हो सकता है वो गेम दोबारा से वहीं से कंटिन्यू न्यू हो, या फिर हो सकता है हमें ये गेम जो है वो दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़े। एंड सपोज दैट अगर मुद्रा दोबारा से रीस्टार्ट होता है तो चूंकि एक राउंड की एडवांटेज अवेलेबल थी वहां पर लायन हार्ट के पास में, तो आई थिंक वहां पर एक राउंड की उनको एडवांटेज मिलनी चाहिए, क्योंकि वो एक राउंड ऑलरेडी विन कर चुके थे। तो ये एक चीज लॉकडाउन में मतलब इंटरनेट इश्यूज, बहुत सारे प्लेयर्स से मैं ये सुना कि यू नो वी आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस इट प्रॉपर्ली बिकॉज ऑफ द इंटरनेट इश्यूज, इसलिए बहुत सारे प्लेयर्स के भी परफॉर्मेंसेस डाउन हो गए क्योंकि वो इंटरनेट प्रॉब्लम के लिए वो लोग अच्छा प्रैक्टिस नहीं कर पाए। तो ये तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, तो क्या करे मतलब इस ईयर। पर मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि यू नो इवन डिस्पाइट दिस ईयर गोइंग सो बैड, वी आर गेटिंग सच एन इनक्रेडिबल सीजन ऑफ KO फाइट नाइट। हमको एक पैंडा प्लेयर फाइनल्स में मिला, मतलब वो तो बहुत बढ़िया है। मैं इतना न्यू टैलेंट भी दिखा हम लोग को दिखने आया, तो यू नो आई एम जस्ट सो एक्साइटेड, बट इंटरनेट थोड़ा तो प्रॉब्लम होगा ही, क्या कर सकते हैं। डेफिनेटली ऑनलाइन मैचअप में ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे भी कंट्रोल में नहीं होती हैं, कि आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी के इशू के बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता। बट एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँगा मुद्रा, कि जब यहाँ पर आपका लॉकडाउन था, यानी कि 3 महीने जो है वो कोई कहीं नहीं गया था, उस टाइम पे एक्चुअली इन्होंने अपने टाइम को यूटिलाइज किया है टेकन में जो वो हाथ साफ करने के लिए, क्योंकि अगर आप पहले के सीजन उठा के देखेंगे KO फाइट नाइट के, इवन ड्रीम हैक में जो KO फाइट नाइट हुआ था वहां पर भी तेजन का जिस तरीके से डोमिनेशन देखने को मिला था वो
वन साइडेड था, बट इस सीजन की अगर मैं बात करूं तो वो वन साइडेड नहीं है, अपोनेंट्स भी उनको जो है वो डोमिनेट करते हुए नजर आए हैं और एक बराबरी का जो कंपटीशन होता है वो यहाँ पर देखने को मिला है। Last year, though, I was also there at DreamHack, and I think we did have another match. I think maybe in the top 8 where it was Lionhart versus Tejan, and I think over there we saw an Asuka versus Bob. And Lionheart, ये पिछले मैच में भी हमको Lionheart का बॉब दिखने को मिला, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? लाइन हार्ट के दो मेन कैरेक्टर हैं यहाँ पर, जैसा कि लीरॉय को हम अभी देख ही रहे हैं, एंड बॉब उनका जो है वो सेकेंडरी पिक है। जैसे कि आपको 5-on-5 की बैटल में मैं वरुण के साथ भी यही डिस्कस कर रहा था कि वहां पर भी क्या आपको दो वेपन होते हैं, आपके पास एक प्राइमरी वेपन होता है, एक आपका सेकेंडरी वेपन होता है। वैसे ही ये फाइटिंग गेम भी कुछ उसी तरीके से होते हैं, आपको दो कैरेक्टर तो बिल्डअप करके रखने ही होते हैं, जो कि आपका एक मेन कैरेक्टर होता है, प्राइमरी कैरेक्टर होता है, एक आपका सेकेंडरी पिक होता है। तो यहाँ पर लाइन आर्ट का जो प्राइमरी पिक है वो आपका लीरॉय है, उनको पता है कि अभी चांस नहीं ले सकते, इसीलिए उन्होंने तेजन के अगेंस्ट बॉब नहीं उतारा है, लीरॉय को ही उतारा है। एंड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे हैं। 1-1 की गेम पे बराबरी पर आ चुका है, एंड जो तीसरा गेम चल रहा था उसमें भी पहले राउंड को वो जीत चुके थे। तो ये एक चीज दिखाती है कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वहीं पर तेजन भाई की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि आपने पहला राउंड विटनेस किया तीसरे गेम में, उनसे 2 से 3 गलतियां पहले ही राउंड में हुई। आई मीन एक बार लॉन्चर मिला, वहां पर कॉम्बो ड्रॉप हुई, ब्लॉक किया तो पनिश वहां पर नहीं निकले। आई मीन अब ये मे बी बार्स की वजह से भी हो सकता है, लाइक उसके बाद सेकंड राउंड में जो वो गेम आपका सिंक पर चला गया, तो हो सकता है पहले राउंड से ही उनको जो है वो कनेक्टिविटी की इशू प्रॉब्लम आ रही हो, क्योंकि ऑनलाइन ये होता है मुद्रा, टेकन 7 का पूरा गेम आपका फ्रेम डेटा पर बेस है। अगर आपने 1 से 2 फ्रेम भी मिस कर दिए, इट मींस कि 14 फ्रेम का लॉन्चर आपको मिला है या 15 फ्रेम का लॉन्चर आपको मिला है एंड आपने टाइम पर नहीं चलाया, तो अपोनेंट आपका ब्लॉक कर लेगा एंड उसके बाद आपको काउंटर लॉन्चर मिलेगा। तो वो चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है यहाँ पे। एकदम। और like I don't know why Tejan went with Nina though instead of Asuka, because in the previous match that we just saw, his Asuka was so in well shaped. So why do you think मतलब Nina की और Asuka, क्या वो change करे अब Asuka को? वेल इसका एक ये भी रीजन हो सकता है कि तेजन भाई एक्चुअली सभी प्लेयर्स के साथ जो है ऑफलाइन में प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो हो सकता हो लाइन हार्ट के अगेंस्ट उन्होंने कभी नीना नहीं खेली हो और उनको ऐसा लगा हो कि नीना के अगेंस्ट उनको मैचअप नॉलेज इतनी नहीं होगी, तो उसका एक फायदा वो उठा सकते हैं, क्योंकि ये जो फाइटिंग गेम है वो पूरा का पूरा आपका मूव्स पर ही डिपेंड है। अगर आपको पता है कि सामने वाले ने एक मूव हिट किया है, अगर आपने ब्लॉक किया, तो आपको पता होना चाहिए कि काउंटर या फिर पनिश क्या होना चाहिए। अगर वो नहीं पता है तो डेफिनेटली ब्लॉक के बाद आप मूव्स भी चलाओगे तो सामने वाला ब्लॉक कर लेगा, क्योंकि पूरा फ्रेम बेस्ड है ये, इसीलिए ये एक इसी तरीके से ये पिक हो सकता है उनका नीना। मतलब हाँ, ये these problems with like character knowledge in any fighting game, I have seen Super Smash, Street Fighter, मतलब you need to know where your enemy is going to hit, not where he is hitting. So you always need to be one step ahead of your enemy. That's why character knowledge ये fighting game में बहुत बहुत important है। दिमाग का गेम वही असली है fighting game में। डेफिनेटली फाइटिंग गेम्स की एक खास बात होती है, एक तो वो फास्ट पेस्ड एक्शन होते हैं, इतना तेजी से गेम चलता है, और तो वहां पर आपका ना प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, आपका गेम सेंस मतलब दिमाग बिल्कुल खुला होना चाहिए, क्योंकि अब आपको पता है कि देखो टाइम का पूरा सीन है, सिर्फ 60 सेकंड आपको मिले हुए हैं और उस 60 सेकंड में या तो अपोनेंट जीतेगा या आप जीतेंगे। जबकि अदर गेम में क्या है कि टाइम थोड़ा ज्यादा मिलता है, लेकिन फाइट गेम का एक स्टैंडर्ड टाइमिंग होता है, 60 सेकंड ही मिलेंगे आपको, उस 60 सेकंड में आपको करना है जो भी कर दिखाना है। हाँ, अभी तो हम जो वो न्यूबीज के मैचेस, आई एम नॉट श्योर इफ यू सॉ स्काउट वर्सेस Yeah, I saw रेबल them. था, तो उसमें एक आई थिंक मॉर्टल वर्सेस मंबा में हमको दिखा कि वो मॉर्टल थोड़ा जड़ा हुआ था, इसलिए ही वाज फोकसिंग ऑन ब्लॉकिंग, पर ब्लॉक करते 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 टाइम अप हो गया और वो लूज कर गया। तो टाइम इज रियली गुड, लाइक यू कांट जस्ट गो ऑन बीइंग afraid। पर अभी तक आई थिंक टाइम अप हमने टूर्नामेंट अभी तक कोई प्लेयर्स का नहीं देखा कि टाइम अप, क्योंकि सारे प्लेयर्स इतने अग्रेसिव खेल रहे हैं अपने कैरेक्टर से कि टाइम अप का चांस ही नहीं हो रहा है। एक्चुअली अग्रेशन का एक तरह से आप कह सकते हैं वो गेम प्ले का एक टूल है। अगर आप अग्रेसिव अप्रोच रखते हैं तो कई बार क्या होता है, सामने वाले प्लेयर के दिमाग में जो चल रहा होता है ना, तो वो एकदम ब्लैंक कर देते हैं, लाइक अग्रेशन आ रहा है, उनको सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा है कि मैं करूं क्या। तो वो एक स्ट्रेटजी का पार्ट है अग्रेसिव रहना। लेकिन अगर सामने वाला प्लेयर डिफेंसिव है, जैसे कि आपने कहा कि मोटल ने जो है वो डिफेंसिव इतना किया कि उन पर टाइमर पे ही नजर नहीं गई और वो डिफेंस करते करते जो वो मैच को हार गए, तो ये भी चीज डिपेंड करती है कि आप ज्यादा भी नहीं हो सकते हो,
हो, क्योंकि कई बार आप ज्यादा अग्रेसिव हो गए, फ्रेम का एडवांटेज अगर अपोनेंट को मिला तो वो आपको जो है वो बीट कर देगा। एंड दूसरी चीज, आप ज्यादा डिफेंसिव भी नहीं हो सकते हो। ऑब्वियसली टाइमर चल रहा है, आप कितना डिफेंस करोगे, टाइम तो चल ही रहा है। अगर टाइम खत्म हो गया, सामने वाले के पास लाइफ हेल्थ अवेलेबल है, लाइफ लीड अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली आपका गेम तो वैसे ही खत्म हो गया। डेफिनेटली वही बात है ना, मतलब उस मोमेंट में क्या चल रहा है इन प्लेयर्स के दिमाग में, वही तो। पर आई वुड से हैट्स ऑफ टू देम, मतलब तेजन भाई स्पेशली, उनका कंपोजर इतना अच्छा है। ही कैन जस्ट बी calm in such situations. In the previous match we saw that he इतना सा हेल्थ था, 2 ग्रेट सिचुएशन निकाले तेजन भैया ने, सिर्फ मतलब रेज ड्राइव थोड़ा इधर उधर ट्वीक करके। तो वही मतलब मुझे तो मैं जब भी टेक्निक खेलती हूँ ना, जब भी मेरा लाइफ बार इतने कम हो जाता है, मैं बहुत दर्द शुरू करती थी, और आई गिव ऑल द रॉन्ग इनपुट्स एंड देन आई लूज। सो आपका क्या है, आप क्या कूल माइंडेड है, और डू यू लाइक आल्सो गेट नर्वस? एक्चुअली ये डिपेंड करता है प्ले स्टाइल पर। लाइक एक्चुअली अगर टूर्नामेंट चल रहा है ना, तो आप जितने काम और कंपोज्ड है, उतना बेहतर आपका परफॉर्मेंस जो है वो निखर कर आएगा, क्योंकि स्ट्रेस में हमेशा आप गलतियां करेंगे। एंड जब बड़े लेवल आप खेल रहे हैं, तो आपको भी पता है कि देखिए प्राइस पूल तो अपनी जगह है ही, लेकिन एक बात होती है ना, वो चैंपियनशिप का जो टाइटल लगता है कि भाई KO फाइट नाइट सीजन 5 का विनर ये प्लेयर है, तो वो जो फीलिंग आती है ना, वो किसी प्राइस पूल से भी बहुत बड़ी है। तो उस फीलिंग के लिए एक्चुअली प्लेयर जो वो फाइट करते हैं, और इसीलिए अपने आप को इतना ज्यादा पेशेंसली डील करना पड़ता है प्लेयर से, क्योंकि एक गलती और गलती की सजा पूरा राउंड कॉस्ट कर सकती है, पूरा गेम कॉस्ट कर सकती है आपको। हाँ, definitely. And with like rather than KO Fight Night, rather than the bragging rights, this time we also have the Airtel India Esports Store leaderboard, जहाँ सब players के सारी performance noted down हो रहा है, और year end में वहाँ से भी उनको प्राइज मिलेगा। So that's why I feel like they're really added, and now we see that the Lionhart, he is ahead 2 games, and Tejan, things are not looking good for him. डेफिनेटली यहाँ पर ऑलरेडी 2 राउंड की लीड अवेलेबल है। ये फाइनल राउंड है उनके लिए, इस गेम का देखना पड़ेगा कि वापसी होगी या नहीं होगी। हालांकि बढ़िया कॉम्बो यहाँ पर पिकअप किए उन्होंने। पहले ही कर अच्छा विप निकाला वहाँ पर, बेहतरीन लॉन्चर। उनके पास रेज आर्ट भी अवेलेबल है, लेकिन यूटिलाइज नहीं किया। शायद मिक्सअप में फंसाना चाहते हैं, कभी भी रेज ड्राइव देखने को मिल सकती है। एंड दोबारा से यहाँ पर मिक्सअप चलाने की कोशिश, बेहतरीन हेल्थ, हल्की सी हेल्थ बची हुई है, लेकिन चूंकि अनप्राइड स्टेज है तो बॉल तो है नहीं वहाँ पर, रेज ड्राइव से कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन ऑर्बिटल कनेक्ट होगी यहाँ पर। बेहतरीन गेम प्ले, 3 स्ट्रेट राउंड यहाँ पर लाइन हार्ट के खाते में जाते हुए। आई मीन वाओ, ये जो एक्शन हमने अभी देखा, 2 राउंड से हमने देखा था, और 1 राउंड ऑलरेडी यहाँ पर लाइन हार्ट के पास जो वो अवेलेबल था जब सिंक में गया था गेम, तो मुझे लग रहा है कि वहीं से गेम कंटिन्यू हुआ है। एंड दूसरा राउंड भी उसके बाद लाइन हार्ट ने निकाला, और अभी जो हमने विटनेस किया वो तीसरा राउंड भी, यानी 3 स्ट्रेट राउंड लाइन हार्ट ने निकाल दिया। अब यहाँ पर 3 की धड़कनें बहुत तेज होंगी, क्योंकि अब 2 गेम यानी कि 1 गेम से वो आगे चल रहे हैं। 2-1 का आपका स्कोर अप हो चुका है। हाँ, और वो लास्ट में मतलब वो इतना सा हेल्थ था, तो राउंड कोई भी जा सकता है, पर लायन हार्ट ने बहुत शानदार खेल लिया। वो ऑर्बिटल, लीरॉय का वो ऑर्बिटल, ये रिसेंट मतलब पैच से उसका डिस्टेंस थोड़ा नर्फ किया, पर स्टिल भी वो ऑर्बिटल बहुत बहुत खतरनाक है। सो व्हाट डू यू थिंक, मतलब लीरॉय कैसे कैसे उनको काउंटर करें, मतलब with a player Asuka, Nina, Tejan भैया, कैसे, how can he get the edge over Leroy? आई मीन लेरॉय से पार पाने के लिए आपको या तो लीरॉय ही उतारना पड़ेगा, या फिर आपको डिफेंसिव खेलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अग्रेसिव होते हो तो उनके पास हर एक, तो लीरॉय एक ऐसा कैरेक्टर है मुद्रा, जिसके पास हर तरह की पैरी अवेलेबल है। आई मीन हाई, मिड एंड लो, उनके पास सब तरह की पैरी अवेलेबल है, जो कि उजली सारे कैरेक्टर्स के पास अवेलेबल नहीं है। इसी के साथ फाइनली यहाँ पर आती हुई नीना का कम यहाँ पर हो चुका है ओवर, क्योंकि अब ये गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़िया लॉन्चर मिलता हुआ यहाँ पर तेजन भाई वापसी हो सकती है यहाँ पर आस्का के साथ। बॉल भी मिली यहाँ पर, अच्छा वॉल कैरी, अच्छा वॉल एंटर मारते हुए फॉरवर्ड 2 देखना पड़ेगा। एक यहाँ पर सेटअप भी है इनका, वो देखते हैं वो यहाँ पर चलेगा या नहीं चलेगा। ओह, अच्छा साइड स्टेप स्टैंडली पर किया वहाँ पर, लेकिन अच्छा लो ब्लॉक होता हुआ बॉल पर खेलने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। फॉरवर्ड 2 के अच्छा हुआ पूरा वहां पर नहीं कंटिन्यू किया वरना। एंड आसुका के साथ, जैसा कि मैं यही कह रहा था यहाँ पर मुद्रा, कि आसुका के साथ उनका बिल्कुल हाथ बैठा हुआ है कि कहां पर उनको पनिश निकालने और कहां पर उनको जो है वो लॉन्च निकालने हैं। एकदम, I think I think Tejan was still trying to give that round to Lionheart to just see his play style and then bring out the bomb, but
Lionheart as well. He's also very strong this tournament with Leroy. He knows what to do, but Tejan just getting that edge with those low pokes, trying to fit in a launcher, but gets hit by that orbital and now going through the wall with that beautiful orbital combo, but doesn't run for the wall punish. वहां तो वो छोड़ दिया वो, और तेजन वो मौका ले लिया, अब वो वॉल पे जाएगा और फिनिश करेगा थोड़ा ही उस नाइस। ये मतलब मैं देखती हूँ कि तेजन वो लास्ट वाला इतना जब हेड लेफ्ट है, he always does that low hit and finishes it. या ऑब्वियसली एक्चुअली होता क्या है कि कई बार मैक्सिमम टाइम लोग जो है वो लो को ब्लॉक नहीं करते हैं, इसीलिए मैक्सिमम टाइम जब वो लो पर जाते हैं, क्योंकि लो ब्लॉक करने के चक्कर में कई बार आप जो है वो हाई में मूव खा जाते हैं, आप लॉन्चर जो है वो हिट हो जाते हैं, इसीलिए लो पर वहाँ पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। एंड उसका पूरा फायदा भी उठाया, बढ़िया वापसी होती हुई यहाँ पर 2 स्ट्रेट राउंड निकाले, लेकिन अच्छा काउंटर वहाँ पर बॉल मिलेगी, लेकिन चूंकि ब्लेंडर नहीं मिलेगा उनको, बॉल स्प्लैट नहीं मिलेगा वहाँ पर, तो बॉल एंडर की कॉम्बो हमें देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अच्छी खासी लाइफ लीड बढ़िया बैक 1+2 का कॉम्बो वहाँ पर आता हुआ, अच्छा काउंटर निकाला। एंड अब इस बार यहाँ पर अगर पूरी स्ट्रिंग कंटिन्यू करते तो मे भी फायदा हो सकता था, 2 लो मारने के बाद हेल्थ के लिए, लेकिन बढ़िया ब्लॉक इंस्टेंटली पनिश आता हुआ वहाँ पर। देखना पड़ेगा इस बार इतनी हेल्थ में क्या राउंड निकलेगा, लेकिन नहीं, अच्छी हेल्थ, अच्छा राउंड, और इसी के साथ ये गेम आपका बराबरी पर आ चुका है। अभी तो लगता है the person with the first blood, with the first proper combo might take the set away. Tejan, he's not looking good, but that was a nice side step, and he's gonna carry this to the wall, but doesn't manage to go for a combo. Things are again back to where they were. Tejan still in the disadvantage. That's a nice low parry into that forward 3. But no combo lands. Again a side sweep punishes that and into the wall. Will Tejan get this? Doesn't let Lionheart get up, and there we have that KO. आपको क्या कहना है ये लास्ट प्ले के बारे में विशाल? मैं यही कहूँगा मुद्रा, देखिए मैं यही कह रहा हूँ, उनके पास ऐसे टूल अवेलेबल है, उनको फर्क नहीं पड़ता है कि जैसे आपने एक क्वेश्चन अराइज किया था कि अब तेजन भाई क्या करेंगे, लाइक लीरोय जो वो उन पर डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है, तो मैं यही कह रहा था कि उनके पास अभी आस्का है, अभी सिर्फ उन्होंने नीना ही उतारी थी, और देखिए आस्का जैसे ही आई पहला राउंड उन्होंने आस्का से जो वो कितनी आसानी से तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ निकाल जरूर लिया है। एक चीज यहाँ पर अगर आपने नोटिस की हो तो बैक डैश एंड विफ, उस बैक डैश एंड विप से ही उन्होंने तीनों राउंड में जो है वो लीड जनरेट की है। लाइक हाफ हेल्थ पर आए, उसके बाद देखा हेल्थ कम बची हुई है, तो फिर उन्होंने बैक डैश और विप पर ज्यादा ध्यान दिया। अगर वो ज्यादा अग्रेसिव होते, ज्यादा आगे की तरफ जाते, तो डेफिनेटली लीरो कुछ ना कुछ उनसे वहां पर जो है वो डैमेज गेन कर सकते थे। एकदम, मतलब लीरॉय के साथ तो वही है ना, लाइक यू हैव टू बी इन अ वेरी, मतलब स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट लीरॉय। यू कांट बी टू क्लोज टू हिम एंड यू कांट बी टू अवे फ्रॉम हिम आल्सो। एंड आई फील लाइक Tejan, he is a man who really does his homework, and that's why he gets the advantage in this situation. So now it's down to 2-2. So who do you think is going to go forward? आपका होप किस में है? आई मीन ऐसा कहना ऐसे ठीक नहीं होगा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो ऐसा लगेगा कि हम बायस्ड हो रहे हैं। हम बायस्ड नहीं है, हम चाहते हैं कि दोनों में से जो बेस्ट हो वो ही आगे जाए, और उसका कंपटीशन जो है वो आरकूल के साथ होने वाला है। तो आरकूल तो फिलहाल बैठकर दोनों का मैचअप देख रहे होंगे कि क्या क्या जो है यूज किया जा रहा है। उसका रीजन एक और मैं बता देता हूँ मुद्रा, कि सपोज डेट अगर लायनहार्ट जाते हैं तो लीरॉय का मिरर मैच देखने को मिलेगा, एंड सपोज डेट अगर यहाँ पर तेजन भाई जाते हैं तो फिर से तेजन भाई को लीरॉय को ही फेस करना पड़ेगा। आई मीन एक बाधा पार करने के बाद दोबारा से वही सेम एक स्पीड ब्रेकर उनको देखने को मिलेगा। Yeah, one thing that you said, matlab last year KO Fight Night में Tejan, he was, he didn't have too much of a hard competition. ये लोग था, सनी था, सनी बहुत अच्छा खेला last KO Fight Night में, इतना इस बार उतना स्ट्रांग नहीं था। लायन हार्ट था, लवनीत भी था, सो तेजन उस बार बहुत स्ट्रांग था, लेकिन इस बार इतना सारा न्यू ब्लड, रोहित, जैन, आरकूल, कितना शानदार परफॉर्मेंस ये लोग दिया। For he's back again to facing Lionheart, or I feel like he is also enjoying this tournament because finally he is also sweating, so that is something that we also are enjoying as well, like such new talents coming in, and we're seeing different names in the final instead of the same old. Like Loveneet is out of this tournament, top 4 में भी नहीं वो, तो उसके बारे में what do you think? Like उस मैच में तो आप दिखा था ना?
वो एक मुद्रा मैं यही कहूंगा कि केओ फाइट नाइट सीजन 5 का वो क्लाइमेक्स था जब लवनीत भाई जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। फिलहाल उसके बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे। गेम हमारा स्टार्ट हो चुका है गाइस। BO5 की सीरीज में ये इनका आखिरी गेम है। जो भी जीतेगा वो सीधे जाएगा हमारे ग्रैंड फाइनल में और फाइट करेगा आरकूल के अगेंस्ट, लेकिन उसके लिए पहले जीतना पड़ेगा। बढ़िया कैन के गाली वहां पर अच्छा एक कॉम्बो मिलता हुआ, वॉल भी है, वॉल स्प्लैट इंस्टेंटली फॉरवर्ड के साथ टो क्रशर आता हुआ, लेकिन अच्छा ब्लॉक इंस्टेंटली यहां पर वाइल्ड राइजिंग के साथ कॉम्बो पिक कर लिया यहां पर लायनहार्ट ने। कोई मौका वो भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। वॉल स्प्लैट नहीं मिलेगा इस बार। कॉम्बो एंटर अच्छा था, लेकिन यहाँ पर ओ रेज ड्राइव का यूटिलाइजेशन, लेकिन बढ़िया साइड स्टेप आती हुई तेजन भाई की तरफ से। पहला राउंड यहाँ पर फिनाले का निकालते हुए। That was such a good sidestep there. Tejan keeping up the pressure against Lionhart. But then he gets that orbital and this is gonna be another full combo. Will it reach to the wall? It hits and he gets it but does not go for a wall splash. Tejan trying to sidestep out of this, but both players still don't know. The Lionhart has the advantage against the health bar. Tejan needs to pull out something up from his sleeve and he gets that cartwheel launcher. It's gonna hit the wall. Oh no, but it doesn't connect. Now Lionhart has the rage drive. Maybe this is rage properly. Go, but then gets punished. Now it's मतलब Tejan he got that read so well. वो इतना अच्छा से read पढ़ता है और counter करता है उन मित्रों को. मतलब you know that is why he perseveres in this. या ऑब्वियसली एक बढ़िया यहाँ पर पिकअप जरूर मिला था इस राउंड के लिए लायनहार्ट को, लेकिन दोनों बार सैडली उनको कॉम्बो नहीं मिली। बढ़िया ऑर्बिटल कनेक्ट हुए थे लेकिन कॉम्बो नहीं मिले, लेकिन फाइनली यहाँ पर लॉन्चर आता हुआ। एंड जैसा कि मैं कह रहा हूँ एक स्पेसिंग बना के रख रहे हैं यहाँ पर तेजन भाई। बढ़िया साइड स्टेप और विस का गेम देखने को मिल रहा है। एंड ये 3 स्टेट राउंड होने वाले हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि तेजन भाई हमारे जो है वो ग्रैंड फाइनलिस्ट। एंड लुक एट दैट की चार्ज रेस्पेक्ट। अच्छा गेम प्ले। Varun ko I was saying, you know, in the last round, I feel like Tejan was playing mind games with us. You know, he didn't want to show his you know that he is also very prepared. That's why before this in qualifiers he was playing it safe, and now he's like, I am the boss. You know, I still have it. And we're also gonna have Dan now, our analyst, come back to talk about this wonderful match that we just witnessed. Dan, what do you have to say about that? अमेजिंग रिमार्केबल गेम भैया। गेम 5 तक हम लोग को लेकर के गए तेजन और इधर लायनहार्ट दोनों। आई मीन बढ़िया बढ़िया स्टार्ट था तेजान का। नीना का पिक मुझे भी समझ में नहीं आया एट सम पॉइंट, बट उनको लग रहा था कॉन्फिडेंस, और पहले गेम में जो उन्होंने निकाला बहुत क्लीनली निकाला था। बट इनफैक्ट उसके बाद लायनहार्ट जो एप्ट किए नेक्स्ट 2 गेम्स में, फिर उन्होंने फोर्स किया तेजान को अपने आसुका निकालने के लिए, और फिर आसुका के साथ जो रिमार्केबल स्पेसिंग दिखाया तेजान ने और पनिशिंग एबिलिटी, बहुत बहुत क्लीनली उन्होंने निकाला वापस। 4th गेम में थोड़े हिचक गए थे, लग रहा था जैसे लायनहार्ट को समझ में आया है थोड़ा उनका गेम प्लान, बट फिर भी अपॉर्चुनिटी का वो कभी फायदा हम हमेशा फायदा उठाते हैं तेजान। सो वेरी वेरी वेल डन एंड ही इज ऑन टू द फाइनल्स। मजा आएगा देखने का वो मैच भी। डेफिनेटली मजा आने वाला है। आई एम रियली सॉरी मुद्रा मैंने आपकी बात को यहाँ पर नहीं, काट नहीं, दिया। नहीं, एक्चुअली कोई बात मैं नहीं। इतना एक्साइटेड हो गया यहाँ पर। ओके मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया यहाँ पर डैन की बात से। लाइक इन्होंने जो एनालाइज दिया वो बहुत प्यारा था। लाइक मुझे भी पहले नीना का पिक समझ में नहीं आया था, लेकिन नीना से उन्होंने जब एक राउंड एक गेम निकाला तो मुझे लगा ओके आई थिंक ये अच्छा पिक है, लेकिन उसके बाद जो रीड किया लायनहार्ट ने वो काफी बेहतरीन था। So now we can only wait for our grand finals. But before that, we're going to go into a short break. Catch you all again and let's hype it up. Rcool versus Tejan. See you guys in some time. Well, I do apologize, Mudra, but I guess this is going to be your break, mate. It is certainly going to be your break, but not ours, though. But nevertheless, what a game, dude. What an incredible game. I mean, that is what you're talking about. Yes. When you talk about a lower bracket match, I mean, before the game started, Phoenix, हम दोनों यही discuss कर रहे थे यहाँ पे बैठ के कि this better go all the way into the 5 games. Yep. And it did. That's the breathtaking moments are in there, and you know what, Tejan performs so well in. In the first, I thought that Nina is a good pick, as just Devraj and the Danish as well as Vishal just mentioned that Nina is a good pick. But in the second game, Lionhart just proved, bro, Leroy is far better than Nina. Well. I mean, it was GG's indeed coming in from both of these lads because they played a wonderful game. Wonderful to and fro game coming in back to back again and again. And that is what you want to see when you're talking about a final. That
that is exactly what you're here to witness. And with that, of course, it is Tejan taking the glorious step towards the final game. And with that, of course, let's quickly have a look at the brackets as well and find out what the story has been thus far. Because, of course, this journey started earlier during the day where we saw Rcool step into the limelight, and he has, of course, qualified himself to be into the grand final match, but Lionhart went against him, was not able to compete, thus was shifted down to the lower finals. But we had Rohit and Tejan going against Tejan. Rohit going against Tejan as well. Yeah. That is what gave Lionhart his component, or rather his opponent. That is where Tejan came from. And now, between Lionhart and Tejan, well, Tejan has taken the glorious, wonderful victory. Now he's going to face the Rcool. Yep. जिन्होंने एक वाला सरप्राइज करा था different character लेके. Exactly. You know, I want to see that again. Wow. I really want to see that again. If you're talking about the prediction, I'll go with Tejan one more time. Regarding the final. Yeah. Seriously. regarding the finals. Yeah. Well. Boy, oh boy. All right. Well, that is something. I mean, I've got nothing against you picking Tejan, but I will still want to expect a good match. He's going to we give should him go a all the way good into the competition. 5, right? Oh. We ought to go into the 5, use all the rounds, and that is what I'm expecting and hoping, and rather than a 3-0. But nevertheless, right now what we're going to do is go on a very, very short little break, because after which it is going to be the show match that you have been waiting for, the third and final show match for the day, where Regaltos is stepping into the arena to go against Thug. Stick around, and we go on a short break.
Well, it's been a while जिस तरीके से हम लोग आते हैं, हम लोग जाते हैं, हम लोग आते हैं, हम लोग जाते हैं कुछ स्पेशल शो मैचेस के, बट ये है KO फाइट नाइट का, या एग्जैक्टली दैट डॉजिंग एंड पैरिंग दैट्स हैपनिंग आउट देयर, बट ये रहेगा KO फाइट नाइट का एक बहुत स्पेशल मैच। बिकॉज अगर लास्ट की बात करें, खैर वहां पर रेबल को एक्सपीरियंस, अब मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पर जो प्लेयर्स रहेंगे वो एक नई जरूरत के साथ लेकर आएंगे। सुमियो शर्मा एंड अलोंगसाइड वरुण सुपर जॉइंट ऑन वर्सी या दैट पर्सन, दैट गाय ओवर देयर, या वी वेलकम यू फॉर KO फाइट नाइट स्पेशल मैच आउट हियर। सो जॉनी, आर यू एक्साइटेड? I mean, मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमें पहले भी 2 शो मैचेस देखे और अब बारी आ चुकी है हमारे तीसरे सरप्राइज की। दिन के स्टार्टिंग में बताया था 3 सरप्राइजेस आपको देखने को मिलेंगे और अब फाइनली तीसरा सरप्राइज खोलने का वक्त आ गया। और इस बार एक बार फिर से पिछले वाले जो हमारा शो मैच था स्टोरी लाइन है कि वी हैव वन रिटर्निंग प्लेयर फ्रॉम यस्टरडे और एक कंप्लीटली फ्रेश फेस हमारे जो फाइटिंग गेम्स ऑडियंस है उनको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। लेकिन इन दोनों प्लेयर से भी जानना चाहेंगे कि इनके लिए टेकन 7 का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। इज इट गोना बी, क्या ये एक फ्रेश प्लेयर्स हैं या फिर रेबल और माम्बा की तरह सीजन वेटरन्स हैं? आई मीन हाँ, अब उनको सीजन वेटरन्स बोल सकते हैं, जैसे कैसे जैसे स्काउट और मॉडल की भाषा में वो जो सुताई हुई थी वो चीज रहेगी, लेकिन अब यही चीज आती है। आई मीन लुक एट ऑल द थिंग्स। आई मीन थक की अगर मैं बात करूं, कल देखा था हमने स्ट्रीट फाइटर के सिनेरियो के अंदर, अगर हम उन सब चीजों की बात करें, देयर वाज वन थिंग जो कि वो बोल रहे थे और वो ये थी कि फाइटिंग गेम्स उनको पसंद, उन्होंने खेली भी है, लेकिन हाँ एक नया एक्सपीरियंस जरूर निकल कर आ रहा था। सो उस स्ट्रीट फाइटर से टेकन के अंदर घुसने में आई वुड से हाँ वही चीज रहेगी, कुछ डिफरेंसेस रहेंगे, बट लेट्स सी हाउ ही एंजॉयज इट। आई मीन वही तो पूछना बाकी रहेगा हमारे पास मैच के बाद। और कुछ ही देर में हमारे जो गेस्ट है वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और जैसा आई मीन हमने पिछले मैच में भी देखा था, स्काउट ने भी बताया था उनको बहुत ज्यादा मजा आया टेकन में। प्रैक्टिस करेंगे, 1 हफ्ते बाद आई थिंक रिवेंज हमको देखने को मिलेगा स्काउट वर्सेस रेबल के बीच में। बट अभी के लिए हमारे जो 2 नए दर्शक है वो हमारे साथ, हमारे गेस्ट, हमारे सेलिब्रिटी मेहमान जो है वो हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। और फिर उनके साथ भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, रेस दौड़ लगेगी उन दोनों के बीच में, फर्स्ट टू 10 के स्टेक्स रहेंगे और हम देखेंगे कौन कितना जल्दी अडेप्ट कर सकता है सिचुएशंस पर। आई मीन यही चीज आती है, बिकॉज अभी तक जो भी मैचेस हुए वन साइडेड काइंड ऑफ गए, 10-1 10-1, दोनों बार 10-1 की स्कोर लाइन थी। एक बार माम्बा के हिस्से में वो 10 गया था, मॉटल के हिस्से में 1 आया, दूसरी बार स्काउट के हिस्से में 1 गया था और रेबल के हिस्से में 10 आया था। सो आर यू थिंकिंग अबाउट इट कि सेम ही कुछ रहेगा? क्योंकि अब यहाँ पर ऑब्वियसली फाइटिंग गेम्स पता होना और उन पे हाथ उठाना, क्योंकि इफ यू रिमेंबर जब सेगमेंट एंड हुआ था, हम रेबल से बात कर रहे हैं, बोला कि 6 महीने बाद कंसोल को हाथ भी लगाया था, इफ एनीथिंग। बट वही चीज आती है, 6 महीने का डिफरेंस और एकदम नया उठाया कंसोल का डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। डेफिनेटली आई मीन बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है क्योंकि 6 महीने बाद भी, चाहे आप 1 साल बाद गेम खेले। आई मीन जब हम लोगों ने खेलना दोबारा से स्टार्ट किया, मैंने तो बहुत सालों बाद खेली थी गेम, क्योंकि वो जैसा बताया टेकन टैग टूर्नामेंट 1 जो आई थी, टैग टूर्नामेंट 2 भी नहीं, टैग टूर्नामेंट 1 जो आई थी वो मैंने खेली थी लास्ट। और उसके बाद सीधा टेकन 7 जब हम लोगों ने कुछ ही महीनों पहले लाइक PS4 आया हमारे पास और हमने लाइक अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, जर्नी स्टार्ट करी, तो तब बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया था। बट फिर भी वो आपके मसल मेमोरी, आई मीन आपको चीजें याद रहती है कि ओ ऐसा इनपुट था उसमें, तो यहाँ पे मेरे को बस मतलब अगर मेरे को सी बनाना है, जो मतलब एनालॉग स्टिक का मूवमेंट रहता है, तो यहाँ पे भी मेरे पास एनालॉग स्टिक्स अवेलेबल है। मेरे पंचेस के बटन मेरे हाथों के नीचे रहने की जगह मेरे अब हाथों के अंदर ही आ चुके हैं कंट्रोलर पे। तो वो सारी चीजें समझने में, आई मीन बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग है। रेबल ने भी यही चीज बोली, बेसिक्स अगर आप समझ जाते हैं तो आप उसके बेसिस पे कुछ भी खेल सकते हैं। बट यहाँ से आई मीन बिगनर स्टेज से ट्रांजिशन करना उस लेवल पे जहाँ पे लायनहार्ट खेल रहे हैं, जहाँ पे आरकूल खेल रहे हैं, तेजन खेलते हैं, लवनीत खेलते हैं, ये सारे प्लेयर्स इस लेवल पे खेल रहे होते हैं, बहुत बहुत जमीन आसमान का फर्क आ जाता है इनमें और हमारे में। बट वही है, हमारी स्टार्ट तो हो चुकी है, हम लोग प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं और मैं तो बहुत ज्यादा इरेगुलर है अपनी प्रैक्टिस के साथ। अब हम प्रैक्टिस करते हैं, बट वही है जैसे लास्ट से मैंने बताया था, यहाँ पर KO फाइट नाइट होती है, हमारे घर में KO नाइट फाइट होती है, जो हम अपने हिसाब से करते होते हैं, एंड वी जस्ट गो विद अ जॉली मूड कि कभी कभी हमारे रूल्स भी बहुत अजीब होते हैं। Losers stay on. विनर टेक्स कंट्रोलर्स और समटाइम्स वी से लूजर्स टेक्स कंट्रोल, तो उसके लिए हर दिन कोई लूज ही करता रहता है। और मैं देयर वाज अ डे आई वाज थिंकिंग कि मैं बहुत अच्छा खेल रहा हूं और पता चला रूल है लूजर्स टेक कंट्रोलर्स। और सब लोग मैचेस थ्रो कर रहे थे। ओशन वाज लाइक वाह आज तो कुछ अलग ही फॉर्म आ गया। ये कैरेक्टर कौन सा डेविल जन, मेरे को याद है आप खेल रहे थे तब। बट आई ऑलवेज गो फॉर डेविल जन राइट फ्रॉम PSP आल्सो। जब PSP के साथ मैं जब बैठ करके खेल रहा होता हूं तो PSP पे भी, बिकॉज़ वहां पर ऑब्वियसली बेस्ट चीज हो जाती है कि वहां पर ज्यादा ऐसे कंट्रोल कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, you just have to carry it around, and can just go with the games and whatnot. But going from all those, PSP तो सेम ही रहता है, PS4 की भी अगर हम बात करें, cause controller वही चीज आ जाती है, but
strategies, situations और इन players का mindset. I mean, हमारे कुछ जो एक मित्र हैं, हमारे नए मित्र जो बने हैं, विशाल एक नोमैडिक लोनर, उनसे बात चल रही थी। उन्होंने भी बताया कि कुछ बेसिक्स रहते हैं गेम के जो आप अगर समझ जाते हैं। टाइमिंग एक चीज होती है, विफ्स एक चीज होते हैं, लॉन्चर्स एक चीज होती है, हिट कॉम्बोज एक चीज, जगल्स होते हैं। ये सारी चीजें अगर आप समझने लग जाते हैं तो वहां से आपकी जो है गेम इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन बिल्कुल बेयर डाउन टू द बेसिक्स, जैसा आई मीन स्काउट भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से बटन से कौन सा पंच जाता है, कौन से बटन से कौन सी किक जाती है। L1 जो असिस्टेड कॉम्बोज है आपके, वो क्या काम करते हैं, आपका रेज कैसे लगता है, रेज ड्राइव अलग होती है, रेज आर्ट अलग होती है, वो डिफरेंस आपको ढूंढना होता है। रेज ड्राइव थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, रेज आर्ट एक बटन दबाया, देयर इट इज। I mean, रेज आर्ट एक बटन से हो जाती है, बट हाँ अभी के हिसाब से ऑब्वियसली वो R1 प्रेसिंग R1 इज easy as compared to creating the whole matrix of creating a rage drive if anything. प्लस रेज ड्राइव के साथ साथ बात ये थी, हाँ डैमेज अच्छा मिलेगा, सब कुछ अच्छा मिलेगा, बट देन वही चीज इन सब में वो आ जाता है कि अगर कहीं किसी तरीके से जैसे रेज आर्ट में भी लास्ट गेम में हमने देखा डॉजेस बहुत अच्छे हो रहे थे, और उस डॉज को इफ यू रिमेंबर देयर वर 2 रेज आर्ट्स जो एक बार पहले स्काउट ने कोशिश करा, लेकिन वो रेबल ने ब्लॉक किया, और जब उसी का जो नेगेटिव फ्रेम की एनिमेशन थी उसी के बीच में रेबल ने अपनी रेज आर्ट मारी थी। सो हाँ, वो छोटी मोटी चीजें देखनी पड़ जाती हैं। दैट्स वेयर आई वुड से टाइम स्टैम्प्स आर द क्रूशियल की इफ एनीथिंग। वेल वही टाइमिंग काफी ज्यादा क्रूशियल रहती है। आपको अपने अटैक्स टाइम करने होते हैं। आप विफ्स जैसा हम बात कर रहे हैं, तो फिर से नए व्यूअर्स के लिए जिनके लिए पहला एक्सपीरियंस रहेगा फाइटिंग गेम्स का, एक विफ होता है जब आपका अटैक मिस हो जाता है। वो जो एक मिस का पॉइंट होता है, उस पे आपको कैपिटलाइज करना होता है, वहां से आप पनिश करते हैं अपने ओपोनेंट्स को। फिर एक चीज होती है जिसे फुटसीज कहा जाता है गेम के अंदर। व्हाट फुटसीज बेसिकली इज कि आप अपने सामने ओपोनेंट के अटैक रेंज के अंदर आएंगे और फिर पीछे से जल्दी बैकस्टेप कर जाएंगे। तो वो एक टेक्निक होती है, वो माइंड गेम्स खेले जाते हैं कि आप उसको बेट करने की कोशिश करते हैं कि आप मेरे को जैब करिए, आप एक पंच थ्रो करिए तो आपका अटैक मिस होगा और फिर मैं उसके बाद आपको पनिश करूंगा उस चीज के लिए। वैसे वैसे करके तो छोटी छोटी चीजें होती है जो मतलब डिटेल्स में आपको पता चलती है गेम के आगे जाके, बट वो चीजें हाई लेवल ऑफ प्ले बहुत पड़ जाती है। अभी के लिए हमारे जो 2 कंटेंडर्स आ रहे हैं, थक से में मतलब कल उन्होंने जो स्ट्रीट फाइटर खेली थी उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस, वो ट्रांजिशन आई मीन कर सकते हैं, क्योंकि वो बटन इनपुट्स देना और एनालॉग स्टिक का यूज करना बटन के साथ, वो चीज तो एक है जो दोनों गेम्स के बीच में सेफ है। बाकी डिफरेंसेस तो बहुत सारे हैं। या वही, बट डिफरेंसेस पे आ जाता है बिकॉज कल स्काउट ने बहुत जल्दी गेम पिकअप करी थी, नो डाउट आज भी बहुत जल्दी करी, बट ही रियलाइज कि वहां पर ऑब्वियसली आप पंचेस के लिए ही वाज सेइंग वन थिंग, ट्रायंगल्स में वो पता है क्या होगा और उससे मेरे को पता है क्या होगा, बट यहाँ पर जैसे असिस्ट L1 के साथ असिस्टेड मूव्स भी और एक्स्ट्रा आ रहे थे। सो वो जो कॉम्बोज काइंड ऑफ सिनेरियो बन जाता ना, कल तो हमने देखा जब ऑब्वियसली वो चुनली के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे थे एंड वो जो मल्टीपल किक्स एंड वो सब चीजें थी, बट यहाँ पर आ जाता है कि यहाँ पर वो एडी खेल रहे हैं। हाँ, किकिंग सिचुएशन एडी के पास भी होती है, बट ऑब्वियसली साथ में और भी कॉम्बिनेशंस और भी मूव्स बनते रहते हैं, तो वो सब चीजें थोड़ी सी चेंज कर देती हैं। अब यहाँ पर यही चीज आएगी रेगल्टॉस और थक के बीच में, अगर मैं बोलूं कि वो उस चीज पे उसको ग्रास्प कैसे करते हैं। 1 राउंड लगेगा, 2 राउंड लगेगा, 3 राउंड लगेगा, फिर ऐसे लगेगा पहला राउंड थक जीतने में भी दूसरा रेगल्टॉस जीतेगा, पहला रेगल्टॉस दूसरा थक, और ऐसे तरीके से एक कांटे की टक्कर चल रही है क्या, वो सब लर्निंग पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि गेम्स सेम है, फाइटिंग जॉनर है, बट सेम होते हुए बहुत इट्स लाइक अ लॉट डिफरेंसेस। आई मीन वही चीज है ना कि आप अडेप्ट कैसे करते हैं, कितनी जल्दी करते हैं। आई मीन सबसे बड़ा डिफरेंस बात कर लेते हैं। कल जो हमने गेम खेली थी एक 2D गेम थी। आई मीन आपको कैरेक्टर मॉडल 3D से, पर वो 2 डायमेंशन में चलती है। आप आगे जा सकते हैं, आप पीछे जा सकते हैं, आप ऊपर जाते हैं। टेकन साइड स्टेपिंग भी होती है, टेकन 3D में चलती है, वो एक बहुत मेजर डिफरेंस होता है। अब वहां से यहाँ पे ट्रांजिशन करना, आई मीन अब कमांड्स में इनपुट गिविंग की बात कर रहा था कि आप गेम में इनपुट्स कैसे डालते हैं, वो मेथड सेम है कि आप अपने एनालॉग स्टिक या डी पैड जिसके साथ भी आप खेल, डायरेक्शन रहता है, उसके बाद एक आपका अटैक का इनपुट रहता है जिससे कि आपके कॉम्बोज वगैरह एग्जीक्यूट होता है, वो चीज सेम है, बट कैरेक्टर्स थोड़े से अलग हो जाते हैं। फिर जैसे अगर बात करें मेजर डिफरेंसेस की, अटैक तो से अटैक वर्ड सेम है बट अटैक के मेथड्स अलग है। स्ट्रीट फाइटर में पंचेस क्या होते हैं आपके, लाइट पंच, मीडियम पंच, हैवी पंच होता है। फिर किक्स भी आपकी लाइट किक, मीडियम किक, हैवी किक रहती है। नॉट द सेम विद टेकन। टेकन में यू कंट्रोल द लिम्स ऑफ द फाइटर यू आर प्लेइंग। एक से राइट पंच, लेफ्ट पंच, राइट किक, लेफ्ट किक, ये सारे कंट्रोल्स होते हैं। तो ये चीजें गेम्स को काफी ज्यादा अलग बना देती है, और आई थिंक काफी ज्यादा एक्साइटिंग रहेगा दोनों के दोनों हमारे जो सेलिब्रिटीज, हमारे जो एथलीट्स आने वाले हैं, उनको देखना कि कैसे कितना जल्दी। कल भी ये बात थक नहीं करी थी और स्काउट ने भी करी थी दोनों साथ में कि इट ऑल कम्स डाउन टू कौन कितना जल्दी अडैप्ट कर सकता है, कौन कितना जल्दी चीजें समझ सकता है।
So Johnny, I have a question for you, and मैं question रखूंगा Street Fighter और Tekken दोनों को मिला करके. I mean, obviously different games हैं, but name one character for you which you think is the best in both the games combined, and one character that you think should actually get a buff in both the games combined. बोथ द गेम्स कंबाइंड मतलब क्या? कूमा एक ऐसा है जो मतलब दोनों आप दोनों चूज कर सकते हो कम्युनिटीज कि आप मिला वहां से के हेट चुनली भी करती चूज है. कर सकते हो. आप ये बोल सकते हो कि चुनली अच्छे है वहां पे. ऑब्वियसली आई नो कि डिफरेंट है, बट मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको सारी चॉइसेस ऐसे मिले तो कौन सा ऐसा कैरेक्टर रहेगा, कौन सी गेम रहेगी जिसके ऊपर आप एक तरीके से बोलोगे कि हाँ इसके ऊपर कहीं ना कुछ टैक्टिकल एडवांटेजेस मिलते हैं अगर हम फाइटिंग जॉनरा में जिस बात करें. आई मीन स्ट्रीट फाइटर के लिए आई थिंक लॉरा एक टाइम पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होती थी. हमारे जो एक कॉमन फ्रेंड है B3, यू शाउट आउट टू हिम एज वेल, जिन उन्होंने मेरे को बेसिक सिखाए थे स्ट्रीट फाइटर के, वो का खेलना पसंद करते थे. बट उसके बाद शी गॉट नर्व्ड और फिर कैरेक्टर स्विच करना पड़ा. बट मैंने भी बीच में खेलना स्टार्ट किया था उसी कैरेक्टर के साथ, जस्ट बिकॉज एक कॉम्बो रहता है उसका वेरन शी डाइव्स एक ऐसा अप स्विंग मार के और वो गैप भी क्लोज हो जाता है. तो आई फाउंड यूजिंग दैट रियली फन. अब उसका कंपेटिटिव सीन में काफी इम्पैक्ट पड़ा था जो नर्व की मैं बात कर रहा हूँ. उसके बाद थोड़ा सा हमें कम देखने को मिला था. लव टू सी दैट अगेन. और टेकन की जहां तक बात कर रहे हैं, टेकन आई थिंक जैसा मैंने कहा, कुमा तो दोनों ही सिनेरियोस के प्लेयर्स काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं और दोनों ही कम्युनिटीज मिल के हेट करती है. वैसे आदित्य से भी हमारी बात हुई थी जिस दिन मैं प्लेऑफ्स कास्ट कर रहा था. नहीं, आदित्य वाज लाइक स्ट्रीट फाइटर वालों के पास पहला हक बनता है कुमा को हेट करने का, क्योंकि यहाँ से शुरू हुआ था वो. व्हिच मेक्स सेंस राइट. और बफ का तो नहीं पता. बफ आई वुडंट से. I mean you can say कि बॉब मेरा फेवरेट है, मैं चाहूंगा उसको और बफ मिले ताकि एक शॉट एंड इट you can go for something like that. मैं बोलना तो चाहूंगा, बट मेरे को फील होता है कि जैसे हमने पहले भी देखा था, आई मीन हमें आज कंपेटिटिव में ही देख लिया बॉब का परफॉर्मेंस आते हुए, और काफी कोशिश काफी अच्छी की थी. जो हमारे प्लेयर थे लायन हार्ट, उन्होंने काफी बेहतरीन तरीके से खेला. और उनके प्ले आई मीन मैं घर जाके डेफिनेटली वो चीजें देखने वाला हूँ, स्टडी करने वाला हूँ और वो चीजें ट्राई भी करने वाला हूँ, क्योंकि मैं जिस लेवल पे बॉब खेलता हूँ वो बहुत बेकार है. लायन हार्ट ने जिस लेवल पे खेला वो गजब का लेवल था, और मतलब बहुत चीजें सीखने को मिलेंगे उससे. तो पॉसिबिलिटी तो रहती है कि आपको वो हाई लेवल प्लेस देखने को मिल जाए. और कैरेक्टर्स में आई मीन सब कैरेक्टर्स का एक नीश पिक होता है कि जैसे लोग बोलते थे कि पांडा अब लोग कम खेलते हैं क्योंकि इट्स अ बैड कैरेक्टर. रैंक चू आए, उन्होंने वो चीज बदल के रख दी. बट हम लोग जिस समय का इंतजार कर रहे थे वापस आ चुके हैं. थग और रेगल्टॉस, आपका स्वागत है KO फाइट नाइट सीजन 5 में. हेलो, थैंक यू. आज रेगा को पिटाई होने वाला है, बहुत गलत वाला. ये तो मैंने स्टोरी पे भी देखा. फाइट होगा अभी. ये तो मैंने स्टोरी पे भी देखा. लाइक थक ने लिखा था क्या रेगा की पिटाई है या मेरी सुताई है. बट आपको क्या लगता है बाय द एंड ऑफ द गेम्स क्या चीज होने वाली है? इसको अगर रेबेल उबेल सिखा दिया है तो हमको पता नहीं है. सब चीप काम अगर ये बैठ के किया है गेमिंग हाउस में तो हमको नहीं पता. कुछ भी नहीं किया, पहली बार देखो हो रहा है, तो कुछ मालूम भी नहीं है कैसे करना है. ठीक है, तब मजा आएगा. अच्छा, एक चीज पूछना चाहूंगा, एक्सपीरियंस आप लोगों का कैसा है टेकन के साथ? ये सबसे पहला सवाल रहेगा. बहुत पहले वाला खेला रहेगा. तू खेले? हाँ सेम, बहुत पहले वाला. I mean ये चीज ना लास्ट टाइम रेबेल ने बोली थी बहुत पहले वाला खेला, और फिर वो बहुत अच्छा खेला था. तो ये रेबल का बहुत पहले से का मतलब था 6 महीना पहले. मामा आई थिंक मामा के लेवल पे. यार स्टार्ट दब करने क्या करना है हमें? कौन सा बटन प्रेस करना है? उसका गाइडेंस आई गेस प्रोडक्शन विल बी टेलिंग यू विद ऑल दोस थिंग्स. जे आई थिंक जे रहेगा. जे दबा. ये चैट में चला गया. बहुत हार्ड. हमारे दोनों एथलीट्स यहाँ पे पीसी पे खेलने वाले, इसलिए मामा और स्काउट के बीच में जो मैच देखा था हमने, ये वो था. आउट. सुनो, रैंडम खेलते रहेगा. ओके रैंडम करेगा. लिली ठीक है, अब लिली कमिंग अप. ओह माय गॉड, लिली इज व्हाट वी आई हो गया बे. क्या यार, सिंकिंग हो गया. आई मीन शायद लिली में विटनेस करनी थी, बट ठीक है. का आइडिया मेरे को पसंद है रैंडम्स का. मेरा भी रैंडम. कुछ थक के मैं फिर एक चीज रहती है, मुझे तो पता नहीं मैं क्या करूंगा, मेरे ओपोनेंट को भी नहीं पता वो क्या करेगा. क्या चीज? मैं कह रहा हूं आप रैंडम ही बोलते क्योंकि आप यू आर लाइक मुझे तो पता नहीं मैं क्या, ओपोनेंट को भी नहीं पता वो क्या करेगा. ओपोनेंट को भी नहीं पता होना चाहिए. हां ये फिर तो एकदम सही है. ओके चलिए, अभी थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा ये कौन से कैरेक्टर्स यहाँ पिक करे गए हैं. सर आपके कैरेक्टर में तलवार है क्या? पता ही नहीं, अभी चेक होगा उसके पास क्या है. है. मेरा आया है. कौन है? एक लड़का है व्हाइट कलर का परी. हमारा हाँ ले तू ले.
चलो तुम प्लीज जाओ छोड़ो अभी क्या रेगा बोले हम ये तो एक ऐसा टीम अप तो नहीं सोचा था हमने, बट ठीक है। रेगा मेरे ख्याल से मैच लाइक कैरेक्टर स्विच जल्दी करना चाहते हैं लिली पे। रेगा एक लिली चाहिए मेरे को। आगे एंट्री देख रहे हो, देखते हैं कि क्या मैच में होता है। को पहला मैच कौन जीता सबसे इंपॉर्टेंट वो रहेगा। रूल्स बताते हैं अरे मीना कंट्रोल क्या है, कंट्रोल क्या है? लो ओके 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 नीना वर्सेस काजुया। कंट्रोल क्या पूछ रहा था कोई 2 मिनट पहले? मैं तो कंट्रोल ही बेटा कंट्रोल है लो, प्रैक्टिस करो ग्राइंड ग्राइंड अलग है। लात मारो टक हील चुरी है। हेलो हेलो भाई टक कंट्रोल बताओ पहले, एक साइड आगे, एक साइड कंट्रोल JKUIOP ये सब दबाओ। तुम्हारा पूरा स्पैम चालू है। देखो मैं बताता हूँ, सुनो रेगल्टोस स्पेस से स्पेस दबा के आप ग्रैब करते हो, U और O से आप रेज 8 चलती है, तो और O इंपॉर्टेंट रहेंगे, JK से आपके किक्स हैं और रेगा K से आप क्या अभी तो कुछ नहीं आ रहा था तुमको। हेलो पुलिस रुको एक लात और खा लो। आए आई देखा देखा सब सीख के आए सब अभी पहली बार चला है, ठीक है इधर दोनों। अरे ये क्या, ये चीटिंग है, ये चीटिंग है। चलिए एक एक कट आए हो चुका है राउंड के मामले में। ग्रैब सच में चीटिंग है, जिस तरीके से बोला गया था ग्रैब यहाँ पे निकालते हुए अच्छा ग्रैब बनाया था, बट काजुया की बात ही आती है, यू नो दिस इज लाइक द फर्स्ट कैरेक्टर जो निकलता है गेम, राइट? ओ रेज अरे भाई अरे नाक दी। अरे ये तो बहुत खतरनाक भाई, ये तो बहुत खतरनाक दिया है। अबे यहाँ पे खड़ा होने दोगे 2 मिनट ताकि मैं कुछ कर लूं गेम में। अरे रेगा रेगा भाई रुको डन रेगा अरे बहुत तार एक साथ और। अबे यार ये फिर कुछ कर दिया यार। I'm just loving the way जो यहाँ पे एनर्जी निकल कर जा रही है, अगर कुछ भी बट ये रेज आर्ट यूज हो रही है बार-बार, और रेज आर्ट को यू नो वही ब्लॉक नहीं किया जा रहा है, सो ये चीज आती है। आप उससे अरे क्या मारा है? अरे तो पता नहीं आ रहा है टक्कर का मुकाबला हम बता ये रहे फिर बता दिया भाई। I mean थक कल जो स्ट्रीट फाइट खेली थी उसका थोड़ा तो फायदा हो रहा होगा आज। कुछ फायदा नहीं हो रहा यार, कहाँ से फायदा होगा? इनपुट्स डालने में तो कुछ आइडिया रह रहा होगा। नहीं कुछ आइडिया नहीं है भाई, कंट्रोल ही अलग है। बट थक हाँ थक उस टाइम दूसरे कंट्रोलर पे खेलते थे स्ट्रीट फाइटर के टाइम पे। भाई वो कंसोल पे था भाई, कहाँ से एक है? PS कंसोल था, अगर आपको वही JKUI OP पे देखना पड़ेगा, बट O और P का अबे देखा ये देखो सो ये रेज आर्ट होता है था। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इट, ये रेज आर्ट रहता है जो एक्चुअली सही पिक्सेल्स पे लग जाए तो इट कैन एक्चुअली क्रिएट अ लॉट ऑफ डैमेज। 50% हेल्थ भी लेकर जा सकता है कुछ कैरेक्टर्स के लिए। वेल ये जो अब हमारे सामने मुकाबला है रेगल्टोस वर्सेस थक का, ये जैसे रेगा पूरा सीख के आया, हम बता रहे हैं इसको। पहली बार चल रहा है, कुछ भी दबा रहा हूं, मान ही नहीं सकता हम। भाई तुमने जो टांग फंसाया मेरे मुंह में, मजा आ गया भाई। अच्छा पहला कैसा एक्सपीरियंस रहा टेकन 7 का? बढ़िया मजा आ गया बढ़िया भाई। इसके मुंह स्ट्रीट फाइटर से बेटर है एक्चुअली बिकॉज़ इसमें एनिमेशन, इसमें फ्रेम्स का और ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है अगर हम बात करें। और वही सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट जो सेकंड लास्ट गेम था वो जीता था रेज आर्ट यूज करके। रेज आर्ट के लिए आपको सही एरिया पर, अगर आपकी एचपी रेड एरिया में, लाइक अगर आपकी एचपी रेड हो जाती है, आपका प्लेयर रेड कलर का ग्लो करने लगता है, या सो that's where it comes up। आप रेज के लिए यू और ओ इकट्ठे दबाएंगे तो आपका प्लेयर एक ऐसा अटैक मारेगा जो ओपोनेंट की हेल्थ अगर लग जाए तो 50% तक कम कर सकता है। अच्छा ठीक है, तब यू आ रहा है भी नेक्स्ट में वही आ रहा है पूरा खाली यूओ का स्पैम है। यूओ ऐसे नहीं करना है, पहले आपकी हेल्थ रेड होनी चाहिए, लाइक आपका कैरेक्टर रेड कलर पे शाइन करना चाहिए, अदरवाइज आप बहुत सारी चीजें पिटाई खानी पड़ती है, फिर पिटाई मारनी पड़ती है, नहीं तो पिटाई हो जाएगी। अच्छा मेरा दबा जे जिन्नी है शायद काजुया जे दबा वो जे काजुया और जिन दोनों भाई हैं जो एक दूसरे को हेट करते हैं। नहीं काजुया अब दबा जिन्स फादर। हाँ काजुया इज जिन्स फादर। हाँ हायाची इज द ग्रैंडफादर। या इट्स अ वेरी बैड फैमिली फ्यूड। वेल चलिए मैच नंबर 2 की तैयारी। कैरेक्टर्स फिर से एक बार रैंडमाइज होते हुए हमारे जो अब रैंडम नहीं है, अब आई थिंक ओ लिली अब ले रहा हूं रेगल्टोस। अरे आप लिली ले रहा फॉर लिली। वो हमारा फेवरेट कौन सा प्रीसेट, प्लीज प्रीसेट बता दीजिए कौन सा प्रीसेट आप लिली का यूज कर रहे हैं। कैरेक्टर कौन सा है? वो नाम भूलिए मैं बताता रुको। कोई ना देख के आप देखो पूरा स्कैम करके हियाची लिया प्रजाति का आदमी है। हाय हाची या
हम तो जिन कंजामा लिया, जिन से मारेगा। भाई ये क्या ये डेविल जिन कोई क्यों नहीं लेता? सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए वही होता है, डेविल जिन कोई क्यों नहीं यूज करता? Everyone hate it. That's my main go-to character. डेविल जिन अगर मैं कभी भी खेलता हूँ, डेविल जिन is my main go-to character. या फिर किंग, बट किंग का वही है, ग्रैपल्स पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यू नो, it just comes down to grapples and all. ये क्या लिया तू? भाई ये मेरा फेवरेट था पहले के टाइम से। पहले के टाइम से भाई, ये सब पूरा प्रैक्टिस कर, मतलब वही यहाँ पहले के टाइम से प्रैक्टिस चल रही है। सुन रहे हो? I mean, गुस्सा देख रहे हो? चलिए रेगा मैच की चेहरे तरफ पे चलते लिखा है, हैं। रेगा कॉन्फिडेंट है, रेगा के Yes, चेहरे पे लिखा Hiachi है। versus Jin. Hiachi versus Jin. ग्रैंडफादर वर्सेस ग्रैंडसन। All right. Mishima versus Mishima matchup. अरे भाई This was good. अरे इसे डिफेंस का बटन क्यों नहीं है? आपको पीछे का बटन दबाना है, आपको पीछे वाला की अगर आप दबाओगे तो वो डिफेंस करता है। अच्छा, पीछे वाला बटन दबा के डिफेंस करते हैं ना। पीछे वाला बटन दबाओगे तो वो नॉर्मल मिड अटैक को डिफेंस करेगा, नीचे वाला बटन दबाओगे तो वो लोअर अटैक को डिफेंस करेगा। दैट्स हाउ इट जस्ट कम्स अप। और अगर कुछ नहीं दबाओगे तब भी वो ब्लॉक ऑटोमेटिकली करता है। हाँ, तभी वो ऑटोमेटिक ब्लॉक करता है अगर आप कुछ नहीं दबाओगे। वन साइड हो रहा है भाई। क्या वन साइडेड हो रहा है? मार तू रहा है, बोल मुझे रहा है वन साइडेड। हो रहा है भाई। हाँ तो क्या? यहाँ पर आप रेज आर्ट यूज कर सकते हो। भाई ये चीटिंग है भाई। भाई नॉर्मल पंचेस पे खेल रहा हो यार। रेगल्टॉस अभी आपने रेज आर्ट यूज करी थी। रेगल्टॉस अभी आपने रेज आर्ट यूज करी थी, लेकिन वो आपकी वेन में गई क्योंकि आपका ओपोनेंट आपसे दूर था। अगर आप फिर से वो रेज आर्ट यूज करते URO वाली, जब आपका कैरेक्टर रेड कलर में हो गया था, तो आप जरूर लाइक ये वाला राउंड जीत सकते थे पिछले बार। ये देखो, ये देखो, राइट नाउ यू आर रेड। यस ये दिस इज द रेज आर्ट। ये पड़ेगा, ये पड़ेगा, ये पड़ेगा। दिस इज द रेज आर्ट। ये बहुत ज्यादा हेल्थ लेकर के जाता है अगर हेल्थ की बात करें। भाई सुन, मैंने कुछ नहीं किया, नॉर्मल घुसा मारा हूँ, घुसा तुझे घुसा मार के कोरे के अंदर डल के मारा हूँ भाई। मजेदार है भाई। जिन लगता है थग आपको बहुत ज्यादा पसंद आया है इस बारी। अरे मैं सुना हूँ ना नाम इसका। सही है, मुक्का घुसा अपना बेसिक जे दबा रहेगा। आपको अगर याद होगा टेकन 3 आप दोनों में से किसी एक ने खेली हो तो जिनका एक मूव होता था, पैर नीचे करके ऐसे घूम जाता था। हाँ बस था वो भाई। हाँ ये देखो, ये हम बोल रहे हैं, इसका तो बचपन जवानी अभी आया है ना, मेरा जवानी गए मेरा अगर कैरेक्टर गो-टू रहता है वो डेविल जिन इसी रीजन से रहता है। डेविल जिन इज काइंड ऑफ इवॉल्व्ड फॉर्म ऑफ जिन, और वो लेजर्स एंड ऑल बहुत अच्छे, लाइक दूर के अगर अटैक माने तो लेजर्स एंड डेविल जिन बहुत अच्छे से यूज कर लेता है। वो मेरे बचपन का ही बचपन था। प्लस डेविल जिन का रेज आर्ट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट रेज आर्ट्स मेरे ख्याल से, जो अच्छा खासा डैमेज निकालता है। डैमेज तो आई मीन सारे के सारे रेज आर्ट्स पे काफी बढ़िया आया था। अभी तो रेज यूज करना स्टार्ट कर दिया, और थग ने जैसा बताया उनकी स्ट्रैटेजी जो है बेसिक्स पे खेलने की, वो आई थिंक इनके लिए काफी सक्सेसफुल साबित हो सकती है कि बेसिक पंचेस, किक्स, कॉम्बोज, हम बात कर रहे हैं गेम कैसे सीखते हैं, आप बेसिक सीख के ही करते हैं। और यहाँ पे बटन स्मैशिंग दोनों की तरफ से चल रही है, बट थग की टाइमिंग मैं बोलूंगा थोड़ी बेटर है रेगल्टॉस आपसे। हाँ अरे वो अब मैं हार नहीं सकता ना, बात हो है। चलो जे दबाओ। By the way, this is first to 7. If we are talking about this is first to 7, जो पहले 7 राउंड जीतेगा वो एक्चुअली ये मैचेस जीत जाएगा। देखते हैं कि 7 राउंड यहाँ पर 1-1 से कौन निकालता है। अभी 1 ही चल रहा है ना? या 1 each. Okay, मैच नंबर 3, लेट्स गो। कौन से कैरेक्टर्स? हर मैच से पहले का सवाल। अभी मैं लूंगा नया, लेंगे कुछ ऐसा लेंगे जो अलग से हो, कुछ लास्ट टाइम हमने अकुमा भी देखा था, देखते अब ये पांडा वांडा फिर से अगर लेकर आ गए तो कुछ होता अलग से यानी। अब तुम्हारा वही देखो क्या ले यार, क्या पता ये कुछ कर दे। एडी। ओके, एडी से स्काउट की बहुत पिटाई हुई थी। खैर हाँ, एडी ऐसे टांगे मारता है लोगों को। एडी टांगे मारता है, और एडी से स्काउट की बहुत पिटाई हुई थी जब रिबेल, ऑब्वियसली वो तो रिबेल भी थे वहां पे, तो वो भी एक रीजन बन जाता है कि रिबेल पहले खेल चुके हैं बहुत बार। रेबल को हम काउंट नहीं करेंगे, रेबल बहुत बढ़िया खेलते हैं, रेबल को हम नहीं काउंट करेंगे। यार रेबल हैज बीन वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द सर्किट, अगर मैं बोलना चाहूं, जिस और सर्किट भी हम यू नो दोस्तों का सर्किट, खैर अगर बोले तो दोस्तों का सर जो साथ में खेलते थे, बट ही हैज बीन फाइनेस्ट। बट उसका मतलब वो खेलते थे, और वहां पे जैसा बताया भी था हमारी बात। चलो आ जाओ, विनर्स स्टे ऑन। यहाँ पे अब मैच नंबर 3, थोड़ा सा इज्जत टू ऑल करते हैं, लास्ट में तुम नहीं जाना। लास्ट बेस्ट ऑफ 7 नहीं है, फर्स्ट टू 7 है। फर्स्ट टू 7 है, जो पहले 7 तक पहुंचा। अभी 1-1 है, जो पहले 7 लिया वो।
रेगल्टस अच्छा अब तू थोड़ा अब सा सही अच्छा से ये अब समझे हैं। जिन ले लिया वो, ये डेविल जिन ले लिया। ओ डेविल जिन के लेजर्स बहुत सही रहेंगे, प्लस डेविल जिन का रेज आर्ट एक्चुअली बहुत अच्छा डैमेज निकालता है, मच मोर देन नॉर्मल जिन अगर बात करें। बट ये एडी को क्या हुआ? एडी को क्या हुआ? एडी ये देखो भाई ये शुरू से ही ऐसा हाथ मारता है भाई। एडी नाचता है। ओए ये उठना कैसे? ये उठना भी था ना, थोड़ा सा उड़ेगा ये। हाँ वो आपको जंप्स के हिसाब से देखना पड़ेगा। ये देखो लेकिन आप अपर कट के लिए जा कौन रहे थे। बताया? कौन बताया तेरे को? ओशन भाई ये एडी के लात काटो भाई। आपको रेज आर्ट यूज करना है रेगल्टोस एक्चुअली। रुको ओह भाई मार दिया भाई। रेगा लातों के यार मैंने क्या किया भाई? भाई तूने क्या किया? बोला था ना बोल। अरे ये क्या? ये दे दिया। कौन दिया? ओ रेज आर्ट दिस इज द रेज आर्ट ऑफ डेविल जिन। फिर भी इसका हेल्थ क्यों नहीं आ रहा है भाई? उसका हेल्थ बहुत ज्यादा था रेगा। बहुत ज्यादा गया है वो, एक्चुअली बहुत ज्यादा हेल्थ गया था भाई। तो हुआ बढ़िया हुआ भाई। हालात खराब है। ओ बच गए। रुक जाओ यार। I mean, this is why I love Devil Jin, if I have to say. But so थक ब्लॉकिंग के ऊपर बहुत अच्छा जा रहा है। मुझसे थक का ब्लॉकिंग बहुत अच्छा जा रहा है। ब्लॉकिंग है काफी इंपॉर्टेंट चीज है। रेगल्टॉस कूद के आगे आ रहे हैं। रेगल्टॉस कूद के आगे आते धीरे-धीरे। तो कैंपिंग मत करो, ठीक है? कैंपिंग कराता है कैंपिंग तुमको, बोला ना और तुमको कैंपिंग कराता है। रेज आर्ट कांट राइट थक भी लेते थे यहाँ पे सीरीज में। भाई मार दिया। थक के लिए इतनी इजी हो रहा है। अबे इतना ज्यादा वो मत करो, एक दो बटन पे फोकस करो, उससे जो लगा बात खत्म। और ज्यादा झमेला होगा। थक बहुत अच्छा स्टार्टिंग ग्रैपल जो लेते हैं ना वो ले रहे हैं एडी का। ओके रेज अवेलेबल बट ओ ये पड़ेगा लगा दिस वाज अ गुड रेज, वेरी गुड रेज। रेगा रेगा बच गया नहीं नॉट एनीमोर, रेगा गोस डाउन। थक की स्ट्रेटजी काफी पसंद आई मेरे को कि एक दो बटन पे बहुत अच्छा था। एक दो बटन पे फोकस करो। और थक एक बटन पे फोकस करते हुए रेगा को एक कोने में ले जाते हैं और वहां से निकलने नहीं देते। आई मीन इफ यू जस्ट थिंक अबाउट इट, पहले दोनों साइड स्विच टीम साइड पर गए, फिर पीछे ले गए। सदमे में है। सही क्या रहेगा? बोला था रेबेल से कंट्रोल्स मत पूछना। अब वो खुद कंट्रोल्स पे खेला है भाई। रेबेल ने कंसोल वाले कंट्रोल्स बता दिए और वो कीबोर्ड पे लग नहीं रहे। देखो ठग सुनो, थोड़ा फॉर्मल वे में करते। ठीक है अभी एक जीतने दो। अभी तुम जीतो फिर बड़ा मिला के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सरेआम टीवी पे फिक्स हो गया। रैंडम ले रहा हूं भाई, कोई भी आवे को नहीं चाहिए भाई। ये जिन में कुछ होता नहीं है इनसे भाई। मिशिमा रैंडम मैं भी रैंडम। या मिशिमास आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जो आपने चूज किया था वो मिशिमा मैंने इस बार भूल लिया। मेरा पुराना वाला एक और था बस। ओके अच्छा ठीक है। टेकन 3 का अगर मैं कैरेक्टर्स गेस कर रहा हूं, पॉल लिया है आपने, लॉ लिया है। पॉल को तो मैं कैसे मिस कर दिया। अरे लॉ लिया है। लॉ लिया है, अच्छा कोई नहीं, अगला पॉल का आई थिंक वो मतलब लात वाला स्ट्रांग था ना, लात या हाथ का मुक्का मारता था, ओवा मारता था। और जिन का जब फाइट होता था उसका और जिन का फाइट भाई मेरे को बहुत मस्त लगता था। यस थक बहुत ज्यादा थक गेम फेस बना चुके हैं, बिल्कुल फोकस, फुल फोकस। थक मेरे से कोई बदला निकाल रहे। फिर उठा लिया ये टकला। अरे हम इस बार रैंडम चूज किए हैं। अरे ये टकला तुम्हारा है। मेरा नहीं, इस बार मैं आई गेस फिर से हाची आ चुका है। लेफ्ट राइट ये कौन है? हेलो अच्छा तुम एडी ले लिया इस बार। नहीं ठग लॉ वर्सेस एडी। थग एडी है, थग आपका एडी है। रेगल्टोस लॉ जो पिटा है ये अभी जो पीट रहा है वो लॉ, लेकिन अब फिर से शुरुआत भाई शुरू इसका देखो। यही तो बारी आती है, यही मुक्के की बारी आती है और यही अच्छे मुक्के निकलते हैं। भाई खेलने गए। रेज आर्ट नहीं। ओ भाई ठग पहले कीबोर्ड हालात खराब है। कीबोर्ड ऊपर करो भाई, क्या दबा रहे हो भाई।
थक ऐसे थक तुम्हारी जीतने की उम्मीदें दबा रहा है कीबोर्ड के साथ। ये क्या हो गया? ये गलत काम किया। हेड मारना है ना, तुम्हें क्रॉस करना पड़ेगा बार-बार। जी हाँ, नहीं लोज काफी ज्यादा आ रहे थे। रेगा समझ चुके हैं चीजें, एडैप्टेशन बहुत तेज होती हुई यहाँ पे रेगा की तरफ से। कुछ नहीं हुआ है, कॉपी पेस्ट होते हुए। सॉरी ठग सॉरी ठग। बोला था मैं तुझे मारा नहीं मारना, मैं तेरे कैरेक्टर को मारा रहेगा। हाँ सॉरी हाँ बात हुई थी, ये चीटिंग है ठग। अभी मैं तुमको छोड़ा तो मेरे को छोड़ रहा है। तुम मेरे को कहाँ छोड़ा, तुम हमको मारा, पूरा मारा। ये शुरू में हाथ कैसे लग जाते हैं, मेरा तो पता नहीं है। ओ भाई मेरे को लगता है आज थक जीतेंगे और बहुत बेहतरीन जीतेंगे ओवरऑल फर्स्ट टू 7 में। तक इसके बाद ग्लोबल प्लीज बात करना है। जी हाँ, नवीन काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं ये अपने दिया रेज दिया बहुत अच्छा, एक्चुअली बहुत अच्छा। लेकिन ओ पीछे को आकर के बट चल एक अच्छा रेज बंद हुआ एंड दिस सीम्स लाइक अ गुड हेल्थ बचेगी। लेकिन कैरेक्टर मिल गया बे। फाइनल राउंड। यस, फाइनल राउंड तक तो फाइट आ चुकी है। चलिए ओशन एक काम करते हैं, जब तक ये फाइट चल रही है हम लोग अपने दर्शकों को, जो नए व्यूअर्स हैं हमारे, उनको भी इंट्रोड्यूस करा दें कि आखिर चल क्या रहा है। सो दिस इज KO नाइट सीजन 5 बाय नॉडविन गेमिंग एंड एयरटेल इंडिया ई स्पोर्ट्स स्टोर। अभी हमारा शो मैच चल रहा है, हमारे दो कंटेंडर्स फिर से और रेगल्टॉस के बीच में भाई कैसा करती है भाई फाइनल्स भाई इंटेंसिटी बूम शाकालाका आवाज में सुन सकते हैं दोनों की कितना ज्यादा इंटेंस हो चुका है। मैं जीत गया भाई, मैं अपने लिए जीत गया कि मैंने बट एट द एंड हाँ जीते आप अपने लिए हो, लेकिन ओवरऑल अगर हम स्टैट्स की बात करें वहां पर थक जीत चुके हैं अपने नजर में, चाहे दुनिया में मैं जीत गया कुछ बोल के जाए, समझ रहे हो, चाहे दुनिया #12 बोल दे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। हेलो रेगा। ओह माय गॉड रेगा भी पूरा कंट्रोल सीख लेगा भाई। हाँ वैसे रेगा यहाँ पर आप #2 से नीचे तो नहीं जाओगे, बिकॉज़ फर्स्ट तो थक आ ही रहे हैं अभी खैर अगर बात कर रहे हैं। अरे वो एक #1 एक #2 हो गया 1-2। बट थक खैर जैसे मैच चलता होगा मैं आपसे ये दबा रेगा। हाँ जे दबा दो रहा था। थक मेरा आपसे एक सवाल रहेगा, कल की स्ट्रीट फाइटर और आज की टेकन में क्या डिफरेंसेस आपको लग रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि हाँ आज आप जीत रहे हो, बट स्टिल कल की स्ट्रीट फाइटर और आज की टेकन में क्या डिफरेंसेस हैं? कुछ नहीं, एक ही है भाई, आज लक से जीत रहा हूँ, कल लक से हार रहा था। कल थोड़ी कोई स्काउट बड़ा सीख के तोप आया था, मैं कल उसका किस्मत सांता आज में। अरे कुछ नहीं है, रैंडम दबा, रैंडम बिंदास रैंडम। बटन स्मैशिंग की स्ट्रेटजी दोनों प्लेयर्स की तरफ से। हाँ फुल बटन स्मैश करो। कुछ तो करेंगे यहाँ पे एट द एंड, लेकिन थक जीतते रहेंगे, ये बात पता चल रही है कि थक कुछ भी हो जाए, थक राउंड्स हाँ 1-2 राउंड बीच में हारे यहाँ पर। टाइमिंग सी बात है, बटन स्मैश तो कर रहे हैं बट बटन स्मैश करने का टाइम उनका बेटर है। क्या रहेगा ये भी नहीं कर पाया। खेलता हुआ है ना भाई, हम तो क्या मिला अभी कैरेक्टर देखने दो, कुछ सांप वाप मिल गया क्या? मतलब कुछ होता होगा ना इससे, पांडा फिर से भाई हालात खराब है भाई, ये टक्कर है जालमुत के भाई, ये है चीटिंग भाई, रैंडम दबाया भाई, फिर एडी लो एक जन देख रहे हैं, क्या फिर से एडी आ गया क्या? नहीं वो आ गया इस बार, ये एडी थोड़ी है, यही है यार, अच्छा एडी है, मार लेगा यार फिर से यार, आगे मार दे। अबे तुमको जो मिला है बहुत अच्छा है, ये तुमको जो ये तुम्हारे टाइप का है, चॉकलेट बॉय ली रेगल्टॉस बिल्कुल एक्चुअली अपने टाइप का कैरेक्टर चूज करके ले आए हैं यहाँ पे भाई। हाँ देखा व्हाट इज हिज बिहेवियर, देखो ये सब मुक्का तुम मारे, थक हमको बोल रहे हैं, तुम एक बारी में मार देता है भाई, अबे थोड़ा फाइट का मौका दोगे यार। रहेगा ऐसे थोड़ी होता है ब्रो, आपने हमें जलील किया है पूरा जिंदगी। बदला, ये देखो रिवेंज, ये बदले रेगा हल्के हाथ से। मेरे को लग रहा है शायद रेगा एक ही चीज स्पैम करके वो जीतने की कोशिश करेगा। भाई मेरा वो मिस हुआ, रेज मिस हुआ। रेगा ने ये जो बीच में तो फटके मारे ना, मतलब क्या हो गया, ज्यादा गुस्सा, टांगों के फटके, ज्यादा गुस्सा नहीं रहेगा। ओ लॉन्चर
एडी के साथ अभी तक काफी ज्यादा कंफर्टेबल होते जा रहे हैं। 3 का स्कोर लाइन ऑलरेडी पहुंच चुका है। घूम के लास्ट सीधा काफी अच्छा। एक रेज आर्ट अगर यहाँ पे रेगा की लग जाती, बट नहीं। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट। मैं बोलूंगा रेगा एक चीज समझ चुके हैं गेम के अंदर किस तरीके से क्या चीज करनी है, बट हाँ वही टाइमिंग और वही बिकॉज टाइमिंग पे आप फ्रेम स्किप नहीं करो और फ्रेम्स के ऊपर जाओ, वही सबसे इंपॉर्टेंट बन रहा है यहाँ पर, और रेगा के लिए खास कर यहाँ। ओह भाई फिर ले आए। ओ डिफेंड कर दिया KO है। यस। ओह दिस वाज अ गुड वन। तक नेक्स्ट में कोई और चीज कर रही है, एडी नहीं भाई। सुनो एक बार पीछे माम्बा को संभाल लो, पीछे माम्बा को संभाल लो एक बार। संभाल गए। गाइस मैं थोड़ा सा गेम में बिक गया हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई नहीं रहेगा, आज सिर्फ ट्रायल है। यस एक बार सड़क और जरूर खेलेंगे। आई मीन जरा सोचिएगा तक एक बार पता चले और है हमारा एक बार सोच के देखिएगा, पता चले शक्ल यहाँ पे रेगल्टोस का, नीचे से हाथ माम्बा के आ रहे हैं वहाँ पे कीबोर्ड पे लगने के लिए। हां तो और गंद आ रहे हैं। वो तो माम्बा का क्या स्कोर था? माम्बा लेकिन भाई मॉडल को 10-1 दिया है। 10-1 दोनों जीते, माम्बा और रेबेल 10-1 के स्कोर से ही जीते हैं। बट माम्बा सारे टाइम नहीं, एक मैच में माम्बा ने चेंज किया था, बाकी सारे टाइम योशिमित्सु पे स्टिक किया था उन्होंने शाहीन खेला था एक बार। ठग जे ओके रेडी अप चैलेंजर्स। ठग एडी रैंडम मत करो भाई, तुम्हें बार-बार आई थिंक वो बार-बार एडी दे रहे हैं, ठीक है इसलिए। ओके कैरेक्टर एक बार फिर से पॉल किधर है? विल सी कि किस तरह से जो है। ठीक है इस बार हम कैरेक्टर सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? हाँ रैंडमली आप कुछ भी पिक कर लीजिए, पॉल चाहिए था, पॉल मिला नहीं मेरे को, पता नहीं शक्ल भूल गया उसका। अरे लॉ के ऊपर ही है भाई। लॉक्ड है फिर देन? नहीं ओपन है, लॉ के ऊपर है और लॉ के नीचे उसी के आसपास पॉल अवेलेबल है। ऐसे देखो लंबे से ऊंचे से बाल और क्या। लॉक खोलने नहीं चाहिए उसका। भाई मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है रेगा से जीतो। किसका? पता नहीं कोई हेटर होगा तेरा। मेरे को तो लग रहा है वो अपना ये क्या दे दिया यार? अगर अपन दोनों को ये क्या है? मैं तो लिया हूँ। तभी तुम्हें दे दिया है। No one knows क्या है यहाँ पे। क्या फिक्स मिला? आई मीन हमको रिएक्शंस पहले पता चलते हैं, पर्दा उठेगा इससे प्रॉपर कि क्या है क्या नहीं। ओ ये वो वाला है इससे माम्बा जो मारा है आज सुबह मॉडल को। योशिमित्सु तो योशिमित्सु अपनी हेल्थ रीगेन कर सकता है और उसकी हेल्थ जा भी सकती है, और ये सेम मॉडल वर्सेस वही मैच लग रहा है, क्योंकि उसमें मॉडल ने एक कैरेक्टर चूज किया था। योशिमित्सु यहाँ पर वही चीज हो जाती है, क्योंकि योशिमित्सु की टांगे यूज करी थी माम्बा ने। अब बात ये आती है कि इसके अंदर क्या चीज होती है। आई मीन अनिमेश बहुत अच्छे तरीके से डैमेज देने की कोशिश करी उन्होंने, वो अपना ये एकदम गू कैरेक्टर है, ये एकदम गू कैरेक्टर है। इजी हो रहा है भाई, ये बहुत खराब कैरेक्टर है, मैं अभी बता रहा हूँ। एकदम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इसमें। No, this is for heavy hits. ये actually बहुत अच्छा मूव है। And क्या बात कर रहे हो? जीता था सेट। हाँ या और रेगल्टोस जो आप कर रहे हो वो पीछे की तरफ को मूव करके वो अरे थक माम्बा कमिंग आउट। अरे बिकाऊ, अरे माम्बा टूर्नामेंट चल रहा है। लो हालात खराब है। नहीं थक जीत गए, थक ने राउंड भाई ओपन चीटिंग हो रहा है लीग ऑफ। अरे विशाल को बुलाओ भाई, विशाल भाई को बुलाओ भाई, विशाल भाई को बुलाओ। अबे बिकाऊ है क्या? उसमें भी थक जीत रहा है। माम्बा हराने के लिए रेगल्टोस माम्बा को हटा रहा, माम्बा हराने के लिए आया है। रेगल्टोस माम्बा को हटा ले, मान मेरी बात। भागेगा हटा, माम्बा को हटा, माम्बा हराने आया सिर्फ। माम्बा तो गेम हरा के चले गए। माम्बा तो गेम हरा के चले गए। ये क्या करते हो? अरे क्यों किया ये क्या बात? सॉरी अरे सिंपल खेल रहा था ना मैं भी। ये क्या कर रहे हैं? ये खोपड़ी तोड़ दिया बे। अभी और तो हालात खराब है। आओ ऑक्टोपस, हेलो। दोनों ही टेक्निकली वैसे आप ऑक्टोपस थी हो, बट ठीक है। अभी ऑक्टोपस क्या? आओ
और ठग। ये देखो मिल गया इसको। अरे आओ भाई, तुम्हारा भाई यही यूज करेगा अब। मेरे को बटन मिल गए अब। अरे कौन सा मारे? खजुआ मार दे रहे तुम। 4-2 रेडी हो जाओ, इंटेंस फाइट। 2 राउंड के लिए मामा आए थे, दोनों राउंड ठग जीत गए। अरे वो थोड़ा सा पैसा खाए थे। वो थोड़ा सा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है मेरा मामा। बहुत गलत था जो भी था, बहुत गलत था। व्हाट्सएप मैसेज कहीं वहीं से तो नहीं आया था? पूरा भाई दो भाई आओ। चलिए आओ ठग दे दो मुझे। अगला गेम। मैं योशिमित्सु यूज कर रहा हूं मैं। योशिमित्सु यूज किया जाएगा यहाँ पर रिगल्टोस के द्वारा। और योशिमित्सु को एक्चुअली जो आप तलवार वाला वो जो एनिमेशन कर रहे थे, हील होता ना, बढ़ती है, उससे हील होता है वो। हाँ हील होता है, मालूम है। हाँ ये सब उसका एक सबसे बेस्ट है योशिमित्सु का, अगर वो लग जाए तो केओ ही होता है वो। क्या है हम बोला ना इस तुम चीप आदमी। नहीं मैं पहले खेला हूं, योशिमित्सु का एक था, अगर लग गया एक तो पूरा केओ निकाल के मरता है। रोबोट टाइप होते हैं वो, घूम पता नहीं क्या वो अब इस पे नहीं पता, बट वही L1 और ट्रायंगल वही चीज आती है। असिस्टेड वो कंसोल पे असिस्टेड कॉम्बिनेशन मूव्स रहते हैं, तो उनके अंदर वही चीज बनता है। बट आप लोग उस पे खेल रहे हो, और माम्बा को प्लीज आने मत दीजिएगा, क्योंकि और कुछ नहीं, हाँ चाहे जो मर्जी वो आपको हरा के जाएंगे, और यही और कुछ। Well, I mean, योशिमित्सु के साथ तो रेगल्टोस डोमिनेट कर रहे हैं, और कहां गया योशिमित्सु? मामा से बेटर परफॉर्म किया, 2 राउंड हारे नहीं। मिला ही नहीं वो। हमको कोई शाहीन मिल गया। शाहीन से माम्बा हारे थे जब खेले थे। हमको अरबी मियां मिला एक। अरे ठग मेरा योशिमित्सु खो गया। क्या मिला तेरे को? रैंडम हो गया गलती। मामा फिर से देख रहे पीछे देख रहे हैं गुस्से में। मामा गुस्से में देख रहे हैं पीछे से। खैर बता दिया, बिक गया था। मामा जाते हुए चलो। मामा चाकू लेके आके डाल नहीं दे। चलिए जर्नी आगे बढ़ती हुई हमारी इस एक दौड़ की। दोनों चैलेंजर्स गेम फेसेस आ चुके हैं एक बार फिर से। माना नहीं है। देखो हमको पता नहीं क्या मिला ये। इसका हमको तो लग नहीं रहा है कि क्या वो करेगा। इसका अल्टी क्या है? शाहीन की अल्टी। शाहीन का रेज आउट एक्चुअली माम्बा ने यूज किया था एक राउंड में। चिड़िया उड़िया फेंकेगा ये लग रहा है। अरे नहीं शाहीन बहुत मारता है लोगों को, बहुत। अरे काजुमी स्टार्टिंग में मत मारा करो यार, पूरा मोरल डाउन हो जाता है भाई। ठग ये शेर निकालती है। हाँ ठग ये शेर निकाल के मारती है एक्स्ट्रा। वो देखो पीछे शेर आता है। शेर का है। आज तो शेर ही निकाल देगा तुम्हारा भाई। आपको कॉम्बो देखना पड़ेगा। पीछे शेर आ रहा था एक्चुअली जब लास्ट से आपने मार खाई। खैर आपको ग्रैपल देखना पड़ेगा, कौन सा वो एक एक्चुअली ग्रैबिंग मूव रहेगा जिससे आप शेर निकाल सको। थक को भी मिल चुका उनका अटैक। थक सिर्फ एक ही चीज पे जा रहे, टांगे। वेल भाई स्ट्रैटेजी चल रही है दोनों की, बहुत ही बढ़िया चल रही है। और आई मीन ओशन वंस अगेन, अभी हमारा जो ऑब्जेक्टिव था कि लोगों को, जो हमारे जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, जो एथलीट खेल रहे हैं, उनको भी गेम पसंद आए, ऑडियंस को एक्सपोजर मिले गेम थोड़ा बहुत। वी आर आई मीन मजे तो इन दोनों को काफी ज्यादा आ रहे हैं। जैसे कितना ज्यादा आई मीन एक्सप्रेशन देखिए, फोकस फुल। I mean, everyone's a winner. Even if Thug wins, he's a winner. And ये रेज आउट लग गए। Yeah, exactly यही चीज। मुक्के बहुत सारे, and that's like a proper thing. But एक पिक्सल is what is. I mean, all right, never mind. हो गया। ये देखो ये क्या है भाई? रेगल्टोस अभी भी रेगा अभी भी शेर नहीं निकली है। शेर देखना। अरे यारी रुको। एक ही लात चल रही थी वहां पे। ओके ऑलराइट। रेज आउट नहीं मिस हो गई। ओ लग गई। वेकअप पे लग गया वो। वेकअप पे लग गया, एंड दैट वाज अ गुड वन। हेलो रेगा प्लीज। अब मजा आएगा। स्कोर क्या हो गया? 4-2 5-2 वही बात आती है जैसे सीख लिया ना रहेगा। अब कमबैक होगा। मैं और जॉनी बात कर रहे थे कि इस गेम के साथ एक ही मोटिव था कि एट द एंड आप लोगों को मजा आना चाहिए। चाहे थक जीते, चाहे रेगल्टोस आप हारो, मतलब चाहे थक जीते, एट द एंड थक ही जीत रहे हैं। बट स्टिल बात ही आती है कि भाई कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा भाई। मामा कौन जीतेगा बताओ? मैं कर रहा हूं। मामा भी आ चुके हैं। मामा है वहां पे। अच्छा रेगल्टोस जेता मारेगा। कमबैक टाइम जॉनी भाई, कमबैक। लेट्स गो। देखो साइड में माम्बा का हाथ हल्का सा दिख रहा है, देख लेना। अगर आप हारे और माम्बा के कारण हारे। ये मैं खेल रहा हूं। माम्बा होता तो योशिमित्सु चूज करो जल्दी। अब आओ
ओके पिक हो गया, योशिमित्सु पे योशी हो पिक गया। हो गया। थक की तरफ से भी कैरेक्टर सेलेक्ट पर थोड़ा सोच विचार। हाँ थोड़ा सोच विचार के लेना होगा। अरे सुनो, ये माम्बा जो पीछे साइड में हट के तुमको सिखा रहा है, कुछ अपने आप कर लो तुम। ब्रो कुछ सिखा नहीं रहा है वो, बस एक बार नहीं सुना यही सब सीखा हूं। अब नहीं देगा कीबोर्ड अभी खुद के लिए। इसमें रेगल्टोस हाँ? लेसन लेना है, पिछली बार खेले तो 2 राउंड नहीं हारे थे। बिल्कुल नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। रेगल्टोस 2 राउंड हारे थे, 2 राउंड बैक टू बैक। हाँ वो भी, नहीं और देना। इतना बढ़िया अवतार थे भाई, वो भी कैसे हार सकते। बढ़िया फिर देखो comeback- हारना बढ़िया comeback ही किया होता है, था। जितना ये बढ़िया ठग होता ने है। चूज करा, ये ठग ने चूज करा, पक्का गारंटीड रैंडम नहीं है ये। ये रैंडम नहीं जिन है। हाँ हाँ जिन आई मीन ठीक है, एडी जैसा तो नहीं रहेगा रेगल्टोस। एडी से तो पहले इसका कभी लुक चेंज था भाई युजुत्सु का। हाँ पहले अलग होता था, पहले वो आर्मर वगैरह पहन कर आता था टेकन 3 में। आई मीन वही प्रीसेट, एक प्रीसेट है आई गेस इसका, कोई प्रीसेट में है या किसी डिफॉल्ट वाली स्किन के अंदर ही है। हाँ ये तो अभी भी गू पड़ा। कैरेक्टर है ब्रो, हार गया। अभी डिक्लेयर कर रहा हूँ, हार गया। ये बैठ गए थे और 100% हार गया। कम बैक ओह I mean, come back. Let's go, Regaltos. रेगा लेट्स गो। नहीं नहीं बे यार, बच गए, बहुत दूर है। अरे बहुत दूर है। अरे ग्रेट, एक्चुअली ग्रेट। नहीं ठग यार, ये बहुत मिला था ना। ओ अच्छी शुरुआत। थक काफी ज्यादा बढ़िया खेल रहे हैं यहाँ पे। जिन एग्जैक्टली जिन को यूज करके थक का आई वुड से यहाँ पे मोरल बहुत हाई होगा। और रेगल्टोस अभी बिकॉज ऑब्वियसली योशिमित्सु ने उनको बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल मैच जिता था, लेकिन वो सेम चीज वापस से देखने को नहीं मिल रही है जॉनी। अरे वो मैचअप अलग था क्योंकि उस टाइम पे खेल रहे थे गिगास के, इस टाइम हाँ। तो आप स्पीड मैचअप कर सकते हैं तक। एग्जैक्टली और उसके चक्कर में थोड़ी बहुत यहाँ पे रेगल्टोस के चेहरे पे शिकन आती हुई हल्की सी, अगर बोलना चाहे तो आप देखो रेगल्टोस का फुल पावर गेम फेस फोकस और प्रॉपर्ली फोकस लाइक इज जस्ट अच्छा खेल भी रहे हैं तो आई मीन फोकस होना बहुत। हाँ चाहे अच्छा खेल तो फेक आउट करना चाहे बट बात मत किया करे। हेलो रेगा गुस्सा हो गया लगता है ज्यादा ही कमबैक सुन के तक आप। तक वाज लाइक कमबैक मैं बताता हूं बेटा, हम ऐसे ही इतना वो दिया अच्छा कह रहे कमबैक हम पिछले 8 महीने से सुन रहा है। कमबैक क्यों किया? तो मारने तो दे रहे थे हम तुमको। अब तो मौका ही नहीं दिया इस बार और 6-2 का स्कोर लाइन पहुंच चुका है रेगल्टोस। अभी भी एक और जीतना आपके पास अपॉर्चुनिटी है कमबैक की। लेट्स गो, अब जीतना है। लेट्स गो रेगा, कम ऑन तू कर सकता है। यही चीज ये रेगल्टोस बोलेगा हर बार बोलते और फिर हर बार 3-0 से हरा देते तो कर सकता है करके। कमबैक का नाम सुनते ही थक इसलिए कभी बताता हूं, रुक जाओ। चल रेगा ओके मैं इस बार लेता हूँ। क्या लेट्स सी इस बार ये लोग क्या चूज करते हैं, यू नो इट ऑल जस्ट कम्स डाउन टू दोस थिंग्स ओनली। आई मीन पहले योशिमित्सु जी के देखिए कैरेक्टर है भी था, मेरे में कुछ अद्भुत सा पिकअप हो गया, पता नहीं क्या। अभी 5-2 चल रहा है ना। 6-2 लास्ट मैच 6-2 लास्ट मैच। अब क्या रहेगा? जो पहले 7 करेगा ना। रेगा ने तब से हार मान ली जब माम्बा उनके साइड में बैठ के उनको जब माम्बा आए थे और तब भी कुछ नहीं हुआ था। रेगा ने तब हार मान ली थी। बता रही है करो, कुछ कर नहीं दे रही। हम क्या लिए? एक कोच अवेलेबल है। तुम क्या रही हो? वही पता नहीं, पता चलेगा। हमारे को भी, दर्शकों को बता दे, हमारे को पता भी मैच स्टार्ट होने के बाद पता चलेगा कि एक्चुअली क्या पिक किया गया है दोनों हमारे जो दिग्गज है उनके द्वारा। एंड हियर वी गो, योशिमित्सु वर्सेस लियो। ओके लियो यहाँ पर पिक होते हैं। दैट्स अ गुड वन आई वुड से। लास्ट गेम में लास्ट टाइम जब यू नो हमारा भाई प्रैक्टिस करता है इस गेम को, प्लीज करता है। अच्छा ऑफिस करता है, हो गया। ठग प्रैक्टिस कर रहा है, ठग चीटिंग है, ठग नहीं। अभी तुम्हारा बाकी गेम खराब है। ये गेम बहुत फोकस कर रहा है। रेगा डिस्ट्रैक्ट मत कर, बहुत मारेंगे। तुम्हारा बाकी गेम इसलिए खराब है, तुम्हारा सारा फोकस इस गेम में है टेकन भाई। स्ट्रीट फाइटर से आपको, मेरे को लग रहा है इस पे बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं आप स्ट्रीट फाइटर के कंपैरिजन। आई थिंक ठग और रेबल का एक मैच होना चाहिए। हाँ उसमें हमें विनर तो ऑलरेडी पता ही है, बट ठीक है करवाना है तो करवा लो। अभी जिस हिसाब से तक ने अडैप्ट किया है
I like it. But still, see, experience counts उसके अंदर. Experience does count. I mean, Rebel. Yeah, Rebel के अंदर मानेंगे. अबे Rebel बहुत ज़्यादा experienced है इस गेम में. और वो तो उसको, oh nice one रहेगा. This was a nice one, the way Regaltos actually stepping up to the competition, and अब भाई रेज आट टू आ सकता था, लेकिन this was a good one for Regaltos. रहेगा. अबे भाई ये जो फ्लो मिलता है ना भाई, बहुत गलत फ्लो है भाई. अबे भाई यार ये फ्लो नहीं भाई. अगर कोने में लेके जाता है ना. ओह. मुझे लग रहा था वहाँ पे मिस कर देंगे. हाँ, मुझे भी एक बार यही लगा. कोई नहीं केओ तो निकाल लिया था आपने. थग जीत से एक राउंड और दूर. यस. आखिरी राउंड. एग्जैक्टली आखिरी राउंड जीत से. अब देखते हैं कि आखिरी राउंड में क्या करते हैं, लेकिन Regaltos is stepping up. Yeah, he's stepping up his game. बट नहीं थक के आगे काम नहीं करेगा. थक स्मार्ट रीड कर रहा है. ओ भाई. रेज आट. भी नहीं. अबे ये नहीं. फाइनल राउंड तक आते हुए इस मैच के लेट्स सी कौन जीतता है. ओके. थक ने सीधा मौका ही नहीं दिया, सीधा उठते थक वाज लाइक आजा रहेगा. अबे थक भी अब कैंप कर रहा है. हाँ, अब कैंपिंग शुरू होती है यहाँ पे. थक के पास एडवांटेज. देखो अगर टाइम का भी बात करें ना, अगर चाहे यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसे हुए, उसमें टाइम के हिसाब से बहुत एडवांटेज. बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है, बहुत बड़ा ठग को भेज दो. केओ फाइट नाइट मैन. जाओ भाई, तुम गॉड हो. तुम्हारा ग्राइंड घंटे चलता है भाई इधर. थक सीजन 6 रजिस्ट्रेशन लास्ट मैच है. नहीं हो गया. थक जीत चुके हैं. रेस टू 7 था. जीत गए. यस जीत गए. थक जीत चुके हैं. आधा पेटी भेज. हाय मामा. मामा ज्यादा निराश लग रहे हैं Regaltos से. और ऐसा कोच पालो. अरे वो पता है ठग लीडर है ना, तो करना पड़ता है. अच्छा. जीतने दे दिया गया है, वरना तो छोड़ता नहीं. वेल भाई मजा आ गया. काफी इंटरेस्टिंग. वेल इट वाज अ वेरी नाइस वन. बट या थग कैसा डिफरेंस लगा? बिकॉज़ आपने बहुत कैरेक्टर स्विच किया, सो हर एक कैरेक्टर के साथ आपको कैसा लगा अलग-अलग कैरेक्टर्स के साथ आके? आई मीन गिवन द फैक्ट. हां, दोनों आई थिंक गेम में वही स्पीड वाला बात है कि यूनिट कैरेक्टर जिसका एटलीस्ट जो पंचेस है वो बहुत क्विक हो, ज्यादा एनिमेशन नहीं हो. डेफिनेटली. आई मीन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. छोटे एनिमेशन स्पीड अगर रहेगी तो आपके पास आप जल्दी रिएक्ट कर सकते हैं, मगर हाई डैमेज वाले कैरेक्टर्स भी रहते हैं जिनके साथ थोड़ा रुक के खेलना होता है. वो आई मीन कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाती है. बट केओ फाइट नाइट सीजन 5 बाय नॉडविन गेमिंग एंड एयरटेल इंडिया ई स्पोर्ट्स, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया. सबसे पहली चीज तो आने के लिए, अपना समय देने के लिए हम लोगों को. और एक बार अगर टूर्नामेंट के बारे में भी हमारे दर्शक जो जुड़े हुए हैं उनको एक बार बता दो कि क्या अभी हुआ है और क्या इसके बाद होने वाला है. थक हमारे साथ कल से मौजूद है. थक को आई थिंक एक बेटर आइडिया है कि क्या हम अचीव करने की कोशिश कर रहे थे इस सीजन 5 के साथ. एयरटेल इंडिया ई स्पोर्ट्स स्टोर का इंट्रोडक्शन दर्शकों को बता दो. एक लीडर बोर्ड रहता है एयरटेल इंडिया ई स्पोर्ट्स स्टोर का, जहाँ पे जो हमारे एथलीट्स है, जैसे आपने अभी इन दो हमारे जो एथलीट्स है दूसरे ई स्पोर्ट्स है, इनके लिए नया एक्सपीरियंस था. बट जैसे आपने इनको टेकन 7 खेलते हुए देखा, वैसी जो प्रोफेशनल टेकन 7 प्लेयर्स होते हैं वो यहाँ पे कम्पीट कर रहे हैं. प्रोफेशनल स्ट्रीट फाइटर प्लेयर्स, एथलीट्स और सुपर स्मैश ब्रोस अल्टीमेट के एथलीट्स भी थे. उनके फाइनल्स कल खत्म हुए थे. स्ट्रीट फाइटर के आज हमने देखा, टेकन के अभी होने वाले हैं. तो अगला मैच इसके बाद हमको देखने को मिलेगा टेकन 7 का ग्रैंड फिनाले, जहाँ पे दो बहुत ही बड़े, आई मीन सम ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द कंट्री एक दूसरे के अगेंस्ट आके खड़े होंगे और बहुत ही इंटेंस वो भी होने वाला है. प्लस एयरटेल इंडिया स्पोर्ट्स की वजह से मैं मेंशन कर रहा था, तो वो लीडर बोर्ड की रैंकिंग के लिए भी वहाँ पे लड़ाई चल रही है. और ये जर्नी काफी लंबी रही थी इन प्लेयर्स की भी. ऐसी शुरुआत हुई थी सबकी, जैसे हमने देखा दो प्लेयर्स को एंजॉय करते हुए, सबने ऐसी एंजॉयमेंट के स्टार्ट किया था और अब आगे काफी पहुंच चुके हैं. सो वंस अगेन Regaltos एंड थक, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए. उम्मीद है फ्यूचर में फिर मुलाकात होगी एक और टूर्नामेंट. था Regaltos ने तो ली दिया है सीजन 6 के लिए. आएंगे क्या? सीजन 6 तो पक्का खेलेंगे. सीजन 6 एक बार तो ट्राई करेंगे. अब तो इस बार तो ठक्को में वैसे पहले रैंडमली भी हरा हो कुछ दिनों में बुला के स्ट्रीम पे एक दिन वापस खेलना होगा. चलिए चलो मौके का हमें इंतजार रहेगा. अभी के लिए एक बार फिर से शुक्रिया. और चलिए हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ और उसके दूसरी पार्ट स्टार्ट होगा हमारा टेकन 7 का ग्रैंड फिनाले. सो यू गाइस स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग. विल बी राइट बैक.
Hello and welcome back once again to KO Fight Night Arena. This is Season 5 Grand Finale that we're in. This is day number 2. Indeed, yesterday was another day. Today is the final day. And the only game that is left to take place is Tekken 7. Because abhi tak hamare paas mein Tekken 7 ka champion for Season 5. We've got no idea at all. And once again, like I said, this is KO Fight Night by Nodwin Gaming and of course Airtel India Esports Store. All these players have been racking up those skills to be number 1 in the country. And that is something that is not an easy feat. But all of these lads have been trying. With that, we've got 2 names now that we're going to be talking about. With our analyst joining me, it is none other than Phoenix once again. Thanks a lot, Block, for the introduction. And finally, we have the grand finals of the yes. Tekken 7 segment. And after some time, we are going to get to know that who is going to be the champion for the KO Fight Night Tekken 7 segment. And we have Rcool and Tejan. Oh, it is going to be very, very interesting. Absolutely. I mean, just like the previous match that we witnessed, I'm hoping कि ये वाला match भी proper 5 rounds का utilize करे rather than just a clean sweep of 3-0. That is something nobody wants to see. Because after all, like I said, not only is the stake of getting a name on top of that Airtel India Esports Store, along with that, of course, is the prize pool, the massive prize pool of 1 lakh INR that is being distributed amongst the entirety of it. And for that, the first position holder will be taking away 50,000 INR. That's a good amount, and you know that's a very good amount. But let's talk about their we can say their standings. The thing is, the head-to-head is right in yeah, front of us, where we've of course got matches played. That is 8 matches played by Rcool, off of which he's won 6 and 2 losses. On the other side, Tejan has played 9 matches only because he is coming back from the lower bracket, right? And Rcool has just basically swooped away and got himself a spot, a clean cheat spot into the grand final itself. But nevertheless, that does not matter now, because now what matters are those 3 rounds, 60 seconds each, and that will determine these lads are going to find the answer. We're going to find the answer. You will get the answer. Who is going to be the champion? But along with that, of course, if at all you have a prediction, hashtag KO Fight Night and let us know with the name of the player. Who are you rooting for? Who do you want to see become the champion of KO Fight Night Season 5? Yeah, and you know what? Let's talk about the prediction. Just talk about the prediction. My prediction is Tejan is going to win the first game, and Rcool is going to give him the proper competition in the second game. Oh, yeah. all right. Well, that is just 2 games though, Phoenix. The thing is, rest of the 3 games, it is going to be 50-50. All right, you know what? The rest of the 3 games, we leave it up to the viewers. How about that? We leave it certainly up to the viewers, but you know what? You're in the same boat as we are, because after all that falls back on is what these lads do in the 60 seconds in the 3 rounds that they end up getting. Without any further ado, let's start away with the grand final of course, Tekken 7, and quickly throw it to Augustus. Well, जिस घड़ी का सबको इंतजार, वो घड़ी अब फाइनली आ चुकी है. Tekken 7 ग्रैंड फाइनल हमारे सामने है. मेरा नाम है वरुण सुपर जॉन मेरे साथ जुड़े हैं. Well, Vishal is on this side and Dan, as always, up above us. So guys, कितना एक्साइटेड हो इस ग्रैंड फिनाले के लिए और एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगी? सबसे पहले चलिए विशाल आपसे शुरू करते हैं. डैन क्योंकि पूरा ब्रेकडाउन भी देंगे साथ में, बीइंग एन एनालिस्ट. विशाल आप बताइए सबसे पहले. मैं यही कहना चाहूंगा सबसे पहले तो वरुण यार वापस से आपके साथ हम आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. एंड सेकेंडली कि गेम के बारे में बात करते हैं. लाइक हमने देखा कि तेजन भाई लोअर ब्रैकेट में थे, लेकिन तेजन भाई ने जो 2 टफ कंटेंडर थे, आई मीन पहले रोहित जैन और उसके बाद लायनहार्ट अपर से नीचे की तरफ आए थे, जबकि तेजन भाई बहुत पहले ही नीचे आ गए थे. तो उन दोनों को उन्होंने बाहर कर दिया है. एक स्मार्ट पिक बीच में देखने को मिला था, लाइक डैन के साथ भी हम डिस्कस कर रहे थे, वो नीना पिक आया था, एक गेम निकाला था, उसके बाद एक गेम हारे, तो फिर उन्होंने तुरंत जो है वो, उन्हें ज्यादा मौके थे नहीं ऑब्वियसली आपके पास, आप ऑलरेडी लोअर ब्रैकेट में, तो आस्का फिर देखने को मिली थी. तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि अब यहाँ पर जो उनके कंटेंडर है Rcool, उनके भी 2 कैरेक्टर है, एक लीरॉय और दूसरा हमें पांडा देखने को मिला था ऑब्वियसली. तो मुझे लग रहा है कि अगर लीरॉय से स्टार्ट हुआ वरुण, तो डेफिनेटली लीरॉय वर्सेस आस्का का मैचअप हमें देखने को मिल सकता है गेम नंबर 1 के लिए. ऑलराइट, एंड डैन व्हाट अबाउट यू? क्या कहना रहेगा? जी हाँ, मैं बिल्कुल सीमित हूँ विशाल के बात से, क्योंकि वो लीरॉय बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है. पैंडा मतलब सरप्राइज पिक तो है, लेकिन आई डोंट थिंक कि आप वो चांस लेना चाहेंगे तेजान के आसुका के अगेंस्ट. जैसे उन्होंने प्रीवियस मैच में ही दिखाया, सीधे 3-0 लेकर के आसुका से जैसे ही उन्होंने स्विच किया, उनके लिए वो सेट क्लीन हो गया था. बट नो काउंटिंग आउट Rcool एट ऑल. वो विनर साइड पे एक वजह से है, और तेजान लंबी स्ट्रगल करके आ रहे हैं लूजर साइड पे. बट ये मैच देखने को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बिकॉज
लीरॉय क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी खेला इन द लास्ट मैच अगेंस्ट विद आसुका, बट ये मैच में प्ले स्टाइल ही अलग रहेगा इन आरकूल्स स्टाइल में, तो थोड़ा उनको एडजस्टमेंट उधर भी करना पड़ेगा. लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स आउट. डेफिनेटली आई मीन एडजस्टमेंट तो आपको करनी पड़ती है कि जैसा आपने डैन एक चीज बहुत अच्छे से पॉइंट आउट करी कि प्लेयर्स का प्ले स्टाइल भी एक बहुत इंपैक्टफुल चीज रहता है और वही चीज होती है कि मतलब हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि कैरेक्टर सेम है, मैचअप सेम रहेगा, बट नहीं, वो मैचअप कभी कभी उल्टा भी पड़ जाता है. तेजन बहुत ही एक एक्सपीरियंस प्लेयर है. आरकूल ने एक सरप्राइज जो हमें दिखाया था, जैसे विशाल ने मेंशन किया, वो सरप्राइज पिक जो लेकर आते हैं, लेकिन इस बार कोई सरप्राइज नहीं रहेगा. लीरॉय वर्सेस आसुका स्ट्रेट फ्रॉम द गेट गो. लेट्स गो. विशाल, एक सवाल मेरा आपसे अभी ये रहेगा कि जो तेजन की आप बता रहे थे कि स्ट्रैटेजी रहती है पहला सेट ड्रॉप करने की, क्या लगता है फाइनल्स में हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट रीसेट करने का सिनेरियो भी है? डेफिनेटली ब्रैकेट रीसेट यहाँ पर करना पड़ेगा उनको सबसे पहले, उसके बाद ही वो आगे जो है वो अपनी और जर्नी को मतलब जीतने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट रीसेट जरूरी है. तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर वो पहला शॉट ड्रॉप करने वाले हैं. वो स्टार्टिंग से ही जीतने के लिए जो है वो जाएंगे. टो ब्रेकर देखने को मिला, बढ़िया ब्लॉक वहाँ पर, लेकिन पनिश नहीं आता हुआ. देखना पड़ेगा इस बार क्या करेंगे. आपको आप गेम प्ले स्टाइल देखिए, दोनों ही प्लेयर कितना डिफेंसिव है, लेकिन बेहतरीन तरीके से पिकअप किया. अच्छा पनिश, वॉल कैरी मिलेगा इंस्टेंटली वहाँ पर. वॉल एंडर थोड़ा सा वहाँ पर मुझे लग रहा है कॉम्बो कन्वर्जन में गलत होते हुए, क्योंकि और ज्यादा डैमेज वहाँ पर दिया जा सकता था. अब इतनी सी हेल्थ में निकालना बहुत मुश्किल है, वो भी तेजन जैसे प्लेयर के अगेंस्ट. तो पहला राउंड यहाँ पर तेजन भाई के खाते में आता हुआ. डेफिनेटली काफी अच्छे से उन्होंने वो पहला राउंड निकाला, बट दूसरे राउंड के अंदर भी शुरुआत से ही लॉन्चर फुल कॉम्बो वॉल पे ले जाके वॉल स्प्लैटर मारा. अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं थी, साइड स्टेप करके रिकवर करने की कोशिश, एक और लो आता हुआ. यहाँ पे तेजन बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले दे रहे. ऑलराइट, वो बैक स्टेप्स के साथ आरकूल थोड़ी स्पेस गेन करने की कोशिश करेंगे, एटलीस्ट सांस लेने का तो टाइम मिले उन्हें. डेफिनेटली बैक स्टेप वो इसलिए ले रहे हैं ताकि एटलीस्ट थोड़ा सा सोचने का मौका मिले, कुछ मूव जो वो चलाने का मौका मिले. अच्छी एल स्वीप, बढ़िया डैमेज जाता हुआ. यहाँ पर ब्लॉक होती तो डेफिनेटली लॉन्च पनिश मिलता, बट अच्छी एल स्वीप से अच्छा डैमेज लिया उन्होंने. बिल्कुल हल्की सी पावर है यहाँ पर, वो अग्रेशन नहीं दिखा सकते हैं. एक बढ़िया सेटअप पे फंसाया वहाँ पर, अच्छा स्ट्रिंग निकाला. एंड देखिए 2 स्ट्रेट राउंड जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर वरुण की, क्या पहला सेट जो वो ड्रॉप करेंगे तेजन भाई या नहीं करेंगे? आपके सामने है, वो नहीं करेंगे. आई मीन बिल्कुल नहीं लेना चाहते रिस्क यहाँ पे तेजन, और काफी अच्छे से खेलते हुए आ रहे हैं. आई मीन अग्रेशन देखिए कितना ज्यादा इनकी तरफ से देखने को मिल रहा है. आपने एक चीज बोली थी पिछले मैच के अंदर जब आप और मधुरा थे कि लीरॉय को अगर आपको काउंटर करना है तो आपको भी लीरॉय खेलना पड़ेगा. आई थिंक तेजन के पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी उनको मिल चुकी है कि लीरॉय को काउंटर करना है, उनको मौका ही मत दीजिए कुछ करने का. या डेफिनेटली ये तो होता ही है. यही चीज हम डिस्कस भी कर रहे थे कि अगर आपको सामने वाले को मौका नहीं देना है तो आप एक होता है ना कि स्पेसिंग मत क्रिएट करने दीजिए उनको. आप उनको विफ मत निकालने दीजिए, उनसे मूव निकलवाइए. एंड जब आप ये करेंगे, वो मूव निकालेंगे, फिर आप बैक डैश कीजिए, विफ निकालिए और वहां से लॉन्चर निकालिए. और वही चीज का फायदा भी मिला है यहाँ पर. एंड 3 स्ट्रेट राउंड जब निकले हैं तो एक स्टेटमेंट तो बहुत क्लियर हो चुके हैं यहाँ पर तेजन भाई की तरफ से कि ब्रैकेट तो रीसेट होने वाला है एट एनी कॉस्ट. आई मीन हाँ, वो चीज तो है. और मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि अब जिस लेवल का अग्रेशन हमको देखने को मिला, आई थिंक ये वही प्लेयर है जिनको हम टूर्नामेंट के स्टार्टिंग से एक्सपेक्ट कर रहे थे. बहुत डैन ने मेंशन किया, जर्नी काफी लंबी थी, जर्नी बहुत मुश्किलों से होकर निकली क्योंकि लोअर ब्रैकेट से होकर यहाँ तक आ रहे हैं. लेकिन फाइनली अपने वो कंफर्ट जोन जो होता है ना, हम कहते हैं कि एक वेटरन प्लेयर्स के पास एक एडवांटेज रहता है टूर्नामेंट सेटिंग के अंदर, कि वो एक्सपीरियंस, जो नर्व्स होती हैं, प्रेशर के अंदर आके खेलना उन्हें काफी अच्छे से आता है. आई थिंक वो एक चीज है जो तेजन के लिए थोड़ा एडवांटेज क्रिएट कर सकती है. और वरुण, एक चीज मैं और यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगा कि फाइटिंग गेम्स का हर एक गेम के सेटअप में ना, लाइक मैचअप में ना एक लूप होल होता है. लाइक आपको पता होता है कि सपोज दैट अगर ये प्लेयर ये स्ट्रिंग चला रहा है तो वो आप पहले ही माइंडसेट कर लेते हो कि अगली स्ट्रिंग क्या आने वाली है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या चलाना है. और वही चीज यहाँ पर अप्लाई भी की गई है. लाइक बार बार जिस तरीके से उन्होंने प्रेशराइज किया, सबसे पहले देखिए वॉल प्रेशर ज्यादा देखने को नहीं मिला है. वो स्टेज के बीचों बीच ही उनसे इतनी ज्यादा अंदर जा जाके खेल रहे थे, उनको स्पेसिंग ही नहीं क्रिएट करने दे रहे थे. डेफिनेटली बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बातों से, जिस तरह से ब्रेक डाउन किया है. और वो चीजें मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस के साथ ही आती है. जब आप बहुत ज्यादा हाई लेवल पे काफी लंबे समय तक खेलते हुए आते हैं, तभी वो चीज डेवलप होती है कि आपको पता रहता है कि ऑलराइट, ये ज्यादातर प्लेयर्स इस स्ट्रिंग के बाद ये कॉम्बो सेट यूज करना पसंद करते हैं. बट अभी के लिए 1-0 की लीड लेते हुए तेजन अब बढ़ेंगे मैच नंबर 2 की तरफ. एंड ये स्टेज बहुत ही शानदार होने वाली है यहाँ पर, लेकिन कॉम्बो ड्रॉप होती हुई, अच्छा कॉम्बो मिला था उनको स्टार्टिंग में ही, कॉम्बो ड्रॉप, और ये पिकअप होने वाला है यहाँ पर. बेहतरीन पिकअप एंड डेफिनेटली फ्लोर ब्रेक देखने को मिलेगा. पहला फ्लोर ब्रेक यहाँ पर हो चुका है, 2 फ्लेयर और भी हुए हैं और उसके बाद हमें लॉर्ड गणेशा के जो वो दर्शन होंगे. देखते हैं कितनी देर में हमें गणेशा के जो वो दर्शन होंगे यहाँ पर. फिलहाल गेम अच्छा चलता है यहाँ पर. पहले राउंड की अगर मैं बात करूँ तो देखिए दोनों की हेल्थ ऑलमोस्ट बराबर है यहाँ पे. हेल्थ तो बराबर थी, बट आरकूल ने टाइम नहीं लगाया लीड लेने में और राउंड भी ले गए उसी के साथ.
बढ़िया हेल्थ स्विप निकाली वहां पर और उसके बाद कंटिन्यू पनिश रखा। यहाँ पर शायद मोमेंटम गेन करना चाहते हैं, मोमेंटम बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन दोबारा से देखिए एक विप निकाला, उन्होंने मूव छोड़ा और इंस्टेंटली लॉन्चर देखने को मिला। वॉल तक गए लेकिन इनको कोई फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि कैमरा एंगल उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। वॉल फ्लैट मिलता हुआ ये शायद यहाँ पर जो है वो एक फ्लोर ब्रेक देखने को मिल सकता था, लेकिन थोड़ा सा कॉम्बो कन्वर्जन यहाँ पर डिफरेंट देखने को मिला है। पूरा ट्राई कर रहे हैं, अगर वो जो एक लो पोक कर रहे हैं ना ये अगर काउंटर पे लगता है तो वहां से कॉम्बो पिक की जा सकती है वरुण। जी हाँ, और वो कॉम्बो पिकिंग के अलावा भी तेजन जिस तरह से मूवमेंट्स देखिए कितनी ज्यादा ऑन पॉइंट है। एग्जैक्टली पता होता है कहाँ से अटैक आएगा और साइड स्टेप करके इंस्टेंटली वो जो एक उन्होंने जैब मिस कराया था आरकूल की तरफ से, वो बहुत ज्यादा क्रूशियल था उनको लो ड्रॉप करने के लिए। अब काफी ज्यादा पीछे नॉक बैक तो कर सकते हैं और बहुत अच्छा पावर क्रश, बढ़िया यहाँ पर वॉल जंप मिला। डेफिनेटली यहाँ पर फ्लोर ब्रेक होगा, फुल ब्रेक हो चुका है। एक और वॉल स्प्लैट देखिए, नॉर्मल कॉम्बो में भी आप डैमेज देखिए बिल्कुल यहाँ पर डेड एंड तक लेकर आए एंड फाइनली KO होता हुआ सेकंड राउंड यहाँ पर सेकंड गेम का निकालते हुए। तेजन काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं यहाँ पे अपने ओपोनेंट को। आरकूल बहुत ही अनकंफर्टेबल, बहुत ज्यादा मुश्किलों में। ये एक ओपनिंग हो सकती है इनके लिए, देखते हैं कि कॉम्बो एक्सटेंड कर पाएंगे या नहीं। जाने की कोशिश, ड्रॉप अभी भी नहीं किया, वॉल स्प्लैटर मिल जाएगा एंड हिट के साथ आता है फ्लोर ब्रेक एंड देयर इट इज। गणेशा के दर्शन आपने कहे थे विशाल आपको करने, हो चुके हैं अब। जी हाँ, फाइनल फ्लोर आपका ब्रेक हो चुका है एंड राउंड भी यहाँ पर निकल चुका है। अब किसी भी तरीके का कोई हमें फ्लोर ब्रेक देखने को नहीं मिलेगा, अब सिर्फ और सिर्फ हमें वॉल कॉम्बो देखने को मिल सकती है। ये राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए। अच्छा वहाँ पर होमिंग मूव चलाया लेकिन किसी भी तरीके का कोई फायदा नहीं, ग्रैब पर गए, इंस्टेंटली वहाँ पर थ्रो ब्रेक देखने को मिला। ओहो बढ़िया यहाँ पर डाउन 1+2 का स्ट्राइक मारते हुए बेहतरीन। यहाँ पर कई बार प्लेयर अगर काउंटर में खाता है तो वहाँ पर कॉम्बो भी मिलती है, लेकिन फिलहाल कॉम्बो तो नहीं मिली बट अच्छा डैमेज मिलता हुआ। लाइफ लीड अवेलेबल है, ये गेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आरकूल के लिए क्योंकि एक गेम से ऑलरेडी आगे चल रहे हैं। बैक फोर बढ़िया यहाँ पर पिकअप हो सकता था, नो ब्रेकर इंस्टेंटली फॉरवर्ड फॉर 2 बढ़िया यहाँ पर स्ट्रिंग बैक टू बैक देखने को मिल रही है तेजन भाई की तरफ से। हल्की सी डैमेज बची हुई है एंड फाइनली यहाँ पर ये थ्रो ब्रेक नहीं किया गया, शायद ग्रैब यहाँ पर थ्रो ब्रेक करना चाहिए था वहाँ पर और गेम खत्म होता हुआ। बैक टू बैक सेकंड गेम भी तेजन भाई के खाते में जाता हुआ। आई मीन अब बिल्कुल स्टेटमेंट यहाँ पर क्लियर कट हो चुकी है कि ब्रैकेट रीसेट आने वाला है। आई कंप्लीटली एग्री, बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। क्या परफॉर्मेंस निकाल रहे हैं तेजन, बट आरकूल ने भी काफी कड़े टक्कर दी, मैं बोलना चाहूंगा। फर्स्ट सेट की तरह नहीं था ये, सेकंड सेट में आरकूल काफी ज्यादा कंफर्टेबल लग रहे थे और तेजन का जो पेस है मैं बोलना चाहता हूँ, आपने जो मेंशन करी थी कि एक अच्छा काउंटर ये रह सकता है कि आप बिल्कुल स्पेस ना दे, चेन आफ्टर चेन आप लगाते रहे, उनके विफ्स निकाले और पनिश करें उनको उन चीजों के लिए। तेजन वो चीज काफी अच्छे से कर रहे थे और काफी तेजी से कर रहे थे। वो अग्रेशन जो था वो आई थिंक यहाँ पे आरकूल को थोड़ा सा और कंफर्टेबल लगे वो उस पेस को मैच करने में। तीसरे सेट में क्या वो अगर और कंफर्टेबल हो जाते तो कमबैक की एक उम्मीद हमारे पास रह सकती है। वेल देखिए लीरॉय एक ऐसा कैरेक्टर है जो गेम आपका कहीं से भी कहीं चल सकता है क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा उनके पास ऐसे टूल्स अवेलेबल है। सपोज दैट अगर नॉर्मल कॉम्बो भी नहीं मिल रही है तो पोकिंग में भी वो इतनी डैमेज लेकर जा सकते हैं कि आपको कॉम्बो की जरूरत ही नहीं है। बट डिपेंड करता है कि आपका अपोनेंट जो है वो ब्लॉक कर रहा है या नहीं कर रहा है। एंड ऑब्वियसली जब अपोनेंट यहाँ पर तेजन भाई जैसा हो तो डिफेंसिव गेम भी उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, काफी अच्छे ब्लॉक्स देखने को मिल रहे हैं। एंड ये वरुण यही होता है फाइटिंग गेम में, जब दोनों टक्कर के अपोनेंट होते हैं तो ब्लॉकिंग के साथ साथ गेम उसी के फेवर में जाती है जो पनिश करना अच्छे से जानता है, क्योंकि अब वो गलती करेंगे, कोई भी बड़ा मूव नहीं चलाना चाहता। उनको पता है अगर विफ हुआ तो पनिश मिलेगा, लॉन्च मिलेगा, बड़ा मूव ब्लॉक हो गया तो उतना ही फ्रेम का जो है वो लॉन्चर मिल जाएगा। इसीलिए बड़े मूव्स पे ज्यादा ना फोकस करके पोकिंग की गेम ज्यादा देखने को मिलती है। और बस वही पोकिंग में अगर आपने ब्लॉक कर लिया, पनिश मार दिया तो ऑब्वियसली धीरे धीरे जब हेल्थ कम होती जाती है ना तो मेंटल प्रेशर अपने आप क्रिएट होता चला जाता है। बिल्कुल सही बताया आपने विशाल। बट इसी के साथ यहाँ पे तीसरे सेट की तरफ हम बढ़ चुके हैं और हिट्स ट्रेड होते हुए वहाँ पे डैमेज तो अब तेजन को भी पड़ा है काफी ज्यादा। और पोकिंग का गेम जैसे आपने बताया, आई मीन एक रीजन तो वो भी रहता है कि आपने भी वही बात करी थी कि पनिशेस प्लेयर्स अच्छे से करना जानते हैं और छोटी से छोटी गलती ये जाने नहीं देते तो लोग रिस्क कम लेना प्रेफर करते हैं। बट यहाँ पे तेजन की तरफ से एक लॉन्चर आता हुआ, कैरी तो कर लेंगे, लेट्स सी। नहीं, बॉल थोड़ा सा रह गई थी वहाँ पे। एंड पहला राउंड देखिए कितनी आसानी से उन्होंने निकाल दिया है। हाफ एल से भी ज्यादा का उनको पास जो लाइफ लीड अवेलेबल थे। सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ, बढ़िया यहाँ पर बेहतरीन अच्छा पिकअप मिलता हुआ। बॉल काफी पीछे है, ओहो अच्छा ट्राई किया, कॉम्बो कन्वर्जन अच्छा निकाला उन्होंने। अगर सपोज थोड़ी सी भी बॉल पीछे होती यहाँ पर तो डेफिनेटली बॉल स्प्रेड उनको मिल सकता था, लेकिन ओहो बॉल जंप मिलता हुआ प्लस बॉल स्प्रेड भी मिलेगा यहाँ।
पर पावर अनब्रेक करता हुआ। ये एक्चुअली वरुण ये सेटअप होते हैं जो आपको टाइमली मारने होते हैं। आई मीन आपको टाइम निकालना पड़ता है उस चीज का कि ये सेटअप लगेगा आपको। अगर आपने सही टाइम पर वो ट्रिगर किया तो डेफिनेटली आप लीड देख सकते हैं। हल्की सी हेल्थ अवेलेबल है एंड ऑब्वियसली जब आपकी लो हेल्थ होती है तो जैसा कि मैंने आपको बताया था मैक्सिमम टाइम प्लेयर जो है वो लो को ब्लॉक नहीं करते हैं क्योंकि हाई का डैमेज रहता है। डेफिनेटली आई मीन वो डैमेज ही बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है क्योंकि जैसा आपने बोला थोड़ा सा डैमेज करके भी प्लेयर्स अपने लिए बहुत एडवांटेज क्रिएट कर लेते हैं, प्रेशर बनाते हैं दूसरे अपने ओपोनेंट के ऊपर। बट यहाँ पे एक लो कनेक्ट होता हुआ एक और आता हुआ आरकूल की तरफ से तेजन थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आरकूल किस हिसाब से यहाँ पे आएंगे, बट ये एक ओपनिंग हो सकती है। आई थिंक यस दैट इज इट। डेफिनेटली एक ओपनिंग मिलती हुई यहाँ पर और देखिए पूरी कॉम्बो यहाँ पर डैमेज कितना प्यारा जाता हुआ रेस पर ला दिया। रेस ड्राइव भी इंटरप्ट हो चुकी है यहाँ पर। एक मौका जो हो सकता था आरकुल के लिए फिलहाल छीन ले गया है। ग्रैब आता हुआ +2 का लेकिन फाइनली यहाँ पर ग्रैब ब्रेक इंस्टेंटली यहाँ पर ओ हो बैकफोर बेहतरीन तरीके से 3 स्ट्रेट राउंड आई मीन 3 स्ट्रेट गेम वरुण बैक टू बैक। लाइक ब्रैकेट रीसेट में कई बार ऐसा होता है कि फाइनल गेम हमें देखने को मिलता है यानी कि 2-2 का स्कोर होता है, उसके बाद 5वां गेम जो है वो देखने को मिलता है, वो भी नहीं देखने को मिला है। चलिए हमारे जो तीसरे मित्र हैं उनको भी जल्दी से बुलाते हैं। डैन कम हियर। ओके डैन इज हियर। डैन क्या कहना है? डैन इज लाइक कंफ्यूज्ड व्हाट हैपेंड। Hey, I mean, confused नहीं, I'm just remarking कि क्या solid play दिखाया तेजान ने आसुका के साथ लीरॉय के अगेंस्ट। हर एक ऑप्शन को उन्होंने पोक किया, हर एक ऑप्शन को मतलब एकदम रिस्ट्रिक्ट कर दिया लीरॉय के प्ले को। आप कह रहे थे विशाल कि लीरॉय के पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे टूल्स है, लेकिन इस मैच में हमें कोई टूल्स देखने को नहीं मिले बिल्कुल भी। और जितना ट्राई किया उन्होंने पनिश अटेम्प्ट करने का भी, काउंटर का भी, तो रेडी तेजान विद द मूनसॉल्ट के साथ रेडी टू गेट ऑल दैट डैमेज। बहुत उन्होंने दिखाना पड़ेगा अभी आरकूल बिकॉज़ तेजन इज रनिंग अवे फ्रॉम इट। वेल तेजन हमसे भी काफी ज्यादा तेज चल रहे हैं, बट चलिए डैन एक बार आपसे फिर मिलेंगे। अभी थोड़ी देर पहले आई मीन एक वर्ड आया था हमारे पास कि मैच स्टार्ट होने वाला है, तो चलिए जल्दी से मैच की तरफ भी बढ़ते हैं। हमारी जो अगली सीरीज रहेगी इन दो प्लेयर्स के बीच में और देखते हैं कि क्या सिचुएशन होने वाली है आगे वाले सेट के लिए। सेट रीसेट यहाँ मिल चुका है विशाल। ये रहेगा हमारा आखिरी जो मैचअप है बिटवीन दीज टू। फाइनल तेजन ने ब्रैकेट रीसेट कर दिया और आखिरी इनको BO5 जीतना है। ब्रैकेट रीसेट हो चुका है एंड रीसेट करने के बाद भी देखिए मोमेंटम ऑलरेडी उनका बना हुआ है क्योंकि 3 गेम वो निकाल चुके हैं, तो उनका मोमेंटम तो अब ब्रेक करना यहाँ पर बहुत मुश्किल होने वाला है। क्योंकि एक चीज यहाँ पर जो अभी डैन ने मेंशन की थी, लाइक लीरॉय के पास टूल अवेलेबल है, तो मैं बस एक ये कहना चाहूंगा कि अगर लीरॉय के पास टूल्स अवेलेबल है तो हमारे तेजन भाई के पास बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस अवेलेबल है। I mean, definitely एक्सपीरियंस को वो काफी अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। डैन ने भी एक्सप्लेन किया था कि पूरा टूल किट जो है लीरॉय का वो खाली कर दिया है इन्होंने। I mean, सारे टूल्स निकाल के फेंक दिए बाहर और उसके बाद अब ये जो हमारे को डोमिनेशन देखने को मिल रही है तेरी तरफ से वो अलग ही लेवल पे। ओ इस बार भी इंटरप्ट कर सकते थे, कोशिश हुई थी साइड स्टेप की अवॉइड करने के लिए, बट अब रेज जो है तेजन के पास अवेलेबल है, यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिनिश आता हुआ 2 राउंड यहाँ पर स्ट्रेट निकाल दिए। ब्रैकेट रीसेट करने के बाद बेहतरीन गेम जाता हुआ है यहाँ पर। तेजन भाई काफी अटैकिंग खेल रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल मौका नहीं देना चाहते हैं आरकुल को। कोशिश जरूर करें आरकुल के द्वारा, ऐसा नहीं है कि वो ट्राई नहीं कर रहे, लेकिन पोकिंग का गेम देखिए, पोकिंग से ही हाफ हेल्थ ऑलमोस्ट कर दिया, 40% हेल्थ यहाँ पर निकाल दी गई है एंड सेम यहाँ पर ट्राई किया जा रहा है आरकुल के द्वारा। भाई क्या मुझे लग रहा है कोई कॉम्बो निकलेगी या फिर ये गेम जब वो पूरा पोकिंग में जाने वाला है। ब्लॉक जरूर कैन फाइनली यहाँ पर लॉन्चर निकालता हुआ, बढ़िया बैकनेस इंस्टेंटली लॉन्च आता हुआ स्क्रू पर लेकर गए, बॉल तक जाएगी, बॉल फ्लैट पे लगा, ये खत्म होने वाला है डेफिनेटली सबके। ओ तेजन ब्रैकेट रीसेट 3 गेम, उसके बाद जैसे ही ये ग्रैंड फिनाले 2 स्टार्ट हुआ, आई मीन 3 स्ट्रेट राउंड। एक जो होती है ना स्टेटमेंट जो यहाँ पर हमने उनके इंटरव्यू में देखी थी, उन्होंने एकदम क्लियर बोला था कि मैं टूर्नामेंट में आता हूँ तो मेरा एक ही लक्ष्य रहता है कि वो टूर्नामेंट की ट्रॉफी जो है वो मेरे घर पे आएगी। और आज वो जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, भले ही वो लोअर ब्रैकेट से ऊपर की तरफ आए हों, लेकिन जो डोमिनेशन देखने को मिल रहा है, आई मीन 3 स्ट्रेट राउंड, सबसे पहले ब्रैकेट रीसेट, उसके बाद जब ब्रैकेट रीसेट हो चुका है 3 स्ट्रेट, आई मीन अग्रेशन लेवल देख रहे हैं आप वरुण उनका। एग्जैक्टली आई मीन मैं भी काफी शॉक्ड हूँ, रुकने का नाम नहीं लेते। और एक पॉइंट ऐसा अगर निकल के आता है गेम के अंदर जब हमें लगता है कि ओ अब तेजन से गलती हो गई, आरकुल के पास ओपनिंग है, आरकुल ने कनेक्ट भी कर लिया वहां पे, बट नहीं, तेजन रिकवर भी बहुत तेज करते हैं। अगर स्ट्रिंग्स वहां पे कनेक्ट हो रही है आरकुल की तरफ से, तब भी तेजन के पास हेल्थ एडवांटेज इतना बड़ा रहता है कि फुल कॉम्बो पड़ने के बाद भी वो बच जाते हैं।
डेफिनेटली यही तो बात है, और फाइटिंग गेम की यही खास बात भी है कि आप कई बार छोटी सी हेल्थ में जो है वो पूरे प्लेयर को एलिमिनेट कर देते हैं, पूरे प्लेयर को केओ कर देते हैं, और कई बार जो है वो आपके पास पूरी हेल्थ भी अवेलेबल रहती है लेकिन सामने वाला आपको निकाल कर चला जाता है। जैसे कि 3 राउंड 3 मौके मिले यहाँ पर आरकुल को, और तीनों स्ट्रेट राउंड तेजन ने कहा कि ओके कोई बात नहीं, ब्रैकेट रीसेट हो चुके हैं, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, हम अब भी नॉर्मल लूजर ब्रैकेट खेलेंगे। में आ चुके हैं। जी हाँ, हम भी लूजर ब्रैकेट में आ चुके हैं और आपको भी हम लूजर ब्रैकेट में लेकर आ चुके हैं। लेट्स गो, अब देखते हैं क्या होता है। एग्जैक्टली अब क्या होता है, आई मीन देखना क्या है, दिखा ही रहे हैं हमें और हम भी दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को। चलिए मैच नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 1-0 की लीड यहाँ पे आ चुकी है तेजन के पास। पहला अटैक यहाँ पे आरकुल की तरफ से कनेक्ट होता है, पर एक बहुत ही बेहतरीन ब्लॉक तेजन का। एंड एक चीज यहाँ पर और मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, लाइक जिस तरीके से अभी हमने ग्रैंड फिनाले 1 देखा था, एक गेम हारे थे, उसके बाद सेकंड स्टेज हमें यही देखने को मिली थी, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर आरकुल की ये फेवरेट स्टेज है, और जब भी वो हारते हैं स्टेज को वो पिक करते हैं। एंड ऑब्वियसली उनका प्लेयर इस तरीके का है कि उनके पास ऐसे टूल्स अवेलेबल है, फ्लोर ब्रेक के बाद वो बेहतरीन डैमेज, बढ़िया वॉल पिकअप, डेफिनेटली पहला राउंड आने वाला है। अपनी स्टेज का एक ये भी होता है कि अगर चीजें आपके फेवर में हो तो आपका मोरल अपने आप ही ऊपर पहुंच जाता है। डेफिनेटली आई मीन मोरल ऊपर लेकर जाना भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर प्रेशर की आपने बात करी थी, अगर आप राउंड ही नहीं निकाल पा रहे तो प्रेशर बहुत रहता है, लेकिन अगर आप राउंड्स निकाल लेते तो फिर वही होता है कि ठीक है 3 जीतने थे, मैंने 1 जीत लिया, अब मेरे को 2 और निकालने हैं, अब 2 जीत लिए, 1 राउंड और चाहिए बस। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आरकुल को कूल रह के खेलना पड़ेगा, वरना तेजन तो बहुत ही ज्यादा आई मीन फास्ट पेस्ड एक्शन हमारे को दिखा रहे हैं। ओहो, फ्रेम एडवांटेज, आई मीन वरुण देख रहे हो, हल्की सी हेल्थ बची थी, उनको पता था कि रेज ड्राइव मारेंगे, फ्रेम एडवांटेज मिलेगा, उसके बाद 50 के मिक्स में फंसाएंगे, और अभी यहाँ पर आरकुल फिलहाल मुसीबत में लग रहा है। बढ़िया टो ब्रेकर, इसके साथ जवाबी हमला यहाँ पर डाउन 1+2 इंस्टेंटली यहाँ पर फ्लोर ब्रेक देखने को मिला है। बढ़िया कॉम्बो पिकअप करते हुए 2-1 की अच्छी स्ट्रीक वहाँ पर लगाते हुए बेहतरीन गेम प्ले का नजारा यहाँ पर देखने को मिला है आरकुल के द्वारा। ये राउंड उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली ये गेम भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक गेम को जो है वो हार चुके हैं। बढ़िया पावर ब्रेक यहाँ पर डेफिनेटली आरकुल के, लेकिन उसी के जवाब देते हुए ऑर्बिटल के साथ यहाँ पर सेकंड राउंड यहाँ पर आरकुल के खाते में जाता हुआ। काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आरकुल की तरफ से आ रहा है। तेजन को फाइनली एक ऐसा लग रहा है कि आरकुल कमबैक कर सकते हैं इसके अंदर। अभी एक नया ब्रैकेट है, दिस इज इट, ये जो सेट है, ये जो मैचअप है, ये आपको जीतना है, और उसके बाद आरकुल जो है एक अच्छी आई मीन एक फिनिश निकाल सकते हैं अपने ऊपर। तेजन का लो पैरी वहां पे आता हुआ, और आरकुल को पूरा वॉल कैरी करके ले जाएंगे, ब्रेक और फ्लोर, और फिर कॉर्नर के साथ प्रेशर बहुत ज्यादा बना रखा है, ओपनिंग नहीं देंगे, और परफेक्ट निकालते हुए तेजन अपने लिए 2-2 फाइनल राउंड तक आ चुके हैं हम हमारे दूसरे मैच के अंदर। सेकंड गेम का यहाँ पर फाइनल राउंड आ चुका है, और जिस तरीके से परफेक्ट निकाला, बहुत खतरनाक स्टेट में यहाँ पर जाते हुए ट्राई काफी अच्छा किया गया, वहाँ पर देखना पड़ेगा। ओहो, अच्छा ब्लॉक इंस्टेंटली पनिश करते हुए, डेफिनेटली वहाँ पर फॉलो अप भी किया गया बहुत प्यारे तरीके से, लेकिन इनकी तरफ से भी पनिश निकलता हुआ। फॉरवर्ड 1+2 का कॉम्बो मारना चाहते थे लेकिन लगा नहीं, एंड इसी के साथ कैन आती हुई ये एक अच्छा डैमेज होगा यहाँ पर। डैमेज देखिए, आप बस डैमेज पर फोकस कीजिए वरुण इस बार, क्योंकि पीछे वॉल भी है, अभी फ्लोर ब्रेक भी देखने को मिलेगा, फिर से वॉल स्प्लैट मिलेगा। ओह नो, थोड़ा सा कॉम्बो यहाँ पर कन्वर्जन, लेकिन फेवर में जाता हुआ फाइनली यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू निकालते हुए। आई मीन इतने गेम जो है वो लगातार हारने के बाद सबसे पहले 3 गेम का स्ट्रेट जो है वो ब्रैकेट रीसेट, उसके बाद जब लूजर दोबारा से स्टार्ट हुआ, ग्रैंड फिनाले 2 हमारा दोबारा से स्टार्ट हुआ, पहला गेम 4 गेम हारने के बाद अब यहाँ पर फाइनली आरकुल जो है वो वापसी करते हुए। एंड ये अच्छी न्यूज है उनके लिए कि एटलीस्ट चलिए एक जो है वो 1 का स्कोर बोर्ड उनके खाते में आता हुआ। जी हाँ, बराबरी कर चुके हैं वो तेजन की इस फाइनल ग्रैंड फिनाले 2, जैसा आपने बोला, क्योंकि ब्रैकेट रीसेट तो कर दिया था तेजन ने, और उसके बाद एक सेट भी जीता, अगला सेट आरकुल ने निकाल लिया 1-1। आई मीन मजे बहुत आ रहे हैं, लेकिन हर राउंड के साथ, हर मैच के साथ इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ती जा रही है यहाँ पे। और अब बस ये देखना होगा कि कौन सा वो ऐसा एक पॉइंट रहेगा, जैसा आपने बोला मेंटल प्रेशर की वजह से टिल्ट हो जाते हैं प्लेयर, तो उसके बाद डिसीजन जो होते हैं वो खराब होते चले जाते हैं, तो वो कौन सा पॉइंट होगा दोनों प्लेयर्स के लिए जहाँ पे वन ऑफ देम क्रैक्स, और फिर वहां पे एक ऐसा डिसीजन आएगा उनकी तरफ से जो पूरी बाजी पलट के रख देगा। वेल इस बारे में मैं एक चीज यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूंगा, क्योंकि तेजन भाई की अगर मैं बात करूँ तो वो इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो इंडिया को टेकन 7 के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरीके की हार्ड सिचुएशन वो पहले भी फेस कर चुके हैं, ना सिर्फ इंडियन टूर्नामेंट में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर। तो उनका जो माइंड सेट है, उनको पता है कि इस हार्ड सिचुएशन में किस तरीके से डील करना है, एंड ये एक्सपीरियंस ही उनका काम आता हुआ। लाइक आप लूजर ब्रैकेट में आपको 2 बार एक ही प्लेयर को जो वो 6 गेम हराने हैं, आई मीन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो प्लेयर भी काफी सारी
सारे प्लेयरों को हराते हुए फिर ग्रैंड फिनाले में पहुंचा है। तो ऑब्वियसली ऐसे तो वो नहीं पहुंचा होगा क्योंकि 8 क्वालिफायर्स हुए थे, इतने सारे ब्रैकेट्स हमने देखे थे, उसके बाद टॉप 16 का प्ले ऑफ देखा एंड फाइनली ग्रैंड फिनाले हम विटनेस कर रहे हैं। तीसरा गेम स्टार्ट हो चुका है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर दोनों ही प्लेयर्स के लिए। बढ़िया लो पैरी आते हुए डाउन 2 के लिए गए थे वहां पर, लेकिन अच्छा लो पैरी स्टैंडली स्क्रू पर लेकर गए, बॉल भी पीछे, अच्छा बॉल स्टार्ट मिलेगा, अच्छा कॉम्बो पिकअप। आई मीन वरुण, इससे बेहतर स्टार्टअप नहीं हो सकता है तेजन के लिए। जी हाँ, इससे बेटर स्टार्ट नहीं हो सकता। आरकूल के लिए डिसएडवांटेज था, बट आपने भी कहा था एक अच्छा लीडर प्लेयर एक छोटे से डिसएडवांटेज के साथ भी खेल सकता है। बट तेजन के प्लान बहुत ही अलग, पहला राउंड क्लोज आउट करते हुए चलिए दूसरे राउंड की तरफ एकदम से बढ़ते हैं और तेजन एक बार फिर से शुरुआत कर रही है कोशिश, बट लीरॉय की तरफ से लॉन्चर यहाँ पे आता हुआ और कॉम्बो तो कनेक्ट कर लेंगे, बट लेट्स सी क्या इन्हें स्प्लैटर मिलेगा पीछे की नहीं। यस, मिल तो चुका है और उसके बाद स्ट्रिंग्स यहाँ पे काफी अच्छे से आरकूल कनेक्ट कर रहे हैं। तेजन वापस कम बैक करने की कोशिश करते हुए मैच के अंदर डेफिनेटली वापसी करनी पड़ेगी उनको। पहला राउंड उन पास है, लेकिन ऑर्बिटल लगता हुआ पीछे वॉल भी, आई थिंक ये खत्म होना चाहिए। बढ़िया कॉम्बो, बढ़िया राउंड यहाँ पर वापसी करते हुए 1 गेम अपीस, 1 राउंड अपीस। लेट्स सी क्या आगे होने वाला है। वेल अभी पता चल ही जाएगा। आरकूल राउंड में भी बराबरी कर चुके हैं। अभी इंटेंसिटी तो हर एक सेकंड के साथ बढ़ रही है इस मैचअप की। फाइनल्स लेडीज एंड जेंटलमैन, ग्रैंड फाइनल्स 2 ऑफ KO फाइट नाइट सीजन 5 टेकन 7 हमारा जो सेगमेंट चल रहा है उसका। इन दोनों में से एक प्लेयर यहाँ पे चैंपियन बन के बाहर जाएगा और दूसरे प्लेयर को सेकंड प्लेस रनर अप के खिताब से ही जो है सैटिस्फाई होना पड़ेगा। वेल देखना पड़ेगा। अभी गेम काफी अच्छे तरीके से वापसी करने की कोशिश की गई, लेकिन हल्का सा एक गलती और गलती की सजा, इतना सारा डैमेज यहाँ पर जाता हुआ बेहतरीन तरीके से पिकअप किया एंड देखना पड़ेगा क्या होने वाला। हल्की सी हालत बची हुई यहाँ पर, पूरा ट्राई किया, लोग इंस्टेंट ब्लॉक करते हुए, लेकिन फाइनली यहाँ पर डाउन 2 के साथ गेम निकालते हुए सेकंड राउंड यहाँ पर जाता हुआ। देखना पड़ेगा ये फाइनल राउंड हो सकता है तेजन के लिए या फिर वो एक फाइनल राउंड तक इस गेम को लेकर जाएंगे। डेफिनेटली आई मीन कोशिश तो ये रहेगी फाइनल राउंड तक ले जाने की। हमें भी मजा आ रहा है काफी ज्यादा देखने में, अभी उसी चीज की उम्मीद करेंगे। बट देखिए छोटे छोटे चिप डैमेज के साथ ही आरकूल काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, एक भी बार कमिट नहीं कर रहे पूरे कॉम्बो चेन के लिए जाने के लिए, और बस वो छोटे छोटे चिप के साथ इन्होंने तेजन को बहुत ही ज्यादा बैकफुट पे पुश कर दिया है। डेफिनेटली बहुत ही प्यारा गेम प्ले चलता हुआ है यहाँ पर। अच्छी सी हल्की सी हेल्प बची हुई है यहाँ पर, मुझे लग रहा है आरकूल यहाँ पर वापसी करते हुए, लेकिन तेजन इंटरप्ट करते हुए इंस्टेंटली ग्रैब लिया, लेकिन ब्लॉक होता हुआ टो ब्रेकर भी देखने को मिला था। अच्छा ब्लॉक है, इंस्टेंटली पनिश करते हुए यहाँ पर सेकंड गेम यहाँ पर। आई मीन ये एक स्टेटमेंट हो सकती है, दोबारा से वापसी कर चुके हैं वरुण, वो गेम में वापसी उनकी होती हुई नजर आ रही है। आई मीन 4 गेम अगर आप स्ट्रेट हार जाते हैं और उसके बाद जब आपको पता है कि अब ऐसी सिचुएशन आ चुकी है, अब तो गेम निकालना ही पड़ेगा, वरना ये जर्नी जो अभी तक आपने की है वो पूरी बेकार हो जाएगी। और लीजिए 2 गेम निकाल दिए उन्होंने। अब उन्होंने तेजन भाई को दोबारा से जो है वो एक मेंटल प्रेशर क्रिएट कर दिया है उनके लिए। आई मीन वही एक चीज है, ये प्रेशर का जो गेम रहता है ना वो बहुत ही पेचीदा होता है। हल्का सा आप जीत रहे होते हैं, अब ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में हमने बड़े बड़े खिलाड़ियों को मार खाते हुए देखा है, और यहाँ पे आरकूल आई थिंक एक रियलिटी चेक दे रहे हैं। जैसा आपने बोला था विशाल की आपका जो ओपोनेंट है वो भी बहुत ही एक बड़ी जर्नी तय करके आया है, अपर ब्रैकेट से ऊपर से आ रहे हैं। एडवांटेज था उनको सेट्स के टर्म्स में। आई मीन उनको सिर्फ 3 राउंड जीतने थे, वहां पे तेजन को जैसा आपने बताया 6 सेट जीते थे, आरकूल को 3 जीते थे, तो उस चीज का एडवांटेज तो रहता है, प्लेयर थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन ये जो प्लेयर थे हमारे आरकूल, इन्होंने बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स, आई मीन लवनीत को इन्होंने ही लोअर ब्रैकेट में पहुंचाया था वो पांडा पिक के साथ, और बहुत ही इंटेंस इनकी भी जर्नी रही थी। तो थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल तो रहना पड़ेगा तेजन को भी, और वो चीज आई थिंक आरकूल काफी अच्छे से दर्शा रहा है। डेफिनेटली। और एक चीज मैं यहाँ पर और आपको इंक्लूड करना चाहूंगा यहाँ पर वरुण, कि अब ये जो गेम आने वाला है वो डू और डाई सिचुएशन है तेजन भाई के लिए। अगर हारे तो रनर अप, जीते तो तीसरा गेम देखने को मिलेगा। जी हाँ, आई मीन 5th गेम देखने को मिलेगा, सॉरी। अभी 5वां गेम तक हम जाएंगे, और जैसा आपने कहा कि डू और डाई, करो या मरो वाली बात आ चुकी है इस सेट के अंदर। तेजन एक अच्छी शुरुआत करते हुए, अभी कॉम्बो तो पूरा पड़ेगा, थोड़ा सा और दूर ले जाने की कोशिश, बट दीवार हल्की सी दूर रह गई, स्प्लैटर वहां पे नहीं मिला। अभी के लिए यहाँ पे आरकूल की तरफ से एक कमबैक देखने को मिल रहा है हमें पर। डेफिनेटली वापसी यहाँ पर बहुत प्यारी कर ली गई है। 2 गेम स्ट्रेट उन्होंने निकाल दिए है। इस गेम में भी काफी अच्छी लाइफ लीड बरकरार रखी हुई है उन्होंने, लगातार प्रेशराइज किया जा रहा है। एंड फाइनली यहाँ पर तेजन देखिए अग्रेसिव देखने को मिल रहे हैं, अग्रेसर उनका देखने को मिल रहा है, घुसते जा रहे हैं, वो मौका नहीं दे रहे, स्पेसिंग बनाने का मौका नहीं दे रहे हैं यहाँ पर आरकूल को। हल्की सी हेल्थ बची हुई और पूरा फायदा मिला। अब तेजन अपने नेचुरल गेम पर आ चुके हैं कि मौका नहीं देना है किसी भी हालत में।
एग्जैक्टली जहां पे मौका मिलता है तो देखिए आरकुल ऐसी हरकतें करते हैं, एक अच्छा कमबैक देखने को मिलता है, लो आते दो तो तेजन की तरफ से और अब वापस क्लोज एंड पर्सनल होते हैं आरकुल के साथ। आरकुल पीछे डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हुए, डैमेज हेल्थ एडवांटेज तो उन्होंने अपने लिए गेन कर ही लिया है, बट तेजन अभी भी ओपनिंग ढूंढने की कोशिश, और नो ये आरकुल के लिए अच्छा हो सकता है, बट नहीं, तेजन की तरफ से लॉन्चर आता हुआ और अब ये फुल कॉम्बो तो ड्रॉप नहीं करना चाहेंगे डेफिनेटली। और वहाँ पर सेटअप भी आ रहा था, अगर वो उठते तो अनब्रेकेबल आता, लेकिन वो उठे नहीं, इसीलिए वहाँ पर कैंसिल किया गया। मूव कैंसिलेशन बहुत प्यारा, अच्छी लो पैरी, ओ नहीं ये लो पैरी बहुत प्यारी थी, लेकिन कॉम्बो ड्रॉप होती वहाँ पर पूरी कॉम्बो लगती तो डेफिनेटली एक राउंड उनके फेवर में आ सकता था, क्योंकि वो ऑलरेडी रेस में अवेलेबल थे। जी हाँ, अभी देखिए ऑल राइट एक ओपनिंग हो सकती है यहाँ पे आरकुल के लिए, काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस। तेजन को कॉर्नर में ले जा चुके हैं, बॉल पीछे से पड़ रही है उनके, बट तेजन रिकवरी करने में उस्ताद है और कमबैक की अपॉर्चुनिटी कभी भी आ सकती है। आरकुल के ऊपर प्रेशर इसलिए भी रहेगा क्योंकि 2 राउंड्स ऑलरेडी हार चुके हैं, इस बार कमबैक करने की अपॉर्चुनिटी, एक और लॉन्चर आता हुआ, कॉम्बो ड्रॉप नहीं करना है किसी भी हालत में। तेजन मुश्किलों में आते हुए और आरकुल निकालेंगे परफेक्ट, एक बहुत ही बेहतरीन कमबैक, 2-1 राउंड्स के फेवर में वो भी चल रहे हैं। लेट्स सी क्या कमबैक करके आरकुल यहीं पे क्लोज करेंगे। मैं बहुत जल्दी चीजें बोल देता हूँ, तेजन यहीं पे जवाब देते हुए बहुत अच्छी वापसी यहाँ पर आती हुई तेजन भाई की तरफ से, एंड आरकुल ने जिस तरीके से लास्ट राउंड में कॉम्बो कन्वर्जन किया था वो बहुत ही शानदार था। अगर एक हल्की सी भी गलती होती तो वहाँ पर राउंड जा सकता था। अच्छी ऑर्बिटल लो क्रश करते हुए यहाँ पर बेहतरीन मूव निकालते हुए, लेकिन फाइनली कॉम्बो ड्रॉप होती हुई, एंड कैन के साथ एक और यहाँ पर लॉन्चर आता हुआ, मे भी यहाँ पर हमें रेज आर्ट देखने को मिल सकती है। बॉल तक लेकर गए और इसी के साथ रेज ड्राइव में भी एक और देखने को मिलेगा, अच्छा डैमेज आता हुआ वहाँ पर 50-50 में फंसाया जाएगा, उनको मौका नहीं देना चाहेंगे यहाँ पर। अगर मौका दिया बॉल पर देखना जाएगा, अगर रेज ड्राइव भी आती है तो भी यहाँ पर आरकुल को फायदा मिल सकता था, लेकिन रेज ड्राइव मारने का मौका तक नहीं दिया वहां पर तेजन ने। आई मीन जितना वो प्रेशराइज कर सकते थे, जितना अग्रेशन वो दिखा सकते थे, इस राउंड में हमें देखने को मिला है। मौका तक आप सोचिए कि एक सामने वाले प्लेयर को जो अब अगर आप रेज ड्राइव या रेज आर्ट मौका तक नहीं देते हैं ट्रिगर करने का, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना आप पे जो है वो प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। डेफिनेटली काफी ज्यादा प्रेशर उन्होंने बिल्ड किया था और उस चीज का एडवांटेज भी उनको ही मिल रहा था, बट अब यहाँ पे आई मीन बहुत ज्यादा क्लोज हो चुके हैं और बहुत इंटेंसिटी आई मीन हाई हो चुकी है। आखिरी क्या होने वाला है इसमें सिनेरियो में? वेल आई डोंट नो, और मुझे लग रहा है कि आखिरी से पहले एक बार अगर डैन हमारे एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए भी, हम कास्टर्स के लिए आसान हो जाता है, क्योंकि एनालिस्ट जो है वो एक बढ़िया एनालिटिकल दे देते हैं, एक हिसाब किताब बता देते हैं, कहते हैं ना कि अकाउंट्स रखना बहुत जरूरी है किसी भी चीज में, तो ये एक अकाउंट हमें पता चलेगा उसके बारे में। चलिए लेट्स सी, डैन को बुलाते हैं। क्या डैन भी रेडी रहेंगे इस फाइनल मैच के लिए या फिर मैच के बाद ही हमारे साथ जुड़ेंगे? कुछ ही देर में पता चल जाएगा। एक तो डैन आते भी तो मतलब बिल्कुल स्टाइल में ऊपर से प्रकट हो जाते हैं अचानक से वो कास्टर्स के गॉड है, वो ऊपर से ही आते हैं वरुण। एनालिस्ट का काम यही होता है। हमने जो चीजें बताई मैच के इंटेंसिटी के दौरान, लोग भी मैच देख रहे होते हैं, एनालिस्ट उस चीज को आराम से ब्रेक डाउन करते हैं। आई गेस वो हमारे साथ मैच के बाद ही जुड़ेंगे। चलिए उससे पहले फाइनल सेट हमारा, और देखते हैं कौन बनेगा KO Fight Night सीजन 5 का चैंपियन। तेजन वर्सेस Rcool, हियर वी गो। मैच स्टार्ट हो चुका है। Rcool ने चिप डैमेज करके काफी एक डिसेंट अपने लिए एक एडवांटेज क्रिएट तो कर लिया, बट डिस्टेंस यहाँ पे मेंटेन करके चलना चाहते हैं तेजन से। डेफिनेटली डिस्टेंस मेंटेन भी करनी पड़ेगी। बहुत ही प्यारे तरीके से वहाँ पर DF1+2 का कॉम्बो मारते हुए अच्छा वहाँ पर सेटअप देखने को मिल रहा है, लेकिन एक डैमेज लेते हुए बढ़िया बैक-3 वहाँ पर निकाला। शायद यहाँ पर मे बी लॉन्चर मिल सकता था उनको, क्योंकि जिस तरीके से वो आगे आ रहे थे। एंड फाइनली यहाँ पर बैक से कॉम्बो निकलती हुई बढ़िया कॉम्बो यहाँ पे, और फ्लोर ब्रेक मिलेगा या वॉल तक ले जाने की कोशिश की। आई थिंक फ्लोर ब्रेक करते तो मे बी उनको फायदा हो सकता था। एंड यहाँ पर चूंकि ये फाइनल राउंड है, मजे की बात यह है कि Rcool के लिए उनकी फेवर की स्टेज जो वो आ चुकी है। ओ हो, और जैसा कि मैंने कहा था आपको वरुण, मैंने आपको बताया था कि जब रेस में होते हैं यहाँ पर लीरॉय, तो वॉल के पास आपको फंसना नहीं है, क्योंकि रेज ड्राइव आपको वॉल से डैमेज देती है, उसके बाद कॉम्बो पे जो वो आपको सेटअप किया जा सकता है। जी हाँ, और आई मीन काफी बेहतरीन तरीके से Rcool ने उसको यूटिलाइज भी किया वहाँ पे। अब देखिए तेजन भी बहुत ज्यादा ऑन टोस अपने खेल रहे हैं, थोड़ा प्रेशर उनको भी आई थिंक फील हो रहा है। Rcool वो तो प्रेशर में स्टार्टिंग से ही खेल रहे थे, जब ब्रैकेट जो है वो रीसेट किया गया था, बट तेजन यहाँ पे एक लो के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। Rcool के पास अभी भी हेल्थ एडवांटेज उन्होंने अपने लिए बना रखा है। दोनों के दोनों प्लेयर्स बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस लेके खेल रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे विशाल? यहाँ पे तेजन, जो चीज हम कह रहे थे कि उनकी स्ट्रैटेजी जो काम कर रही थी वो ये थी कि Rcool के बिल्कुल करीब रह के उनको प्रेशर में डाल के खेल रहे थे। इस बार तेजन
बहुत ब्रीदिंग स्पेस दे रहे हैं उनको। टीजन एक्चुअली ब्रीदिंग स्पेस दे नहीं रहे हैं यहाँ पर। लियो जो है वो सेफ मूव चला रहे हैं ताकि उनको ब्रीदिंग स्पेस मिल सके। बहुत अच्छी कॉम्बो, ओह अच्छा वहाँ पर टैक रोल, बेहतरीन टैक रोल आता हुआ। अगर वो रेंज टाइप कनेक्ट होती तो डेफिनेटली वो राउंड यहाँ पर टीजन के खाते में जा सकता था, लेकिन अच्छा प्रेजेंस ऑफ फाइट यूज करते हुए वहाँ पर आरकुल सेकंड राउंड यहाँ पर निकाल दिया है। बहुत तगड़ा प्रेशर यहाँ पर आता हुआ तेजस भाई के दिमाग में, क्योंकि ये फाइनल गेम है और फाइनल गेम में वो ऑलरेडी 2 राउंड से पीछे चल रहे हैं। ये 2 राउंड से पीछे चल रहे हैं और ये आखिरी राउंड हो सकता है इस गेम का। बट तेजन बहुत ही अग्रेसिव मूवमेंट्स के साथ आते हुए आरकुल रिटेलिएट करने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं। तेजन की तरफ से एक और लॉन्चर आता हुआ, आरकुल को ओपनिंग देने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं यहाँ पे रहेगी उनकी तरफ से। बट आरकुल डिफेंस ऑन बोर्ड, तेजन परफेक्ट ले जाते हुए एक कम बैक करेंगे, एक राउंड एटलीस्ट उन्होंने निकाला। बट आरकुल जीत से एक ही कदम दूर है, दूसरी तरफ तेजन 2 कदम दूर है जीत से। जी हाँ, एक ही कदम दूर है, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पर तेजन अपना कदम जो है वो जीत की तरफ बढ़ाते हुए धीरे धीरे नजर आ रहे हैं। अच्छा फ्लोर पे लेकिन इंस्टेंटली कॉम्बो पिक करते हुए 40% डैमेज यहाँ पर जा चुका है। कुछ करना पड़ेगा यहाँ पर, आरकुल को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा अपने सेटअप में, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जिस तरीके से वो कर रहे हैं साइड हो चुकी है, जिस तरीके से परफेक्ट निकाला था। एंड फाइनली यहाँ पर बढ़िया पोकी का गेम चलता हुआ लेटे हुए ऑर्बिटल भी मारी, वहाँ पर उठे नहीं, पूरा फायदा मिलता हुआ यहाँ पर। देखना पड़ेगा एक और ऑर्बिटल, ये खत्म हो सकता है। इसी के साथ यहाँ पर गाइस केओ फाइट नाइट सीजन 5 के विनर है हमारे Rcool। वेल डेफिनेटली बहुत ही इंटेंस सिचुएशन के अंदर विक्ट्री निकाली उन्होंने और बहुत ही स्टाइल में भी विक्ट्री निकाली मैं बोलूंगा। हमने एक्सपेक्ट किया था तेजन किसी तरह से कम बैक करेंगे और हमें वो फाइनल राउंड तक देखने को मिलेगा जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमारी थी, लेकिन आरकुल ने उससे पहले ही वहां पे तेजन को खत्म कर दिया। स्पेकुलेशन चल रही थी कि क्या तेजन कितना आगे तक जा पाएंगे। आई गेस आरकुल स्टॉपिंग हिम इन हिज ट्रैक्स, सेकंड पोजीशन यहाँ पे तेजन को जाएगी और चैंपियन जैसा आपने बोला केओ फाइट नाइट सीजन 5 के हमारे बनते हैं आरकुल। चलिए ब्रेक डाउन करने के लिए लेट्स कॉल हमारे कास्टर्स के जो गॉड रहते हैं, डैन प्लीज प्रकट हो हमारे आगे। ओके, डैन प्रकट हो चुके हैं। मैं तो ऊपर से प्रकट हो रहा हूँ, लेकिन हमारे पास एक नए गॉड है टेकन 7 के लिए, Rcool, जो ग्रैंड फाइनल जीत चुके हैं। मैं बताओ क्या, क्यों मैं पूरा मैच देख करके जिस हिसाब से पहला सेट जा रहा था, हमें लग रहा था तेजान पूरे तरह से ट्रेन करके उनके ऊपर से चले जाएंगे, लेकिन जो 4th गेम के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि इतनी दिक्कत फेस की Rcool ने कि उनका दिमाग पूरा साफ हो गया। एंड देन सिंस देन उन्होंने जो पोक गेम खेला, जो धीरे धीरे डाउन 1+2 डाउन 2 पोक करके जो लाइफ ली और तेजान को प्रिवेंट किया कुछ भी मूव जस्ट यूज करने से, और थोड़ा हेजिटेशन बनाया। वेरी वेरी एक्सीलेंट प्ले। तेजान भी अपने मूव्स पे बैठे रहे, he wasn't defensive at all, he tried to go in और उन्होंने ट्राई किया and he kept it very close, but Rcool in the end बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने एंड में फिनिश किया using all those pokes of his. Amazing play and congratulations to him. I mean, एक चीज वो मैं यही ऐड ऑन करना चाहूंगा यहाँ पर कि वरुण, जिस तरीके से हम देख रहे थे ना कि तेजन भाई का अग्रेशन बहुत प्यारा देखने को मिल रहा था, एंड वो 4 राउंड तक उन्होंने देखा, एंड Rcool ने मुझे लग रहा है फिर थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया। उन्होंने कहा कि अग्रेसिव अगर वो भी होंगे तो काम नहीं चलेगा। वो थोड़ा सा अग्रेशन के अगेंस्ट जो है वो डिफेंसिव हुए और गेम कॉम्बोज की जगह वो पोकिंग पर लेकर गए, जो कि यहाँ पर डैन ने मेंशन किया, वो बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ उस बात से। कॉम्बोज की जगह अगर आप पोकिंग पर गेम कन्वर्ट कर देते हो तो होता क्या है, जब धीरे धीरे आपकी हेल्थ बार कम होती चली जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली आप पर प्रेशर क्रिएट हो जाता है। एग्जैक्टली आई मीन, और वही ये चीज हम मैच के बीच में भी डिस्कस कर रहे थे कि ये छोटी छोटी गलतियां, छोटे छोटे पोक्स की चलते हेल्थ बार थोड़ा कम होता है, और वहीं पे प्रेशर के अंदर तेजन थोड़ा सा ब्रेक डाउन होते हुए Rcool जैसा मेंशन किया गया इज नाउ द चैंपियन ऑफ KO फाइट नाइट सीजन 5 टेकन 7, और उसी के साथ जीत चुके हैं 50,000 रुपए। सो कंग्रेचुलेशंस टू Rcool फॉर हिज विक्ट्री। और चलिए बिना किसी डिले के डेस्क पे चलते हैं और देखते हैं कि वहां पे जो हमारे 2 दिग्गज बैठे हैं उनका भी क्या कहना रहेगा इस मैच के बारे में। Thank you so very much, casters, as well as Dan, for that wonderful analytics coming in from your side. But GG's, mate. What a game. I mean, Rcool, yes, is the champion. लेकिन जिस तरीके से शुरुआत हुआ था BO5 Ocean, it was not expected, यार. Not at all. I mean, Rcool, he just did amazing. And वही चीज, वो बैठे हुए थे, जैसे हम बात कर रहे थे कि उनको बस एक कदम आगे जाना था, वो बैठे होते उसने कि चलो ये कर लेते हैं पहले, उसके बाद जाकर के ट्रॉफी उठा लेंगे. And he just did it in the most best ways. I mean, think about it. Final game के अंदर, final rounds के अंदर perfect rounds भी जा रहे हैं, हर एक चीज हो रही है. And after all those things, it just comes out to one thing कि बस एक एक final मोहर लगनी थी Rcool के नाम की. As you can see, जिस तरीके से सब कुछ चला, Rcool starting it off 3-1 against Lionhart. Lionhart का वहां पर
पर उन्होंने एक तरीके से खत्म किया और वो लूजर्स फाइनल में गए. उसके बाद रोहित जैन और तेजन की तरफ से तेजन आए थे एंड देन वहां से एट द एंड तेजन वर्सेस आरकुल जो चला, लाइक it was a saga. It certainly was a saga. अगर हम first BO5 की बात करें, where of course it was Tejan जो 3-0 clear लेके गए थे, and then you move on to the second one, जहाँ पे मतलब जिस तरीके से, जिस momentum से it was played by Tejan in the first BO5, it seemed like okay, it's probably Tejan's game. कुछ कर नहीं पा रहे थे Rcool, but you move on to the second. Maybe it was a strategy. Maybe it was a strategy. Get all the strats out from Tejas, but then nevertheless, moving on along. He is the champion for Season 5 of KO Fight Night. And with that, of course, it is GG's to this player and his gameplay. Thank you so very much for participating and, of course, showing us that wonderful, glorious moments that you did throughout the entire saga of KO Fight Night. With that, another beautiful thing that we were able to achieve, and it is of course thanks to Nodwin Gaming, but alongside that it is also thanks to all the celebs that were able to participate and of course showcase that dominating, not necessarily, but wonderful class 101 gameplay, right? That's what I would say. What do you got to say, Ocean, for that? I mean, just think about it. थक का आना यहाँ पर, थक obviously 2 दिन तक हमारे साथ रहे, स्काउट भी 2 दिन तक हमारे साथ रहे, रेगल्टॉस अभी फाइनल मैच के लिए आए थे, मॉर्टल वर्सेस माम्बा जो हुआ था, रेबेल जिन्होंने बहुत डोमिनेटिंग तरीके से, टेकन आई वुड से कि उनकी जान है एक तरीके से, और वो जान यहाँ पर निकल कर गई. Mortal versus Mamba, Rebel versus Scout and all those things, and abhi Regaltos versus Thug जो situation थी, I would say it was a huge amazing thing, and maybe जैसे Thug ने बोला है, शायद next time Metal India Esports Tour पे उनका भी नाम कहीं ना कहीं दिख सकता है. Well, if not that, at least the community now knows that, well, what do you know? सिर्फ एक गेम, 2 गेम नहीं, अब यहाँ पे और भी और सारे opportunities हैं, because that's what Indian esports is going up towards, and that is incredible. That is an incredible feat. That is all thanks to you viewers as well, because you of course are the ones who make it happen. And in the end, of course, it is Airtel India Esports Store that has been going on and will continue on for the entirety of the year, where indeed, if you want to be an esports contender, well, what are you waiting for? Step right up, get into the arena, and of course, dominate, grind. That's all there is to it. With that, I've been your host, brother, joined with my co-host, analyst, as well as caster, well, multi-talented personality, of course, Ocean Sharma. I'm going to say GG's. Thank you so very much. Until next time, take care, stay awesome.